Sir, with your permission, I rise to lay papers mentioned against my name as serial number 1 of the revised list of business. These contain a notification by the Ministry of Road, Highways and Transport on the amended recruitment regulations of the NHAI. Sir. Okay. Even otherwise, he seems to be not retired. He is not tired also. Every day is. This is how it is mentioned. General V.K. Singh retired. It is General V.K. Singh retired. Okay. We'll follow it. Correct. Swadvi Niranjan Jyoti. महोदय, मैं आज के संशोधित कार्यसूची में क्रम संख्या 3 पर मेरे नाम के सामने उल्लिखित दस्तावेज सभा के पटल पर प्रस्तुत करती हूँ। श्री नित्यानंद राय। महोदय, आज की संशोधित कार्यावली के क्रमांक संख्या 3 पर मेरे नाम के सम्मुख उल्लेखित दस्तावेज सभा पटल पर रखता हूँ। श्री राजीव चंद्रशेखर। Honorable Chairman, sir, with your permission, I rise to lay on the table of the House the papers mentioned against my name at serial number 4 of the revised list of business for today. श्रीमती अन्नपूर्णा देवी। सभापति महोदय, आपकी अनुमति से आज की पुनरीक्षित कार्यसूची की क्रम संख्या 5 पर मेरे नाम के सामने उल्लिखित दस्तावेजों को मैं सभा पटल पर रखती हूँ। श्री अजय भट्ट। With your permission, I rise to lay on the table of the House a copy each of the papers mentioned against my name at serial number 6 in today's revised list of business. श्री B.L. वर्मा। आदरणीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज की राज्यसभा की पुनरीक्षित कार्यसूची में क्रम संख्या 7 पर अपने नाम के सम्मुख अंकित प्रपत्र क्रमांक हिंदी और अंग्रेजी में सभा पटल पर रखता हूँ। सुश्री प्रतिमा भौमिक। आदरणीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज की संशोधित कार्यसूची में क्रम संख्या 8 पर मेरे नाम के सम्मुख उल्लेखित दस्तावेज सदन के पटल पर रखती हूँ। डॉक्टर सुभाष सरकार। With kind permission, I raise to lay on the table of the House the paper mentioned against the name of my colleague, Mr. Dr. Subhash Sarkar at serial number 9 in today's revised list of business, sir. Sarkar. हाँ. You are Subhash Sarkar. उसके नाम में, sir. I have not given you permission. Please sit down. It will not be part of the record. Minister, for any reason, is going to be absent. He should write the chairman, seek the permission, and then say so and so minister. And even the minister also should say, sir, on behalf of. You cannot take that liberty and then place the papers, because name is given Dr. Subhash Sarkar. Dr. Munjepara Mahendra Bhai. Honorable Chairman, sir, with your permission, I rise to lay on the table of the House papers mentioned serial number 10 against my name in today's revised list of business. Thank you, sir. Dr. Bhagavat Karad, which I have allowed that way after seeking permission. Honorable Chairman, sir, with your permission, on behalf of my colleague, Sri Pankaj Chaudhary, I rise to lay the papers mentioned against his name in the revised list of business for today. Message from Lok Sabha, Secretary General. Sir, with your kind permission, I rise to report that Lok Sabha at its sitting held on 5th April 2022 has agreed without any amendment to the Constitution, Scheduled Castes and Scheduled Tribes Orders Amendment Bill 2022, which was passed by the Rajya Sabha at its sitting held on the 30th of March 2022. Report of the Committee of Privileges, Sri P. Wilson. Chairman, sir, with your permission, I rise to present the 72nd report in English and Hindi of the Committee of Privileges in the matter of breach of privilege arising out of allegedly casting aspersion on the Honorable Chairman, Rajya Sabha, by a member in a press interview. Thank you, sir. Report of the Department Red Parliamentary Standing Committee on Commerce, Sri Anil Desai. Sir, with your kind permission, I rise to lay on the table 169th report in English and Hindi of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Commerce on action taken by the government on the recommendations, observations of the committee contained in its
161st report on review of the intellectual property rights regime in India. Report of the Department related to Parliamentary Standing Committee on Petroleum and Natural Gas. Sri A. Vijay Kumar. Thank you, Honorable Chairman, sir. I raise to lay the 13th report, Hindi and English version of the Standing Committee on Petroleum and Natural Gas as listed against my name in today's list of business. Thank you, sir. Statements of the Department related to Parliamentary Standing Committee on Communication and Information Technology. Sri Jawahar Sarkar. Sir, with your permission, I rise to lay on 3 statements, Hindi and English versions, showing further action taken by the government on the recommendations contained in the 28th, 29th and 31st action taken reports of the Standing Committee on Communications and Information Technology 21-22 as listed against my name. Statement of the Committee on Welfare of Other Backward Classes. Sri Sakaldeep Rajbhar. धन्यवाद महोदय। शिक्षा मंत्रालय से संबंधित पीएचडी में प्रवेश और दिल्ली विश्वविद्यालय में शिक्षकों के नियोजन में अन्य पिछड़े वर्गों के प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए किए गए उपाय के संबंध में छठे प्रतिवेदन 17वीं लोकसभा में अंतर्विष सिफारिशों पर सरकार द्वारा दी गई कार्रवाई के संबंध में अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति के 14वें प्रतिवेदन 17वीं लोकसभा के अध्याय 1 में अंतर्विष सिफारिशों पर सरकार द्वारा आगे की गई कार्रवाई और अध्याय 5 में अंतर्विष सिफारिशों के संबंध में अंतिम उत्तरों को दर्शाने वाले अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति के विवरणों की एक प्रति अंग्रेजी और हिंदी में सभा पटल पर रखता हूँ। जय। स्टेटमेंट बाय मिनिस्टर साध्वी निरंजन ज्योति जी। महोदय, मैं आज की संशोधित कार्यसूची में मेरे नाम के सामने उल्लिखित ग्रामीण विकास विभाग की प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण संबंधी स्थायी समिति के 16वें प्रतिवेदन में अंतर्विहित विभिन्न सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के संबंध में एक वक्तव्य सदन के पटल पर प्रस्तुत करते हैं। Honorable members, I was so impressed yesterday about the discussion in the House on the 2 bills. One is the chartered accountant related issue. The other one is about the merger of Delhi municipal corporations. I was so happy the patience shown by the chair, deputy chairman, and by the members cutting across party lines, the way they spoke. I followed each one of them, and also the minister who piloted and replied to the bill up to the point, sharp, but at the same time brief. I felt very happy, and I have also made a note to include it in my memoir also because it's very impressive. And some of the others also called me on over phone also, and they also mentioned it. Another thing they have mentioned is about the performance of the members who have conducted that entertainment cultural program on that day. It was so impressive. Of course, 6 of them. I was there myself, so I enjoyed it. But people had an opportunity to see it in yesterday's Sansad TV, I think, review program. So I also felt happy that some of my members, they have such a talent. And then people who sought permission, they have been given an opportunity. And you are going to retire, then you will also get an opportunity. If you make a request. Members, before going to 0 hour, I received notice from Mallikarjun Khargeji, Susmita Dev, Sri Rujino Jokulum Felorio, and Mohammed Najmul Haq. One is about inflation, other is about instance of hate speeches. They do not come under the purview of 267 to suspend the business of the House. And
please. No, no, even if you give everyday notice also, if it is not worth to be taken up under that rule, I will not do it. Please, please, please. No, please, you sit down. There is no need to, please. No, even LOP also, he can only mention, he cannot speak on this because others also, please. No, speech is one sentence. Sir, I have given a notice under Rule 267 regarding the rising instances of hate speech against minorities in the country and also the harassment done to the journalists, particularly the Hindustan Gazette, News Laundry, the Quint, Article 14, etc. And this is going on, and Swamijis are speaking and instigative speeches they are giving. Not only that, the right from Haridwar to Delhi on Sunday, one Swami said that all Muslims should be butchered. And this will not go on record. No community name will go on record. Please, I have not. No, we should not quote his words now if he has uttered a meaningless word. And they are creating, sir. Again, raising it in the house. And then having discussion who spoke what. That is not going to solve the problem. Thank you, Kargeji. So, I have not allowed, and nobody should indulge in hate speech against any community, minority or majority. Communities should not be taken into this thing, and nobody should make any speech against anybody. That's all. Sri Ajay Pratap Singh. Ajay Pratap Singh, please. Ajay Pratap Singh. Today, 23 zero-hour mentions are there. Please cooperate. माननीय सभापति महोदय, भगवान राम भारतीय जनमन के रोम रोम में बसे हुए हैं। भारत की सभ्यता और संस्कृति के प्रतीक हैं। जहां प्रभु राम का नाम आता है, वहां पर संपूर्ण भारतवर्ष एकजुट हो जाता है। और इसीलिए भगवान राम की गाथा पूरे भारत में गाई जाती है, पूरे भारत में पढ़ी जाती है। आज रामायण के लगभग विभिन्न भारतीय भाषाओं में और विदेशी भाषाओं में मिलाकर 300 से अधिक संस्करण उपलब्ध हैं। भगवान राम का भव्य मंदिर अयोध्या में निर्मित हो रहा है। इसके लिए मैं आदरणीय विषय पे आ रहा हूँ सर। आदरणीय मोदी जी और उत्तर प्रदेश सरकार को बधाई भी देता हूँ। अयोध्या में उनकी जन्मस्थली के अतिरिक्त भगवान राम की जो लौकिक लीला थी, उस लौकिक लीला के संदर्भ में लगभग पूरे देश में 250 से अधिक स्थान हैं जहां पर भगवान राम ने कुछ समय व्यतीत किया है। उनकी स्मृतियां हैं। स्मृतियां श्रुतियों के माध्यम से हैं, किंवदंतियों के माध्यम से हैं। वर्ष 2015 में सरकार ने घोषित किया था कि हम रामायण सर्किट के माध्यम से इन स्थानों का विकास करेंगे। मैं सरकार से मांग करता हूं कि 2015 में जिस तरीके से सरकार ने घोषित किया था, इन सभी स्थलों का विकास करे। इसके विकास के माध्यम से न केवल आध्यात्मिक क्षेत्र में लाभ मिलेगा, धार्मिक क्षेत्र में लाभ मिलेगा, अपितु इन स्थलों के विकास के माध्यम से रोजगार और व्यापार भी विकसित होगा। मैं इस संदर्भ में नर्मदा माँ का भी स्मरण करना चाहता हूँ। माँ नर्मदा एकमात्र ऐसी नदी है कि जिसकी परिक्रमा की जाती है। परिक्रमावासी अनेक कष्ट उठाकर इस नदी की परिक्रमा करते हैं। तो माँ नर्मदा का परिक्रमा पथ ही विकसित किया जाए, जिससे परिक्रमावासियों के आश्रय की व्यवस्था हो सके, भोजन की व्यवस्था हो सके, उनके लिए अन्य सुविधाओं का सृजन हो सके। और माँ नर्मदा के किनारे पे अनेक नगर बसे हुए हैं। उन नगरों का गंदा पानी भी नर्मदा नदी में न जाए, इसके लिए भी सरकार को उपाय करना चाहिए। मैं सरकार से मांग करता हूं कि राम की लौकिक
लीला के स्थलों पर और नर्मदा के परिक्रमा पथ पर विकास हेतु एक विशेष पैकेज की घोषणा करे। जिस तरीके से नमामि गंगे के लिए सरकार ने प्रयत्न किया है, वैसे इन दोनों आध्यात्मिक केंद्र हैं, इनके लिए भी समय प्रयत्न करें। समाप्त हो गया। श्रीमती जया बच्चन and Sri Shiva to associate. Jayaji will take 2 minutes and then Shiva will take 1 minute. Okay. Thank you, sir. Sir, I'm a little embarrassed to have brought this notice for the 4th time in this house on manual scavengers. Sir, अभी थोड़े दिन पहले आपको पता होगा, आपने भी पढ़ा होगा कि कुछ लोग जो ट्रैप हो गए थे, वो उनकी तो जान चली गई, जो बचाने के लिए बेचारे गए थे उनकी भी जान चली गई। उसके ऊपर कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है। अब तो इस सरकार के ऊपर ज़्यादा जिम्मेदारी होती है, क्योंकि उन्होंने ये भी अपने जोखिम अपने सर पे ले लिया है। कल ही इसी का प्रस्ताव हम लोगों ने सबने इसके ऊपर बात की। Sir, according to the Employment of Manual Scavengers and their Rehabilitation Act of 2013, disallows all kinds of employment that force individuals to engage within human excretia manually, but data from the National Commission for Safai Karmachari reveal that in India, one manual scavenger dies every 2 days. That's 1,470 people have died cleaning sewer lines and septic tanks in the past 2 years, sir, which is really a shame. Due to lack of rehabilitation and reintegration program and rampant unemployment, manual scavengers are forced to return to work in inhuman conditions and for meager salaries. I also request the government through you, sir, to rehabilitate the manual scavengers and provide alternate employment opportunities to these people. Thank you very much. Right. Shiva, you all can send your names, but Shiva, I have permitted him already because he's there. Sir, thank you, Chairman. 1 minute, Shiva. Sir, on the 10th of March 2022, it was reported that in Mumbai, 3 laborers who have been engaged for manual scavenging in a septic tank died because of inhaling the toxic fumes. As Madam Jayaji pointed out, though there is an act in place, the Prohibition of Employment for Manual Scavenging 2013, the lack of implementation of that act, and it mostly rests on with the law enforcement activities and the rehabilitation measures. Sir, sir, one thing, sir, these laborers, they don't have any protective gear. They just tie a rope on the hip and get into that, and they hold their breath, sir. When they are not able to sustain the breath, they have to consume either the toxic water or the toxic fume, and they have to die. So, sir, I would urge the government that 2 things have to be done. Mostly they are engaged by contractors. So stringent action must be taken against them who engage them violating the law. And second, rehabilitative measures is very much essential, which the government should consider. Ramesh. Sir, the war in Ukraine has once again focused attention on the state of medical education in our country. Today, there are about 92,000 medical MBBS seats. 16 lakh young men and women give the exam year after year. That means 1 out of every 18 who gives the exam gets admission to a medical college in India. Now, unfortunately, sir, out of these 92,000 seats we have, just about 53% is government colleges. 47% is private medical institutions whose population has been increasing over the last years. Sir, the government came up with the NMC bill in 2017, and that bill said that the National Medical Commission will regulate no more than 40% of the private medical seats. No more than 40%. Means it could be 1%, it could be 40%. So the standing committee, under the chairmanship of Professor Ram Gopal Yadav, changed this to at least 50%. So no more than 40% became at least 50%. In 2019, this House and Parliament passed the National Commission Bill. It became the National Medical Commission Act, and there that at least 50% was changed to 50%. So today, 50% of the medical institutions in the private sector are subject to guidelines of the National Medical Commission. The Prime Minister has said that 50%
of the private institutions will pay government fees, that is not a new announcement. That is the law that this parliament passed. So my request to the government through you is that we must increase the population of government medical colleges. We must strictly regulate the fees of all medical institutions, including private institutions. Sir, the policy in private medical institutions is pay now, learn later. It should be learn now, pay later, because there is an acute shortage of medical doctors and public health professionals in this country. Sir, the belief that private medical education will form the foundation of medical education in this country is deeply flawed and deeply dangerous. And I want to bring this to the attention of the government through you, sir. Thank you. Thank you, Ramesh. See, whoever want to associate, please send a slip. See, Abdul Wahab. I am now taking again the issue of transgenders. Our respected Shivji, in a private bill, he introduced here, and later it is taken by government. But what is the implication afterwards? Same things are continuing. They are the most neglected community in our society. Around 5 million people are there for some NGO reports, but some 500,000 only registered as these sort of genders. So I urge the government to take up this measure. In any of the family, if it is there, then only they feel the punch of that. They are totally neglected. That is why they are going outside. I was talking in unofficial talk with our professor, Yadavji, and Ruba, our Honorable Minister, Rubala, Honorable Minister. They are all telling that they are harassing. But how they are harassing? Because of their exclusion from the community. They are forced to harass other people. But government of India, in Asia, we are the most neglecting people, this transgender. So I am urging the government to take all the data. Now people are not giving the census, they are not ready to give their original status. So many reasons are there. Don't take just like what they are doing in the, streets, or sometime some places. They are harassing, of course. But it is because of negligence from our side. So I urge the government to do maximum possible. Only few people. Few people, not 5 million is not a big thing in 130 crores. So, sir, I am not taking much. Please look into this case. Very mercifully, I urge the government, this one, Rubalaji, take it in a right sense and please do that one. Thank you very much. Right. Srimati Shanta Chatriji. Thank you, sir, for allowing me to speak. Sir, I would like to draw the kind attention of this August House that Himalayan State Regional Council for Sustainable Development in Indian Himalayan region was constituted by Niti Aayog. The council deliberated on the implementation of 5 reports released by Niti Aayog on number 1, inventory and revival of springs in the Himalayas for water security. Number 2, sustainable tourism in the Indian Himalayan region. Number 3, shifting cultivation towards a transformation approach. Number 4, strengthening skill and entrepreneur landscape in the Indian Himalayan region. And number 5, data for informed decision making. On this regards, I would like to urge the August House to seek detailed explanation from the Honorable Planning Minister why nothing so far has culminated into ground reality and no benefit or development so far for Himalayan, Darjeeling Himalayan region received so far. Thank you, sir. Thank you. Dr. Narendra Jadhav. Send the name. Send your name by slip. Thank you. Thank you, Chairman, sir. I rise today to speak for a community that has been neglected for a very long time.
The size of the community might be too small for any political party to take it seriously to woo them. But the plight of that community is too large and pathetic to be ignored. Sir, I am speaking about the widows of Vrindavan. Their exact population is unknown, destitute, deserted, and widowed. These women arrive in Vrindavan to earn their livelihood. They are abandoned, banished by their families, and they are left begging for survival. They are mostly dependent on the state, the bhajan ashrams, and the pilgrims that come to the town of Vrindavan. Sir, we are very proud of our family system, but this is a blot on Indian society. Most of these women are unable to access social welfare schemes because the proof of residence needed is not there with them for accessing government services, which they are unable to produce. Since majority of them are illiterate, it is not possible for them to exercise their property rights as well. Furthermore, sir, the shelter homes for widows are overcrowded, highly unhygienic, having conditions, and they lack basic amenities. Also, there is no data that are available about vaccination and COVID-19 testing in these shelter homes for widows. There have also been reports of corruption in regard to pension for these widows. Sir, through you, I would like to urge the government to deal with this issue, which is giving our country a bad name all over the world. The government should restore the property rights of the widows. Also, the government should issue directions to the district magistrate for better implementation of social welfare scheme meant for these widows. Thank you, sir. Thank you. Whoever want to associate, send the name. Sri V. Vijay Sai Reddy. Thank you, Chairman, sir. Sir, the practice of hiring the teachers on contract basis has become a great problem in this country, which is adversely affecting the quality of education in India, sir. Initially, the government of India used to hire the teachers on contract basis in an exceptional cases. However, in the current era, it has become a common method for teacher staffing. Sir, we have 6.5 lakh contract teachers, which is 13% of the total teachers in the country. Sir, the situation in the rural areas and the disadvantageous areas even more, and the contract teachers in those areas is as high as 41% in the just last 5 years. Almost about 1 lakh teachers have been added in the education sector on contract basis. Sir, contract teachers are appointed on ad hoc basis with no service benefits, no job security, lower salary than the regular teachers, and this has caused the general discontent among the teachers engaged on contract basis, and they have financial stress and lack of motivation among the teachers, sir. This decline in teachers' welfare has made it difficult to attract and retain the talented teachers in the teaching sector, thus bringing down the overall quality of the education in the country, sir. In our culture, Indian culture, we consider the teachers as gurus, as gods. Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheswara. Sir, but not, by normalizing the contract teachers, our teachers are not being treated fairly. So I urge upon the government to take necessary measures for regularizing this employment of contract teachers and enhance the overall teacher welfare in the country, sir. Thank you very much, sir. This has to be taken care by state governments. Teachers are appointed by state governments plus central government also. Both. Yes. It's an important issue. The very government is doing it now. So it is not a matter to feel happy. It's a matter of concern. Sri Sujit Kumar. Sir,
as per the October 2021 report submitted by the Ministry of Education, 37 of the sanctioned 154 teaching posts, or 89% of the teaching posts, are vacant in a particular institute of our country. Sir, you have heard it correct, 89% teaching posts are vacant. And this is not any private institute or any Tom, Dick, Harry college, sir. It is the Central University of Koraput in Odisha, where 89% teaching posts are vacant. Maybe shocking, sir, for some people. Sir, there is no full-time VC in the university. The university has 17 regular departments and only 14 regular departments and only 17 regular teachers, which means roughly 1 teacher per department for a student strength of 950. Sir, the national average of teacher-student ratio is 28, recommended is 25, and in Central University Koraput it is 55. Sir, my previous speaker, Vijay Reddy Garu, spoke of the menace of having contractual and guest teachers. Sir, the University of Central University of Koraput should have 20 departments, but because of lack of teachers, only 14 departments are currently running with only 17 teachers, and 70 guest lecturers and teachers are running this show. Sir, these are serious consequences for the educational landscape of a tribal district like Koraput, which is an aspirational district, and sir, which is one of the educationally and socio-economically backward districts of our country. Sir, I had submitted a start question which is also listed at number 14 today on this very issue, but because it's unlikely to come up, I decided to submit a 0 hour as well, and thank you for admitting it, sir. I had raised this issue on 10th of February 2022 as well, sir, because of the criticality of the issue. Sir, in its reply, the ministry has said that in the country there are 6,558 teaching and 15,227 non-teaching posts that are vacant in central universities across the country. These are huge numbers, sir. But, sir, I must compliment the government that for the first time since independence, the educational budget provisions have crossed 1 lakh crore. So, definitely we need to compliment the government. And, sir, we have a very competent education minister. So, I really hope that, sir, the ministry will fill up the permanent vice chancellor post at the earliest, will speed up the process of filling up this teaching and non-teaching posts at the Central University of Koraput and across the country, and also have an institutional mechanism, sir, so that such large number of vacancies do not pile up, because education is the foundation of our nation, and we need to really take care that these vacancies don't add up. Thank you, Sujit Kumarji. Thank you. Sri Vinay Viswam. Yes, sir. So the gravest issue in the country, I'm sure all will agree to me, is unemployment. The data, no need to explain, because no data are correct. It's on the English day by day. But when the pandemic came, we could see lakhs of people who were unemployed, who were employed, became unemployed on a day, and then it continued. And their numbers are very, very high. Sir, how they are living? This country has the right and a duty to ask it. How they are living? I should say they are not living. They are just surviving. Around us, they are surviving. In this Amatkal of India, lakhs of people, maybe crores, living in a difficult situation, has the right to ask us for whom we are running this country, for what we are ruling this country. Forget the politics. Sir, cutting across all the political spectrum, the people are having this problem. Unemployment to these people. So the pandemic affected people, and their numbers are becoming higher and high. I believe that the government has a duty to think of them. I suggest the government, request the government to make a plan to support them, to give them some wages of supports. And publish employment calendar. Of course, that also is a must. Publish an employment calendar and give them a support base and give them a wage system, and urgently depute a committee to look into the matter, and that committee should come with the reports with minimum time, maybe 3 or 4 months. And in this way, we have to be with them. The country has to tell them that they are not forgotten. The country is with them. With this words, I request you and the government to take the matter very seriously. Thank you, sir. Please. No.
Now you realize the importance of 0 hour and its utility also. Please see to it that 0 hours are not disturbed. To all. The Dr. M. Tambidore. Thank you, Chairman, sir. Through you, I request the government of India to restore the Kacchati issue to safeguard the rights of fishermen of Tamil Nadu. Since unilaterally ceding the Kacchati to Sri Lanka under the Indo-Sri Lankan Marine Agreement in 1974, the safety and livelihood of Tamil Nadu fishermen have been at the stake. Sri Lankan Navy firing upon their boats, injuring and killing of fishermen and seizing their boats and fishing nets have been going endlessly. Many times our fishermen brutally beaten and put in the Sri Lankan prison illegally. That is why our late former Chief Minister Prachitalavi Amma went to the court, the Supreme Court in 2008 to declare Indo-Sri Lankan Marine Agreement 74 is illegal. Repeated assurances of the government at the center and diplomatic level talks did not deter Sri Lankan Navy for attacking the fishermen. Our late Tamil Nadu Chief Minister Prachitalavi Amma and now former Chief Minister of Tamil Nadu Edappadi Palaniswamy has written so many letters to the central government to requesting that this has to be solved quickly. Shivaji. Sri Lankan Navy unilaterally rescinded all bilateral provisions of the agreement that protect the traditional fishing rights of fishermen. Therefore, I repeal to our government through you, sir, to rescind the Indo-Sri Lankan Maritime Agreement and take back Kacchati, which is the part of our Indian territory, which is unnecessarily given to the Sri Lanka. This is the appropriate time. Government has to interfere and see that to get back our thing and save the Tamil Nadu fishermen, sir. Thank you very much. Thank you. There is no controversy in this. You wanted to add one more former Chief Minister's name? No. Nine. Please, Shiva, please. Right. Okay. Please. Time. Right, Shiva. Let us not make controversies out of non-controversy. Srimati, please, no comment, no side comment. Please try to understand each other's point of view. If you have difference of opinion, at an appropriate time you can express it also. Srimati Priyanka Chaturvedi. Much Honorable Chairman, sir. When I called Priyanka Chaturvedi, I found Srimati Kanimoji standing. So I was... your colleague is saying something. All the Srimatis were confused, sir. All Srimatis. No, she got a point. She was in the front, this row. That's why otherwise... Sir, I would want to draw the House's attention towards some sections of the Hindu Succession Act not being in favor of women. Under the gender-based rules governing the devolution of property, the relatives of a woman's husband have a stronger claim to her property than her parents and siblings. However, this is not true of the property belonging to a man. The present scheme of devolution keeps all the man's property within his natal family. This is inconsistent with equal treatment by the state as envisioned in Articles 14 and Article 15(1) of the Constitution of India. So this anomaly under the Hindu Succession Act also... Derek ji, please go to your seat. You can call him afterwards, after the House is adjourned, discuss also, no problem. So it also goes against India's commitments under the United Nations Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women. Removing gender-based discrimination property-related legislation is one of the core requirements of CEDAW. The Supreme Court of India has also noted that a judicial or legislative intervention is necessary to remedy it. There are two ongoing cases where this issue is being considered. However, the legislature is the appropriate forum for amending legislation.
We should not be looking towards the courts for policy decisions. Therefore, through this August House, sir, I urge the government to relook and revise these unfavorable sections of the Act and provide long due respite and rights to the women affected by these archaic rules, sir. Thank you so much, sir. Thank you. Whoever want to associate, please send your name. Dr. K. Keshav Rao. Thank you, sir. Sir, it is a small issue, but a serious issue as far as Telangana is concerned. Sir, you know Adilabad, the most backward districts in the country, and it has a 48% of the tribal population in an ordinary state. It did not have any factories at all. It had 2 factories. 2 were closed. One, after a very great struggle, the paper factory had come back. Now there is a cement industry, ICC. What we are saying is it is also closed. First it fell sick, then it was later closed. It has its own land. It has 750 acres, then 1200 leased land. It has lime deposits of 48 million tons. It has water because Godavari flows from there. Then it has also electricity because Telangana is full of electricity. It has labor. What happened when it was closed? The BAFR closed it and gave VSS also to the employees. Then the employees went to the court, got it stayed. So still people are on the rules as far as this factory is concerned. Now the Chief Minister has requested the central government Prime Minister that he is prepared to pay the equity. Mr. Gadkari, during his discussions, said that NHI can take benefit out of this cement factory, so let us do it. This factory will be helping Marathwada, Vidarbha, and also the northern Telangana. So this employees issue, then the cement, much needed cement, NHI wants to join. We want to give, not only if they want more land, we'll give land. Whatever the central government wants, we would give that. And we will join in equity also. NHI wants to join in equity. So everything is straight. So let us try to concentrate on this and try to revive it, because in the court, still the people are on the rolls. That means they are employees, They did not take their money back. Thank you, sir. Thank you, Keshav Rao. Sri Kailash Soni. माननीय सभापति जी, आपके माध्यम से लोक स्वास्थ्य के, लोक महत्व के अत्यंत व्यवहारिक पक्ष की तरफ आपके माध्यम से सदन का और सरकार का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं। अभी कोविड में अनुभव आया, बहुत से प्रांतों के समाचार छपे, वेंटिलेटर से लेके अन्य सारे यंत्र हमारे इसलिए खराब हो गए कि मानव संसाधन नहीं था। मैंने भी मध्य प्रदेश में अपने जिले में 5 डिजिटल एक्सरे मशीन दी, उनके लिए अभी तक ऑपरेटर प्राप्त नहीं हुए हैं। और ये अपने ऑक्सीजन प्लांट, दीगर करोड़ों की मशीनें इसलिए खराब हो जाती कि तत्काल भर्ती के नियम इतने कठिन हैं कि इसमें समय लगता है। आपके माध्यम से सरकार को निवेदन करना चाहता हूं कि तत्काल थोड़े समय के लिए ये एमपी लेट्स में ये विधान कर दिया जाए। मैंने राशि दी थी, प्रावधान न होने के कारण वापस आ गई। मशीनें अकेले इलाज नहीं करती, आदमी की बहुत जरूरत है, और तत्काल, ताकि करोड़ों की मशीन तुरंत उत्पादकता दे। इसके लिए एमपी लेट्स में 2 माह के लिए ये मानव संसाधन के लिए भी नियम बनाया जाए कि इसमें ये खर्च किया जा सकता है। धन्यवाद कार्य जी। नेम सेंड श्रीमती पूर्व देवी नेतम। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। एक महत्वपूर्ण विषय पे आपके माध्यम से सदन को ध्यान आकर्षण करना चाहती हूँ कि जीएसटी की क्षतिपूर्ति को आगामी 10 वर्षों तक रखने की आवश्यकता के संबंध में है। महोदय, जीएसटी व्यवस्था लागू होने के बाद टैक्स नीति पर राज्यों की स्वतंत्रता बहुत कम हो गई है और राजस्व बढ़ाने के विकल्प नहीं बचे हैं। केंद्र सरकार ने निर्णय लिया है कि जून 2022 के बाद राज्यों को दी जाने वाली
जीएसटी की क्षतिपूर्ति बंद कर दी जाएगी। महोदय, छत्तीसगढ़ निर्माण राज्य है और देश को अर्थव्यवस्था के विकास में छत्तीसगढ़ राज्य का योगदान अन्य राज्यों की तुलना में बहुत अधिक है। जीएसटी क्षतिपूर्ति नहीं मिलने से वर्तमान में चल रहे जनहित के कार्यों और विकास कार्यों पर प्रभावित हो सकता है। अध्यक्ष महोदय, केंद्र की इस निर्णय के आगामी वित्तीय वर्ष में अकेले छत्तीसगढ़ को लगभग 5,000 करोड़ रुपए का नुकसान होने की संभावना है। यह समस्या अकेले छत्तीसगढ़ की नहीं बल्कि और भी राज्यों की इस संबंध में कमी आ सकती है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री द्वारा केंद्र सरकार को पत्र भी भेजे गए हैं इस संबंध में। अतः आपके माध्यम से सरकार से मेरा अनुरोध है कि अर्थव्यवस्था पर कोविड-19 के दुष्प्रभाव से उभरने के लिए और राज्यों की जीएसटी का यथोचित लाभ मिलने तक कम से कम अगले 10 वर्षों के लिए जीएसटी की क्षतिपूर्ति को जारी रखा जाए। ये मैं आपके माध्यम से धन्यवाद निवेदन करना चाहूँगी। धन्यवाद। Send the names. श्रीमती ममता महंतो speak in Odia. धन्यवाद सभापति महोदय। मु सदन माध्यम ओडिशा राज्यर मयूरभंज जिले में थिबा शिमिलीपाल अभयारण्य उपरे मान्यवर जंगल मंत्री एवं पर्यटन मंत्री को ध्यान आकृष्ट करने को चाहूँगी। सभापति महोदय, शिमिलीपाल को 1979 मसीह ओडिशा सरकार अभयारण्य भाव घोषणा करथिले। 1980 मसीह 2750 वर्ग किलोमीटर अरण्यर निर्दिष्ट 845 वर्ग किलोमीटर अंचल को जातीय उद्यान मान्यता देवाकू प्रस्ताव दिया जाइथिला। यह भितर शिमिलीपाल आरंभ हो सारी व्याघ्र संरक्षण प्रकल्प। एथि निमंते एठाकू बाहर आसुथिबा अधिकारी को साहाय्य सहयोग पाई केतेक स्थानीय लोकं को आनी विभाग पक्षर कोर अंचल रे रखा जाइथिला, किंतु उक्त अभयारण्यर कोर अंचल को जनबसती शून्य करा जाई नथिबारु ए पर्यंत शिमिलीपाल एक प्रस्तावित जातीय उद्यान भाव रही जाइछि। एणु तुरंत शिमिलीपाल को जातीय उद्यान रे मान्यता दिया जाऊ। सेहीपरि पर्यटन विभाग शिमिलीपाल रे पर्यटन शिल्प प्रतिष्ठा पाई उद्यम करा जाऊ, कारण एठारे पर्यटन शिल्प प्रतिष्ठा हेले जिल्लार शिक्षक बेकार युवक युवती नियुक्ति पाइबे। यह हेले जिल्लार अर्थनैतिक और सामाजिक अभिवृद्धि घटिबो। एठारे परिचालनागत त्रुटि जोगु प्रति वर्ष ग्रीष्म समय निया लागुची, वर्तमान मध्य लागिची। फल एठारे थिबा बाघ, हाथी, अन्यान्य वन्यप्राणी समते जीवजंतु, उद्भिद, पशु पक्षी, सरीसृप जीवन विपदरे रहुची। शिमिलीपाल संपर्कित खबर जातीय गणमाध्यम न आसिबा दुखर विषय। गत वर्ष मु निजे शिमिलीपाल निया लिभाइबार उद्यम करी, तेबे एठारे निया लागिबा मनुष्यकृत होइथिबारु एहार स्थायी समाधान दिगरे पदक्षेप निया जाऊ, जहा फल परिवेश बंचिबो और आमे मध्य बंचिबा। तेणु मु सदन माध्यम निवेदन करुची एहाको गुरुत्व सहित विचार करी स्थायी समाधान करा जाऊ एवं शिमिलीपाल को जातीय उद्यान मान्यता दिया जाऊ। धन्यवाद। The translation, simultaneous translation is there. That's why. Sri Madam Dora Sen. Thank you, Chairman, sir, for allowing me to speak on my subject of 0 hour, demand to save the jute industry of our country by the central government. हम देश की और बंगाल की एक ट्रेडिशनल इंडस्ट्री जूट इंडस्ट्री के बारे में बहुत इम्पोर्टेंट कुछ इधर बोलना चाहते हैं सर। रॉ जूट एक नेचुरल फाइबर है और बायोडिग्रेडेबल है, इको फ्रेंडली है, एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। इसमें कारपेट से लेकर जियो टेक्सटाइल तक डाइवर्सिफिकेशन के भी स्कोप भी है जूट बैग के अलावा। और जियो टेक्सटाइल रास्ता से लेकर रिवर बैंक को भी लॉन्जिविटी बढ़ा सकते हैं। और जूट मटेरियल को एक्सपोर्ट से फॉरेन करेंसी रेवेन्यू अर्निंग भी हो सकता है। भारतवर्ष एक कृषि प्रधान देश है सर, और जूट एक एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री भी है।
और एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री, इंडिया हमारे भारतवर्ष सेल्फ सफिशिएंट भी है दोनों तरफ से जूट में, और जूट इंडस्ट्री लेबर इंटेंसिव भी है। बंगाल में 10 करोड़ के अंदर 2.5 करोड़ पॉपुलेशन ये इंडस्ट्री में इन्वॉल्व है। सर फिर भी जूट इंडस्ट्री बहुत क्राइसिस पे है सर, अभी किसी दिन तक बहुत सारे क्राइसिस में, क्योंकि 1987 में जो मैंडेटरी जूट पैकेजिंग एक्ट था सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया, वो डाइल्यूट होने जा रहा है। अभी जब सब चीज की कीमत बढ़ रही है तब 2016 से 7 साल तक जूट बैग का प्राइस टैरिफ कमीशन ने बताया हुआ, फिर भी ठीक किया, फिर भी वो रेट पे नहीं, कम रेट पे लिया जा रहा है, खरीदा जा रहा है जेसीआई से एफसीआई के लिए। और रॉ जूट प्राइस को भी ₹7200 से ₹6500 तक कम करना है, ताकि इंडस्ट्री जूट रॉ जूट खरीद के जूट मिल चला सके। लेकिन जूट ग्रोअर्स को भी मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलना चाहिए। लेकिन ये सब ना होते हुए 15 जूट मिल्स अभी बंद है, 60,000 जूट वर्कर्स बेरोजगार है सर, और इसके असर जूट का फार्मर्स के ऊपर, ग्रोअर्स के ऊपर भी पड़ेगा। और हर्शियन जूट बैग 4.81 लाख बेल का कम हो गया, इसीलिए 1,500 करोड़ रुपया का घाटा हुआ, इस सीजन पे लॉस भी हुआ। तो मैंडेटरी जूट पैकेजिंग एक्ट को जो डाइल्यूट करा जा रहा है फूड ग्रेन्स को पैकेजिंग के लिए, और शुगर को भी 100% से 20% पैकेजिंग में डाइल्यूट किया गया, ये ठीक नहीं है। और इस साल बजट में भी इस पर कुछ बोला नहीं, तो हम चाहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से हम आर्ज करते हैं कि ये ध्यान दें ताकि जूट इंडस्ट्री, जूट फार्मर, जूट वर्कर्स बच जाए। थैंक यू चेयरमैन सर। We are taking up the Suresh Gopi's Jurover on priority because the interpreter has come from Lok Sabha for the other one. He will complete this also and go back. Sri Suresh Gopi. ഒരുപാട് നന്ദി ബഹുമാന്യനായ അധ്യക്ഷൻ, രാജ്യസഭാ അധ്യക്ഷന് ഒരുപാട് നന്ദി, നമസ്കാരം. എനിക്ക് ഈ ടേമിൽ കിട്ടുന്ന അവസാനത്തെ അവസരമാണ് ഈ 0 hour സബ്മിഷൻ. ഞാനത് I didn't say last. Please. ഈ ടേമിലെ അവസാനത്തെ അവസരം. സർ, ത്രൂ യു സർ, സോറി. ആൻഡ് ഇത് മലയാള ഭാഷയുടെ പിതാവ് തുഞ്ചത്ത് രാമാനുജൻ എഴുത്തച്ഛനും കലക്കത്ത് കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാർക്കും സമർപ്പണമായി അവരുടെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ നമസ്കരിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ മാതാപിതാക്കളെയും ഗുരുക്കന്മാരെയും നല്ലവരായ മലയാളികളെയും അവരുടെ സമർപ്പണമായി ഈ നിവേദനം ഞാൻ കേന്ദ്ര വനം വന്യജീവി വകുപ്പ് മന്ത്രിക്ക് മുന്നിൽ സമർപ്പിക്കുകയാണ്. സർ, വളർത്ത് ആനകളുടെ വാണിജ്യ വിൽപ്പന, കൈമാറ്റം എന്നിവ നിരോധിച്ചുകൊണ്ട് 1972 നിലവിൽ വന്ന വന്യജീവി സംരക്ഷണ നിയമത്തിൽ ഒരു ഭേദഗതി വരുത്തിയിരുന്നു. അത് കാരണം ഇന്ന് കേരളത്തിലെ ക്ഷേത്രീയ അതുപോലെ തന്നെ ക്രിസ്ത്യൻ പള്ളികളിലെയും മുസ്ലിം ആഘോഷങ്ങളിലെയും ഒക്കെ ആനയുടെ സാന്നിധ്യം, എണ്ണം വളരെ ഭീതിപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിൽ കുറഞ്ഞു വരികയാണ്. ഇത് ഒരുപക്ഷെ ആനകളെ ഉപദ്രവിക്കുന്ന, ആനകളെ അത്യധികമായി ചൂഷണം ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രവണത വളരെ മോശപ്പെട്ട രീതിയിൽ വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതിനുള്ള ഒരു പ്രതികരണമായി ആന സ്നേഹികൾ, മൃഗസ്നേഹികൾ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന ചില ഭീഷണികളെ അധിഷ്ഠിതമാക്കിയാണ് പല ഭേദഗതികളും മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത്. പക്ഷേ ഇതുപോലെയുള്ള ആനകളെ എഴുന്നള്ളിച്ചുള്ള തൃശ്ശൂർ പൂരം, തിരുവമ്പാടിയിൽ നിന്നും പാറമേക്കാവിൽ നിന്നും 15ഓളം ആനകൾ വീതം അലങ്കരിച്ച് ആദരവോടെ, ആചാരപൂർവം, ഇൻ പ്യുവർ റിച്വലിസ്റ്റിക് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഒരു കോൺഗ്രിഗേഷൻ വന്ന് നിൽക്കുന്നതിൽ നിന്ന് എന്താണ് രാജ്യത്തിൻ്റെ എക്കണോമിക്സിലേക്കുള്ള ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ എന്നുള്ളതും നമ്മൾ വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ്. ആനകളുടെ എണ്ണം കുറയുന്നതനുസരിച്ച് ആനകൾ ഉള്ള ഇടങ്ങളിൽ നിന്ന് ട്രെയിലറിലും ലോറിയിലും കയറ്റി വളരെ മോശപ്പെട്ട അവസ്ഥയിൽ അതുങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകുന്നതിലുള്ള ദ്രോഹം ഒഴിവാക്കാൻ ഞാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാരിനോടും ബഹുമാന്യനായ പ്രധാനമന്ത്രിയോടും മലയാളികൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രമല്ല ബീഹാറിലെ സോൻപൂർ മേള അടക്കമുള്ള വേദികൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ അപേക്ഷിക്കുന്നു. ഈ നിയമങ്ങളിൽ ഗണ്യമായ മാറ്റം വരുത്തണം. ആൻഡ്
Also, very strict, harsh, stringent rules to be put in place to control the owners of such domesticated elephants and also the mahouts who take care of them. Thank you very much, sir. Abhinandanam. Ninnai Sanskariku. Please. Sri KRN Rajesh Kumar. Respected Honorable Chairman, sir, thank you for the permit me to speak on implementation of metro rail projects in Tamil Nadu. Sir, Coimbatore is the second largest city by GDP in the state of Tamil Nadu after the capital of Chennai with the population of approximately 30 lakhs. Apart from local traffic, the people from the neighboring district and travels to Coimbatore city for work, education and medical needs. The technically 15 into 20 lakhs people commute daily in the around of Coimbatore for the above purpose. Considering these aspects, the state government of Tamil Nadu proposed for the metro rail project in the Coimbatore city. The feasibility study and detailed project report is completed and the state government of Tamil Nadu had allotted 6,670 crores. So far, the coordination support between the Ministry of Housing and Urban Affairs, Government of India, the state government of Tamil Nadu is remarkable. However, I request the Ministry of Housing and Urban Affairs to provide the central financial assistance as early as possible to initiate the execution of the Coimbatore Metro Rail project, the fastest growing Tier 2 cities in state of Tamil Nadu such as Madurai, Tiruchi, Tirunelveli and Salem also expecting the metro rail options owing to its necessity and economic performance. Kindly consider this project as the state government of Tamil Nadu is eager to implement this project with necessary support in both financial and execution levels. Nandri. Nandri, yeah. I hope that everybody will start speaking in their mother tongue. Sri Arnaz Singh Yadav. Please. Arnaz Singh Yadav. माननीय सभापति जी, दिल्ली प्रदेश की सरकारी नौकरियों की भर्ती में 1993 के बाद से दिल्ली में स्थायी निवास कर रहे अन्य पिछड़े वर्ग के बेरोजगार अभ्यर्थियों के आरक्षण का लाभ न दिए जाने के संबंध में मैं आपके और सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करता हूं। महोदय, दिल्ली प्रांत की नौकरियों की परीक्षा लेने वाली संस्था दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा पिछड़ा वर्ग का लाभ केवल उन अभ्यर्थियों को दिया जा रहा है जिनके परिवार का कोई सदस्य दिल्ली में वर्ष 1993 से पहले रह रहा है। माननीय, दिल्ली प्रदेश का राजस्व विभाग वर्ष 1993 के बाद जो लोग दिल्ली से बाहर आकर दिल्ली में स्थायी रूप से निवास कर रहे हैं, उनके पास दिल्ली में स्थायी निवास करने के समस्त पहचान पत्र मौजूद हैं। उनकी जाति की सत्यता जांचने के लिए जहां से वह विस्थापित हुए हैं, वहां के सक्षम अधिकारी द्वारा उनके पिता के नाम सहित अन्य पिछड़ा वर्ग के आधार पर प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं। परंतु दिल्ली के नियंत्रणाधीन दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन आयोग इस प्रमाण पत्र को वैध नहीं मानता, जबकि यह प्रमाण पत्र दिल्ली सरकार का राजस्व विभाग ही जारी करता है। महोदय, परिणामतः जो लोग 1993 के बाद से दिल्ली में स्थायी निवासी हैं और जिनके पास प्रदेश के राजस्व विभाग द्वारा जारी अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र है, उनके पास दिल्ली के पते का आधार कार्ड है, उनकी दिल्ली की मतदाता सूची में उनका नाम है, दिल्ली में स्थित बैंक खाते हैं, इसके बावजूद दिल्ली प्रांत के अन्य पिछड़ा वर्ग के बेरोजगार अभ्यर्थियों को आरक्षण नहीं मिल रहा है और प्रत्येक भर्ती में उन्हें बाहर कर दिया जाता है। माननीय, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से, विशेषतः माननीय प्रधानमंत्री जी से मांग करता हूं कि अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के साथ हो रहे इस अन्याय को गहराई से देखें और आवश्यक कार्रवाई कर उनका हक उन्हें दिलाने का कष्ट करें। अरनाथ सिंह जी, धन्यवाद। श्री जी.सी. चंद्रशेखर. Not there. Can you give tomorrow, sir? Because already is 12 o'clock. Right. Sri. Shall I speak, sir? Selva Ganapati. Sir, I'll speak, sir. No. Sir, thank you, sir. Sir, in the country, the cooperative movement. Right. Okay. Sir, in the country, the cooperative movement started with the aim of better living, business and farming. But today, it is sad to note that the motto is going for... Chandrasekhar, conclude. 12 o'clock is question hour. Question. Sir, it will be... Today... Sir, at least give me tomorrow, sir. Please. Don't bargain.
You can write to For me last again. 2 days it is happening. You can write to him again. You said you write to 361. This is Chandrasekhar, आपका एक सवाल है. Chandrasekhar, your question. Now, there will be lunch break today. question number 361. 361, question number 361. Bill of the House. First supplementary, माननीय GC चंद्रशेखर जी. Sir, Anganwadi and Poshan 2.0 scheme, umbrella program under ICDS, to which rupees 20,263 crores has been budgeted. Last year's revised estimate was rupees 20,000 crores, which is just 0.5% increase and a decrease by 4,294 crores in comparison with the budget estimated compared to last year. Sir, as per the RTA reply from Ministry of the Ministry, in 2021 November, 33 lakh children are malnourished and global hunger index ranks in India at 101 out of 116 countries. Please put your question. With the growing food inflation, WPI stands at 10.33% and GPI at 5.43%. Sir, how is the department going to handle with a very small rise of budget? Please. To the honourable member to correct the figures that he has quoted with regards to increase in budget, as has been enunciated time and again in this House, and if the member may so desire to reflect on part B of the answer already given to him, he may see that the budget is increased by 10%. I would, however, like to inform through you, sir, to the honourable member that the portion tracker methodology of digitally tracking the performances of Anganwadis, including measuring our children as per WHO standards, I can share through you, sir, that for the month of February, when over 1 crore children were weighed as per the WHO standards, the number of children found to be SAM children is close to 2%, which is much less than the number that has been enunciated by the honourable member. We have reached out to a third party, which is namely the Indian Academy of Pediatrics, to ensure that these numbers are validated. And I hope the member can, with due respect to him, reflect on the answer given, which is sufficient with regards to the response. Thank you. Second supplementary. Second supplementary, which is very important, madam. Anganwadi workers get the pay of average around 10,000 rupees and helpers around 5,000 rupees, and they work from morning 8 a.m. to 4:30 in the evening. These people, due to the price hike and everything, they are suffering like anything to manage their life. Whether there is any consideration to increase the salaries, madam? Thank you. Which the honourable member seeks to speak of is not a wage but an honorarium. And if one can make the legal distinction between the same has been actually reflected upon by the Honourable Supreme Court. While the Ministry of Women and Child Development under the aegis of the Government of India ensures that Anganwadi workers get the honorarium to the tune of 4,500 rupees, along with additional cash incentives and other statutory incentives from the Government of India, we have time and again implored states to do top-ups, which has been done also in the state of Karnataka. And I must here, sir, highlight that apart from these interventions, the ministry periodically reaches out to state administration and tells them that we should not additionally burden Anganwadi workers with additional responsibilities which the district authorities may do from time to time. We have cautioned state governments regarding the same. Thank you. Srimati S. Fangnan Konyak. Vice Chairman, sir. My question to the Minister is whether Saksham Anganwadi will be implemented in Nagaland or not, and if yes, what budget has been allocated to Nagaland? Sir, with your permission, let me compliment the member. Nagaland. We all compliment her. I compliment her and I wish her well for her tenure of service on behalf of the state and my organization, जिसकी आज हम सब स्थापना दिवस मना रहे हैं. Sir, I would like to here highlight to the honourable member that for the state of Nagaland, the Government of India is committed to ensuring that through 3,980 Anganwadis, we help service the needs of women and children who come to these Anganwadis. She asked the question with regards to Saksham Anganwadi. I would like to highlight to the honourable member that we have definitely ensured that Saksham Anganwadi scheme is implemented across the country and also in the state of Nagaland.
And for the year 21-22, the government of India under this project has given to the state of Nagaland close to 15,000 lakh rupees. Thank you. Dr. Kanimoji Sonu. Thank you, sir. Sir, in the COVID pandemic, how was the scheme implemented when there was a total lockdown going on? And during the COVID pandemic, there were more malnourishment in the children. And how was it maintained? There was no census depending upon that in the period of 2021. Thank you. First question posed by Chandrasekhar ji, I have highlighted the recent WHO standard measurements of children, close to 1 crore children across all Anganwadis in the country, which have now highlighted that only 2% children are SAM children, which is possibly an indication, and I would like to hear add, sir, that MAM children have come up to 5%, which is, if you look at cumulatively, the number of children in the malnourished category between SAM and MAM is now 7%. And if you look at, sir, the last NFHS data, where the amount of such children is positioned at 19%, in fact, it is a compliment to the efforts of state governments and the collaboration that they have done with us at the Government of India, that you see a decline in that percentage from 19% to now 7%. However, as I have said earlier, sir, we would like the numbers to be validated by a third party, that being the Indian Academy of Pediatrics. They have been more than supportive of ensuring that this is validated. But this is indicative of the fact, sir, as the Honourable Member sought to know, what is the effect? You see that the effect is a decline in those numbers. And we have, sir, monitored the distribution of take-home ration to the doorstep of close to 9 crore beneficiaries, 7 crore children and 2 crore pregnant and lactating mothers, in collaboration with state governments, and ensured that there is a weekly review with state governments. Thank you. Ramila Ben Bara. उपसभापति जी, माननीय उपसभापति जी, कुपोषण दूर करने के लिए सरकार ने ठोस कदम उठाए हैं। मैं सरकार को धन्यवाद देती हूँ। फिर भी आज ग्रामीण क्षेत्र में ट्राइबल परिवार में कई छोटी उम्र में बच्चों की शादी हो रही है। इसके वजह से कई छोटी उम्र में बच्चे पैदा होने के वजह से उनका मृत्यु हो जाता है, माता का भी मृत्यु कभी हो जाता है, जान खतरे में दोनों आ जाती है। इसके आंकड़े सरकार के पास होंगे, लेकिन मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से जानना चाहती हूँ, उनको रोकने के लिए कोई आयोजन है, ठोस कदम उठा रहे हैं? धन्यवाद। धन्यवाद। संसद को अवगत कराना चाहती हूँ कि पोषण अभियान समन्वय है भारत सरकार में 18 भिन्न भिन्न मंत्रालय और विभागों का, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स भी सम्मिलित है। जो माननीय महोदया ने उल्लेखित किया इस सदन में, वो अपने आप में हम सबके लिए चिंता का विषय है। एक तरफ भारत सरकार पोषण अभियान के माध्यम से विशेषतः ट्राइबल संभागों में भी हमारी बेटियों को, महिलाओं को, बच्चों को हम सुपोषित कर पाएँ, इसका अभियान चला रहे हैं। लेकिन दूसरी ओर जो फंडामेंटल इन्होंने प्रश्न किया कि छोटी और नाबालिग उम्र में बेटियों की शादी हो जाती है, इसी के परिवेश में भारत सरकार ने जो एज ऑफ मैरिज है उसमें प्रस्तावना की है, जो दूसरे सदन में लंबित है, उसमें प्रस्तावना की है कि हम बेटियों की शादी की उम्र को बढ़ाएं। धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 362, श्रीमती शांता छेत्री। सर, माय क्वेश्चन इज प्लीज माननीय मंत्री जी, जवाब पटल पर रखा। पहला सप्लीमेंट्री शांता जी। सर, through you, what are the steps taken so far to provide quick medical access to accident victims in national highway? Sammaniya Speaker Mahoday, total of 710 ambulances have been deployed of NHI across 732 toll plazas. These ambulances attended to a total of 37,300 calls in year 2021-22. Regarding incident management has been deployed on the national highway stretches, where already we have given the facility of ambulance, crane and route patrol vehicle at 28 toll plaza in West Bengal. The helpline number is 1033 is created for emergency purpose for road users, and now we are developing 6 wayside amenities at every 40 km along national highway and expressway, and more than 600 wayside amenities will be developed across 22 states of country.
in 2020, before 2024 we will complete it. And there is a facility for drone landing and helicopter landing. The helicopter ambulance also can be useful because taking that patient to the hospital, it can be possible at due course of time we will take it to the hospital. We are constantly very much worried about the accident rate. We have 5 lakhs accidents and 1,50,000 deaths. We are trying our level best that how we can remove the black spots, and actually that is the need of the hour. With the cooperation of state government and people by and large, our main important task is how to reduce the number of accidents in the country. We are working on that line. Second supplementary, Santaji. Sir, my second supplementary question is whether the government wishes to involve private hospitals in setting up trauma centers in National Highway. Thank you. Thank you for being very brief to the point. Speaker Mahoday, presently we don't have any scheme for involvement of private hospital, but this is a good suggestion because actually in our department we are only offering land, and the hospital is going to develop by the public health department. But actually about considering the experience, it can be a good suggestion for future. Government will definitely consider that. लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड डॉक्टर डीपी वत्स जी, क्वेश्चन बंगाल पर है, तो आपका सवाल बंगाल से जुड़ा है? मेरा अगर नहीं है तो हम दूसरे सदस्य। ये सभी से जुड़ा हुआ है सर, जनरल सवाल। प्लीज प्लीज, इफ इट्स ए स्पेसिफिक ऑन बंगाल, प्लीज। माननीय मिस्टर पी विल्सन, योर क्वेश्चन इज रिलेटेड टू बंगाल। Honorable Minister will answer. Thank you, Chairman, sir. Honorable Minister, how far your ministry is encouraging both state government and hospital sectors for establishment of multi-speciality hospital with trauma care facilities alongside of national highways? Why not a sign board or a display board provided national highways indicating Honorable the P. distance Wilson of ji, the this question hospital? relates to West Bengal, please. No, but he Please. can answer. This is relating Please. to health, life. Please, please. In general. प्लीज, माननीय संजय सिंह जी, बंगाल से संबंधित सवाल। बंगाल जो नियम आप सबने बनाया मैं उसका पालन कर रहा हूँ। बंगाल से संबंधित सवाल। अभीर रंजन विश्वास जी, अभीर रंजन विश्वास, अभीर रंजन जी, प्लीज। Thank you, sir. Sir, I would like to know, as per the reply given by the Honorable Minister, there is a trauma center at Islampur Sub-Regional Hospital in Uttar Dinajpur along the National Highway 34, and the next closest is the Murshidabad Medical College, and the distance between these is quite a few hundred kilometers. I would like to know, district Malda is in between where there is, and also Dokhin Dinajpur. I would like to know whether the government plans to have any trauma centers there. Thank you. Thank you. Sir, in the West Bengal, we have 28 toll plaza where the ambulance, crane and route patrol vehicle is available. There are some hospitals already in West Bengal, but our experience is not good. Because we are starting, when we start the hospital, we need cooperation from the health department of state government, and at the same time we need to take the decision with the guideline of the Health Ministry of Government of India. But there is a good suggestion. If on the national highway, if the private doctors, if the orthopedic surgeons, if they want to establish their trauma center there, it can be a good scheme where government, my ministry will support them regarding development of trauma center there, and it can be more useful. Sir, one thing which I want to recognize here in the house, that in Tamil Nadu, actually they reduced the road accident by 52%. Now this is the time that I understand, I appreciate that we need ambulance, we need all type of facility. But same time, I will request all of you that if we can reduce the number of accidents, it can be a great achievement. Now the just government has submitted one plan we are going to the cabinet from World Bank cooperation of 14,000 crore. We are improving black spots which are responsible for road accidents, and somewhere the cooperation from the people and the state government, I am confident that we can reduce the number of accidents. That is exactly the main cause where we need to concentrate more. But at the same time,
The coordination between the state health ministry and central, it is difficult. So the good suggestion given by honorable member that we should consider that if the private doctor want to establish trauma center, we will find out some scheme where we can help them to start the trauma center on the road. Thank you. Question number 363, माननीय श्री कनक मेदला रविंद्र कुमार जी. Question number 363. माननीय मंत्री जी. सभापति महोदय, उत्तर सभा पटल पर रखा गया. First supplementary. Sir, in the answer given by the Honorable Minister, the land was allocated in 2017 itself for KVS Kendriya Vidyalaya and 2 places in the state of Andhra Pradesh. But till August 2019, the work has not been commenced. Now it has to be at different stages of progress. That was stated in the answer. What is the step? What is the hindrances caused for establishment of this KV Institute and complete the construction even after 4 years? What is the reason for it? Thank you. सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है, सत्यनापल्ली और राजमपल्ली ये दोनों 2017 में जमीन आवंटन हुआ था और अभी ये दोनों विद्यालय के कार्य प्रगति पर हैं. 80% से ज़्यादा कार्य हो चुके हैं. बहुत जल्दी ये पूरा होगा. Second supplementary. Sir, in respect of Indira Gandhi National Open University, the land has already, allocated agreement is also entered. Either any time-bound program to complete this Indira Gandhi National Open University, because it is a new state capital, it has to be generated. Employment is also. Thank you. सभापति महोदय, इग्नू के बारे में जो माननीय सदस्य ने सवाल किया है, तो ये देना था 2018 में, ये तय हुआ था, लेकिन 2018 में ज़मीन ट्रांसफ़र नहीं हुआ. उसमें कुछ राज्य को लेकर, राज्य की राजधानी को लेकर कुछ अड़चने आई और अभी लास्ट में अभी 4 मार्च 2022 को एक लीज एग्रीमेंट हुआ है. अभी ज़मीन ट्रांसफ़र नहीं है, ट्रांसफ़र की प्रक्रिया में है. जैसे ही होगा फिर आगे उसकी कार्रवाई होगी. धन्यवाद. माननीय वी विजय साई रेड्डी. Chairman sir. Sir, according to the norms, Kendriya Vidyalaya norms, every district in the state will have one Kendralaya, will be Kendriya Vidyalaya, and it will be eventually increased the number to two Kendriya Vidyalayas. Recently, Andhra Pradesh government has increased the number of districts from 13 to 26. I would like to know from the Honorable Minister whether the additional districts that have been created, the 13 districts additionally that have been created, will have Kendriya Vidyalayas, and what is the timeline within which the Government of India will set up the Kendriya Vidyalayas in these new districts? Thank you, Vijay. उपाध्यक्ष महोदय, विजय साई रेड्डी जी ने जो अभी कहा आंध्र प्रदेश में जिला की संख्या बढ़ा है, the newly formed districts, when Government of India is going to add on the schools. Let me inform this August House, there is no precondition, there is no policy of opening a new school district-wise. The primary condition of opening up a new central school is where the central government employee will be in a good number. To facilitate that, this is the primary criteria of opening up the new central school. So, district-wise central school is not a policy of Government of India. Thank you. Susmita Devji. Question है आंध्र प्रदेश. मैं आंध्रा का ही पूछूंगी सर. Please. मैं मंत्री जी से ये पूछना चाहती हूँ कि apart from government departments and state departments, sir, one important sector is the public sector undertaking, which also has Kendriya Vidyalayas for employees. So, public sector undertakings, many are being sold, and the education of those children are hanging in the middle. आसाम में ऐसे बहुत केसेस है, कच्चा पेपर मिल का. क्या आंध्रा में ऐसे कोई पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है जहां आपने उसको बेच दिया है और केंद्रीय विद्यालय बंद होने के कारण उन बच्चों के एजुकेशन सफर हो रहा है? धन्यवाद. ऐसा कोई जानकारी हमारे पास नहीं है कहीं खुलने का या बंद होने का. केरला में एक इश्यू ऐसा है
लेकिन आंध्र में ऐसा कोई जानकारी नहीं है। धन्यवाद। माननीय थंबे दुराई जी, question is on Andhra. Yes, I am, because Andhra is near. No, sir. Thank you. Sorry. Question number 364. Sir, please. It's on Andhra. Yes, I am going to answer. Please. Sir, land is the state subject. That is what our Andhra members raised. The land is given by the government to the Kendriya Vidyalaya. Because they are asking, when they are asking Kendriya Vidyalaya in Andhra also, they want land. Land is state subject. Therefore, when they are giving the land in Andhra, whether government is, why can't they start immediately? They are delaying, that is what our members are raising. Thank you. Whether the minister will come forward to implement that program early. Answer of my colleague, Government of Andhra Pradesh has given land in 17-18. 80% of those two schools has completed. This is our polite answer. Question number 364, Honorable Sri K.C. Venugopal ji. K.C. Venugopal ji, नहीं है. Supplementary. Sanjay Seth ji. कि क्या जैसे मनरेगा के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को रोजगार देने का प्रावधान है, वैसे ही क्या सरकार के द्वारा शहरी क्षेत्रों के गरीब मजदूरों के लिए भी कोई मनरेगा की योजना बनाई जा रही है, और यदि हाँ तो उसका क्या स्वरूप है? धन्यवाद संजय जी। ग्रामीण इलाकों के लिए, शहरी इलाकों के लिए नहीं। माननीय शक्ति सिंह गोहिल। यहाँ पे मंत्री जी ने जो रिटर्न रिप्लाई दिया है, कहा गया है कि हर साल इसमें हम, क्योंकि मनरेगा एक आशीर्वाद रूप काम गरीब लोगों के लिए इस बेरोजगारी के दौर में, कोरोना के दौर में काम लगता है। मंत्री जी ने जो रिटर्न रिप्लाई दिया है उसको देखते हुए हर साल जो बढ़ोतरी होनी चाहिए, द स्टेटमेंट गिवन इन अबाउट 2020, 21, 22 एंड 22, 23, उसमें 2 रुपया, 4 रुपया, 5 रुपया ऐसी बढ़ोतरी सिर्फ हुई है। तो मैं पूछना चाहता हूं मंत्री जी को कि जब गैस का सिलेंडर 410 का 1000 हुआ है, पेट्रोल 100 के पार है, महंगाई बहुत है, तो इसमें ज्यादा बढ़ोतरी आप करना चाहते हो या नहीं? धन्यवाद। मनरेगा का जो मजदूरी दर है, ये 2011 से CPI-AL के थ्रू हम इसकी बढ़ोतरी करते हैं, और आज भी हम उसी को आधार लेकर के, जो उधर बैठे हैं उन्हीं के समय से 2011 से शुरू यही आधार लेकर के हम उसी आधार पे और प्रत्येक वर्ष कर रहे हैं। चाहे आप अगर देखेंगे तो 17-18 से लेकर के हर राज्य का जो लेबर रेट है, उस लेबर रेट को बेस मान करके जो CPI-AL है उसके आधार पे हम करते हैं। माननीय सुभाषिष चक्रवर्ती जी। Want to raise questions, sir. Unemployment is a great challenge in the country, and Manrega is one way to earn livelihood as a unskilled worker. What steps did the government take during the lockdown and period of pandemic to ensure livelihood, to security through NRGS? Thank you, not disturbed. Thank you. Sir, other question. No, you have already put two questions. No, two questions you have already put. ये मांग आधारित रोजगार है, और मेरा मानना ये है कि भारत सरकार जितनी मांग होती है उतना हम देने के लिए प्रयास करते हैं, और इसमें कोई कमी नहीं आई। और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि जब कोरोना कार्यकाल में प्रवासी मजदूर वापस आए, उस समय बजट भी बढ़ा करके दिया गया। तो मुझे लग रहा है कि ये प्लीज आपस में बैठकर बात न करें, क्वेश्चन और चल रहा है, मेंबर्स का और है। प्लीज आपस में सीट में बात करके आप शोर करेंगे तो दूसरों को डिस्टर्बेंस होगा। प्लीज। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन 365, माननीय महेश पोद्दार जी। क्वेश्चन नंबर 365, माननीय मंत्री जी, फर्स्ट सप्लीमेंट्री। महोदय, सरकार ने अपने जवाब में बताया है, और
मोदी सरकार की कार्यशैली रही है कि सब किसी भी समस्या का यूनिवर्सल निदान कर दिया जाए और समयबद्ध तरीके से कर लिया जाए। महोदय, 2013 और 2018 के सर्वे के अनुसार अभी भी 58,098 मैनुअल स्कैवेंजर बताए गए हैं। इस बीच लेकिन पुनर्वास और स्वरोजगार की भी बहुत सारी योजनाएं चलाई गई हैं। महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि क्या आज की स्थिति क्या है, क्या कोई नया सर्वे करके एक समीक्षा की जाएगी कि इन सब प्रयासों के बावजूद अभी भी मैनुअल स्कैवेंजर देश में है क्या? धन्यवाद। महोदय, उन्होंने अच्छा प्रश्न किया है, क्योंकि हम जो महिला हैं, गांव की बेटी हो, माँ हो, सबको कम से कम 70 साल इंतज़ार करना पड़ा। ऐसा एक प्रधानमंत्री आए और हम सबके लिए शौचालय बनाए। अभी तक देश में 12 करोड़ का ऊपर शौचालय बन गया है। और उन्होंने जो प्रश्न किया है 58,098 जो मैनुअल स्कैवेंजर हम लोगों ने 2013 से एक सर्वेक्षण किया और 2018 से 2020 तक दूसरा सर्वेक्षण किया। दोनों सर्वेक्षण में 58,098 मैनुअल स्कैवेंजर मिले। उन सबको हमारे विभाग के द्वारा 40,000 उन लोगों को पैसा दिया गया। उसके अलावा वहाँ का जो आश्रित परिवार है, सबको जो स्किल डेवलपमेंट करा के 2 साल के लिए उनको स्कॉलरशिप भी दिया जाता है, उसको रोज़गार दिया जाता है। उसके अलावा कोई भी मैनुअल स्कैवेंजर हो, अभी यहाँ पर मैनुअल स्कैवेंजर नहीं है, क्योंकि स्वच्छ भारत की तहत पूरा देश में शौचालय बन गए हैं। धन्यवाद। माननीय तिरुचु शिवाजी। Sir, says that there is no report of deaths due to manual scanning. However, 161 persons have died due to accidents while undertaking hazardous cleaning of sewer and septic tanks during the last 3 years. This is called manual scavenging, sir. Please. Question, please. Sir, no, when the reply, it must be very pertinent, sir, not confusing. So, as per the statement, sir, there are only 58,098 manual scavengers that have been identified in the survey. But actually, they are more. It's not as the Honorable Minister replied. It doesn't restrict to latrines only. The septic tanks are the main thing. So, it should be seen that the private people who engage them must be monetized. Thank you. And what are the steps you have given? Because the social stigma extends to their family also. What are the rehabilitation measures to their family? Thank you. Thank you. माननीय उपसभापति महोदय जी, माननीय सदस्य जी के द्वारा जो सेप्टिक टैंक के संबंध में आंकड़ों की बात की गई, हमारे सीवरेज कार्य करने वाले हमारे व्यक्तियों के संबंध में मैं बतलाना चाहता हूँ कि 1993 से और अब तक सीवरेज कार्य करने में जिन लोगों की मृत्यु हुई है, पहचान की गई है, उन सभी को एक और जहाँ 10 लाख रुपया देने का प्रावधान किया गया है। इसमें 3 वर्ष का आंकड़ा मांगा गया था। आपने जो संख्या को उल्लेख किया वो 3 वर्ष का है। 1993 से लेकर और अभी 31/3/2022 तक सेप्टिक टैंकों की सफाई करते हुए 971 व्यक्तियों की इसमें मृत्यु हुई है, जिसमें से 536 मामलों में एमएस अधिनियम के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज की गई और मृतकों के आश्रितों में से 703 व्यक्तियों को 10 लाख रुपए का भुगतान कर दिया जा चुका है, 136 को आंशिक रूप से भुगतान किया गया और 34 के कानूनी बारिश का पता नहीं चला है। बाकी 98 के भुगतान की पुष्टि नहीं हुई है। जहाँ तक उनके आश्रितों की बात आपने कहा, उनके पुनर्वास के लिए तो जो भी हमारे इस तरह के सफाई के काम में लगे हुए हमारे कर्मचारी भाई हैं, उनको जहाँ एक और पुनर्वास के काम में जोड़ने के लिए 15 लाख रुपए तक का ऋण उनको राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम से उपलब्ध कराया जा रहा है, जिसमें 5 लाख रुपए की सब्सिडी भी दी जा रही है। वो या उनके परिवार का कोई आश्रित स्किल डेवलपमेंट की उसकी योजना के साथ में जुड़ता है तो 2 साल तक उनको 3,000 रुपया महीने का वजीफा भी उनको दिया जा रहा है। माननीय उपसभापति महोदय जी, निजी क्षेत्र के भी जो ऐसे जो कर्मचारी हैं, उन कर्मचारियों को भी और हमारे नगर निगम की व्यवस्था से जुड़े हुए हमारे जो कर्मचारी हैं, इनको मशीनीकृत सफाई की दिशा में प्रेरित करने के लिए भी लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। धन्यवाद।
माननीय महेश पोद्दार जी, सेकंड सप्लीमेंट्री के लिए चूक हो गई थी, आप पूछें। जी धन्यवाद महोदय, विशेष ख्याल रखने के लिए। महोदय, इस देश को सिर पे मैला ढोने के पाप से तो मुक्ति मिल गई है महोदय, लेकिन सीवरेज की सफाई से संबंधित समस्या अभी भी कुछ है। विश्व में इस दिशा में बहुत सारे प्रयोग हुए हैं और सफल प्रयोग हुए हैं। मैं जानना चाहूँगा मंत्री महोदय से कि सीवरेज के मैनेजमेंट की इस नई तकनीकी के बारे में हमारे देश में क्या हो रहा है और कब तक इस पाप से भी हमें मुक्ति मिल जाएगी। महोदय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अधिकतर देशों में सीवर और सेफ्टी टैंकों का सफाई के लिए मशीन का व्यवहार किया जाता है। उसके अलावा सफाई जो कर्मी होते हैं उन लोगों को ट्रेनिंग भी दिया जाता है। तो हमारे भारत में भी जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो मशीनें हमारे भारत में भी उपलब्ध है, हम भी मशीन से उसका सफाई करते हैं और जो कर्मचारी हैं उन लोगों को समय समय में हम लोगों ने ट्रेनिंग भी देते हैं। ऑनरेबल जी.के. वासन। Will the government consider partnering with the corporate sector by encouraging them to take up rehabilitation works and providing them appropriate safety equipment so that manually scavenging sewage threat to human life will come down? Thank you. हमारे जितने भी सफाई कर्मचारी हैं सबको मशीन दिया जाता है। उनको अभी तक हम लोगों ने 927 प्लेसों में अभी तक हम लोगों ने उनको वर्कशॉप भी कराया। उन लोगों को मशीन भी देते हैं और जो भी सेल्फ हेल्प ग्रुप 5 व्यक्तियों का सेल्फ हेल्प ग्रुप करा के उनको 50 लाख रुपया उपलब्ध कराते हैं, जिसमें आप फ्रंट जो सब्सिडी है उसको करीब 19 लाख रुपया उनको मिलता है। और जिन लोगों ने व्यक्तिगत स्तर पे हम लोगों ने मशीन देते हैं उन लोगों को हम लोग 15 लाख रुपया उनको देते हैं, 5 लाख उनको सब्सिडी मिलता है। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हो, स्थानीय निकाय हो, सबको हमारे विभाग की तरफ से मशीन का उपलब्ध हम कराते हैं। माननीय नीरज डांगी जी। What steps is the government taking to improve the performance of schemes for the rehabilitation of manual scavengers, given that of the total identified manual scavengers, on 2.7% have received the capital subsidy and 31.3% have received the skill development training? Thank you. Thank you, sir. 2020-21 और 2022 तक मैं आंकड़ा आपको देता हूँ। जो 12,730 सफाई कर्मचारी को हम लोगों ने प्रशिक्षण प्रदान किया है, उसके साथ साथ उन लोगों को हम लोगों ने मशीन भी उपलब्ध कराया। उसके अलावा 2021-22 तक हम लोगों ने 2,823 मैनुअल स्कैवेंजर को आश्रित लोगों को रोजगार देने का काम भी किया है। धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 366 माननीय राकेश सिन्हा जी। क्वेश्चन नंबर 366 माननीय मंत्री जी। पटल पे रख दिया। फर्स्ट सप्लीमेंट्री। उपसभापति महोदय, मंत्री जी को मैं बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने बहुत ही एक्सटेंसिव आंसर दिया है। जिन लोगों ने कश्मीर फाइल नहीं देखा है, कम से कम इस उत्तर को देख लें तो पता चलेगा जम्मू कश्मीर का कितना डेवलपमेंट हुआ है। मेरा एक प्रश्न है मंत्री जी से कि जो डेवलपमेंट हो रहा है, अब तक का डेवलपमेंट वहाँ पर अर्बन सेंट्रिक था। इस डेवलपमेंट से डोडा से लेकर बारामुल्ला तक आम लोगों के इंफ्रास्ट्रक्चर का जो डेवलपमेंट हुआ है उसमें आम लोगों तक, गांव के लोगों तक कितना लाभ पहुंचा है? धन्यवाद। महोदय, बहुत ही अच्छा सवाल किया है माननीय राकेश सिन्हा जी ने। मोदी सरकार परिणाम देने वाली सरकार है। मोदी सरकार जो करती है वही कहती है और जो कहती है वही करती भी है। कितने सुखद परिणाम आए हैं। परिणाम सुनिए ना, मैं प्लीज बहुत चर्चा होती है रोजगार की। औद्योगिक विकास के क्षेत्र में लगभग 51 लाख रुपए के निवेश के प्रस्ताव आए हैं। 51,000 करोड़ 51,000 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव आए हैं, जो वहाँ के नौजवानों को रोजगार देने में बहुत ही ज़्यादा सार्थक है।
4,50,000 लोगों से अधिक को रोजगार का अवसर प्राप्त होने की संभावना है। 2019 से अभी तक 26,303 पदों की पहचान की गई है, जिसमें 11,324 राजपत्रित कर्मचारी और अराजपत्रित कर्मचारी और 4th क्लास के पदों के चयन की प्रक्रिया पूर्ण हुई है। शेष रिक्तियों की प्रक्रिया जारी है। तेज सड़क निर्माण के फलस्वरूप दुर्गम क्षेत्रों में आवागमन की सुविधा बढ़ी है। 2019 के पहले सड़कों का निर्माण का औसत 6.54 किलोमीटर प्रतिदिन था, जो बढ़कर अब वर्तमान में 20.68 किलोमीटर प्रतिदिन हो गया है। 1,000 से अधिक आबादी की बस्ती सड़क से जुड़ गए हैं और 2023 तक 500 आबादी वाली बस्तियां भी अधिकांश रूप में जुड़ जाएगी। सब महोदय 1 मिनट, कितना प्रभाव पड़ा है। काजी कुंड बनिहाल सुरंग के निर्माण से अब श्रीनगर से जम्मू की यात्रा जो पहले 10 घंटे में पूरी होती थी, अब 5 घंटे 50 मिनट में पूरी कर ली जाएगी। बिजली उत्पादन में बढ़ोतरी के कारण 24 घंटे बिजली की उपलब्धता देने में सफल हो रहे हैं। IIT और IIM प्रारंभ होने से जम्मू कश्मीर के हजारों विद्यार्थी आज तकनीकी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। 2 नए एम्स, 7 मेडिकल कॉलेज, 2 राज कैंसर अस्पताल तथा 15 नर्सिंग कॉलेजों के निर्माण कार्य प्रारंभ हो गया है। राजकीय डिग्री कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज की संख्या बस 96 से बढ़कर 147 हो गई है। इसमें जम्मू कश्मीर के हजारों विद्यार्थी लाभान्वित होंगे। घरों से टैप, पहले 31 घरों में टैप मीटर कनेक्शन से बस आधा मिनट सर, बहुत बड़ा सवाल उन्होंने पूछा है। आगे और सवाल हमको लेने हैं। पंचायती राज का चुनाव हुआ है, हो गया, जिससे सरकार हुआ है, रोजगार के अंतर्गत काफी देंगे, रिप्लाई मिल जाएगा। थैंक यू। सेकंड सप्लीमेंट्री। उपसभापति महोदय, हम सब जानते हैं कि 80 के दशक में कश्मीर के लोगों को बड़ी त्रासदी से गुजरना पड़ा था। वहाँ के लोगों के मंदिरों को ध्वस्त किया गया, जमीन छीन ली गई। मेरा मंत्री जी से सवाल है कि 2019 के बाद जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आधारभूत परिवर्तन हुआ, जिसके कारण विकास हो रहा है, इस दौर में कितने हिंदुओं की जमीन और कितने मंदिरों की जो जमीन संपत्ति, जब मंदिर ध्वस्त किया गया था, उस जमीन को रिस्टोर करना, उनको चिन्हित करना, उस पर अधिकार दिलाने की कोशिश की गई है। महोदय, जम्मू और कश्मीर में संबंधित जिलों के जिला मजिस्ट्रेट प्रवासियों की अचल संपत्तियों के कानूनी अभिरक्षक हैं। जम्मू कश्मीर के प्रवासियों की शिकायतों के समाधान के लिए जम्मू और कश्मीर सरकार ने दिनांक 7/9/2021 को एक पोर्टल की शुरुआत किया है। जिन पर जुर्म ढाए गए हैं, अत्याचार और अनाचार के कारण जो घाटी छोड़कर आए हैं, जिनकी संपत्तियां जबरन ले ली गई है, मोदी जी की सरकार है और गृह मंत्री जी सब ऐसी संपत्तियों को वापस करने में भी सक्षम है, लगातार प्रयासरत है। जिनकी शिकायत सही होगी, उनकी एक कर जमीन वापस की जाएगी। और अभी तक 610 आवेदकों की संपत्ति वापस की गई है। धन्यवाद। डॉक्टर सस्मित पात्रा। Deputy Chairman, sir. My question to the Honourable Minister stems from the facts that he has provided, where under the Prime Minister's Development Package 2015, 53 projects pertaining to 15 ministries are being implemented at a cost of 58,477 crores. My specific question is the government planning to increase the outlay, A, and if yes, by how much? Thank you. अध्यक्ष महोदय, 2015 प्रधानमंत्री जी के संग राज्य जम्मू कश्मीर के विकास के लिए जो योजनाएं लाई गई थी, जिस 53 परियोजनाओं की उन्होंने चर्चा की है, उसके लिए 58,477 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है और बड़ी तेजी से यह परियोजनाएं पूरी की जा रही है। इसमें बहुत सारी परियोजनाओं को पूरी की गई है, परियोजनाओं की समीक्षा होती है और उसमें कोई कमी नहीं छोड़ी जाती है। विश्वास रखें, शीघ्र ही सारी परियोजनाएं पूर्ण कर ली जाएगी। रजनी पाटिल जी।
मैं आदरणीय मंत्री जी से आपके द्वारा पूछना चाहती हूँ। उनका अभिनिवेश देख के तो मैं बहुत हैरान हो गई। ऐसे लग रहा है कि कोई हम सिनेमागृह में बैठे हैं और ये ऐसे आवेश में बोल रहे हैं। लेकिन मैं प्रश्न ये पूछना चाहती हूँ कि 5 अगस्त 2019 जब जम्मू कश्मीर की रियासत उन्होंने वापस ली है गवर्नमेंट ने, और जब उनका स्टेटहुड चला गया है, उसके बाद में जम्मू कश्मीर की बेरोजगारी चरम सीमा पे है। हिंदुस्तान में 1 नंबर की बेरोजगारी है सर। 17.5%, 17.5%। रजनी जी सवाल पूछिए। डेवलपमेंट के जो वादे करते हैं, वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम है, इन्होंने बाहर के लोगों को दिया है। वहाँ के लोकल लोगों को इन्वॉल्व करने का मंत्री जी का कोई इरादा है क्या? धन्यवाद। महोदय, उन्होंने जो प्रश्न किया है और उन्होंने कहा कि जोर जोर से बोलते हैं, अगर धीमी आवाज से सुनना चाहे तो मैं बहुत धीरे धीरे बोल समझाना भी चाहूँ। जवाब दे। जम्मू कश्मीर संघराज्य के विभिन्न विभागों के कारण 26,630 पदों की पहचान की गई है और इन भर्तियों की प्रक्रिया भी हो, जिसको मैं पहले भी बोला हूँ और उसको मैं दोहरा रहा हूँ। और मैं चालू वित्त वर्ष के दौरान विभिन्न सरकारी विभागों की विभिन्न स्वरोजगार योजना के तहत 1,37,837 व्यक्तियों को कवर किया गया है। परामर्शी एवं समयबद्ध भर्ती प्रक्रिया को गति प्रदान करने के लिए विशेष भर्ती नियम बनाए गए हैं तथा विभिन्न विभागीय नियमों में संशोधन भी किया गया है ताकि रोजगार के अवसर शीघ्र ही प्राप्त हो। रोजगार मुहैया कराने के लिए रोजगार पोर्टल बनाया गया है। बेरोजगार व्यक्तियों को विभिन्न पदों की उपलब्धता के बारे में जागरूक करने के लिए जिला स्तरों पर नियमित रूप से काउंसलिंग और ई काउंसलिंग सेक्शन भी स्थापित किए गए। हर प्रकार से व्यापक रोजगार के अवसरों तक पहुंच बढ़ाने के लिए मॉडल कैरियर सेंटरों की स्थापना की गई है तथा रोजगार मेलों का आयोजन किया गया। महोदय, मैं इसलिए इसकी चर्चा किया कि इन सब कारणों से जो वह कह रहे हैं वह असत्य है और जो उत्तर में दिया गया है यही सत्य है। रोजगार बढ़ा है, स्वरोजगार बढ़ा है, लोगों के मन में विश्वास जगा है, विकास भी हो रहा है। प्रियंका चतुर्वेदी जी, प्रियंका जी प्लीज प्रियंका जी के सवाल प्लीज। मैंने स्पेसिफिकली कहा था कश्मीरी पंडित्स का कितने जॉब्स लगे हैं, 3,000 जॉब प्रॉमिस किए थे और उन्होंने जवाब कश्मीरी पंडित नहीं कहा है, उनको कश्मीरी माइग्रेंट्स कहा है। कब कश्मीरी पंडितों को माइग्रेंट्स का जो लेबल दिया हुआ है ये कब खत्म होगा, ये मैं पूछना चाहती हूँ। थैंक यू महोदय, मैं तो और संशोधित करना चाहता हूँ। मैं तो हिंदू कश्मीरी पंडित कह रहा हूँ, हिंदू कश्मीरी पंडित। प्लीज। और मैंने उत्तर में पहले भी दिया हूं कि जो लोग वहां जाना चाहे हैं उनके लिए हम वहां आवास भी बना रहे हैं। अब तक जो वहां नौकरियां दी गई है कश्मीरी पंडितों को मैं उसको दे रहा हूं। लगभग वह नौकरियां वह अध्यक्ष महोदय, मैं चूंकि सही आंकड़ा देना चाहता हूं इसलिए मैं बताना चाहता हूं कि अब तक की गई नियुक्तियों की संख्या प्लीज 2000 कश्मीरी पंडितों की कहते हैं जो किसी न किसी प्रकार वहां से भगाए गए थे, उसकी बात मैं कर रहा हूं। 2020 और 21 में 841 और 2021-22 में 1264 ऐसे लोगों को नौकरियां दी गई हैं और उनके पास कोई नौकरियां लेने के चाहते हैं जो पुनर्वास है उनको सरकार देने के लिए तैयार। धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 367 माननीय अनिल देसाई जी। थैंक यू माननीय मंत्री जी। 367 उत्तर सभा पटल पे रख दिया गया। प्लीज फर्स्ट सप्लीमेंट्री अनिल जी। Thank you, Deputy Chairman, sir. My first supplementary, sir. Due to these geoclimatic conditions and socio-economic conditions also, we Indians are vulnerable in various degrees to natural disasters, such as floods, cyclones, जो भी आते हैं, droughts रहते हैं, earthquakes, landslides, epidemics, pandemics. Sir, these catastrophes cause massive damage to life and property. So may I know from the honorable ministers, and in the last few years we've seen that due to global warming, climate change, this is on the rise. May I know from the honorable minister through you, sir,
whether NDMA or the government is thinking to explore on the lines of how to cover or usage of financial tools like risk insurance. Is there any thinking which is there in the government? So that if this is taken care by risk insurance or so, it can be compensation, this massive losses can be compensated which come due to disasters. Thank you. Thank you. उन्होंने सबसे पहले हीट वेव की बात कही। हीट वेव के कारण बहुत ही अधिक मौतें बिहार में हो जाया करती थी और एनडीएमए ने हीट वेव की रोकथाम और प्रबंधन के लिए कार्य योजना बनाने के लिए दिशा निर्देश भी जारी किए हैं, जिसका उद्देश्य हीट वेव संभावित राज्यों को अपना हीट एक्शन प्लान तैयार करने में सुविधा प्रदान हो। सभी हीट वेव संभावित राज्यों के साथ हीट वेव की तैयारी संबंधी कार्यशाला आयोजित की गई है। हीट वेव से संबंधित मुद्दों पर गहन अनुसंधान में भी सहायता प्रदान की जाती है राज्यों को। इन उपायों के परिणाम स्वरूप हीट वेव के कारण जान माल की नुकसान में उल्लेखनीय कमी हुई है। 2015 में राज्य सरकारों द्वारा लू से मरने वाले की आंकड़ा जो दिया गया, संख्या दी गई, वह 2040 थी। 2040 मौतों की हीट वेव आपने कहा, आप जो और बोले हैं क्या प्रावधान करते हैं इंश्योरेंस का, वो भी हम हीट वेव की उन्होंने चर्चा की है नहीं? अगर आपको वो आंसर नहीं, प्लीज क्या माननीय सदस्यगण, मंत्री जी, माननीय मंत्री जी, 2020 में वो एक मिनट माननीय मंत्री जी, 4 हो गई है, 4। माननीय सदस्यगण, आप प्रक्रिया जानते हैं। किसी मंत्री के सवाल से अब अगर आप संतुष्ट नहीं है तो उसके लिए अलग प्रक्रिया है, आप उसका पालन करिए प्लीज प्लीज प्लीज। जहां तक उन्होंने अच्छा महोदय अगर मैं उनके प्रश्न का उत्तर सही नहीं दे रहा हूं तो उनका प्रश्न हीट वेव पर था, अगर नहीं था तो प्लीज दोबारा प्रश्न करें। क्या करें? माननीय अनिल जी, प्लीज नेक्स्ट सप्लीमेंट्री। सेकंड सप्लीमेंट्री। सर, मैंने जो क्वेश्चन पूछा था वो रिस्क फाइनेंसिंग, रिस्क इंश्योरेंस का कोई आप डिवाइस यूज करेंगे? अगर नहीं करेंगे तो इस तरह का बहुत मैसिव लॉसेस होते रहेंगे करके। एनीवे, माय सेकंड सप्लीमेंट्री, यू कैन राइट बैक टू मी, आप आंसर दे सकते हैं मेरे को। सर, माय सेकंड सप्लीमेंट्री इज, sir, with the efforts of NDMA, there was a good measure which has come in place. Coalition for Disaster Resilient Infrastructure, that is CDRI, and that was launched by Honorable Prime Minister, and that was presented in United Nations Summit which was there in 2019, where our CDRI was acclaimed by different countries, and 30 countries have become member to that. They have endorsed the charter. May I know from the Honorable Minister what is the basic objective or the salient features of that CDRI? Thank you. Thank you, Anil ji. वो तो हीट वेव के बाद जो उन्होंने दूसरा उत्तर था, एक लाइन में मैं प्रश्न था कह देना चाहूँगा कि इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट ऑफ द इंडिया के साथ इस विषय पर काम कर रही है और इससे इंश्योरेंस सॉल्यूशन करने में, निकालने में मदद मिलेगी और उस तरफ सरकार पहल कर रही है। दूसरा है कि अभी जो प्रश्न उन्होंने कहा है उसमें जो आपदा रोधी और संरचना के लिए गठन CDRI है, माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा 23 सितंबर 2019 को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन में आधिकारिक तौर पर लॉन्च किया गया था और उसके बाद से 31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार संगठन में 30 राष्ट्रीय सरकारों, 5 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों एवं 2 निजी क्षेत्र के संगठनों सहित 37 सदस्य जुड़े हैं और अब CDRI का नई दिल्ली में एक सचिवालय भी है जो पूर्ण रूप से कार्य कर रहा है। महोदय, इसमें बिजली, संचार, परिवहन, स्वास्थ्य और शहरी अन्य संरचनाओं की सहनशीलता संबंधी महत्वपूर्ण मुद्दों पर वैश्विक राय तैयार करने के लिए इसमें सम्मेलन किए जाते हैं। डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी भी भारत ने किया है। 2021 में सम्मेलन छोटे विकासशील द्वीप राज्यों की संवेदनशीलता के समाधान पर विशेष ध्यान केंद्रित किया। थैंक यू। माननीय सतीश चंद्र दुबे, माननीय सतीश चंद्र दुबे।
आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंध प्राधिकरण के प्रयासों से आपदा प्रबंध में कितना प्रभाव पड़ा है। धन्यवाद महोदय। एनडीएमए के द्वारा जो कदम उठाए गए हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने अपने सतत प्रयासों से प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए कई प्रकार के उल्लेखनीय सुधार भी किए हैं तथा सफलता भी मिल रही है। आपदा के समय माननीय गृह मंत्री जी स्वयं इसकी निगरानी भी करते हैं और कोविड का समय हो, चक्रवात के समय में, वज्रपात के समय में, शीतलहर के समय में, हीट वेव के समय में, बाढ़ के समय में, भूकंप के समय में, इस सभी समय में एनडीएमए के सुझाए गए रास्तों के आधार पर और स्टेट से कोऑर्डिनेशन जो गृह मंत्रालय करती है, स्वयं राज्यों से कभी कभी बड़ी आपदा की जब पूर्वानुमान किया जाता है तो माननीय गृह मंत्री जी स्वयं राज्यों से भी मीटिंग करते हैं और इसके लिए आपदा मित्र भी बनाए जा रहे हैं। सामान्य चेतावनी प्रोटोकॉल भी ला दिया गया है, आपातकालीन सहायता प्रदान की जाती है और सबों के इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी बढ़ोतरी हुई है। टेक्नोलॉजी को समाहित किया गया है और प्रयास हो रहा है कि ज्यादा जागृति ला जाए और विश्वविद्यालयों की शिक्षा में कहीं न कहीं धन्यवाद। डॉक्टर शांतनु सेन। Thank you, sir. Sir, it is being heard and it is felt that whenever there is any disaster taking place in any state, the representatives of NDMA, they used to visit. But it is seen that they visit and they report with some ulterior motives for some particular states. So far our state of West Bengal is concerned, in the recent past, West Bengal was badly affected by Amphan, Yas, and even in COVID and Bulbul. We have seen the team visited. We have seen our respected Prime Minister also visited. But unfortunately, we are yet to get the financial aid which we are supposed to get from the central government. Through you, my question to my minister is, why such discrepancy with the most potential state run by opposition like West Bengal? Thank you. महोदय, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा कि पहले से भी ज़्यादा सुधार हुआ था। पहले तो कोई आपदा आने के पश्चात जब अनुरोध मिलता था तब यहाँ आईएमसीटी की टीम जाती थी, लेकिन अब तो राज्य अनुरोध नहीं भी करता है तब भी आपदा के पश्चात तुरंत ही यहाँ से आईएमसीटी की टीम जाती है, आकलन करती है, उसकी एक प्रक्रिया है। वित्त आयोग के द्वारा उसको कुछ निर्धारित उसकी शर्तें हैं, कुछ एनडीएमए के सुझाव गए रास्ते के आधार पर जो वहाँ से आकलन आता है उसकी यहाँ समीक्षा होती है, उसकी एक कमेटी बनी हुई है और समीक्षा करने के बाद उसका भुगतान भी होता है। लेकिन महोदय, एक चीज़ समझने की बात है कि यह सहयोग, यह क्या है ना कि यह एक सहयोग है पुनर्निर्माण या नवनिर्माण की योजनाओं के साथ राज्यों के द्वारा जो एक बड़ा बजट के साथ भेजा जाता है, जो आपदा के मूल भावनाओं में सहयोग करने की जो प्रवृत्ति है उससे वह अलग होती है और वह तो पहला काम राज्यों का होता है और राज्यों को एसडीआरएफ का फंड पहले ही उपलब्ध करा दिया जाता है और मैं बता रहा हूं कि एसडीआरएफ का फंड पर्याप्त मात्रा में जाता है। पहले जो वित्त आयोग अनुशंसा करता था, 15वीं वित्त आयोग ने जो एसडीआरएफ के लिए एनडीआरएफ के लिए जो फंड बनाया है वह 109 गुना बढ़ाकर मोदी सरकार दे रही है, 109 गुना। जहां तक बंगाल की बात है तो मैं बता रहा हूं कि जब प्रधानमंत्री जी उस समय वहां गए थे तो उन्होंने 1000 करोड़, सर उनको सोचना चाहिए, स्वयं प्रधानमंत्री जी 1000 करोड़ अम्फान के बाद वहां देकर आए, 1000 करोड़। और सर मैं तो पश्चिम बंगाल के सदस्यों को कहना चाहता हूं, कोई चीज रिकॉर्ड पे नहीं जा रही। शांतनु सेन जी, प्लीज। के पूर्वानुमान के बाद जब हम वहां एनडीआरएफ की टीम भेजते हैं, जब हम उसको आपदा वाले क्षेत्रों से निकाल कर हम बाहर लाना चाहते हैं, उसमें भी राज्य सरकार सहयोग नहीं करती है। उसके बावजूद भी हमारा कर्तव्य बनता है, मोदी सरकार संवेदनशील है, उनके असहयोग के बावजूद भी
पश्चिम बंगाल, क्योंकि आप सीट पर बैठ कर ना बोलना दिमुला जी, मोदी जी की सरकार संवेदनशील है। उस दुख की घड़ी में हम हर प्रकार से जो हमारा नियम है उसके अंतर्गत किसी भी प्रकार की कमी नहीं छोड़ते हैं, हम उसको रंजन जी, दिस इज नॉट करेक्ट, प्लीज जी। अभी रंजन जी, दिस इज नॉट द वे टू बिहेव, प्लीज। माननीय जीवीएल नरसिंह राव, माननीय, उसके लिए प्रॉपर रास्ता है करने के लिए, मैंने आपको अपील किया, फॉलो दैट रूट प्लीज। जीवीएल नरसिंह राव। Thank you, sir. I would like to congratulate the government for timely release of SDRF funds. Andhra Pradesh had recently severe floods and loss of chili crop, but the state government has not paid even a penny, and the money was diverted for other purposes. SDRF money, disaster response fund money, in which central government contributes 75%. Ministry of Finance said there is a diversion. My question is, maybe such a diversion happened in Bengal also. I would like to ask the Minister, Honorable Minister, whether the Ministry of Home Affairs will undertake an inquiry and find out about the diversion of funds which are meant for disaster relief in Andhra Pradesh and maybe in Bengal as well. Thank you. अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य महोदय को मैं यह बताना चाहूँगा कि जो राशि एसडीआरएफ का हिस्सा जो राज्यों का होता है, वह हम उस हिस्से में कहीं कमी नहीं करते हैं, उसको समय पे हम उसका भुगतान कर देते हैं, उनको मुहैया कर देते हैं, उनके पास भेज देते हैं। और यह आपदा राज्यों का पहला विषय, प्राथमिकता के साथ वह उस पर पहले सहयोग के लिए उनको आने का अधिकार उनको प्राप्त है। हम तो पीछे से सहयोग में जाते हैं, लेकिन कहीं भी आपदा उस एसडीआरएफ के फंड का दुरुपयोग हुआ या नहीं हुआ, या तो अभी हम उनको बता नहीं पाएंगे, लेकिन हम एसडीआरएफ के फंड को समय से हम उपलब्ध करा देते हैं। जो राज्य नहीं खर्च करती है, उसके बावजूद भी अगर उसके यहाँ बची हुई राशि रहती है, उसके बावजूद भी उसका कुछ शेयर निकलता है, तो उसको हम उसके साथ हम उसको लाकर उसका हम शीघ्र ही भुगतान करते हैं। केंद्र सरकार उसमें कभी भी किसी भी राज्य के एसडीआरएफ फंड नहीं रखती। धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 368, डॉक्टर एल हनुमंतैया जी। माननीय मंत्री जी, फर्स्ट सप्लीमेंट्री। सर, total physically handicapped people in the country is 2.8 crore, which is 2.2% of the population. Sir, I have asked for the pension to be given to them. That is, only 3.8% of the total population is being covered under pension. Why all the physically handicapped people are not being given the pension? That is my question, sir. Thank you. First of all, राष्ट्रपति महोदय जी, माननीय सदस्य के द्वारा जो पेंशन संबंधी प्रश्न उठाया गया है, केंद्र सरकार ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत दिव्यांगजनों को, वरिष्ठ नागरिकों को पेंशन देने का प्रावधान ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। जितने भी दिव्यांगजनों के प्रमाणीकरण होने के बाद और पेंशन के लिए अप्लाई किया जाता है, ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा उसमें पेंशन देने का काम निरंतरता के साथ में जारी है। सेकंड सप्लीमेंट्री। Sir, the central government is giving only 300 rupees as pension, sir. In the whole, which is, I mean, very, very insufficient, as everybody knows in this house. Sir, my question is, only 2 states in the country are giving at least reasonable pension. One is Telangana, 3,160. Another one is Delhi, 2,500. Sir, I want the direction from the central government, all the states, at least 2,000 should be given to differently abled person. And one more thing, sir, I want to request the government of India to have a survey for those who wanted pension and those who are eligible for pension, and all those people should be given minimum pension of 2,000 rupees across the country. So both these points are suggestions or questions? Yeah, this is my question. Please. दिव्यांगजनों को दी जाने वाली टॉप अप करने के लिए राज्य सरकारों की अपनी योजनाएं हैं और अनेक राज्य सरकारों के द्वारा इसमें अलग अलग तरीके से माननीय मंत्री जी, 1 बज चुके हैं।
एक क्वेश्चन और खत्म हुआ. प्लीज स्टेटमेंट बाय मिनिस्टर करेक्टिंग आंसर टू क्वेश्चन साध्वी निरंजन ज्योति टू ले. मैं आज की संशोधित कार्यसूची में मेरे नाम के सामने उल्लिखित दिनांक 23 मार्च 2022 राज्यसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2342 के उत्तर के संशोधनार्थ एक विवरण सदन के पटल पर प्रस्तुत करती हूँ. धन्यवाद. हाउस स्टैंड्स एडजर्न टिल 2 PM. The house commences. बाद फिर इधर उधर मूव करते हुए डिस्टर्बेंस होगा, डाइवर्शन होगा. Papers to be laid on the table. General retired VK Singh. Sir, with your permission, I rise to lay papers mentioned against my name as serial number 1 of the revised list of business. These contain a notification by the Ministry of Road, Highways and Transport on the amended recruitment regulations of the NHAI. Sir. Okay. Even otherwise, he seems to be not retired. He is not tired also. Every day is. This is how it is mentioned. General VK Singh retired. It is General VK Singh retired. Okay. We'll follow it. Correct. साध्वी निरंजन ज्योति. महोदय, मैं आज के संशोधित कार्यसूची में क्रम संख्या 3 पर मेरे नाम के सामने उल्लिखित दस्तावेज सभा के पटल पर प्रस्तुत करती हूँ. श्री नित्यानंद राय. महोदय, आज की संशोधित कार्यावली के क्रमांक संख्या 3 पर मेरे नाम के सम्मुख उल्लेखित दस्तावेज सभा पटल पर रखता हूँ. श्री राजीव चंद्रशेखर. Honorable Chairman, sir, with your permission, I rise to lay on the table of the House the papers mentioned against my name at serial number 4 of the revised list of business for today. श्रीमती अन्नपूर्णा देवी. सभापति महोदय, आपकी अनुमति से आज की पुनरीक्षित कार्यसूची की क्रम संख्या 5 पर मेरे नाम के सामने उल्लिखित दस्तावेजों को मैं सभा पटल पर रखती हूँ. श्री अजय भट्ट. With your permission, I rise to lay on the table of the House a copy each of the papers mentioned against my name at serial number 6 in today's revised list of business. श्री BL वर्मा. आदरणीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज की राज्यसभा की पुनरीक्षित कार्यसूची में क्रम संख्या 7 पर अपने नाम के सम्मुख अंकित प्रपत्र क्रमांक हिंदी और अंग्रेजी में सभा पटल पर रखता हूँ. सुश्री प्रतिमा भौमिक. आदरणीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज की संशोधित कार्यसूची में क्रम संख्या 8 पर मेरे नाम के सम्मुख उल्लेखित दस्तावेज सदन के पटल पर रखती हूँ. डॉक्टर सुभाष सरकार. Your kind permission, I raise to lay on the table of the House the paper mentioned against the name of my colleague, Mr. Dr. Subhash Sarkar at serial number 9 in today's revised list of business, sir. Sarkar. हाँ. You are Subhash Sarkar. उसके नाम में, sir. I have not given you permission. Please sit down. It will not be part of the record. Minister, for any reason, is going to be absent. He should write the chairman, seek the permission, and then say so and so minister. And even the minister also should say, sir, on behalf of. You cannot take that liberty and then place the papers. Because name is given Dr. Subhash Sarkar. Dr. Munjipara Mahendra Bhai. Honorable Chairman, sir, with your permission, I rise to lay on the table of the House papers mentioned serial number 10 against my name in today's revised list of business. Thank you, sir. Dr. Bhagavat Karad, which I have allowed that way after seeking permission. Honorable Chairman, sir, with your permission, on behalf of my colleague, Sri Pankaj Chaudhary, I rise to lay the papers mentioned against his name in the revised list of business for today. Message from Lok Sabha, Secretary General. Sir, with your kind permission, I rise to report that Lok Sabha at its sitting held on 5th April 2022 has agreed without any amendment to the Constitution, Scheduled Castes and Scheduled Tribes Orders Amendment Bill 2022, which was passed by the Rajya Sabha at its sitting held on the 30th of March 2022.
Report of the Committee of Privileges, Repeal Wilson. Chairman, sir, with your permission, I rise to present the 72nd report in English and Hindi of the Committee of Privileges in the matter of breach of privilege arising out of allegedly casting aspersion on the Honorable Chairman, Rajya Sabha, by a member in a press interview. Thank you, sir. Report of the Department-Led Parliamentary Standing Committee on Commerce, Sri Anil Desai. Sir, with your kind permission, I rise to lay on the table 169th report in English and Hindi of the Department-Related Parliamentary Standing Committee on Commerce on action taken by the government on the recommendations, observations of the committee contained in its 161st report on review of the intellectual property rights regime in India. Report of the Department-Related Parliamentary Standing Committee on Petroleum and Natural Gas, Sri A. Vijay Kumar. Thank you, Honorable Chairman, sir. I rise to lay the 13th report, Hindi and English version of the Standing Committee on Petroleum and Natural Gas as listed against my name in today's list of business. Thank you. Statements of the Department-Related Parliamentary Standing Committee on Communication and Information Technology, Sri Jawahar Sarkar. Sir, with your permission, I rise to lay on 3 statements, Hindi and English versions, showing further action taken by the government on the recommendations contained in the 28th, 29th and 31st action taken reports of the Standing Committee on Communications and Information Technology 21-22 as listed against my name. Statement of the Committee on Welfare of Other Backward Classes, Sri Sakaldeep Rajbhar. धन्यवाद महोदय। शिक्षा मंत्रालय से संबंधित पीएचडी में प्रवेश और दिल्ली विश्वविद्यालय में शिक्षकों के नियोजन में अन्य पिछड़े वर्गों के प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए किए गए उपाय के संबंध में छठे प्रतिवेदन 17वीं लोकसभा में अंतर्विध सिफारिशों पर सरकार द्वारा दी गई कार्रवाई के संबंध में अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति के 14वें प्रतिवेदन 17वीं लोकसभा के अध्याय 1 में अंतर्विध सिफारिशों पर सरकार द्वारा आगे की गई कार्रवाई और अध्याय 5 में अंतर्विध सिफारिशों के संबंध में अंतिम उत्तरों को दर्शाने वाले अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति के विवरणों की एक प्रति अंग्रेजी और हिंदी में सभा पटल पर रखता हूँ। जय। स्टेटमेंट बाय मिनिस्टर साध्वी निरंजन ज्योति जी। महोदय, मैं आज की संशोधित कार्यसूची में मेरे नाम के सामने उल्लिखित ग्रामीण विकास विभाग की प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण संबंधी स्थायी समिति के 16वें प्रतिवेदन में अंतर्विहित विभिन्न सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के संबंध में एक वक्तव्य सदन के पटल पर प्रस्तुत करते हैं। Honorable members, I was so impressed yesterday about the discussion in the House on the 2 bills. One is the chartered accountant related issue. The other one is about the merger of Delhi municipal corporations. I was so happy the patience shown by the chair, deputy chairman, and by the members cutting across party lines, the way they spoke. I followed each one of them, and also the minister who piloted and replied to the bill up to the point, sharp, but at the same time brief. I felt very happy, and I have also made a note to include it in my memoir also because it's very impressive. And some of the others also called me on over phone also, and they also mentioned it. Another thing they have mentioned is about the performance of the members who have conducted that entertainment cultural program on the day. It was so impressive. Of course, 6 of them. I was there myself, so I enjoyed it. But people had an opportunity to see it in yesterday's Sansad TV, I think, review program.
So I also felt happy that some of my members, they have such a talent. And then no, people who sought permission, they have been given an opportunity. And you are going to retire, then you will also get an opportunity. If you make a request. Members, before going to 0 hour, I received notice from Mallikarjun Khargeji, Susmita Dev, Sri Rujino Jokulam Federio, and Mohammed Rajimul Haq. One is about inflation, other is about instance of hate speeches. They do not come under the purview of 267 to suspend the business of the House. And please. No, even if you give everyday notice also, if it is not worth to be taken up under that rule, I will not do it. Please. Please, you sit down. There is no need to, please. No, even LOP also, he can only mention, he cannot speak on this because others also, please. No, speech is one sentence. Sir, I have given a notice under Rule 267 regarding the rising instances of hate speech against minorities in the country and also the harassment done to the journalists, particularly the Hindustan Gazette, News Laundry, the Quint, Article 14, etc. And this is going on, and Swamijis are speaking and instigative speeches they are giving. Not only that, the right from Haridwar to Delhi on Sunday, one Swami said that all Muslims should be butchered. And this will not go on record. No community name will go on record. Please, I have not. No. We should not quote his words now if he has uttered a meaningless word. And they are creating, sir. Again, raising it in the House. And then having discussion who spoke what. That is not going to solve the problem. Thank you, Khargeji. So, I have not allowed, and nobody should indulge in hate speech against any community, minority or majority. Communities should not be taken into this thing, and nobody should make any speech against anybody. That's all. Sri Ajay Pratap Singh, please. Ajay Pratap Singh. Today, 23 0-hour mentions are there. Please cooperate. माननीय सभापति महोदय, भगवान राम भारतीय जनमन के रोम रोम में बसे हुए हैं। भारत की सभ्यता और संस्कृति के प्रतीक हैं। जहां प्रभु राम का नाम आता है, वहां पर संपूर्ण भारतवर्ष एकजुट हो जाता है और इसीलिए भगवान राम की गाथा पूरे भारत में गाई जाती है, पूरे भारत में पढ़ी जाती है। आज रामायण के लगभग विभिन्न भारतीय भाषाओं में और विदेशी भाषाओं में मिलाकर 300 से अधिक संस्करण उपलब्ध हैं। भगवान राम का भव्य मंदिर अयोध्या में निर्मित हो रहा है। इसके लिए मैं आदरणीय विषय पे आ रहा हूँ सर। आदरणीय मोदी जी और उत्तर प्रदेश सरकार को बधाई भी देता हूँ। अयोध्या में उनकी जन्मस्थली के अतिरिक्त भगवान राम की जो लौकिक लीला थी, उस लौकिक लीला के संदर्भ में लगभग पूरे देश में 250 से अधिक स्थान हैं जहां पर भगवान राम ने कुछ समय व्यतीत किया है। उनकी स्मृतियां हैं। स्मृतियां श्रुतियों के माध्यम से हैं, किंवदंतियों के माध्यम से हैं। वर्ष 2015 में सरकार ने घोषित किया था कि हम रामायण सर्किट के माध्यम से इन स्थानों का विकास करेंगे। मैं सरकार से मांग करता हूं कि 2015 में जिस तरीके से सरकार ने घोषित किया था, इन सभी स्थलों का विकास करे। इसके विकास के माध्यम से न केवल आध्यात्मिक क्षेत्र में लाभ मिलेगा, धार्मिक क्षेत्र में लाभ मिलेगा,
अपितु इन स्थलों के विकास के माध्यम से रोजगार और व्यापार भी विकसित होगा। मैं इस संदर्भ में नर्मदा माँ का भी स्मरण करना चाहता हूँ। माँ नर्मदा एकमात्र ऐसी नदी है कि जिसकी परिक्रमा की जाती है। परिक्रमावासी अनेक कष्ट उठाकर इस नदी की परिक्रमा करते हैं, तो माँ नर्मदा का परिक्रमा पथ ही विकसित किया जाए, जिससे परिक्रमावासियों के आश्रय की व्यवस्था हो सके, भोजन की व्यवस्था हो सके, उनके लिए अन्य सुविधाओं का सृजन हो सके। और माँ नर्मदा के किनारे पर अनेक नगर बसे हुए हैं, उन नगरों का गंदा पानी भी नर्मदा नदी में न जाए, इसके लिए भी सरकार को उपाय करना चाहिए। मैं सरकार से मांग करता हूं कि राम की लौकिक लीला के स्थलों पर और नर्मदा के परिक्रमा पथ पर विकास हेतु एक विशेष पैकेज की घोषणा करे। जिस तरीके से नमामि गंगे के लिए सरकार ने प्रयत्न किया है, वैसे इन दोनों प्रताप जी समय समाप्त हो गया। श्रीमती जया बच्चन and Sri Shiva to associate. Jayaji will take 2 minutes and then Shiva will take 1 minute. Okay. Thank you, sir. Sir, I'm a little embarrassed to have brought this notice for the 4th time in this house on manual scavengers. Sir, अभी थोड़े दिन पहले आपको पता होगा, आपने भी पढ़ा होगा कि कुछ लोग जो ट्रैप हो गए थे, वो उनकी तो जान चली गई, जो बचाने के लिए बेचारे गए थे उनकी भी जान चली गई। उसके ऊपर कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है। अब तो इस सरकार के ऊपर ज़्यादा जिम्मेदारी होती है, क्योंकि उन्होंने ये भी अपने जोखिम अपने सर पे ले लिया है। कल ही इसी का प्रस्ताव हम लोगों ने सबने इसके ऊपर बात की। Sir, according to the Employment of Manual Scavengers and their Rehabilitation Act of 2013 disallows all kinds of employment that force individuals to engage within human excretia manually, but data from the National Commission for Safai Karmachari reveal that in India, one manual scavenger dies every 2 days. That's 1,470 people have died cleaning sewer lines and septic tanks in the past 2 years, sir, which is really a shame. Due to lack of rehabilitation and reintegration program and rampant unemployment, manual scavengers are forced to return to work in inhuman conditions and for meager salaries. I also request the government through you, sir, to rehabilitate the manual scavengers and provide alternate employment opportunities to these people. Thank you very much. Right. Shiva, you all can send your names, but Shiva, I have permitted him already because he's there. Sir, thank you, Chairman, 1 minute, Shiva. Sir, on the 10th of March 2022, it was reported that in Mumbai, 3 laborers who have been engaged for manual scavenging in a septic tank died because of inhaling the toxic fumes. As Madam Jayaji pointed out, though there is an act in place, the Prohibition of Employment for Manual Scavenging 2013, the lack of implementation of that act, and it mostly rests on with the law enforcement activities and the rehabilitation measures. Sir, one thing, sir, these laborers, they don't have any protective gear. They just tie a rope on the hip and get into that, and they hold their breath, sir. When they are not able to sustain the breath, they have to consume either the toxic water or the toxic fume, and they have to die. So, sir, I would urge the government that 2 things have to be done. Mostly they are engaged by contractors. So stringent action must be taken against them who engage them violating the law. And second, rehabilitative measures is very much essential, which the government should concentrate. Sir, the war in Ukraine has once again focused attention on the state of medical education in our country. Today there are about 92,000 medical MBBS seats. 16 lakh young men and women give the exam year after year. That means 1 out of every 18 who gives the exam gets admission to a medical college in India. Now, unfortunately, sir, out of these 92,000 seats we have, just about 53% is government colleges. 47% is private medical institutions whose population has been increasing over the last years. Sir, the government came up with the NMC bill in 2017, and that bill said
that the National Medical Commission will regulate no more than 40% of the private medical seats. No more than 40%. Means it could be 1%, it could be 40%. So the standing committee, under the chairmanship of Professor Ram Gopal Yadav, changed this to at least 50%. So no more than 40% became at least 50%. In 2019, this House and Parliament passed the National Commission Bill. It became the National Medical Commission Act, and there that at least 50% was changed to 50%. So today, 50% of the medical institutions in the private sector are subject to guidelines of the National Medical Commission. The Prime Minister has said that 50% of the private institutions will pay government fees. That is not a new announcement. That is the law that this Parliament passed. So my request to the government through you is that we must increase the population of government medical colleges. We must strictly regulate the fees of all medical institutions, including private institutions. Sir, the policy in private medical institutions is pay now, learn later. It should be learn now, pay later, because there is an acute shortage of medical doctors and public health professionals in this country. Sir, the belief that private medical education will form the foundation of medical education in this country is deeply flawed and deeply dangerous. And I want to bring this to the attention of the government through you, sir. Thank you. Thank you, Ramesh. See, whoever want to associate, please send a slip. See, Abdul Wahab. I am now taking again the issue of transgenders. Our respected Shivji, in a private bill, he introduced here, and later it is taken by government. But what is the implication afterwards? Same things are continuing. They are the most neglected community in our society. Around 5 million people are there for some NGO reports, but some 500,000 only registered as these sort of genders. So I urge the government to take up this measure. In any of the family, if it is there, then only they feel the punch of that. They are totally neglected. That is why they are going outside. I was talking in unofficial talk with our professor, Yadavji, and Ruba, our Honorable Minister, Rubala, Honorable Minister. They are all telling that they are harassing. But how they are harassing? Because of their exclusion from the community. They are forced to harass other people. But government of India, in Asia, we are the most neglecting people, this transgender. So I am urging the government to take all the data. Now people are not giving the census. They are not ready to give their original status. So many reasons are there. Don't take just like what they are doing in the, streets or sometime some places. They are harassing, of course. But it is because of negligence from our side. So I urge the government to do maximum possible. Only few people. Few people, not 5 million is not a big thing in 130 crores. So, sir, I am not taking much. Please look into this case. Very mercifully, I urge the government. This one, Rubalaji, take it in a right sense and please do that one. Thank you very much. Right. Srimati Shanta Chatriji. Thank you, sir, for allowing me to speak. Sir, I would like to draw the kind attention of this August House that Himalayan State Regional Council for Sustainable Development in Indian Himalayan region was constituted by Niti Aayog. The Council deliberated on the implementation of 5 reports released by Niti Aayog on number 1, inventory and revival of springs in the Himalayas for water security. Number 2, sustainable tourism in the Indian Himalayan region. Number 3, shifting cultivation towards a transformation approach. Number 4, extending skill and entrepreneur landscape in the Indian Himalayan region. And number 5,
data for informed decision making. On this regards, I would like to urge the August House to seek detailed explanation from the Honorable Planning Minister why nothing so far has culminated into ground reality and no benefit or development so far for Darjeeling Himalayan region received so far. Thank you, sir. Dr. Narendra Jadhav. Send the name. Send your name by slip. Thank you. Thank you, Chairman, sir. I rise today to speak for a community that has been neglected for a very long time. The size of the community might be too small for any political party to take it seriously to woo them, but the plight of that community is too large and pathetic to be ignored. Sir, I am speaking about the widows of Vrindavan. Their exact population is unknown. Destitute, deserted, and widowed, these women arrive in Vrindavan to earn their livelihood. They are abandoned, banished by their families, and they are left begging for survival. They are mostly dependent on the state, the bhajan ashrams, and the pilgrims that come to the town of Vrindavan. Sir, we are very proud of our family system, but this is a blot on Indian society. Most of these women are unable to access social welfare schemes because the proof of residence needed is not there with them for accessing government services, which they are unable to produce. Since majority of them are illiterate, it is not possible for them to exercise their property rights as well. Furthermore, sir, the shelter homes for widows are overcrowded, highly unhygienic, having conditions, and they lack basic amenities. Also, there is no data that are available about vaccination and COVID-19 testing in these shelter homes for widows. There have also been reports of corruption in regard to pension for these widows. Sir, through you, I would like to urge the government to deal with this issue, which is giving our country a bad name all over the world. The government should restore the property rights of the widows. Also, the government should issue directions to the district magistrate for better implementation of social welfare scheme meant for these widows. Thank you, sir. Thank you. Whoever want to associate, send the name. Sri V. Vijay Sai Reddy. Thank you, Chairman, sir. Sir, the practice of hiring the teachers on contract basis has become a great problem in this country, which is adversely affecting the quality of education in India, sir. Initially, the government of India used to hire the teachers on contract basis in an exceptional cases. However, in the current era, it has become a common method for teacher staffing. Sir, we have 6.5 lakh contract teachers, which is 13% of the total teachers in the country. Sir, the situation in the rural areas and the disadvantageous areas even more, and the contract teachers in those areas is as high as 41% in the just last 5 years. Almost about 1 lakh teachers have been added in the education sector on contract basis. Sir, contract teachers are appointed on ad hoc basis with no service benefits, no job security, lower salary than the regular teachers, and this has caused the general discontent among the teachers engaged on contract basis, and they have financial stress and lack of motivation among the teachers, sir. This decline in teachers' welfare has made it difficult to attract and retain the talented teachers in the teaching sector, thus bringing down the overall quality of the education in the country, sir. In our culture, Indian culture, we consider the teachers as gurus, as gods. Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheswara.
Sir, but not, by normalizing the contract teachers, our teachers are not being treated fairly. So I urge upon the government to take necessary measures for regularizing this employment of contract teachers and enhance the overall teacher welfare in the country, sir. Thank you very much. This has to be taken care by state governments. Teachers are appointed by state governments plus central government also. Both. Yes. It's an important issue. The very government is doing it. Na? It is not a matter to feel happy. It's a matter of concern. Sri Sujit Kumar. Sir, as per the October 2021 report submitted by the Ministry of Education, 37 of the sanctioned 154 teaching posts or 89% of the teaching posts are vacant in a particular institute of our country. Sir, you have heard it correct, 89% teaching posts are vacant. And this is not any private institute or any Tom, Dick, Harry college, sir. It is the Central University of Koraput in Odisha, where 89% teaching posts are vacant. Maybe shocking, sir, for some people. Sir, there is no full-time VC in the university. The university has 17 regular departments and only 14 regular departments and only 17 regular teachers, which means roughly 1 teacher per department for a student strength of 950. Sir, the national average of teacher-student ratio is 28, recommended is 25, and in Central University Koraput it is 55. Sir, my previous speaker, Vijay Reddy Garu, spoke of the menace of having contractual and guest teachers. Sir, the University of Central University of Koraput should have 20 departments, but because of lack of teachers, only 14 departments are currently running with only 17 teachers, and 70 guest lecturers and teachers are running this show. Sir, these are serious consequences for the educational landscape of a tribal district like Koraput, which is an aspirational district, and sir, which is one of the educationally and socio-economically backward districts of our country. Sir, I had submitted a start question which is also listed at number 14 today on this very issue, but because it's unlikely to come up, I decided to submit a 0 hour as well, and thank you for admitting it, sir. I had raised this issue on 10th of February 2022 as well, sir, because of the criticality of the issue. Sir, in its reply, the ministry has said that in the country, there are 6,558 teaching and 15,227 non-teaching posts that are vacant in central universities across the country. These are huge numbers, sir. But, sir, I must compliment the government that for the first time since independence, the educational budget provisions have crossed 1 lakh crore. So, definitely we need to compliment the government. And, sir, we have a very competent education minister. So, I really hope that, sir, the ministry will fill up the permanent vice-chancellor post at the earliest, will speed up the process of filling up this teaching and non-teaching posts at the Central University of Koraput and across the country, and also have an institutional mechanism, sir, so that such large number of vacancies do not pile up, because education is the foundation of our nation, and we need to really take care that these vacancies don't add up. Thank you, Sujit Kumarji. Thank you. Sri Vinay Viswam. Yes, sir. So the gravest issue in the country, I'm sure all will agree to me, is unemployment. The data, no need to explain, because no data are correct. It's on the increase day by day. But when the pandemic came, we could see lakhs of people who were unemployed, who were employed, became unemployed on a day, and then it continued. And their numbers are very, very high. Sir, how they are living? This country has the right and a duty to ask it. How they are living? I should say they are not living. They are just surviving. Around us, they are surviving. In this Amatkal of India, lakhs of people, maybe crores, living in a difficult situation, has the right to ask us for whom we are running this country, for what we are ruling this country. Forget the politics. Sir, cutting across all the political spectrum, the people are having this problem, unemployment to these people. So the pandemic affected people,
and their numbers are becoming higher and high. I believe that the government has a duty to think of them. I suggest the government, request the government to make a plan to support them, to give them some wages of supports. Of course, that also is a must. Publish an employment calendar and give them a support base and give them a wage system and urgently depute a committee to look into the matter, and that committee should come with the reports with minimum time, maybe 3 or 4 months. And in this way, we have to be with them. The country has to tell them that they are not forgotten. The country is with them. With these words, I request you and the government to take the matter very seriously. Thank you, sir. Please. Now you realize the importance of 0 hour and its utility also. Please see to it that 0 hours are not disturbed. To all. Dr. M. Thambidore. Thank you, Chairman, sir. Through you, I request the government of India to restore the Kacchati issue to safeguard the rights of fishermen of Tamil Nadu. Since unilaterally ceding the Kacchati to Sri Lanka under the Indo-Sri Lankan Marine Agreement in 1974, the safety and livelihood of Tamil Nadu fishermen have been at the stake. Sri Lankan Navy firing upon their boats, injuring and killing of fishermen and seizing their boats and fishing nets have been going endlessly. Many times are fishermen brutally beaten and put in the Sri Lankan prison illegally. That is why our late former Chief Minister, Prachitalavi Amma, went to the court, the Supreme Court in 2008 to declare Indo-Sri Lankan Marine Agreement 74 is illegal. Repeated assurances of the government at the center and diplomatic level talks did not deter Sri Lankan Navy for attacking the fishermen. Our late Tamil Nadu Chief Minister Prachitalavi Amma and now former Chief Minister of Tamil Nadu Edappadi Palaniswamy has written so many letters to the central government to requesting that this has to be solved quickly. Shivaji. Sri Lankan Navy unilaterally resented all bilateral provisions of the agreement that protect the traditional fishing rights of fishermen. Therefore, I repeal to our government through you, sir, to rescind the Indo-Sri Lankan Maritime Agreement and take back Kacchati, which is the part of our Indian territory, which is unnecessarily given to the Sri Lanka. This is the appropriate time. Government has to interfere and see that to get back our thing and save the Tamil Nadu fishermen, sir. Thank you very much. Thank you. There is no controversy in this. You wanted to add one more former Chief Minister's name? No. Nine. Please. Shiva, please. Right. Okay. Please. Time. Right, Shiva. Let us not make controversies out of non-controversy. Srimati, please, no comment, no side comment. Please try to understand each other's point of view. If you have difference of opinion, at an appropriate time you can express it also. Srimati Priyanka Chaturvedi. Much Honorable Chairman, sir. When I called Priyanka Chaturvedi, I found Srimati Kanimoji standing, so I was... Your colleague is saying something. All the Srimatis were confused, sir. All Srimatis. No, she got a point. She was in the front, this row. That's why otherwise... Sir, I would want to draw the House's attention towards some sections of the Hindu Succession Act not being in favor of women. Under the gender-based rules governing the devolution of property, the relatives of a woman's husband have a stronger claim to her property than her parents and siblings. However, this is not true of the property belonging to a man. The present scheme of devolution keeps all the man's property within his natal family. This is inconsistent with equal treatment by the state as envisioned in Articles 14 and Article 15(1) of the Constitution of India.
Sir, this anomaly under the Hindu Succession Act also... Derek ji, please go to your seat. You can call him afterwards, after the House is adjourned, discuss also, no problem. Sir, it also goes against India's commitments under the United Nations Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women. Removing gender-based discrimination property-related legislation is one of the core requirements of CEDAW. The Supreme Court of India has also noted that a judicial or legislative intervention is necessary to remedy it. There are 2 ongoing cases where this issue is being considered. However, the legislature is the appropriate forum for amending legislation. We should not be looking towards the courts for policy decisions. Therefore, through this August House, sir, I urge the government to relook and revise these unfavorable sections of the Act and provide long due respite and rights to the women affected by these archaic rules, sir. Thank you so much, sir. Thank you. Whoever want to associate, please send your name. Dr. K. Keshavarao. Thank you, sir. Sir, it is a small issue, but a serious issue as far as Telangana is concerned. Sir, you know Adilabad, the most backward districts in the country, and it has a 48% of the tribal population in an ordinary state. It did not have any factories at all. It had 2 factories. 2 were closed. One, after a very great struggle, the paper factory had come back. Now there is a cement industry, ICC. What we are saying is, it is also closed. First it fell sick, then it was later closed. It has its own land. It has 750 acres, then 1200 leased land. It has lime deposits of 48 million tons. It has water because the Godavari is there. Then it has also electricity because Telangana is full of electricity. It has labor. What happened when it was closed? The BAFR closed it and gave VSS also to the employees. Then the employees went to the court, got it stayed. So still people are on the rules as far as this factory is concerned. Now the Chief Minister has requested the central government, Prime Minister, that he is prepared to pay the equity. Mr. Gadkari, during his discussions, said that NHI can take benefit out of this cement factory, so let us do it. This factory will be helping Marathwada, Vidarbha, and also the northern Telangana. So this employees issue, then the cement, much needed cement, NHI wants to join. We want to give, not only if they want more land, we'll give land. Whatever the central government wants, we would give that. And we will join in equity also. NHI wants to join in equity. So everything is straight. So let us try to concentrate on this and try to revive it, because in the court, still the people are on the rolls. That means they are employees, They did not take their money back. Thank you, sir. Thank you, Keshavarao ji. Sri Kailash Soni. माननीय सभापति जी, आपके माध्यम से लोक स्वास्थ्य के, लोक महत्व के अत्यंत व्यवहारिक पक्ष की तरफ आपके माध्यम से सदन का और सरकार का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं। अभी कोविड में अनुभव आया, बहुत से प्रांतों के समाचार छपे, वेंटिलेटर से लेके अन्य सारे यंत्र हमारे इसलिए खराब हो गए कि मानव संसाधन नहीं था। मैंने भी मध्य प्रदेश में अपने जिले में 5 डिजिटल एक्सरे मशीन दी, उनके लिए अभी तक ऑपरेटर प्राप्त नहीं हुए हैं। और ये अपने ऑक्सीजन प्लांट, दीगर करोड़ों की मशीनें इसलिए खराब हो जाती कि तत्काल भर्ती के नियम इतने कठिन हैं कि इसमें समय लगता है। आपके माध्यम से सरकार को निवेदन करना चाहता हूं कि तत्काल थोड़े समय के लिए ये एमपी लैड्स में ये विधान कर दिया जाए। मैंने राशि दी थी, प्रावधान न होने के कारण वापस आ गई। मशीनें अकेले इलाज नहीं करती, आदमी की बहुत जरूरत है और तत्काल, ताकि करोड़ों की मशीन तुरंत उत्पादकता दे। इसके लिए एमपी लैड्स में 2 माह के लिए ये मानव संसाधन के लिए भी नियम बनाया जाए कि इसमें ये खर्च किया जा सकता है। धन्यवाद कार्य जी, नेम सेंड।
श्रीमती पूर्व देवी नेतम। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। एक महत्वपूर्ण विषय पे आपके माध्यम से सदन को ध्यान आकर्षण करना चाहती हूँ कि जीएसटी की क्षतिपूर्ति को आगामी 10 वर्षों तक रखने की आवश्यकता के संबंध में है। महोदय, जीएसटी व्यवस्था लागू होने के बाद टैक्स नीति पर राज्यों की स्वतंत्रता बहुत कम हो गई है और राजस्व बढ़ाने के विकल्प नहीं बचे हैं। केंद्र सरकार ने निर्णय लिया है कि जून 2022 के बाद राज्यों को दी जाने वाली जीएसटी की क्षतिपूर्ति बंद कर दी जाएगी। महोदय, छत्तीसगढ़ निर्माण राज्य है और देश को अर्थव्यवस्था के विकास में छत्तीसगढ़ राज्य का योगदान अन्य राज्यों की तुलना में बहुत अधिक है। जीएसटी क्षतिपूर्ति नहीं मिलने से वर्तमान में चल रहे जनहित के कार्यों और विकास कार्यों पर प्रभावित हो सकता है। अध्यक्ष महोदय, केंद्र की इस निर्णय के आगामी वित्तीय वर्ष में अकेले छत्तीसगढ़ को लगभग 5,000 करोड़ रुपए का नुकसान होने की संभावना है। यह समस्या अकेले छत्तीसगढ़ की नहीं बल्कि और भी राज्यों की इस संबंध में कमी आ सकती है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री द्वारा केंद्र सरकार को पत्र भी भेजे गए हैं इस संबंध में। अतः आपके माध्यम से सरकार से मेरा अनुरोध है कि अर्थव्यवस्था पर कोविड-19 के दुष्प्रभाव से उभरने के लिए और राज्यों की जीएसटी का यथोचित लाभ मिलने तक कम से कम अगले 10 वर्षों के लिए जीएसटी की क्षतिपूर्ति को जारी रखा जाए। ये मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूँगी। धन्यवाद। Send the names. श्रीमती ममता महंतो स्पीक इन वदिया। धन्यवाद सभापति महोदय। मु सदन माध्यम ओडिशा राज्यर मयूरभंज जिले में थिबा शिमिलीपाल अभयारण्य उपरे मान्यवर जंगल मंत्री एवं पर्यटन मंत्री को ध्यान आकृष्ट करने को चाहूँगी। सभापति महोदय, शिमिलीपाल को 1979 मसीह ओडिशा सरकार अभयारण्य भाव घोषणा करथिले। 1980 मसीह 2750 वर्ग किलोमीटर अरण्यर निर्दिष्ट 845 वर्ग किलोमीटर अंचल को जातीय उद्यान मान्यता देवाकू प्रस्ताव दिया जाइथिला। यह भितर शिमिलीपाल रे आरंभ हो सारी व्याघ्र संरक्षण प्रकल्प। एथि निमंते एठाकू बाहर आसुथिबा अधिकारी को साहाय्य सहयोग पाई केतेक स्थानीय लोकं को आनी विभाग पक्षरु कोर अंचल रे रखा जाइथिला, किंतु उक्त अभयारण्यर कोर अंचल को जनबसती शून्य करा जाई नथिबारु ए पर्यंत शिमिलीपाल एक प्रस्तावित जातीय उद्यान भाव रही जाइछि। एणु तुरंत शिमिलीपाल को जातीय उद्यान रे मान्यता दिया जाऊ। सेहीपरि पर्यटन विभाग शिमिलीपाल रे पर्यटन शिल्प प्रतिष्ठा पाई उद्यम करा जाऊ, कारण एठारे पर्यटन शिल्प प्रतिष्ठा हेले जिल्लार शिक्षक बेकार युवक युवती नियुक्ति पाइबे। यह हेले जिल्लार अर्थनैतिक और सामाजिक अभिवृद्धि घटिबो। एठारे परिचालनागत त्रुटि जोगु प्रति वर्ष ग्रीष्म समय निया लागुची, वर्तमान मध्य लागिची। फल एठारे थिबा बाघ, हाथी, अन्यान्य वन्यप्राणी समते जीवजंतु, उद्भिद, पशु पक्षी, सरीसृप जीवन विपदरे रहुची। शिमिलीपाल संपर्कित खबर जातीय गणमाध्यम न आसिबा दुखर विषय। गत वर्ष मु निजे शिमिलीपाल निया लिभाइबारे उद्यम करिथिली, तेबे एठारे निया लागिबा मनुष्यकृत होइथिबारु एहार स्थायी समाधान दिगरे पदक्षेप निया जाऊ, जहा फल परिवेश बंचिबो और आमे मध्य बंचिबा। तेणु मु सदन माध्यम निवेदन करुची एहाको गुरुत्व सहित विचार करी स्थायी समाधान करा जाऊ एवं शिमिलीपाल को जातीय उद्यान मान्यता दिया जाऊ। धन्यवाद। The translation, simultaneous translation is there. That's why. Sri Madam Dora Sen. Thank you, Chairman, sir, for allowing me to speak on my subject of 0 hour, demand to save the jute industry of our country by the central government. हम देश की और बंगाल की एक ट्रेडिशनल इंडस्ट्री जूट इंडस्ट्री के बारे में
बहुत इम्पोर्टेंट कुछ इधर बोलना चाहते हैं सर। रॉ जूट एक नेचुरल फाइबर है और बायोडिग्रेडेबल है, इको फ्रेंडली है, एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। इसमें कारपेट से लेकर जियो टेक्सटाइल तक डाइवर्सिफिकेशन के भी स्कोप भी है जूट बैग के अलावा। और जियो टेक्सटाइल रास्ता से लेकर रिवर बैंक को भी लॉन्जिविटी बढ़ा सकते हैं। और जूट मटेरियल को एक्सपोर्ट से फॉरेन करेंसी रेवेन्यू अर्निंग भी हो सकता है। भारतवर्ष एक कृषि प्रधान देश है सर, और जूट एक एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री भी है। और एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री इंडिया, हमारे भारतवर्ष सेल्फ सफिशिएंट भी है दोनों तरफ से जूट में। और जूट इंडस्ट्री लेबर इंटेंसिव भी है। बंगाल में 10 करोड़ के अंदर 2.5 करोड़ पॉपुलेशन ये इंडस्ट्री में इन्वॉल्व है। सर फिर भी जूट इंडस्ट्री बहुत क्राइसिस पे है सर, अभी किसी दिन तक बहुत सारे क्राइसिस में, क्योंकि 1987 में जो मैंडेटरी जूट पैकेजिंग एक्ट था सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया, वो डाइल्यूट होने जा रहा है। अभी जब सब चीज की कीमत बढ़ रही है तब 2016 से 7 साल तक जूट बैग का प्राइस टैरिफ कमीशन ने बताया हुआ, फिर भी ठीक किया, फिर भी वो रेट पे नहीं, कम रेट पे लिया जा रहा है, खरीदा जा रहा है जेसीआई से एफसीआई के लिए। और रॉ जूट प्राइस को भी ₹7200 से ₹6500 तक कम करना है, ताकि इंडस्ट्री रॉ जूट खरीद के जूट मिल चला सके। लेकिन जूट ग्रोअर्स को भी मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलना चाहिए। लेकिन ये सब ना होते हुए 15 जूट मिल्स अभी बंद है, 60,000 जूट वर्कर्स बेरोजगार है सर, और इसके असर जूट का फार्मर्स के ऊपर, ग्रोअर्स के ऊपर भी पड़ेगा। और हर्शियन जूट बैग 4.81 लाख बेल का कम हो गया, इसीलिए 1,500 करोड़ रुपया का घाटा हुआ, इस सीजन पे लॉस भी हुआ। तो मैंडेटरी जूट पैकेजिंग एक्ट को जो डाइल्यूट करा जा रहा है फूड ग्रेन्स को पैकेजिंग के लिए, और शुगर को भी 100% से 20% पैकेजिंग में डाइल्यूट किया गया, ये ठीक नहीं है। और इस साल बजट में भी इस पर कुछ बोला नहीं। तो हम चाहते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट से हम आर्ज करते हैं कि ये ध्यान दें, ताकि जूट इंडस्ट्री, जूट फार्मर, जूट वर्कर्स बच जाए। थैंक यू चेयरमैन। Thank you. We are taking up the Suresh Gopi's 0 hour on priority because the interpreter has come from Lok Sabha for the other one. He will complete this also and go back. Sri Suresh Gopi. ഒരുപാട് നന്ദി ബഹുമാന്യനായ അധ്യക്ഷൻ, രാജ്യസഭാ അധ്യക്ഷന് ഒരുപാട് നന്ദി, നമസ്കാരം. എനിക്ക് ഈ ടേമിൽ കിട്ടുന്ന അവസാനത്തെ അവസരമാണ് ഈ 0 hour സബ്മിഷൻ. ഞാനത് I didn't say last. Please. ഈ ടേമിലെ അവസാനത്തെ അവസരം. സർ, ത്രൂ യു സർ, സോറി. ആൻഡ് ഇത് മലയാള ഭാഷയുടെ പിതാവ് തുഞ്ചത്ത് രാമാനുജൻ എഴുത്തച്ഛനും കലക്കത്ത് കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാർക്കും സമർപ്പണമായി അവരുടെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ നമസ്കരിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ മാതാപിതാക്കളെയും ഗുരുക്കന്മാരെയും നല്ലവരായ മലയാളികളെയും അവരുടെ സമർപ്പണമായി ഈ നിവേദനം ഞാൻ കേന്ദ്ര വനം വന്യജീവി വകുപ്പ് മന്ത്രിക്ക് മുന്നിൽ സമർപ്പിക്കുകയാണ്. സർ, വളർത്ത് ആനകളുടെ വാണിജ്യ വിൽപ്പന, കൈമാറ്റം എന്നിവ നിരോധിച്ചുകൊണ്ട് 1972 നിലവിൽ വന്ന വന്യജീവി സംരക്ഷണ നിയമത്തിൽ ഒരു ഭേദഗതി വരുത്തിയിരുന്നു. അത് കാരണം ഇന്ന് കേരളത്തിലെ ക്ഷേത്രീയ, അതുപോലെ തന്നെ ക്രിസ്ത്യൻ പള്ളികളിലെയും മുസ്ലിം ആഘോഷങ്ങളിലെയും ഒക്കെ ആനയുടെ സാന്നിധ്യം, എണ്ണം വളരെ ഭീതിപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിൽ കുറഞ്ഞു വരികയാണ്. ഇത് ഒരുപക്ഷെ ആനകളെ ഉപദ്രവിക്കുന്ന, ആനകളെ അത്യധികമായി ചൂഷണം ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രവണത വളരെ മോശപ്പെട്ട രീതിയിൽ വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതിനുള്ള ഒരു പ്രതികരണമായി ആന സ്നേഹികൾ, മൃഗസ്നേഹികൾ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന ചില ഭീഷണികളെ അധിഷ്ഠിതമാക്കിയാണ് പല ഭേദഗതികളും മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത്. പക്ഷേ ഇതുപോലെയുള്ള ആനകളെ എഴുന്നള്ളിച്ചുള്ള തൃശ്ശൂർ പൂരം, തിരുവമ്പാടിയിൽ നിന്നും പാറമേക്കാവിൽ നിന്നും 15ഓളം ആനകൾ വീതം അലങ്കരിച്ച് ആദരവോടെ, ആചാരപൂർവം, ഇൻ പ്യുവർ റിച്വലിസ്റ്റിക് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ
ഒരു കോൺഗ്രിഗേഷൻ വന്ന് നിൽക്കുന്നതിൽ നിന്ന് എന്താണ് രാജ്യത്തിൻ്റെ എക്കണോമിക്സിലേക്കുള്ള ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ എന്നുള്ളതും നമ്മൾ വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ്. ആനകളുടെ എണ്ണം കുറയുന്നതനുസരിച്ച് ആനകൾ ഉള്ള ഇടങ്ങളിൽ നിന്ന് ട്രെയിലറിലും ലോറിയിലും കയറ്റി വളരെ മോശപ്പെട്ട അവസ്ഥയിൽ അതുങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകുന്നതിലുള്ള ദ്രോഹം ഒഴിവാക്കാൻ ഞാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാരിനോടും ബഹുമാന്യനായ പ്രധാനമന്ത്രിയോടും മലയാളികൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രമല്ല ബീഹാറിലെ സോൻപൂർ മേള അടക്കമുള്ള വേദികൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ അപേക്ഷിക്കുന്നു. ഈ നിയമങ്ങളിൽ ഗണ്യമായ മാറ്റം വരുത്തണം. ആൻഡ് also very strict, harsh, stringent rules to be put in place to control the owners of such domesticated elephants and also the mahouts who take care of them. Thank you very much, sir. Abhinandanam. Ninnai sanskariku. Please. Sri KRN Rajesh Kumar. Respected Honorable Chairman, sir, thank you for the permit me to speak on implementation of metro rail projects in Tamil Nadu. Sir, Coimbatore is the second largest city by GDP in the state of Tamil Nadu after the capital of Chennai with the population of approximately 30 lakhs. Apart from local traffic, the people from the neighboring district and travels to Coimbatore city for work, education and medical needs. The technically 15 into 20 lakhs people commit daily in the around of Coimbatore for the above purpose. Considering these aspects, the state government of Tamil Nadu proposed for the metro rail project in the Coimbatore city. The feasibility study and detailed project report is completed and the state government of Tamil Nadu had allotted 6,670 crores. So far, the coordination support between the Ministry of Housing and Urban Affairs, Government of India, the state government of Tamil Nadu is remarkable. However, I request the Ministry of Housing and Urban Affairs to provide the central financial assistance as early as possible to initiate the execution of the Coimbatore Metro Rail project, the fastest growing tier 2 cities in state of Tamil Nadu such as Madurai, Tiruchi, Tirunelveli and Salem also expecting the metro rail options owing to its necessity and economic performance. Kindly consider this project as the state government of Tamil Nadu is eager to implement this project with necessary support in both financial and execution levels. Nandri. Nandri, yeah. I hope that everybody will start speaking in their mother tongue. Sri Arnath Singh Yadav. Please. Arnath Singh Yadav. माननीय सभापति जी, दिल्ली प्रदेश की सरकारी नौकरियों की भर्ती में 1993 के बाद से दिल्ली में स्थायी निवास कर रहे अन्य पिछड़े वर्ग के बेरोजगार अभ्यर्थियों के आरक्षण का लाभ न दिए जाने के संबंध में मैं आपके और सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करता हूं। महोदय, दिल्ली प्रांत की नौकरियों की परीक्षा लेने वाली संस्था दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा पिछड़ा वर्ग का लाभ केवल उन अभ्यर्थियों को दिया जा रहा है जिनके परिवार का कोई सदस्य दिल्ली में वर्ष 1993 से पहले रह रहा है। माननीय, दिल्ली प्रदेश का राजस्व विभाग वर्ष 1993 के बाद जो लोग दिल्ली से बाहर आकर दिल्ली में स्थायी रूप से निवास कर रहे हैं, उनके पास दिल्ली में स्थायी निवास करने के समस्त पहचान पत्र मौजूद हैं। उनकी जाति की सत्यता जांचने के लिए जहां से वह विस्थापित हुए हैं, वहां के सक्षम अधिकारी द्वारा उनके पिता के नाम सहित अन्य पिछड़ा वर्ग के आधार पर प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं। परंतु दिल्ली के नियंत्रणाधीन दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन आयोग इस प्रमाण पत्र को वैध नहीं मानता, जबकि यह प्रमाण पत्र दिल्ली सरकार का राजस्व विभाग ही जारी करता है। महोदय, परिणामतः जो लोग 1993 के बाद से दिल्ली में स्थायी निवासी हैं और जिनके पास प्रदेश के राजस्व विभाग द्वारा जारी अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र है, उनके पास दिल्ली के पते का आधार कार्ड है, उनकी दिल्ली की मतदाता सूची में उनका नाम है, दिल्ली में स्थित बैंक खाते हैं, इसके बावजूद दिल्ली प्रांत के अन्य पिछड़ा वर्ग के बेरोजगार अभ्यर्थियों को आरक्षण नहीं मिल रहा है और प्रत्येक भर्ती में उन्हें बाहर कर दिया जाता है। माननीय, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से, विशेषतः माननीय प्रधानमंत्री जी से मांग करता हूं कि अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के साथ हो रहे इस अन्याय को गहराई से देखें और आवश्यक कार्रवाई कर उनका हक उन्हें दिलाने का कष्ट करें। अरनाथ सिंह जी, धन्यवाद। श्री जी.सी. चंद्रशेखर।
Not there, can you give tomorrow, sir? Because already is 12 o'clock. Right. Sri Shall I speak, sir? Selva Ganapati. Sir, I'll speak, sir. No. Sir, thank you, sir. Sir, in the country, the cooperative movement. Right. Okay. Sir, in the country, the cooperative movement started with the aim of better living, business and farming. But today, it is sad to note that the motto is going for... Chandrasekhar, conclude. 12 o'clock is question hour. Question. Sir, it will be... Today. Sir, at least give me tomorrow, sir. Please. Don't bargain. You can write to me last again. 2 days it is happening. You can write to him again. 361. This is Chandrasekhar. आपका एक सवाल है. Chandrasekhar, your question. Now, there will be lunch break today. Question number 361. 361. Question number 361. First supplementary, माननीय GC चंद्रशेखर जी. Sir, Anganwadi and Poshan 2.0 scheme, umbrella program under ICDS, to which rupees 20,263 crores has been budgeted. Last year's revised estimate was rupees 20,000 crores, which is just 0.5% increase and a decrease by 4,294 crores in comparison with the budget estimated compared to last year. Sir, as per the RTA reply from Ministry of the Ministry, in 2021 November, 33 lakh children are malnourished and global hunger index ranks in India at 101 out of 116 countries. Please put your question. With the growing food inflation, WPI stands at 10.33% and GPI at 5.43%. Please put your question. Sir, how is the department going to handle with a very small rise of budget? Please. To the honourable member to correct the figures that he has quoted with regards to increase in budget, as has been enunciated time and again in this House, and if the member may so desire to reflect on part B of the answer already given to him, he may see that the budget is increased by 10%. I would, however, like to inform through you, sir, to the honourable member that the portion tracker methodology of digitally tracking the performances of Anganwadis. आदरणीय सभापति महोदय, त्रिपुरा राज्य के संबंध में संविधान अनुसूचित जनजातियां आदेश संशोधन विधेयक 2022 को विचार में लाया जाए। त्रिपुरा राज्य की अनुसूचित जनजातियों की सूची में निम्नलिखित बदलाव किए जाने का प्रस्ताव है। त्रिपुरा राज्य की अनुसूचित जनजातियों की सूची में प्रतिष्ठी संख्या 9 में कुकी उपजाति के रूप में डारलोंग का समावेशन। माननीय मंत्री जी, आप बोलना चाहते हैं मोशन पे? बाद में मोशन मूव्ड। श्रीमती फूलो देवी नेताम। श्रीमती फूलो देवी नेताम। हाँ, माइक काम कर रहा है। 1 घंटा। धन्यवाद उपसभापति महोदय, मैं आपके आभारी हूँ। आपने मुझे इस महत्वपूर्ण बिल पर बोलने का अवसर दिया। आज संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन विधेयक 2022 पर चर्चा की जा रही है। इस बिल के बारे में मैं आपको विस्तार से बताना चाहूँगी कि त्रिपुरा ने डारलोग समुदाय को अनुसूचित जनजाति की सूची में जोड़ने का अनुरोध किया था। 25 अगस्त 2014 को जनजाति आयोग द्वारा इसे स्वीकार कर लिया गया। 25 मई 2016 को मोदी कैबिनेट ने इसे अप्रूवल किया। 14 दिसंबर 2016 को लोकसभा में पेश किया गया, चर्चा नहीं हुई। इसके बाद त्रिपुरा की मांग को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। उपसभापति महोदय, 7 फरवरी 2022 लोकसभा में पेश किया गया। 25 मार्च 2022 लोकसभा में पास किया गया। आज यह बिल राज्यसभा में चर्चा के लिए लाया गया है। महोदय, संविधान के अनुच्छेद 342 में अनुसूचित जनजाति की सूची में
और अनुच्छेद 342(2) में प्रावधान है कि संसद द्वारा कानून बनाकर लिस्ट संशोधित किया जा रही है। वर्ष 1950 में अधिकांश राज्यों में यह सूची बनी थी। त्रिपुरा राज्य की अनुसूचित जनजातियों की सूची संविधान अनुसूचित जनजातियां और अनुसूचित जनजातियां आदेश संशोधन अधिनियम 2002-2003 10 द्वारा संशोधित की गई थी। आज बिल के माध्यम से संविधान संशोधन करके त्रिपुरा की अनुसूचित जनजाति की सूची में कुकी जनजाति की उपजातियों में डारलोग समुदाय को शामिल किया जा रहा है। इससे डारलोग जनजाति को आरक्षण का लाभ मिलेगा। महोदय, आरक्षण हम आदिवासी, दलित और पिछड़े समुदाय के लोगों के लिए आरक्षण की लड़ाई क्यों लड़ते हैं? क्योंकि इससे हमारा सामाजिक और आर्थिक पिछड़ापन दूर होगा। लेकिन हम तो दो तरफ लड़ना पड़ता है, हमें दोनों तरफ लड़ना पड़ता है। अध्यक्ष सभापति महोदय, पहले तो संविधान से मिले अधिकारों का लाभ लेने के लिए और दूसरा उन अधिकारों की सुरक्षा के लिए। यहाँ तो कभी भी आरक्षण समाप्त करने की बात शुरू की जाती है। महोदय, हमारे सामने बहुत समस्याएं हैं। 35% लोग भूमिहीन हैं और मजदूरी कर रहे हैं। सभापति महोदय, 74% लोग बेहद गरीब हैं। 86% आदिवासी की आमदनी 50,000 से भी कम है और आजकल तो वह भी नहीं मिल रही है। हमारे युवा बेरोजगार घूम रहे हैं। सरकारी कंपनियां बेची जा रही है। निजी क्षेत्र में आरक्षण नहीं है, पदोन्नति में आरक्षण नहीं है, न्यायपालिका में आरक्षण नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 312 में अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के गठन का प्रावधान किया गया, उसका गठन भी नहीं हो रहा है। अत्याचार बढ़ रहा है। 2020 में आदिवासियों पर 9.3% आरक्षण बढ़ा। आरक्षण के 96% केस तो न्यायालय में लंबित है। महोदय, आदिवासी के लिए बनी योजना पर आवंटित बजट को पूरा खर्च नहीं किया जाता, कैसे आदिवासियों को लाभ मिल पाएगा? अध्यक्ष महोदय, वित्तीय वर्ष 2022-23 में आदिवासियों के विकास के लिए कुल 89,265 करोड़ रुपए का बजट दिया गया, लेकिन जनजाति कार्य मंत्रालय को उसमें से केवल 8,451 करोड़ रुपए यानी लगभग 9% ही दिया गया। आदिवासियों के विकास के लिए जो पैसा मिला उसका 10% भी उन पर खर्च नहीं हुआ। 90% पैसा ऐसे योजना पर खर्च किया जा रहा है जो सबके लिए योजनाएं बनी होती हैं। महोदय, बिल के वित्तीय ज्ञापन में लिखा है कि संभावित अतिरिक्त व्यय का एस्टीमेट लगाना संभव नहीं है, इसलिए यदि कोई व्यय होगा तो उसे अनुमोदित बजटीय परिव्यय के अंतर समायोजित किया जाएगा। महोदय, यदि हमारे घर में कोई मेहमान आता है, हमारे घर में कोई परिजन आता है, तो हम सोचते हैं कि एक कटोरी चावल ज़्यादा डालें ताकि उसको भी भूख लगी होगी, उसको भी खाना खिलाना है। उस आधार पर मैं आपको आपके माध्यम से बताना चाहती हूँ कि डारलोग जनजाति को जोड़ा जा रहा है तो त्रिपुरा को अतिरिक्त धनराशि पहले ही मुहैया करानी चाहिए। हमेशा कहती हूँ कि देश की आबादी में 8.6% हिस्सेदारी रखने वाले आदिवासी समुदाय को आबादी के हिसाब से बजट में हिस्सेदारी दी जाए। सभापति महोदय, इसलिए मैं सरकार से मांग करती हूँ
कि इन समस्याओं की तरफ भी ध्यान दी जाए। महोदय, आज त्रिपुरा की डारलोक जनजाति को अनुसूचित जनजाति की सूची में जोड़ा जा रहा है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ सहित कई राज्यों में भी प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजे हैं। छत्तीसगढ़ में भारिया, भूमिया, धनवार, नगेशिया और सवर जनजाति को अनुच्छेद 342 में अधिसूचित करने के लिए मोदी कैबिनेट ने 13 फरवरी 2019 को छत्तीसगढ़ सरकार के अनुरोध को अप्रूव कर दिया था। उसके बाद छत्तीसगढ़ सरकार ने सोरिया, भारिया, भूमिया, धनवार, नगेशिया, धागड़, बिड़िया, गदवा, गोद, कोड़ाकू, पंडो, भारिया और गोड आदि समुदाय को भी जोड़ने के लिए जनजाति कार्य मंत्रालय से दिनांक 15 अक्टूबर 2020, 8 फरवरी 2021 और 6 दिसंबर 2021 को पुनः पत्राचार किए। महोदय, इसी तरह अनुसूचित जनजाति में महार जाति को भी जोड़ने के लिए भी प्रस्ताव भेजे गए हैं, लेकिन ये सभी प्रस्ताव केंद्र के पास लंबित है। उपसभापति महोदय, जैसा कि मैंने बताया, डारलोक को अनुसूचित जनजाति की सूची में जोड़ने के लिए 2016 में कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया था। क्योंकि एक साल बाद मार्च 2023 में त्रिपुरा में चुनाव है, विधानसभा चुनाव है, तो सरकार को वहाँ के आदिवासियों को याद आ गई है और इस बिल पर सदन में चर्चा के लिए लाया गया। महोदय, हमारे छत्तीसगढ़ में तो दिसंबर 2023 में चुनाव है। चुनाव को देखते हुए संविधान संशोधन प्रस्ताव लाया जाएगा। आदिवासियों को न्याय मिलने के लिए बहुत देर हो चुकी होगी। अध्यक्ष महोदय, मैं 1 मिनट में समाप्त करूंगी, आपकी अनुमति। समय 1 घंटे का ही है। अतः बिल का समर्थन करते हुए सरकार से मांग करती हूँ कि छत्तीसगढ़ सहित अन्य राज्यों से भेजे गए प्रस्ताव पर भी शीघ्र विचार करें और सदन में संविधान संशोधन विधेयक लेकर आए, जिससे मुख्यधारा से छूट चुके राज्यों का आदिवासी, दलित, पिछड़े समुदाय को आरक्षण का लाभ दिया जा सके। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, इसी तरह बिहार का भी, जहाँ पे गोंड है, जो अंग्रेजी से उच्चारण करके हिंदी में लिखा जाता है, उसके चलते छोटा छोटा जो हलंत है, उच्चारण है, उसके चलते जातियों में जो परेशानी आई है उसको सुधारा जाए। धन्यवाद। धन्यवाद। श्री मानिक शाह जी ने प्लीज, श्री मानिक शाह जी प्लीज, बहुत ही महत्वपूर्ण, प्लीज, अब रिकॉर्ड पे नहीं जा रहा, प्लीज मिस्टर मानिक शाह जी प्लीज, प्लीज आपकी बात रिकॉर्ड पे जाएगी अब, प्लीज जी प्लीज। जो समय है उससे अधिक मैं नहीं दे सकता, आप ज्यादा बोल चुकी, प्लीज। I support the bill to amend the Constitution, Scheduled Tribes Order 1950 for inclusion of certain, that is Darlong communities in the list of Scheduled Tribes of Tripura State. Adhyaksh Mahoday, for a long time regarding this inclusion of this Darlong community in the list of Scheduled Tribes were pending. I want to tell you that in 2002, from the Tribal Welfare Department, Government of Tripura, they have one memorandum for Council of Ministers, and they have sent this memorandum to the Government of India. They have written that inclusion of Darlong tribe as a separate sub-tribes in the list of Kuki communities, in the list of Scheduled Tribes of Tripura. So nothing was done during that time. A committee was formed by the then government of Tripura for inclusion of the Darlong. But that was sent to the government of India in 2003. But there was no response from the government of India. So it is only our Honorable Chief Minister, Sri Biplab Kumar Dev, who
has written a letter to the government of India. And this Darlong community were deprived for a long time, what I said earlier. Now it has come into reality because of this bill. There are 19 tribal communities in Tripura state, and they are namely Tripuri, Devburma, then Riang, Bruce, Jamatia, Noatia, Kuchai, Chakma, Mog, Lushai, Kuki, Munda, Onam, Sautal, Bhutia, Alam, Lepcha, Garo, etc. So, Darlong is a tribal community of Tripura which has a population of only 11,000. Although the population is very thin, but the community has high prevalence of education and cultural activities. The members of this community serve in senior position in the local administration, in army and paramilitary forces, etc. One example with the cultural activity of this community is a tribal musicologist. You might have heard the Roshan tribal instrument. This master, Thanga Darlong, was awarded the prestigious Padma Shri a few years ago for his contribution in culture. So he belongs to this Darlong community. The bill would be justice to the Darlong community. In view of this bill, the living condition of the Darlong community would be good as well as in education, health, etc. It is a reflection of Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas and Prayas of our Honorable Prime Minister Modi ji. This is the motto of BJP-led central government. Central government led by Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi ji is working for the development of everyone. And this is the direct reflection. Therefore, I thank Honorable Minister Sri Narendra Modi ji and Union Tribal Welfare Minister Sri Arjun Munda ji for this historical bill. Again, I support the bill. Thank you. Thank you. Dr. Santanu Sen ji. Thank you, sir. Sir, in reality, it's really painful to see the Dalits getting mob lynched. And it's even more painful to see that the union ministers taking food from seven-star hotels to their houses and sitting there and eating there just to catch votes, and then once again started ignoring them. That is very unfortunate. Sir, Article 342 of Indian Constitution speaks about scheduled tribes. India has 427 tribal communities, of which 130 major categories are from Northeast Indian, sir. Sir, if we count the sub-tribes, it comes to around 300. Sir, 9% of total Indian population belong to them, and unfortunately 92% of them, they stay in the remote villages without having any proper access to health, education, transport, drinking water, etc. Sir, so far the Tripura is concerned, incidentally and fortunately I get the opportunity to visit that double engine run Tripura for several purposes, including political purposes. And in true sense, I can get the opportunity to experience how miserable the situation is so far the lifestyle of these tribals are concerned. Sir, 1/3 population of the total Tripura, they belong to scheduled tribe. 19 tribes are there. I must say my previous speaker, who happens to be the state BJP president of Tripura, they are not at all concerned about these tribes. They have never fulfilled their pre-poll policies, and that's why our Supremo, Madam Mamata Banerjee, became so much concerned. My humble submission, if you cannot fulfill your pre-poll promises, give it to us, we will be going to fulfill it. Sir, report of Tripura Tribal Area Autonomous District Council says, sir, infant mortality rate, maximum in Dhalai district, due to poor knowledge about breastfeeding. Maternal mortality rate, extremely high,
because of lack of knowledge about health, hygiene and malnutrition. And still, even today, the rate of institutional delivery is less, so far the tribal communities are concerned. Other health issues they are suffering from: goiter, pellagra, anemia, beriberi, vitamin deficiency and sexually transmitted diseases including HIV. Sir, so far the education is concerned, more than 20% school dropout cases are there. There is still gender inequality existence. Sir, so far the gross enrollment ratio is concerned, when the national average is 26.3%, in Tripura for SC it is 23% and ST for 17%. Sir, because of poor literacy, major tribals of Tripura could not register themselves under Tripura Land and Land Revenue Act 1960. That's why they are still considered as encroachers, most unfortunately. That even during this post-COVID employment for generation, the budget was decreased. For SC, it was earlier 171 crores, it has come down to 23 crores. For ST, it was 89 crores, it has come down to 11 crores. Their budget for labor welfare scheme also has been slashed down like anything. My previous speaker is being requested by me, please come down to our state of West Bengal. Just see what we have done. So for the literacy in West Bengal, in ST is concerned, national average, ST, national average 68% male. In our state, ST 74% males are educated. In female, 49% in Tripura, 51% in our state of West Bengal, sir. Sir, YOYO project to promote education, post-matric scholarship to promote education, Oasis scholarship to promote education, Jai Jawahar pension scheme 2022, 1,000 rupees per month, free electricity up to 75 units in 3 months, and dedicated advisory council. So instead of using this marginalized section of the society for political purpose, Government of India must take up this issue seriously. And my final submission will be, as this proposed bill seeks to amend the ST list to include Darlam community as a sub-tribe of Kuki, which will enable to get them the benefit of reservation, I sincerely urge all of you to support this bill. And my request to my previous speaker, please give the opportunity to us. Thank you. Manisri M. Muhammad Abdullah. Thank you. Honorable Chairman, sir, thanks for the opportunity given to me to speak on this August House on the bill, namely the Constitution Scheduled Tribes Order Amendment Bill 2022, which includes the Darlang community in the list of STs in Tripura. I really welcome this bill deal with social engineering, since it will try to include some of the people of this country who are marginalized, and even now, due to hierarchical social system based on the underlying notions of purity and pollution, which further denies mass participation in the development of the nation. Sir, we should note here that even after 72 years since we framed our constitution, we are still identifying the marginalized communities to be added under scheduled caste and scheduled tribes from each state. I'm also sure that it will continue. Sir, not only in Tripura, we are yet to do this social engineering exercise across the nation. Sir, I would like to remember this August House that in 2016, our beloved leader and ex-chief minister, Dr. Kalaignar, requested to Honorable Prime Minister to include the fisherman community also in scheduled tribes list. And yet it has been a standing demand for a long time, sir. I think only in Karnataka it has been included, other area it has not been included. Even the Mandal Commission report on backward classes and said certain sections of occupational communities like the fishermen and Banjaras will still suffering from the stigma of untouchability, and has suggested that these castes to be considered for inclusion in the list of scheduled tribes, sir. Apart from this, M.S. Swaminathan committee had also recommended the considering the separate legislation on the line of the scheduled tribes for recognizing the traditional rights and fishing occupation of the fisherman community. Not only those who lives in forest and is nearby rural area, but also the 90% of the fishermen involved in small-scale fisheries are often the poorest and most politically, socially marginalized. In general, fishing is considered a very dangerous occupation.
Hence, the fishermen community, by their very geographical nature, in socially and educationally akin to the scheduled tribes. Their inclusion in ST list, which they deserve in all respect, would enable them to climb up the ladder of the life. Thank you. Hence, I request the Honorable Union Government to intervene in this matter and expedite the inclusion of fishermen community also in the scheduled tribe list. With this note, I conclude my speech. Thank you, sir. Amit. Srimati Mamta Mohanta, 2 minutes, please, Mamta ji. मुझे संविधान शेड्यूल ट्राइब संशोधन बिल पर बोलने की मौका दी। सभापति महोदय, त्रिपुरा राज्य के दलंग जाति को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने के लिए शेड्यूल ट्राइब संशोधन बिल लाया गया है, इसीलिए माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देती हूँ। महोदय, मेरे ओडिशा राज्य की विभिन्न जिला के साथ साथ पड़ोसी राज्य झारखंड एवं पश्चिम बंगाल लाखों संख्या में कुर्मी लोग रहते हैं। माननीय जनजाति और कार्य मंत्री जी श्री अर्जुन मुंडा जी को पता है इस विषय के बारे में। जब वो मुख्यमंत्री थे 2004 में झारखंड के कुर्मी महंतो जाति को एसटी में शामिल करने के लिए मंत्री जी ने केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा था। महोदय, टोटेमिक कुर्मी जाति को 1950 में बिना किसी कारण एसटी लिस्ट से हटा दिया गया था। तथ्य के अनुसार 3 मई 1913 को जब तत्कालीन सरकार को गेजेटेड नोटिफिकेशन संख्या 550 के अनुसार 13 अनुसूचित जाति के सूची में कुर्मी जाति को एसटी होने का उल्लेख है। सर, कुर्मी महंतो जाति एक जनजाति है। कुर्मी महंतो जाति का भाषा, संस्कृति, परंपरा, पूजा पाठ अन्य जनजाति के साथ समानता है। सर, माननीय मंत्री जी को मैं अनुरोध करती हूँ एक संसदीय समिति का गठन किया जाए और दोबारा कुर्मी जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल किया जाए। धन्यवाद। धन्यवाद। माननीय श्री वी लिंगैया यादव। Thank you, Vice Chairman, sir. The amendment Constitution से शेड्यूल ट्राइब का बिल पे बात करने का मौका दिए आपको धन्यवाद। ये त्रिपुरा में Darlang is a tribal community of 11,000 people distribute its small population. The community has a high prevalence of education, cultural activities, and members of the community are servicing different high positions in the local administration. ये बिल को देने का में हमारा टीआरएस पार्टी समर्थन कर रहे हैं, मगर ऐसी एक हमारा सजेशन क्या है बोले तो ये इस देश में पूरा अब इंडिपेंडेंस आके 75 इयर्स हुआ। ये देश में कितने पॉपुलेशन है, ये ट्राइबल्स का कितने है, एससीस का कितने है, बीसीस का कितने पॉपुलेशन है बोल के अभी तक नहीं गिने। ये देश में कौन सा स्टेट में ये ट्राइबल्स कितने है, ये पूरा वो स्टेट गवर्नमेंट को गिनने का देना। ये एसटीज का जनाबा वो ज़्यादा हो गए, लेटेस्ट बहुत बड़ा हो गए। हमारा तेलंगाना स्टेट में सीएम केसीआर ये 6% का ट्राइबल्स का पॉपुलेशन 10% है बोल के गिन के सेंट्रल गवर्नमेंट को वो प्रतिपादन दिए असेंबली से। अभी तक वो इंटरेस्ट नहीं रखे सेंट्रल गवर्नमेंट, वो बिल ही नहीं आ रही बोल रही। ऐसे मैं क्या हमारा पार्टी क्या बोलने का, इस देश को ये त्रिपुरा ये स्टेट वो स्टेट नहीं, पूरा देश को एक टारगेट, ये देश को एक यूनिट ऐसा लेके ये अमेंडमेंट करना बोल के हम बोल रहा हूँ। पूरा हमारा तेलंगाना में एसटी लोगों को ये 7 साल से 500 पॉपुलेशन रहे तो उधर हमारा वो ग्राम पंचायत बने, बाद में एसटी गुरुकुल पाठशाला दिए। तेलंगाना में एग्रीकल्चर को फ्री इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं, रैत बंधु से 10,000 दे रहे हैं ट्राइबल्स को, रैत बीमा से 5 लाख दे रहे हैं फ्री से हमारा केसीआर, कल्याण लक्ष्मी बोल के शादी को 1 लाख रुपया फ्री दे रहे हैं ट्राइबल्स को। ऐसा ये ट्राइबल को बजट में भी सेंट्रल गवर्नमेंट ज्यादा फंड देना बोल के मैं सजेशन दे रहा हूँ सर, ये बिल को हम समर्थन कर रहे हैं। थैंक यू। माननीय श्री अयोध्या रामी रेड्डी जी। Sir, I want to thank you for allowing me to speak on this constitutional amendment bill, which relates to the amendment
of the list of scheduled tribes in the state of Tripura. We support the bill to include the Darlang community as a sub-tribe of Kuki in entry 9 in the list of scheduled tribes in respect of the state of Tripura. There is a need for comprehensive amendment of the scheduled tribe list. I would request the government to look into this and include all tribes that meet the specific criteria in the list. I would also take this moment to highlight the issues of scheduled tribes, especially relating to my state, Andhra Pradesh. Inclusion of some of suggestions that we have, positives. Inclusion of Gondi language under 8th schedule. Gondi is an Indian language spoken by 2 million people across multiple states. So major concentrations of Gondi speakers are present in Madhya Pradesh, Gujarat, Telangana, Maharashtra, Chhattisgarh and AP. The Gondi language has a unique script and we want it to be included, this language to be included in the 8th schedule of the Indian Constitution. The inclusion of Valmiki, Boya and Kurma communities of Andhra Pradesh. Valmikis and Boyas believed to be the decades of Sri Valmiki Maharshi. These are one of the most primate tribes of the region. These communities have traditionally earned their livelihood through hunting and gathering forest produce. Currently, the community is spread across southern states, Karnataka, Tamil Nadu, Andhra and Telangana. The Valmiki Boya community in Andhra was included under scheduled tribes in scheduled areas, and the people from the same community living in other areas are considered backward classes. There is no sufficient rationale behind the differentiation of the Valmiki Boya community living in scheduled areas. So I would request the central government to accept the long-standing demand of the Boya Valmiki community by including the entire community under the scheduled tribe category. Similarly, the Kurma community also indicates their descent from Neolithic farming villages in South India. Kurma is a Hindu caste native, the Indian state of Karnataka, Tamil Nadu and AP and Telangana. This community also needs the support. Central Tribal University of Andhra Pradesh needs support. Andhra Pradesh government is doing major projects and support initiatives for various scheduled tribes and the initiatives. Sir, from YSR Congress Party, we support this bill. I would request the Minister to take our suggestions into account. I would again request him to carry out a comprehensive updating of the scheduled tribes list so that the welfare schemes of the central government reach the last tribal hamlets as well. Thank you. Thank you. Dr. M. Thambi Durai. Deputy Chairman, sir, thank you very much for giving the opportunity to speak on this bill. And ADMK party, we are supporting the bill brought by to include Dorlang's community as scheduled tribe people in Tripura. Same time, sir, various our members go on raising the issue to include certain communities in the backward classes throughout India, especially Tamil Nadu. In Andhra, as they said, Tamil Nadu fishermen and Pondicherry fishermen community must be treated as tribal marine community. That is the long demand we are requesting. They are the suffering people. Same way as they said, Narikura community, it has been included. The Valmiki and Boya community, what he said, our honorable member, Andhra Pradesh, they are also, in Karnataka, they are scheduled tribe. But Andhra and Tamil Nadu, they are not. Therefore, that has to be included. Kurumbas, Baduga community, Urular community, Banjara community. These are the communities are spreading throughout the India. Therefore, I am requesting the Honorable Minister, many times our Honorable Chief Minister, Amma Jayalalitha ji has written, and also present our former Chief Minister, Edappadi Palaniswamy also written so many times to include these communities, Tamil Nadu fishermen community, Narikura community, Valmiki community, and Badugas community, Kurumas community, and Urular community, Banjara community, include tribal community. I request there must be uniform kind of decision throughout the India. When state government is recommending, please let them consider it. Thank you very much. Thank you, Thambi Durai ji. माननीय श्री विशंभर प्रसाद निषाद जी. धन्यवाद उपसभापति महोदय. त्रिपुरा राज्य में कतिपय जातियों को सम्मिलित करने का बिल आया है. मैं उसका समर्थन करता हूं समाजवादी पार्टी की तरफ से. मानव इसी तरह से उत्तर प्रदेश में संविधान अनुसूचित जातियां आदेश 1950 के भाग 18 उत्तर प्रदेश में क्रम संख्या 18 में बेलदार के साथ बिंद, गोंड के साथ गौड़, कहार, कश्यप, बाथम, रैकवार. क्रम संख्या 53 में मझवार के साथ केवट, मल्लाय, निषाद.
क्रम संख्या 59 में पासी तरमाली के साथ भर राजभर और क्रम संख्या 65 में शिल्पकार के साथ कुम्हार प्रजापति और क्रम संख्या 66 में तुरैया के साथ धीमर धीवर तुरहा परिभाषित किया जाना है। मानो इनका आपस में रोटी बेटी का रिश्ता खान पान एक जैसा है और उत्तर प्रदेश की मुलायम सिंह सरकार ने, अखिलेश यादव सरकार ने 2004 में, 2006 में, 2007 में, 2015 में, 2016 में केंद्र को प्रस्ताव भेजा था जो भारत सरकार के लंबित है। मानो जिस तरह से EWS का 10% का आरक्षण कर दिया गया था, ये जातियाँ सोशली बहुत सामाजिक शैक्षिक आधार पिछड़ी हुई हैं और उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जाति सूची में कोई अलग से जोड़ना नहीं है। तो मैं भारत सरकार से ये अनुरोध करूंगा कि भारत सरकार में प्रस्ताव लंबित है तो ये हमारी कतिपय जातियों को अनुसूचित जाति में जो 17 पिछड़ी जातियाँ उनको अनुसूचित जाति में परिभाषित करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 341 में संशोधन करने की कृपा करें। धन्यवाद माननीय। धन्यवाद विश्वम्भर जी। माननीय अब्दुल वहाब जी, माननीय अब्दुल वहाब जी, श्री राम जी नहीं है। माननीय संतोष कुमार। Support the inclusion of Darlong community in the ST list. But sir, I support the inclusion of Darlong community in the scheduled tribe list. But it has nothing to do with this unwanted claim made by the tertiary benches. They were claiming as if this very list was introduced by the current ruling dispensation. Sir, there are demands from various communities in different states to include in this list. The actual question is whether mere inclusion will serve the purpose of upliftment of tribes. This is the important question. So we have to answer to that question. Unfortunately, the current government's approach is actually helping to make only cosmetic changes. So we need a more deeper intervention to tackle with the tribal issue. So what I suggest is to table the ST Commission report. It was not yet tabled, and the last one was in the year 2019. So I request you to demand the Commission to table its report. After the 11th one, it did not table. So I request the same. Thank you. And sir, I'm a new member to the Sabha. One more. अच्छा, maiden speech. He wants to speak maiden speech. Please. So I don't want to take much of your time. This is your maiden speech. You please speak. No problem. Speak. So the tribal question is tribals constitute 8% of the total population. Whereas if we take into account the total number of poor people in India, tribals constitute 25% of it. So that is the most important issue. And according to the National Health Survey, 45.6% of the tribes are living in lower income brackets. So we have to solve this issue. How? And unfortunately, development helps other sections to improve their livelihoods, whereas development makes Adivasis victims. So victimization is taking place on one side, whereas development is helping other sections to improve their livelihood. So displacement from the homes, homelands, tribal lands, this is taking place on one side. So in the name of development, in the name of infrastructure development, it is badly affecting the lives and livelihood of tribals in this country. So we need a very serious intervention, and unfortunately, the approach of the current government is not helping us to achieve that. So I request you to compel the government to intervene this matter very seriously and to promote the cause of STs in this country. Thank you, sir. Thank you. माननीय संजय सिंह। धन्यवाद मान्यवर। सबसे पहले तो मैं इस बिल का समर्थन करता हूं कि डॉरलोंग कम्युनिटी को आपने आदिवासी कम्युनिटी में शामिल करने का फैसला लिया, लेकिन इसके साथ साथ अभी पिछले दिनों जंतर मंतर पे त्रिपुरा के तमाम आदिवासियों ने आंदोलन किया था मान्यवर। प्रद्युत जी उनके एक नेता हैं और उन्होंने आंदोलन किया था
त्रिपुरा के अंदर आदिवासियों के लिए भारतीय जनता पार्टी की वहां की सरकार ने जो सांस्कृतिक, राजनीतिक, सामाजिक अधिकारों की रक्षा का जो वादा किया था, पहाड़ों में रहने वाले आदिवासियों के लिए जो वादा किया था, उस वादे खिलाफी के खिलाफ आंदोलन हुआ था। तो मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से ये भी अनुरोध करूंगा कि उनके मुद्दों पर आप गंभीरतापूर्वक विचार करके राज्य सरकार से संवाद करके उसका समाधान कराने की कोशिश करें। दूसरा विषय मान्यवर कह के मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। सहरिया कम्युनिटी है सर, ललितपुर में, उत्तर प्रदेश के अंदर 2006 में जब वन अधिकार नियम हिंदुस्तान के अंदर आया, उसके बाद उन कम्युनिटीज के लिए कहा गया कि ये लोग जहां पर रहते हैं उनको उनकी जमीन पर पट्टे का अधिकार दिया जाएगा। 2006 से लेके आज तक मान्यवर उनको ब्लॉक से क्लियरेंस मिल गया, तहसील से क्लियरेंस मिल गया, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सारी बातें उनकी मानता है। बावजूद इसके आज तक उस सहरिया कम्युनिटी का ललितपुर के इलाके में आज तक उनको पट्टा, उनको जमीन नहीं मिल पाया। तो इसकी ओर भी माननीय मंत्री जी को ध्यान देना चाहिए वहां की राज्य सरकार से बातचीत करके। और मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि कानून आप बनाइए, दूसरी जातियों को जो ट्राइबल्स में आना चाहते हैं उनको अधिकार भी दीजिए, लेकिन इसके साथ साथ उनकी पीड़ा को कैसे दूर कर सकते हैं उस पर भी गंभीरता से काम कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद संजय जी। माननीय शोक सिद्धार्थ। धन्यवाद माननीय सभापति महोदय। प्लीज माननीय उपसभापति महोदय जी, प्लीज आपस में बात न करें प्लीज। हम सभी जानते हैं कि भारतीय संविधान के निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने SC/ST के लोगों को भारतीय संविधान में आरक्षण की व्यवस्था, चाहे वो सरकारी नौकरियों में, शिक्षा में हो या फिर विधायिका में हो, इस नियत से देने का काम किया था उनकी सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक और सांस्कृतिक उनका विकास होगा। लेकिन आज़ादी के 73 साल बीत जाने के बाद भी जो भारत सरकार में सरकारी नौकरियों में 15% SC का रिजर्वेशन है और 7.5% ST का रिजर्वेशन है, आज तक केंद्र की सरकार में अभी तक 50% से भी कम उनकी हिस्सेदारी देने का काम सरकार ने किया है। हम OBC से SC में कन्वर्ट करने के लिए या SC से ST में कन्वर्ट करने का काम निश्चित रूप से ठीक है, मैं इसका समर्थन करता हूँ, इस बिल का भी समर्थन करता हूँ। लेकिन जितनी आबादी में, जितनी संख्या में उनको OBC से SC में कन्वर्ट किया जाए या SC से ST में कन्वर्ट किया जाए तो उनकी उतनी हिस्सेदारी भी आरक्षण की व्यवस्था की बढ़ाई जानी चाहिए। एक हमारी सरकार की, हमारी पार्टी की मांग है। दूसरी मांग ये कि जो SC/ST का रिजर्वेशन अभी तक पूर्ण नहीं हुआ है, जैसे कि उत्तर प्रदेश में जब 7 से 12 में हमारी पार्टी की मुखिया आदरणीय बहन जी की उत्तर प्रदेश में सरकार थी तो उन्होंने प्राइवेट सेक्टर में 30% रिजर्वेशन देने का काम किया था, सरकारी कॉन्ट्रैक्ट में रिजर्वेशन देने का काम किया था, सरकारी कॉन्ट्रैक्ट में भी 30% रिजर्वेशन देने का काम किया था। साथ ही साथ उन्होंने SC/ST के लोगों के लिए शहरों में मानवर कांसीराम साहब योजना के अंतर्गत 2 कमरे के पक्के मकान देने का काम किया था और गांव में महामाया आवास योजना के नाम से करने का काम किया था। मेरा इस सरकार से अनुरोध है कि वो जितनी भी, चाहे OBC की जो डिमांड है कि SC से OBC को SC में कन्वर्ट करने का काम किया जाए या फिर SC से ST में कन्वर्ट करने का, जो चाहे केंद्र सरकार में हो या राज्यों में जिनकी आबादी के हिसाब से जो कन्वर्जन, जो उनको चेंज करने का काम किया जा रहा है, मेरी सरकार से ये निवेदन है कि वो इनको चेंज करते समय, इनको उनकी स्थिति को बदलने के समय खास तौर से ठीक नीयत से काम करने का काम करें। अगर ठीक नीयत से नीतियां बनाई जाएंगी तो निश्चित रूप से समाज का भला होगा। मैं ये निवेदन करना चाहूँगा कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में बैकलॉग के माध्यम से 2007 से 12 में लाखों लोगों को सरकारी नौकरियां देने का काम किया गया था, यहाँ तक कि सफाई कर्मियों के नाम पे 1,08,000 से ज़्यादा भर्ती करने का काम किया गया था। मैं ये चाहता हूँ कि ये सरकार, केंद्र सरकार में भी बैकलॉग के माध्यम से SC/ST OBC का कोटा भरने का काम करे और तमाम जो कंसर्न स्टेट हैं जहाँ पर SC/ST का कोटा अभी पूर्ण नहीं है
उस कोटे को पूर्ण करने का काम करें। इन बातों के साथ सरकार से इस निवेदन के साथ कि वो अपने जवाब में माननीय मंत्री जी इसका जवाब दें, क्या वो इस कोटे को पूर्ण करने का आश्वासन इस सदन में देंगे। इसके साथ मैं इस बिल का समर्थन करती हूँ, अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय भीम, जय भारत। आपकी बातें महत्वपूर्ण है, पर यह बिल है त्रिपुरा के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन। प्लीज प्लीज माननीय श्री राम विचार नेताम। धन्यवाद महोदय। एक तो धन्यवाद इसलिए जो हो सकता है कि इसके बाद मुझे बोलने का अवसर ही न मिले और इसलिए आपके कृपा दृष्टि बनी रहे, क्योंकि मैं एक तरह से अंतिम वक्ता बोल रहा हूं और इस सदन में करीब मेरे कार्यकाल का अंतिम भाषण मान के चल रहा हूं। मेडेन स्पीच का तो प्रावधान है। मेडेन स्पीच है तो मान लीजिए फिर भाषण भी आपका हम लोगों ने सुना है। महोदय मेडेन स्पीच तो मेरा हुआ जी, लेकिन इसको मान लिया जाए कि फेयरवेल स्पीच। प्लीज विषय पर बोलिए। और इसलिए महोदय मैं अभी बड़ा गौर से बाकी हमारे माननीय सदस्यों की बात को सुन रहा था। ये त्रिपुरा पर केंद्रित है। हमारी सरकार ने गांव, गरीब, किसान, मजदूर, नौजवान, उनके दुख दर्द की चिंता करते हुए उनकी सामाजिक स्थिति कैसे मजबूत हो, बहुत सारे ट्राइबल एरियाज की जो स्थिति है उसमें कैसे सुधार हो, इसके साथ साथ ये सब तक काम हो रहे हैं महोदय। लेकिन बहुत सारी ऐसी जातियां हैं जिन जातियों ने अपना पूरा समय देश की आजादी कितने सालों के बाद और उधर बैठे हुए न जाने कितने सालों तक राज करने वाले लोग, उनको जरा भी चिंता नहीं थी कि त्रिपुरा में भी कुछ ऐसी जातियां हैं, अन्य राज्यों में भी कुछ ऐसी जातियां हैं जिनको आदिवासियों की सूची में शामिल करना जरूरी है। अब एसटी सूची में आज तक नहीं शामिल हुआ, उसके लिए क्या हम जिम्मेवार हैं? और बड़ी बड़ी बात कर रहे थे। मैं अभी सुन रहा था बंगाल के हमारे कुछ मित्र बात कर रहे थे, अन्य राज्य के हमारे मित्रगण बात कर रहे थे। मैं तो ऐसा मानता हूं, गांव में ऐसा बोलते हैं कि सूपा बोले तो बोले, चलनी बोलने लगा। जिसमें इतने सारे छेद, बंगाल को हम भूल सकते हैं? बंगाल में किस तरह से हमारे आदिवासी, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जातियों के साथ किस तरह से बर्बरता हो रहा है, किस प्रकार से अन्याय अत्याचार की पराकाष्ठा है, देख करके शर्मा जाएगा। देश की आजादी में आज पॉइंट ऑफ ऑर्डर, देश की आजादी में पॉइंट ऑफ ऑर्डर। Yesterday the chairman said yes that nobody should utter name of any state. No state should be mentioned. In spite of the direction of the chair, we'll see. The honorable member is making allegations. We'll examine false allegations against him. We'll examine it. Please. महोदय, मैं बिल पे ही बात कर रहा हूँ। प्लीज चूंकि शुरुआत इन्होंने की है, शुरुआत इन्होंने की है तो उसका जवाब मुझे देना ही पड़ेगा महोदय। और रही बात महोदय, मैं आपकी ओर ही देख के बात कर रहा हूं। बिल त्रिपुरा पर है, बोलिए। हमारी सरकार जब से आई है, वहां गांव, गरीब, किसान, मजदूर, नौजवानों के लिए और वहां के डेवलपमेंट के लिए, वहां की संस्कृति के बचाने के लिए, वहां के लोगों को कैसे समृद्ध और संपन्न कैसे बने, कैसे एम्पावरमेंट कैसे हो, इन सभी का ध्यान रखते हुए हमारी सरकार ने जो वहां त्रिपुरा में काम कर रहा है, और उसी का देन है कि आज ऐसे अछूते, ऐसे लोग जो वंचित थे, उनको शामिल करने के लिए वहां हमारी सरकार ने प्रस्ताव दिया। वो प्रस्ताव के आधार पे हम शामिल कर रहे हैं महोदय। यही नहीं, हमारी सरकार ने पूरे देश में और इस वर्ग के लिए आज जिस प्रकार से काम करना शुरू किया महोदय, आज सबका जो है, आज मैं समझता हूं कि आप इसको कैसे नकार सकते हो? आप सच्चाई को कब तक नकारते रहोगे? और आप नकारते नकारते आपकी स्थिति ऐसी हो रही है कि आप लोकसभा में तो आपका वहां नेता प्रतिपक्ष नहीं बन पाया, अब लग रहा है यहां से भी आप जाने वाले हैं। यही स्थिति, आप सच्चाई को आप कब तक नकारते रहेंगे? आप मानिए हमारे देश के सचिव प्रधानमंत्री जो 130 करोड़ लोगों के दिलों पर राज करते हैं, हृदय में बैठे हुए हैं, गरीबों के, आदिवासियों को, दलित वर्ग के लिए
अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए ऐसे लोगों के आज एक तरह से उन्हें भगवान के रूप में आज देख रहे हैं। और यही कारण है आपने महोदय आपने जहर बोने का काम नहीं किया। आप इतना जहर बोया। आप बिल पर बोलिए, बिल पर त्रिपुरा से संबंधित बिल है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का। यही निवेदन है कि हम लोगों ने भी इसी प्रकार से महोदय इसको समझना पड़ेगा। आपके प्रस्ताव से तमाम सारे राज्यों के प्रस्ताव आने से सिर्फ जो है एसटी की सूची में शामिल नहीं हो सकता, उसके लिए हमारी प्रक्रिया बहुत जटिल है महोदय। उस जटिलता से ही हमें गुजरना पड़ता है। साइंटिफिक तरीके से उसका पूरा रिसर्च होते हैं, उसकी जांच होती है, तब जाकर के आरजीआई जो रिपोर्ट देता है उसके बाद में एग्जामिन करने के बाद तब जो है लिस्ट जो फाइनल होता है उसके आधार पे हम करते हैं महोदय। बाकी राज्यों में भी चाहे मध्य प्रदेश की बात हो चाहे हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत सारे जो जातियां हैं, हम मानते हैं उसमें थोड़ी थोड़ी जो बिंदी का हर्षलोप का और कहीं उच्चारण का अलग अलग राज्यों में कुछ अलग, जैसे बांग्ला में कुछ भाषा को कुछ और बोलेंगे, कुछ जातियों में हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में उसी को दूसरा बोलेंगे, झारखंड में दूसरी बात बोलेंगे। लेकिन असली बात महोदय ये जो प्रिंटिंग करने वाले लोग हैं, जो प्रिंट करने वाले उसको भाव और भंगिमा और उसकी भाषा को नहीं समझ पाते बहुत सारी चीजें। लेकिन वहां जब रिसर्च होता है तो ये सभी बातें साइंटिफिक तरीके से जो रिसर्च का रिपोर्ट आता है उसके आधार पे होता है महोदय। आपको सिर्फ गाली देने से, आप इस तरह से गाली दे रहे हैं, इस तरह से बात कर रहे हैं और गाली देते देते क्या हालत हो गया। आप हमारे देश के सचिव प्रधानमंत्री जी के बारे में तरह तरह की बात, एक समय तो बोले कि ये वैक्सीन आया और ये मोदी वैक्सीन है। अरे भैया, और बाद में धीरे धीरे चुपचाप आप सबसे पहले आप ही लगवाए वैक्सीन। तो हम लोग लगवाए, हम लोग के लिए हमारी सरकार लाया। माननीय नेताम जी हुआ कि यही वैक्सीन बचा सकता है, माननीय नेताम जी सबसे पहले लाइन लगा के आप लगाना। विषय पर महोदय इसी प्रकार से मैं छत्तीसगढ़ की बात कर रहा था। छत्तीसगढ़ में महोदय ये त्रिपुरा से जुड़ा मामला है। जी त्रिपुरा से, इसी छत्तीसगढ़ में भी त्रिपुरा और छत्तीसगढ़। महोदय मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, मुझे ट्राइबल का जो कल्चर होता है, उसकी समझ होती है, उसकी भाषा होती है, उसका एक संस्कृति है, वो महोदय आज उस पे आज खतरा जो है मंडराने लगा है। चाहे त्रिपुरा की बात हो चाहे बाकी राज्यों की बात हो। मैं सरकार से, मैं माननीय प्रधानमंत्री से, माननीय गृह मंत्री से मैं मेरी पीड़ा को व्यक्त कर रहा हूं महोदय। आज जिस प्रकार से हमारी जातियों के ऊपर आज खतरा, हमारे वर्ग के ऊपर जिस प्रकार से खतरा आज बढ़ रहा है, तमाम तरह जो एक तरह से धर्मांतरण करने का जो कुचक्र चल रहा है, ये समाज को तोड़ने का, हमारी संस्कृति को, हमारे आदिवासी कल्चर को ये समाप्त करने का, हमारी जो तमाम तरह का जो सुविधा जो होता था, हमारा रहन सहन, उठन बैठन, खान पान, वो जो तमाम तरह की जो भाषा बोली होता था, उस पर आज जो है ग्रहण लगने लगा है महोदय। मैं समझता हूं कि हमारी सरकार इस ओर विशेष ध्यान देते हुए इस पर जरूर प्रतिबंध लगाएगी महोदय। और ये जो डबल स्टैंडर्ड, ये डबल जो सुविधा लेने की जो बात कर रहे हैं, डबल हमारे नाम से भी ले रहे हैं और दूसरे नाम से भी ले रहे हैं महोदय, इस पर भी प्रतिबंध लगना चाहिए महोदय। मैं एक और निवेदन करना चाहता हूं। मैं यही बोल रहा था कि मैं शायद अब दोबारा इसमें सदन में मुझे बोलने का अवसर न मिले महोदय। एक बात और कहना चाहता हूं महोदय, हमारे बहुत सारे आदिवासी समाज की बेटी बहन, आदिवासी समाज की बेटी बहन को दूसरे लोग बड़ी तादाद में उनको रख रहे हैं और उसका लाभ जो है राजनीतिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, अन्य दृष्टि से भी तमाम तरह का जो राजनीतिक लाभ लेना होता है उसमें भी ले रहे हैं। इसके लिए भी कानून बना के उसे रोकने का काम होना चाहिए महोदय। ये मेरी पीड़ा है महोदय। मैं इसके साथ में यही कहना चाहता हूं महोदय, मेरा यही निवेदन है कि आज जो है हमारा समाज जमीन, सबसे अधिक जो ट्राइबल होता है वो जमीन और जमीर के लिए मरता है महोदय।
तो इसको जमीन और आज जमीन के लिए वो मरता है, इसको आज बचाने की जरूरत है महोदय। महोदय, आज हमारा समाज, ये आदिवासी समाज, चाहे त्रिपुरा की हो, चाहे बंगाल की हो, चाहे अन्य राज्यों की हो, यहाँ जो है इतिहास और भूगोल और अपनी संस्कृति के लिए मरता है और जीता है महोदय। इसको हम कैसे हम सुरक्षित रख सके, कैसे हम बचा सके, और ये सभी बातें हैं महोदय। महोदय, मेरा यही निवेदन है कि आज जिस प्रकार से त्रिपुरा में आज वहां के आदिवासी, मैं खुद गया हूं महोदय, मैं मोर्चा का काम करते हुए त्रिपुरा के सुदूर अंचल में भी मैंने दौरा करके वहां के आदिवासियों की पीड़ा को मैंने देखा है महोदय। वहां के जंगल, वहां के पहाड़, वहां की नदियां इतनी खूबसूरत, वहां की जो स्थिति है महोदय, इतना खूबसूरत में आज वहां भी जिस प्रकार से लोगों ने जाकर के शोषण किया महोदय, उन सबको भी बेनकाब करते हुए उनके ऊपर भी कार्रवाई होना चाहिए और उनको बेदखल करना चाहिए महोदय। आज इस प्रकार से महोदय आज बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, मैं यही कहना चाहता हूं, ये सरकार कोई दूसरी सरकार नहीं है, ये सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार है, इधर उधर सरकार नहीं है। और इसलिए मोदी है तो मुमकिन है, ये कोई ऐसी बात नहीं है। आप इधर उधर की बात न करो, ओ बताओ आपकी कारवा कैसे लूटा, आप बता सकते हैं महोदय। महोदय, मैं यही कहना चाहता हूं कि अब हवा ही रोशन करेगी रोशनी, अब हवा ही करेगी रोशनी का फैसला, जिस दिए में जान होगी वही दिया जलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। नमस्कार। धन्यवाद राम विचार जी। अब माननीय मंत्री श्रीमती रेणुका सिंह सरूथा जी का जवाब। माननीय सभापति महोदय, संविधान अनुसूचित जनजातियां आदेश संशोधन विधेयक 2022 के द्वारा त्रिपुरा राज्य के डारलोक समुदाय को कुकी समुदाय के उपजाति के रूप में सूचित करने का प्रस्ताव है। देश के पूर्वोत्तर में स्थित त्रिपुरा राज्य में जनजातीय समुदाय की संख्या लगभग 11,66,000 है, जो जनगणना 2011 के अनुसार राज्य के 31.76% अनुमानित है। डारलोक समुदाय को सूची में शामिल होने के पश्चात इनको भी जनजातीय समुदाय के रूप में एक पहचान मिलेगी। कुकी समुदाय देश के पूर्वोत्तर राज्य में एक प्रमुख जनजातीय समुदाय है और डारलोक समुदाय को इस सूची में शामिल होने के पश्चात त्रिपुरा राज्य में कुकी समुदाय के 18वें उप जनजाति के रूप में इसका समावेश होगा। त्रिपुरा राज्य में 19 प्रमुख जनजातियां हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, कुकी समुदाय के उपजाति डारलोग को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने संबंधी विधेयक में आज राज्यसभा के माननीय कई अनुभवी सांसदों के सुझाव आए, विचार आए। मैं उनके सुझाव का, उनके विचारों का सम्मान करती हूँ। माननीय सभापति महोदय, आदिवासी समाज की संस्कृति, उसकी परंपरा, उसकी समस्याएं एक बहुत संवेदनशील मुद्दा है। इन्हीं समस्याओं को देखते हुए उनकी भलाई के लिए, वो जिस क्षेत्र में रहते हैं उन क्षेत्रों के विकास के लिए, उनके संस्कृति और परंपरा की रक्षा के लिए 1999 में स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अलग से मंत्रालय का निर्माण किया और आज इस सदन में मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि जनजाति कार्य मंत्रालय और आदिवासी क्षेत्रों के विकास के लिए भारत सरकार के जो 41 मंत्रालय हैं, अपने अनेक योजनाओं के माध्यम से आदिवासी क्षेत्रों के विकास और अनेकों इस योजनाओं के माध्यम से उनके विकास और भलाई का काम कर रहे हैं। आज छत्तीसगढ़ से राज्यसभा की सदस्य मेरी बहन पोलो देवी नेताम, मानिक शाह, शांतनु सेन, मोहम्मद अब्दुल्ला, ममता मोहंता, बी लिंगायत यादव, अयोध्या रामी रेड्डी, एम थब्बी डुराई, विशंबर प्रसाद निषाद, संतोष कुमार, संजय सिंह, अशोक सिद्धार्थ, आदरणीय राम विचार नेताम जो स्वयं छत्तीसगढ़ से हैं,
इन सभी ने अपने अपने सुझाव को शामिल करते हुए इस विधेयक पर अपना समर्थन दिया है। फूलो देवी नेताम छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र से आती हैं। उन्होंने छत्तीसगढ़ की कई जातियों को जो अनुसूचित जनजाति में शामिल करना है, उनके संबंध में यहाँ पर कहा। मैं उन्हें आश्वस्त करती हूँ कि हमारी सरकार, हमारा मंत्रालय माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, नेतृत्व में माननीय अर्जुन मुंडा जी स्वयं छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, उड़ीसा सहित भारत देश के जिन राज्यों से भी आदिवासियों की सूची में शामिल करने वाले जातियों के जो प्रस्ताव हैं, उन सब पर हम बहुत गंभीर हैं और इसके लिए बार बार हमारी बैठकें हो रही हैं और जो प्रपोजल हैं, जो प्रस्ताव हैं, जो अधूरे हैं, इसके लिए हम राज्य सरकारों से लगातार बात कर रहे हैं। हमारी बहन फूलो देवी नेताम जी छत्तीसगढ़ के संबंध में कह रही थी। मैं फूलो देवी नेताम बहन को ये कहना चाहती हूँ कि सन 2003 में जब छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ, छत्तीसगढ़ की क्या दुर्दशा थी, क्या स्थिति थी, ये देशवासियों से छिपा नहीं है। 2003 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और 2003 से लेकर 18 तक हमारी सरकार ने वहाँ पर छत्तीसगढ़ वासियों के विकास के लिए बहुत काम किया और जो बस्तर क्षेत्र है, सरगुजा क्षेत्र है, वहाँ पे नक्सली उन्मूलन के लिए बहुत ईमानदारी के साथ प्रयास किया और काम किया। प्लीज नो, नहीं, आप बिना इजाजत के बोल रहे हैं, प्लीज बिना इजाजत के बोले। पहले वहाँ पर 16 जिले हुआ करते थे। हमने बस्तर क्षेत्र में बीजापुर और नारायणपुर को पहले जिला बनाया और इसके साथ 2011-12 में एक साथ हमने 9 जिलों का निर्माण किया और इसके साथ साथ जहां भी पब्लिक की डिमांड आई, हमने एक साथ 49 तहसील का निर्माण किया। आज पहले छत्तीसगढ़ को कोई नहीं जानता था, लेकिन जिस प्रकार 15 सालों में वहां का विकास हमारी सरकार ने किया, आज छत्तीसगढ़ देश के नक्शे पर दिखाई देता है और हर एक क्षेत्रों में वहां पर विकास हुआ। आज मैं जरूर कह सकती हूँ कि 3 सालों से वहां पर विकास ठप है। अभी एक छोटा सा बाई इलेक्शन हो रहा है, विधानसभा का चुनाव हो रहा है। उस चुनाव में एक साल्हेवारा करके ट्राइबल क्षेत्र है। मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि एक छोटे से चुनाव को जीतने के लिए वहां के मुख्यमंत्री ने, आपकी पार्टी ने, आपकी सरकार ने जनता को एक प्रलोभन दिया है कि आपने यदि खैरागढ़ का चुनाव हमें जिता दिया तो 24 घंटे के अंदर हम जिला बना देंगे। जिस प्रकार से आपने 2018 में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान के सामने कहा था कि हमारी सरकार बने, माननीय मंत्री जी की जवाब रिकॉर्ड पे जाना चाहिए। इस तरह से आपने छत्तीसगढ़ में एक छोटे से चुनाव में जिला बनाने के लिए आपने घोषणा की है। साथ में हमारी बहन ने कहा कि 2023 में छत्तीसगढ़ में विधानसभा का चुनाव होने वाला है और त्रिपुरा में भी 2023 में चुनाव होने वाला है। तो चुनाव को ध्यान रखते हुए आपने वहां के लोगों का वोट लेने के लिए ये विधेयक को लाया है। देखिए, एक बहुत लंबी प्रक्रिया होती है। जैसे कल झारखंड का हमने प्रस्ताव पारित किया। झारखंड की जनता देश की आज़ादी के बाद से, वहाँ की जो जातियां हैं जिनको कल हमने शामिल किया, और देश की आज़ादी के बाद से इंतजार कर रही थी कि हम कब सरकार हमें अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करे। तो इस प्रकार से त्रिपुरा की जनता भी, त्रिपुरा की जो डारलोग जनजाति है, वो भी इंतजार कर रही थी। और ये ऐसी सरकार है बहन जहाँ पर जनता की सुनी जाती है और जनता की उम्मीदों को यहाँ पर पूरी की जाती है। तो आपने जो छत्तीसगढ़ के जनजातियों की चिंता की है, उसको बहुत जल्दी हमारी सरकार विधेयक के रूप में लेकर आएगी। शांतनु सेन जी ने अपने सुझाव के साथ साथ आदिवासियों की शिक्षा और स्वास्थ्य के संबंध में अपनी चिंता जाहिर की है। मैं जरूर कहूंगी इस बात को कि पश्चिम बंगाल में जो जनजातीय समाज के लोग रहते हैं, भारत सरकार की बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिनकी उन्हें जरूरत है, लेकिन आपकी सरकार की वजह से, पश्चिम बंगाल की सरकार की वजह से वहां पर जनजातियों को उनका हक हासिल नहीं हो पा रहा है। जो योजनाएं हैं उनका लाभ नहीं मिल पा रहा है। इस तरह से हमारे जिन भी माननीय सदस्यों ने अपने अपने प्रदेश
की जो जातियां हैं जो अनुसूचित जनजाति में शामिल होना चाहती है, ऐसे जनजातियों के संबंध में आपने अपने विचारों को यहाँ पर रखा है। मैं आप सबको ये कहना चाहूँगी कि राज्यों के प्रस्ताव के आधार पर हमारी सरकार इस पर विचार कर रही है और जैसे ही सारी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, हम एक एक करके उन प्रस्ताव को सदन के माध्यम से पारित करेंगे। यहाँ पर बहुत सारे विषय आए, बहुत कम समय में कई सदस्यों ने अपनी अपनी बात को रखा। मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगी कि किसी भी जाति के विकास के लिए, किसी भी समाज के विकास के लिए, किसी भी देश के विकास के लिए सबसे पहले ज़रूरी ये होता है कि शिक्षा उन्हें मिलनी चाहिए। तो हमारी सरकार ने ट्राइबल क्षेत्रों में जो बच्चे रहते हैं उन बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए एकलव्य मॉडल स्कूल का गठन किया। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि 2013-14 के पहले ये एकलव्य मॉडल स्कूलों की संख्या लगभग 167 थी और आज मुझे बहुत खुशी हो रही है सदन को बताते हुए कि 2021-22 में एकलव्य मॉडल स्कूलों की संख्या 679 है और एक एक स्कूल में 480 बच्चे CBSE कोर्स के माध्यम से पढ़ाई करते हैं। 6वीं से लेकर 12वीं तक की पढ़ाई वहाँ पर होती है और उन बच्चों की बहुत इच्छा होती थी कि जिन स्कूलों में हम पढ़ाई कर रहे हैं उन स्कूलों की बिल्डिंग भी बड़ी होनी चाहिए, वहाँ पर प्ले ग्राउंड होना चाहिए। मैं सदन को बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि अब एकलव्य मॉडल स्कूल के जो बिल्डिंग है, पहले हम 20 करोड़ का बनाया करते थे, आज 38 करोड़ के एक एक बिल्डिंग का निर्माण वहाँ पर होगा। और जिस तरह से जवाहर नवोदय विद्यालय के स्कूल रहते हैं, सेंट्रल स्कूल की बिल्डिंग रहती है, ठीक उसी तर्ज पर आज हमारे स्कूल होंगे। और इसी तरह से हमारी बहन कह रही थी कि हमारा बजट कम हो गया है। बजट हमारा कम नहीं हुआ है। पहले 2013 और 14 में मैं जरूर कहूँगी कि 19,437 करोड़ ट्राइबल मंत्रालय का बजट था, लेकिन आज 2022-23 का जो बजट है 87,585 करोड़ रुपए का बजट है। Please, let her complete. Please. No, please. Let her complete. Yes, let her speak first. Let her speak. Please. Let her continue. ट्राइबल क्षेत्रों के विकास के लिए जो ट्राइबल सब प्लान है 2013-14 में ये 21,525 करोड़ हुआ करता था, आज 85,930 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान हुआ है। वन धन विकास ये मेरा सारे सदस्यों से आग्रह है कि मिनिस्ट्री पर बोले। सभी सदस्यों से मैंने बार-बार आग्रह किया। समाज के लोग हैं, प्लीज वन क्षेत्रों में रहते हैं और आदिवासियों का जीवन जंगल के ऊपर निर्भर है। ऐसे वनवासियों के वन विकास केंद्र की मैं चर्चा कर रही हूँ। आप जो भी माननीय सांसद ट्राइबल क्षेत्रों में रहते हैं जहाँ पर आदिवासी समाज के लोग रहते हैं, जिनका जीवन जंगल पर आधारित है, ऐसे माननीय सदस्यों को मैं ये बताना चाहती हूँ कि 2019 के लोकसभा चुनाव के समय हमारी पार्टी ने कहा था कि हम पूरे देश भर में 50,000 वनधन विकास केंद्र खोलेंगे। आज 36,000 से भी ज्यादा वनधन विकास केंद्र। देखिए 2 साल कोरोना में के कारण हमारा काम जरूर प्रभावित हुआ, लेकिन आज 2022 में 36,000 से भी ज्यादा वनधन विकास केंद्र खुल चुके हैं और कई लाख जो ट्राइबल है वो उनको इसका लाभ मिल चुका है। एक एक वनधन विकास केंद्र में 300 लोगों की संख्या होती है। 60% उसमें ट्राइबल रहते हैं, 40% अदर समाज के लोग रहते हैं और उनके आसपास जो भी वनोपज मिलते हैं उन वनोपज को संग्रह करके उसका मूल्य बढ़ाने के लिए, उसके मूल्य संवर्धन के लिए उनको देखिए ट्रेनिंग दी जाती है। उनके लिए एक बिल्डिंग का भी निर्माण किया जाता है और वो जिस सामान का निर्माण करते हैं उसकी अच्छी पैकेजिंग होती है, लॉन्चिंग होती है, उनके लिए मार्केट की व्यवस्था की जाती है। तो उनके उद्यम के लिए, उनके रोजगार के लिए जो ट्राइबल कभी मजदूर हुआ करते थे, आज हमारे सरकार की मंशा है, माननीय प्रधानमंत्री जी की मंशा है कि हम उन मजदूरों को मालिक बनाएंगे और उन्हें मालिक बनाने के लिए ट्राइबल मंत्रालय
माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में बंधन विकास केंद्रों के माध्यम से काम कर रहा है। और इस माननीय प्रकार मंत्री से जी कंक्लूड करिए समय इस आपका। प्रकार से हम एक और उनके विकास की चिंता कर रहे हैं। अभी अभी इस बजट में हमारी सरकार ने ट्राइबल क्षेत्रों के विकास के लिए प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम लाया है, उसका बजट प्रावधान हुआ है। और ऐसे गांव को हमने चुना है जहां की जनसंख्या, जहां के ट्राइबल जनसंख्या 50% से ऊपर है। तो हमारे मंत्रालय ने ये सर्वे किया कि ऐसे कितने गांव हैं, तो पूरे देश भर में लगभग 1,47,000 से भी ऐसे 50% ट्राइबल बाहुल्य वाले गांव हैं। उसमें से 36,000 गांव को हमने इस वर्ष लिया है और उन ग्राम पंचायतों में 100% विकास के लिए, जैसे कुछ राज्य सरकार भी उसमें काम करेगी और जहां जहां पर भी गैप रह जाएगा उस गैप फिलिंग के लिए भारत सरकार प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम के माध्यम से काम करेगी। आज त्रिपुरा के इस विधेयक को पारित कराने के लिए हमारे राज्यसभा के हमारे बहुत अनुभवी माननीय सांसदों ने अपनी बात को रखा है। मैं प्रस्ताव करती हूं कि इस विधेयक को पारित कर दिया जाए। The question is that the Constitution Scheduled Tribes Order Amendment Bill 2022 as passed by Lok Sabha be taken to consideration. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The motion is adopted. We shall now take up clause by clause consideration of the bill. Clause 2 stands part of the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 2 is adopted. Clause 1, the enacting formula and the title stand part of the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 1, the enacting formula and the title are adopted. Srimati Renuka Singh Saruta to move that the bill be passed. माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि इस विधेयक को पारित किया जाए। Motion moved that the bill be passed. The question is that the bill be passed. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The bill is passed. Now the Criminal Procedure Identification Bill 2022. Shri Amit Shah to move a motion for consideration of the Criminal Procedure Identification Bill 2022. माननीय अमित शाह। उपसभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि दांडिक मामलों में शनाख्त और अन्वेषण के प्रयोजन के लिए सिद्ध दोष और अन्य व्यक्तियों का माप लेने को प्राधिकृत करने और अभिलेखों का परीक्षण करने और उस संबंध और आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर लोकसभा द्वारा पारित रूप में विचार किया जाए। महोदय, आज एक महत्वपूर्ण विधेयक लेकर मैं सदन के सामने उपस्थित हुआ हूं, जिसको 4 तारीख को लोकसभा ने पारित किया है। इस विधेयक का उद्देश्य एक 100 साल पुराने विधेयक में आज के जमाने के अनुरूप टेक्नोलॉजी का जो बदलाव हुआ है उसका समावेश करना, इन्वेस्टिगेशन को बल देना और दोष सिद्धि के प्रमाण को ज्यादा से ज्यादा हो सके, इस प्रकार ये डेटा को स्टोरेज कर कर, इसका एनालिसिस कर कर, इसका उपयोग कर कर दोष सिद्धि के प्रमाण को बढ़ाना। सभापति महोदय, जब तक किसी भी देश में दोष सिद्धि का प्रमाण नहीं बढ़ता है, तब तक कानून और व्यवस्था की परिस्थिति सुधारने के सभी प्रयास विफल हो जाते हैं। पुलिस या कानून प्रवर्तक एजेंसियां कितने भी लोगों को कानून के दायरे में पकड़ कर लाए, मगर जब तक अदालतों में उनके दोष को सिद्ध नहीं किया जाता, तब तक उनको सजा नहीं होती। और कुछ अपराधी ऐसे होते हैं जो स्वभावगत रूप से
अपराध करते हैं। अपराध को जिन्होंने पेशे के रूप में भी स्वीकार किया है, ऐसे अपराधियों को जब तक सजा नहीं कराती, ये सिलसिला टूटता नहीं। दूसरा, जब तक अपराधियों को सजा नहीं होती है, अपराध करने से सजा होती है, संदेश भी समाज के अंदर नहीं जाता। और जब तक अपराधियों को सजा नहीं होती है, कानून के अनुसार जीने वाले समाज के बहुत बड़े तबके में कानून और व्यवस्था और सरकार के प्रति, संविधान के प्रति आस्था की भावना को हम खड़ा नहीं कर सकते। इसलिए निहायत जरूरी है कि 2 सिद्धि के प्रमाण को बढ़ाया जाए और इसके लिए अंग्रेजों के समय में बना हुआ एक पुराना कानून आज के समय में ऐसा लगता है कि ये पर्याप्त नहीं है। देश के विधि आयोग ने बंदी सेना अधिनियम 1920 पर 1980 में अपनी 87वीं रिपोर्ट भारत सरकार को सौंपी थी और उसके अंदर ये जरूरत महसूस की गई विधि आयोग के द्वारा कि 1920 के दांडी जांच में आधुनिक रुझानों के अनुरूप 1920 के कानून को बदलने की जरूरत है। विधि आयोग ने यह भी कहा कि पहचान के प्रयोजन से संकलित किए जाने वाले डेटा की श्रेणियों को सीमित नहीं रखना चाहिए। उन्नत वैज्ञानिक खोज से लिए जाने वाले सारे मापों की सूची में निरंतर वृद्धि होनी चाहिए। इसके साथ ही विधि आयोग ने यह भी अनुशंसा करी कि जिन व्यक्तियों के माप लिए जा रहे हैं उसके दायरे को भी विस्तृत करना चाहिए और कई सारे जजमेंट्स ने भी इसी प्रकार की भावना राज्य सरकार और केंद्र सरकारों के सामने अलग अलग समय पे की है। इस विषय वस्तु को ध्यान में रखकर पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और गुजरात, ये सारे राज्यों ने कई परिवर्तन, समयानुकूल परिवर्तन किए, परंतु इस पर समग्रता से विचार कर माप रखने की आधुनिक से आधुनिक तकनीक से माप का डेटा स्टोरेज हो, अच्छे से अच्छे सॉफ्टवेयर से इसका एनालिसिस हो, इसके आधार पर गुनाह करने की मानसिकता, हर जिले में किस प्रकार के गुनाह होते हैं, हर प्रदेश में किस प्रकार के गुनाह ज्यादा होते हैं और इसके आधार पर वो जिले और प्रदेश की गुनाह को रोकने की पुलिस की रणनीति बन पाए, इस प्रकार की एक व्यवस्था, इसको कानूनी स्वरूप लेने के लिए मैं यहाँ ये विधेयक लेकर उपस्थित हुआ हूँ। इसके बारे में विस्तृत मैं बताना चाहूंगा, मगर पहले सभी सदस्यों के अभिप्राय सुनने के बाद इनसे आए हुए सारे सुझावों, उनसे आई हुई सारी क्वेरीज को एड्रेस करते हुए मैं समापन के वक्त पर इसको विस्तृत में रखूंगा। मैं अंत में सभी सभासदों से कहता हूं कि अपने अपने मूल्यवान विचार इसके पक्ष में, विपक्ष में जो है वो यहाँ पर। धन्यवाद। मोशन मूव्ड। There are 3 amendments by Sri Trichu Sivaji, Sri Sukhendu Shekhar Rai ji and Sri Abdul Wahab ji for reference of the Criminal Procedure Identification Bill 2022 as passed by Lok Sabha to a select committee of the Rajya Sabha. Members may move their amendments at this stage without any speech. Sri Trichu Sivaji, are you moving? I am moving the motion. Moved. Amendment moved. Mani Sri Sukhendu Shekhar Rai ji, are you moving? Amendment moved. Mani Sri Abdul Wahab ji, not present. Amendment not moved. The motion for consideration of the bill and the amendments moved thereto are now open for discussion. Mani P. Chidambaram ji. Mr.
Deputy Chairman, when I rise to speak in this House, I have to remind myself that this is Parliament, the highest seat representing the sovereign power of the people. We gave ourselves a constitution. We are bound to honor the constitution. But I'm sad to say, I deeply regret to say, when a bill like this is moved and passed in this House, we are wittingly or unwittingly breaking the constitution every day. I know that this bill has been approved by the Cabinet of the Government of India. I know that this was introduced in the Lok Sabha. I've read that several suggestions were made in the Lok Sabha to amend the bill, to refer it to a standing committee, to refer it to a select committee. But I deeply regret that not one suggestion was accepted by the government. The bill has been passed as it was introduced, and I'm afraid, given the current circumstances, it will be passed in this House also without taking into account any suggestions. What is wrong with the suggestion of my distinguished colleagues who said, refer this bill to a select committee, refer to this bill to a standing committee? If we can wait 102 years to change a bill of 1920, why can't we wait for 102 days for the bill to be brought after examination by the standing committee? What did not happen in 102 years is not going to happen in 102 days. Sir, I want to know who's taking ownership for drafting the bill. Ownership for the bill is the Cabinet of the Government of India. But who is taking ownership for drafting the bill? And I'll explain why this bill is extremely defective, apart from being dangerous. Firstly, sir, this House must know there are existing laws on identification of prisoners. The Criminal Procedure Code has Section 53, Section 53 capital A, and Section 54. They were introduced in 1963, not in 1920, 1963. There is the other bill which the Honorable Home Minister referred to, the Identification of Prisoners Act 1920. There is also another bill which is pending, the DNA Technology Use and Application Regulation Bill of 2019, which I believe has been reported back to the House. Now, why is the DNA Technology Regulation Bill kept pending since 2019? And why is this bill being introduced? What have you found lacking in the Criminal Procedure Code? What have you found lacking in the DNA Technology Regulation Bill, which is sought to be made up by this bill? So the statement of objection reason says, and I summarize it in 3 sentences, to expand the ambit of powers, to use modern techniques for body measurements, and 3, to provide legal sanction. And these are harmless words. The harm, the mischief lies in these sections. Let's look at these one by one. I want to ask the Honorable Home Minister and the Treasury benches, have you considered the development of law in the last 20 or 30 years, and especially
since the year 2010. The Constitution is a living document. Its sole interpreter is the Supreme Court of India. We can make law, but what we made is interpreted by the Supreme Court. While the privilege of making a law belongs exclusively to Parliament, the power to interpret the law exclusively belongs to the Supreme Court. That is the division of powers. Has the government taken into account two historic judgments of the Supreme Court in the last 10 years? The first is a judgment of Selvi, was a state of Karnataka, pronounced on 5th of May 2010. And the second is the Justice Puttaswamy, was a Union of India judgment pronounced on 24th of August 2017. Selvi says, and I'm not going to quote copiously, Selvi says, while examining narco-analysis, polygraph test, and brain electrical activation profile, commonly called BEEP. Kindly remember these three words because I will refer them again. Narco-analysis, polygraph test, commonly known as lie detector test, and brain electrical activation profile. And the court said, in our considered opinion, subjecting a person to the impugned techniques, these three techniques, is an involuntary manner violates the prescribed bounds of privacy. In the light of these conclusions, we hold that no individual shall be subjected to any of the techniques in question, whether in the context of investigation, in criminal cases or otherwise. Since 2010 in this country, the law in this country is narco-analysis, polygraph test, and BEEP are unlawful, unconstitutional. They violate liberty and privacy. The second judgment in Puttaswamy's case said, an invasion of life or personal liberty must meet the threefold requirement. One, legality, which postulates the existence of a law. Two, need, defined in terms of a legitimate state aim. And three, proportionality, which ensures a rational nexus between the objects and the means adopted to achieve them. This law, which the Honorable Home Minister introduced, goes directly against the pronouncement in Selvi, and it fails every one of the three tests laid down in Puttaswamy. Let's reflect on what we are doing. What we think we are doing is not final. It has to pass the test of the Constitution. It has to pass the test of the Constitution as interpreted by the Supreme Court. And with open eyes, we are considering a law which directly violates, as I will demonstrate, directly violates Selvi and directly violates Puttaswamy. Sir, liberty and privacy are two of the most cherished rights in a democracy. Let me repeat it. There's nothing more important to the dignity of a human being than liberty and privacy, which is why the law is developed all over the world in democratic countries to protect liberty, to protect privacy. Sir, derogation of any right is the starting point of denial of that right. Erosion of any right is a starting point of extinguishment of that right. We think we are only derogating,
but eventually this will lead to denial and destruction of liberty and privacy. We think we are only eroding at the fringes, but this will lead to extinguishment of all rights. Let's look at the provisions one by one. There are 4 key provisions, and I will take 2 minutes on each provision. And under each provision, I will ask a question, and I sincerely hope the Honorable Home Minister will answer the question directly and specifically. First, look at Section 21B. Section 21B of the Act allows the police and the prison authorities to take measurements. The word measurement is defined to include biological samples and their analysis, behavioral attributes, or any other examination in Section 53, 53A, and 54 of the Criminal Procedure Code, which refers to such other tests. I hope the link is clear. Measurements in this law, this bill, has 3 components, but the third component refers to the Criminal Procedure Code, which says such other tests. So the such other tests must be read into this section. Now I ask a specific question, and I pray for a specific answer. Do these measurements include narco-analysis, polygraph test, brain electrical activation profile, and psychiatric examination? If they are not included, let us make it clear. If they are included, let us make that clear. Each one of these is unlawful. And if by measurements, if by biological samples and their analysis, by the phrase behavioral attributes, and by the phrase such other tests, you are including narco-analysis, polygraph, beep, and psychiatric examination, this bill is unconstitutional. Let's take the next section. Section 3. It starts by saying any person. That includes all of us. Any person. Now tell me, I ask honorable members, I wish I could speak in a lighter vein. I ask all members in this House, active political person, trade unionist, social activist, a progressive writer, has anyone not violated any law in this country? When the police say there's section 144, you can't proceed, and you take 2 steps forward, you're violating a law. If there's an order that you shall give security for good behavior, and you don't give security, you're violating a law. And the punishment for many of these offenses is 200 rupees fine, or 500 rupees fine, or imprisonment up to 1 month, or fine. I ask most humbly, is there anyone in this House who's not violated a law? I ask the Honorable Home Minister, who has had an active political career, have you never violated any law? Now, what does the section say? The section says, any person convicted of an offense punishable under any law. So even if you are convicted of an offense where the punishment is 100 rupees, this law applies. If a person is ordered to give security
under section 107, 108, 109, 110, 117 for keeping the peace for good behavior, you are violating the law. If you are arrested in connection with an offense punishable under any law, if a bus driver strays from the bus lane in Delhi, he is violating a law. Detained under any preventive detention law. Is there any member of the Communist Party of India, the Communist Party of Marxist Party, who's never been detained? Since A.K. Gopalan, preventive detention laws are there in this country. And this is any law, any punishment, detention, not a charge, arrest, no charge, even for arrest, for detention, for order to give good behavior, any law, if you are arrested, this law applies. So tomorrow, if the members of the All India Trinamool Congress or the Aam Aadmi Party or the Congress Party march from Gandhi statue to Vijay Chowk and the police stop you, they can arrest you. The moment they arrest you, they will take all your fingerprints, your DNA samples, or behavioral samples. That is the law. Let the Honorable Home Minister say, this is not the law. These sections will be excluded. Then exclude them. And the question is there any person in this House who can say, I've never violated any law in this country, or I will never violate any law in this country? We are not talking about heinous crimes. We are talking about simple laws like order to give good behavior. The third section is section 4. Section 4 says, store, preserve for 75 years and share and disseminate such records with any law enforcement agency. My third question is, who is the law enforcement agency? A law enforcement agency is not defined. Literally, simple, plain English language. Law enforcement agency is any authority enforcing any law. Now, what does that mean? A panchayat enforces the Panchayat Act. A municipal officer enforces the Municipal Act. The health inspector enforces the Food Safety Act, Food and Drugs Act. So, a panchayat is a law enforcement agency. It doesn't define law, it doesn't define agency. So anybody who's got a law, to enforce the law, to apply the law, to implement the law, will get the measurements. He can ask for these measurements and it will be given to him. Is this the intention of Section 4? Why don't you define law enforcement agency? Why do you say law enforcement agency? Any agency which enforces any law will be covered. The last is Section 5. Now, a person is required to give these measurements. That is the first section. Section 5 says, magistrate may direct measurements to be taken, and such person shall allow measurements to be taken. If he refuses, police officer may take the measurements, and if he obstructs the police officer, he is punishable for an offense under Section 186. I ask myself, can these measurements be taken without my consent? Can these measurements be taken against my will? It's not clear whether Section 2, which obliges a person to give the measurements, read with Section 5, which empowers a magistrate to pass an order directing him to give the measurements, if both are read together, then this is involuntary confession.
This is involuntary testimonial compulsion. This is directly violative of Article 20 and Article 21. This directly violates Selvi. This directly violates Puttaswamy. Finally, sir, there are more questions. Has the government been told that the European Court of Human Rights has held that fingerprints, DNA profile, and cellular samples and their retention, storage without consent violates human rights? That's the European Court's ruling. Does the government know that there is no scientific basis, and I say this on authority, there's no scientific basis to presume that any of the measurements, including handwriting, fingerprints, is unique to a person? Does the government recall that UIDAI filed an affidavit saying 6% of fingerprints under the Aadhaar scheme failed, the results failed? Does the government know that in the iris scan, the UIDA admitted that the failure rate is 8.54%? Does the government know that the President's Council of Advisors on Science and Technology in the USA has advised the United States government that DNA analyses are neither valid nor reliable? This is the state of science today. And you are saying science is impelling us to pass this bill. Sir, this bill is unconstitutional. This bill is illegal. We are deceiving ourselves if we believe that we are passing a bill. This bill has a huge net which can embrace anyone in this country. And you know what happens when a law of this is applied. The worst sufferers will be the disadvantaged, oppressive, and the oppressed of the poor. Sir, I oppose this bill. I ask this House to reflect. Since we won't have time to reflect today, I beg of you, send this to a standing committee or send this to a select committee and let them examine and come back. What has waited for 120 years, 102 years, can wait another 102 days. Thank you. Honorable Sri Mahesh Jetmalani. Honorable Chairman, sir, I thank you profusely for permitting me to speak in support of the Criminal Procedure Identification Bill 2022, passed by the Lok Sabha and laid before this Honorable House by the Honorable Minister. Honorable Chairman, I'll first deal with the arguments raised by Mr. Chidambaram, Honorable Member in the opposition. Given his weight, his experience, about the fact that he's been presiding himself or has presided himself over the passing of many statutes. Now, the first argument which he raised was that why after 102 years? Well, I am not one of the people who I'm not associated with the drafting of this bill, but I can only presume the reason why this bill has been passed now. This bill has been passed because the present government, in the light of its experience of the last 7-8 years, has realized that previous governments, including those which Mr. Chidambaram was a part of, have relied only upon the Identification of Prisoners Act, which is an outdated, obsolete act, because the technological use of that act, it no longer holds good except for some provisions. And my lord, advanced technological improvements, particularly the use of biometrics, my lord, which is now the gold standard for investigation of crime and for detection of criminals, is now worldwide used, including USA. And I will point out that some of the facts which he has stated are quite wrong. So, my lord, what I'm saying, I beg your pardon. Force of habit, sir. Mr. Chairman, the first argument is that it is never too late to rectify a delay, particularly when that delay
has been found to prolong detection and trials. And my lord, most important, the conviction rates in this country have suffered as a result of not bringing in the technological advancements in biometrics which help to detect that crime. Honorable Chairman, I'll deal with the constitutional challenges which Mr. Chidambaram has raised later on. But let me deal with his challenge to the definition. He says that the Supreme Court has barred as unconstitutional in Selvi's case, a case of 2010 or 11, the use of narco-analysis, brain mapping, and lie detector tests. The language of this act, this bill, which has been introduced, in no way permits the use of those techniques which Mr. Chidambaram says has been, with Selvi's case says, have been barred as unconstitutional. Mr. Chairman, I would request Mr. Chidambaram and other members of the House to kindly take a look again at the definition which he referred to. Measurements. He cavilled against the definition of measurements. Measurements includes finger impressions, palm print impressions, footprint impressions, photographs, iris and retina scan. I'll come to how important the development in iris and retina scan have been in other jurisdictions and how they've helped in the detection of crime. But he seems to have an objection and says that the world's physical and biological samples and their analysis allow the government to smuggle in indirectly what is prohibited by law, i.e. the results of narco-analysis, brain mapping, and lie detector tests. Now, sir, a simple look at the language, and if Mr. Chidambaram would have read it more closely, he would have realized that all these three methods of obtaining evidence are by inducing an accused person or a convict. You have to induce them with external stimuli. Thus, in the case of lie detector test, you have to put a lie detector. You have to attach an external device to get stimuli. This is neither a physical or a biological attribute of any individual. In the case of brain mapping, electrodes are put to a brain. An external stimuli again to get brain waves and map the responses of an accused person or a convict. And then the third, which is narco-analysis, you use a drug, a truth serum, to extract the truth from a person accused of an offense. The definition of measurements, i.e. physical and biological attributes, do not and cannot take within its sweep these kind of tests. These are not attributes of a person, neither physical or behavioral, but these are tests conducted and responses given, either oral, in the case of truth serum drugs, or behavioral, sensory, in the case of others, like, for instance, brain mapping. So you give a sensory response. Neither of these come within the definition of physical or behavioral attributes. And so my friend Mr. Chidambaram, and not here I agree with him, I must say I am in agreement with him, has a problem with Section 3. And many people have had this problem. It has been voiced in the other house as well. He says that certain classes, apart from convicted criminals and people arrested and facing trial, he says, the other classes, which are those who are to give security, and they are mainly for petty offenses, and detainees. And what I'm particularly concerned about detainees, because we know the rigors of the emergency. We know what Mr. Chidambaram's government did
in 1975 when they detained thousands of opposition leaders for petty offenses, purely on political grounds. So I'm in agreement on that issue. Perhaps that part needs a second look at. Convicts and under trials must be subjected to the provisions of this Act. But there is a case made, and I agree with Mr. Chidambaram, as I said, that yes, people under 110 of the Criminal Procedure Code, that is for giving security for good behavior, and the other class of persons, detainees mainly, who can be subjected to political vendor, and experience shows, particularly in 1975, more than 20,000 people were subjected to that kind of treatment, should be prohibited from the rigors of this Act. Then, sir, he says, Section 4, and he says that on law enforcement. Now, as far as law enforcement is concerned, this is only sharing evidence. This is only the sharing of evidence. Other investigating agencies involved in law enforcement, they only get to analyze that data. So the origins of this entire record basis came in England in 1920. In 1920, this act was passed. Now, one of the criticisms I've heard in the other house, when I've heard their speeches, is that this is a colonial legislation. You are perpetuating a colonial legacy and, in fact, making provisions which are even more stringent. The fact of the matter is, A, it is not a colonial legacy. In England itself, in 1901, police first started using the kind of measures which the 1920 Act contemplates, which is fingerprint. At that time, those were the only biometrics. Fingerprints, footprints, and photographs. So those were the only measures used, and they were not colonial because they applied as much to UK citizens as it did to all colonies. What is colonial is the attitude in not updating those biometrics by present legislation. And that is what his government has been guilty of all these years. The Congress government, the UPA government for all these years, has not upgraded those biometrics to include the latest cutting-edge technology in biometrics, which I will come to at present. So the present bill seeks to replace and repeal the Identification of Prisoners Act. As I said, that had a limited scope, and in those days, the only measurements were photographs, footprints, and fingerprints. And today, we have much more. In the old days, there was a manual system of filing. So you had photographs of convicts and their fingerprints attached with it. There was a manual system. What this act seeks to do is to replace that outdated manual system with an updated digitalized system. In the old days, it used to be called a rogues gallery because only pictures were there. What my learned friend is asking for is a restriction of that rogues gallery on the basis of those biometrics only in use in 1920 and don't do it. Biometrics have always been in use. You always had to give your fingerprints and your footprints. But the new methods of identifying accused people, criminals, murderers, rapists, and the new methods have all been successful in detecting them. Those methods, for some reason, he finds intrusive. Now, one of his constitutional challenges I have already dealt with. I'll come to a second one now. The second constitutional challenge, the first one I take it is based on Selvi's, which is the right against self-incrimination, Article 23, which is on testimonial compulsion. Is the right of privacy. Now, so the right of privacy is like an unruly horse.
If you don't control it, it gallops away. The right of privacy is available to all honest citizens, to people who are not propelled towards crime or have committed crime. Mr. Sitharaman says that the right of privacy should also inure for murderers, rapists, fraudsters, forgers, and terrorists. Why? All that is being done is that a record is being kept of your misdeeds. And there are limitations. It only applies to two categories of persons: convicted criminals and to under trials. Please, Sirvan. It applies to under trials as well. Now, as far as under trials are concerned, there's a clear prescription in the proviso to Section 4. The proviso says that if you are acquitted, if somebody who's arrested but is subsequently arrested or discharged or not sent up for trial, any of these three categories, then the records which were obtained at the time of his arrest will cease. They'll be deleted. They'll be erased from the record. So there is adequate provision for that. Then there is a second. As regards under trial for offences with more than 7 years. So anybody arrested for an offence of more than 7 years, he has the right to protest. In his case, it is only with his consent. For an offence with less than 7 years, the period. So if he is arrested for an offence with less than 7 years, only a compulsory subjection to an examination is ruled out. He has a right to protest and say, my offence is only less than 7 years. I do not want to give this. It is only in the case of arrestees who have been arrested for offences, serious offences, punishable with more than 7 years, does the Act come into operation. Now, so the second constitutional challenge which Mr. Chidambaram pointed out was a violation against privacy. Now, the judgment he referred to is Puttaswamy. If he had read Puttaswamy's judgment properly, he would have realized that that judgment of 9 judges is replete with references that in the case of detection of crime, the right of privacy stands excluded. It has referred to the European Convention, which says that detection of crime is an exception to the right of privacy. But he seems not to have read that part. Now, sir, what are some of these techniques which have been developed? Let me give you an example as to how useful these are and what is sought to be excluded on the grounds of privacy and other. Now, these are very important issues, but they are both misconceived, misplaced, and the Act does not violate those provisions of the Constitution. So, as far as the progress in, one of the progresses that have been made, one of the advances that have been made in biometric development has been iris and retina scans, specifically referred to in the measurement section. Now, please see why the iris scans are better than fingerprints. So nobody says any scan, no biometric can be 100% foolproof. We have used handwriting evidence. We have used signature evidence. We have used other types of evidence, including obtaining of nails, skin, etc. But many cases, that evidence has not stood up. But that doesn't mean that there are not good cases where that evidence will stand up. Many convictions have taken place on the basis of flawed biometrics, and convictions have taken place. Now, sir, see why iris scans. Iris scans
are better than fingerprints for identification purposes? A, because they are more detailed and accurate. B, they are more sanitary. C, unlike fingerprints, they do not change from wear and tear. And finally, they are fast to scan and quick to retrieve. Now, sir, when someone's iris is scanned, what happens is a binary code of the image is created. It is this code of about 500 bits of data that is stored in a database. When that person later goes before an iris recognition scanner, the iris scan is measured against the code in the database and identity is authenticated. Now, sir, how fast is this technology evolving? A Carnegie Mellon engineering professor, which is already adopted in the United States, in some states, has recently developed the first long-range iris scanner, which can identify if a murderer or a thief runs away in a getaway car from the scene of the offense. A police car chasing him can find out if the driver, if the criminal running away looks at his rear view mirror. The driver behind him of a police car chasing him can, from that very glance in a rear view mirror, find out the identity of the person. Wow. It is that advanced. And members of the opposition would not have that as part of a biometric testing data. And so the retinal scan is even more efficient. It assures the highest level of security, and out of all the biometric measures, the retinal scan is the most reliable biometric authentication system. Retinal scanning is actually used at high-risk centers like airport bases and border patrols. All this we should be using because it will help in detection of crime. Now, sir, since I'm from Maharashtra, I am particularly bemused by the fact that members of Parliament from Maharashtra should be opposing this bill. On the 31st of March, I read an article, and I was highly proud. I was highly proud because it said Maharashtra to be the first state to launch criminals' biometric database. This is what it said: a digital fingerprint and iris scanning system to aid police investigations with a database of 6 lakh people with crime records will be launched by Maharashtra CM Uddhav Thackeray on Saturday. That was supposed to be on the 2nd of April. It was Gudi Padwa Day, New Year. Yes, it is on the 31st of March. Please. Please. Called automated methonomical biometrical identification system, AMBIS. It is a different kind of data digitalization. We have specific data on estimated 6.5 lakh on under trials and convicts. The entire information has been validated by the Bureau of Fingerprint experts. It will help law enforcing agencies track criminals, and that too at lightning speed. How is the government, an Agadi government in Maharashtra, which is about to introduce this database, opposing a bill which has a similar provision for a record, for a database? Mr. Jethmalani. I know, sir, but I'm told by honorable friend, Mr. Sitharaman is also elected for Maharashtra. Mr. Jethmalani, please. Mr. Mahesh Jethmalani, please. आप पीछे से yes, I know, I've heard. Please, Mr. Mahesh Jethmalani, please. There is a point of order, please. 1 minute.
Sir, I don't like to disturb the member because it breaks the flow, but it is known. So 238 is my point of order, and it is on 238, page 84, part 5, reflect upon the conduct of persons in high authority. Chief Minister of Maharashtra is high authority. Wait, let me finish. Please. Let me finish. Please, please. Sir. Please, please. Please, please. Sir, this is the problem. Please, आप सब. Please, please. 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 Sir, I would like to ask the Please. Honorable... Please. Please. Sir, Please. it is not whether good, bad, indifferent. I am only sticking to the rules. I don't want to disturb the members. Right, Mr. Derek. Simple. We'll examine. Yes. If you have a discussion, if you mention, it has to be based on a substantive motion drawn in proper terms. Please, I'm thank you. afraid We'll this examine. is not drawn on proper terms. Please. Substantive Please. motion. Thank you. Why should I want to disturb Thank you. If you're playing. Sir, I am referring to a newspaper report which hasn't been denied, and in fact, in my opinion, contrary to that of the learned member from West Bengal, the conduct of the chief... Please. The conduct Please. of... Please. The conduct of the Chief Minister of Maharashtra deserves commendation. Yes. I am actually praising him for having the same kind of record in Maharashtra. My learned friend doesn't understand that this is an act of praise on my part, not an act of condemnation. I am saying he should have followed it through. But of course, if you want to defend a rogues gallery, like some members on that side want to do, Eloquently counter-arguing our this statement. But I want to ask him, and here, always in this house, Please. always in this house, we have followed that no papers should be referred. Means whatever statement comes in the paper, Yes. that We'll cannot see. be taken into We'll see, this house. And We'll see it. We'll see. Yes, we'll see. We'll see. sir, Please. my flow will Please. not get disturbed by these kind of interruptions. Please. All I will say, sir, is that, I repeat, the gentleman who I referred to needs condemnation. He was supposed to launch this on the 2nd on Gudi Padwa Day. I am a little surprised. Perhaps it was a case of political opportunism that because we introduced this bill, that launch was stopped. We stole the thunder which he was expecting to deliver. But I don't know. Sir, also, sir, I wonder whether those opposed to this bill are aware of one more project. And they should be made aware. Because it's all very well to talk on high constitutional provisions. After all, you're a learned lawyer, you're a constitutional expert, you're a one-time minister. But you can't run away from facts. So people are impressed by that kind of a persona. But sir, behind it, there are no facts. Now, sir, there is something called the Crime and Criminal Network Tracking System. And incidentally, there may well be a conflict of interest on Mr. Sitharaman's part to raise this issue in this house. Because he stands accused of a crime. I wonder whether those opposed to this bill are aware of CCTNS, Crime and Criminal Network Tracking System, a mission mode project under the National E-Governance Plan of the Government of India. Now, sir, under the aegis of the National Crime Bureau, the same bureau which is going to record data, in this case, the same bureau, the National Crime Bureau, 36 states and union territories, as of 25th August 2020, are sharing a pan-India database consisting of precisely the type of records contemplated by this Act. So that there seems to be doublespeak on the part of members of the opposition. There is no unconstitutionality, there is no illegality. It is true that there's a case of disproportionality in the case of the types of persons covered by the Act. There is no point keeping arrestees and serious criminal convicts in the same category as detainees. There I agree and I empathize. And perhaps that is my only criticism of the Act,
which I would kindly request the Honorable Home Minister to look into. We don't need to categorize these kinds of people with convicts and under trials. Under trials, acquitted in any case, have a right to have their records established and not to be forgotten. But sir, as far as criminals are concerned, this is a very, very important act because, sir, crime never dies, A. They have a right to be forgotten. Criminals have a right to be forgotten, but that right will only take place after they die posthumously. Then their records may be erased. Records in this country, by the way, sir, I may just say one more thing. Records in this country can be maintained for 75 years. One honorable member of the Lok Sabha said that in England, in India, the average age, life expectancy is 69. Why have it for 75 years? So I may say that in England, records are preserved for 100 years from the date of birth of the criminal. For 100 years, for much more. And the life expectancy there is 80 years. So there is nothing wrong in having this. So as I said, sir, criminals have a right to their records being erased posthumously. Posthumously. Unless, sir, they happen to be unfortunate enough to have their case the subject matter of a law report, in which case their misdeeds will remain forever. Sir, I wholeheartedly support the bill and all its provisions barring one. Thank you. Mani Shri Sukhendu Shekhar Roy. The Honorable LOP said, I think that cannot be a point of order because newspapers can be referred based on if it falls, if the subject is within the business of the council. What he quoted is exactly the subject matter of the discussion. Therefore, please. Sir, 235. Sir, 235. No, this. Sir, 235. 235. 235, sir. It clearly says. Yes, sir, yes, please. Sir, 238-2. Yes, tell me. 238-2. 235-2 shall not interrupt any member or shall not read any book, newspaper or letter except in connection with the business of the council. ये तो the bill का subject है. Please. So the Honorable LOP is wrong, sir. Please. Mani Sukhendu Shekhar Roy, please. Sir. Please. Manu Sukhendu Shekhar Roy, please. My time should start please. from now. Sir, please. Sir, my time should run from now only. Yes, you speak. Let me submit before this August about the historical background of enactment of the Identification of Prisoners Act 1920. It was in fact in 1915 that the government of Bengal drew attention to two revolutionaries convicted in the Raja Bazar bomb case in Calcutta, who were most persistent in their refusal to be photographed, and as a result thereof, Government of Bengal suggested amendments to the Police Act and the Prisoners Act. And this was how the 1920 Act came into being. But it was done by the colonial rulers to suppress our liberation struggle for the freedom of our motherland. But sir, now after 75 years of independence, after so many sacrifices made by our forefathers, the present rulers have stepped further in the name of developing the criminal justice system to throttle the voice of all those who are opposed to the anti-people policies of this government. This is my first charge against this government so far this bill is concerned. Sir, there cannot be clause-by-clause discussion due to paucity of time. Only 3 hours, I don't know why. This draconian bill shall be discussed within 3 hours. Anyway, the government even does not agree to refer the bill to the select committee. The way personal and biological data intended to be collected by force, and the government desires to pass this bill by use of brute majority, is a fascist move
more oppressive than the East India Company rulers. Sir, if this bill is a foolproof of bringing the culprit to book, then why this bill was not referred to standing committee? My second charge against this government insofar this bill is concerned. No, standing committee before the introduction of the bill. Forcible collection of physical and biological samples of arrested persons under trials and those held under preventive laws and convicts are keeping the data for 75 years violate the principles of natural justice. This is my third charge against this government. Third, the bill, sir, equality before the law and equal protection of law under Article 14 shall be a myth. If this bill is passed, there shall be denial of protection under Article 20, Clause 3 of the Constitution, which says, and I quote, "No person accused of any offense shall be compelled to be a witness against him," unquote. But Clause 6.1 of the bill prescribes inter alia for that if a person refuses to allow taking of such measurements, it shall be lawful for the police authorities or the prison officer to take such measurements in such manner as it may be prescribed. It is vague, completely vague. This is against the provisions of Article 20, sub-Article 3 of the Constitution, and such vague and unlimited prescription has the competence to allow the head constable or the head warden to adopt even third-degree method to compel a person by physical torture for taking the measurements. This is my fourth charge. My fifth charge. The bill also poses danger of DNA profiling of certain communities or groups. Remember, everybody should remember that according to the available data, 60% of under trials in Indian jails belong to the SC, ST, OBC, and minority communities. With the effective and extensive use of DNA data in cases, these communities will increasingly suffer the burden of perceived criminalism. The arrested persons or under trial prisoners will be vulnerable in the absence of personal data protection law, which has been pending since 2019, as rightly pointed out by Mr. Chidambaram. The draconian provision of this bill will be considered as part of other measures enacted and implemented by the government for control and surveillance of the people, even after the ruling of the Supreme Court that right to privacy constitutes fundamental right. Therefore, this government has willfully neglected and deliberately failed to show any respect to the judgment of the apex court of the country. Sir, my next charge to this government is that what is the opinion of the scientific community? Has this government taken the opinion of the scientific community about the measurements? The scientific community has raised serious concerns about the foundational validity and the value of many of the measurements covered by this bill and the inadequacy of the legal standards used to assess them. For example, I'm giving one example. There is no scientific basis for attributing uniqueness to handwriting samples, which is one of the measurements covered under the bill. That the lack of clarity in the collection and usage of the measurement heightens the possibilities of misuse, particularly of biological samples and their analysis. That the bill presents significant concerns of excessive delegation of legislative authority to the rule-making bodies, as well as excess delegation of power to functionaries under the bill in violation of Article 14 of the Constitution. Sir, these functionaries include police officers at the rank of head constable, magistrates, as well as prison officers. In addition, the bill creates an unreasonable classification between classes of arrestees that may be compelled to give biological samples and those who may not. Several other provisions fail to disclose any adequate determining principle at all and pose grave concerns of manifest arbitrariness. That the bill also fails to meet the fourfold requirement of the doctrine of proportionality laid down in the Justice case, Puttaswamy versus Union of India case. That the absence of demonstrated rational nexus
between the legitimate aims of the bill and its coverage of persons who may be compelled to provide their measurements renders the bill an unsuitable means of achieving those aims. Regardless, the provisions of the bill also constitute an unnecessary and disproportionate infringement of the right of privacy. That this bill has wide-ranging implications for the right to privacy, equality, and for the integrity of the investigative process. Sir, before I conclude, I would like to say what is the assessment of the scientific community. One or two bullet points. Sir, so far, clause 2, 1B of the bill is concerned. It says about different measurements. I have time left, sir. No, you have 8 minutes. 7 minutes, my time is 8 minutes. Then, no scientific basis. There is no scientific basis to attribute uniqueness to an individual's writing samples. The identification by footprint impression is an imperfect science, and this alone is insufficient to connect the accused to the crime. No standards for the guiding the examination of fingerprints. Same finger can produce different fingerprints under different circumstances. There no consensus exists when comparing palm impressions, and the analysis also prone to errors with a high rate of false negativism. Authentication failure at the national level is 8.54%. So I conclude with this, that I oppose this bill, and before that, I would urge upon the government to refer the bill to the select committee. Next speaker, Sri Richi Siva. No, sir. Time. Please. What is your point? Please, sir. Yes, sir. What? See, my name. Therefore, I am raising this point of order. If the chairman is of the opinion that a word or words that have been used in the debate, they are defamatory, indecent, unparliamentary, or undignified, he may, in his discretion, order they may remove. Sir, no. We will examine it. Examine kara lenge. Examine kara. Please sit down. Sri Richi Siva. Please sit down. We will examine it. Examine kara lenge usko. Please sit down. Please sit down. Sri, please sit down. Please sit down. Please sit down. बैठिए please. Please Trichy Shivaji. Trichy Shivaji. शांत रहिए please. Mr. Vice Chairman, sir. Please, Susmita ji, please. Trichy ji, please you continue. Mr. Vice Chairman, sir. You continue, please. I stand to oppose this bill, for it is repressive, imperious, and oligarchic in nature. Sir, at the outset, I would urge the government why it should be so hasty to bring this bill and discuss within a constrained time of 3 hours, rather than consulting the stakeholders. That's what our senior colleague and former Home Minister asked here. Why can't you wait for 102 days? Any bill cannot be just rushed through and can be passed with the majority a party may have in the Parliament. It should be discussed elaborately. See, our time is squeezed and we have to put forth our views so urgently. So we would urge, we have moved a motion already. So kindly refer it to the select committee, whereas the stakeholders will appear before that and members would also have ample time to express their views. And I think this bill can be brought in later with the necessary amendments. Sir, this bill erodes the fundamental rights of the citizens of this country. Strong implications on the civil liberties and basic human rights. It raises strong questions on the right to life, right to privacy, and the right to live with dignity. This is unconstitutional. Why it is unconstitutional? As everyone pointed out, it is violating Article 14
Article 23, Article 21. See, when the Constitution provides for every person to live with dignity and equality, it takes away all the rights. Sir, the bill, of course, as it is said in the statement of objection reasons, the purpose of bringing this bill is that measurement techniques being used in advanced countries are giving credible and reliable research and are recognized world over. We accept it. But our concern arises. Before that, I would like to ask, if you are following the world over, you have to think about the right to forgotten right to be forgotten. See, it is practiced in Argentina, it is in European Union and in Philippines. What is right to be forgotten? Any information, private information about a person be removed from internet searches and other directorate under some circumstances. But here it is not so. The measurements that are collected will be stored for 75 years. Our concern arises and apprehension comes where? When the ambit of person is expanded. When the ambit of measurements is expanded. This is our basic concern. When the ambit of person is expanded, earlier the Prisoners Act 1920 was confined only to the prisoners and of course those who were convicted. But now this is any person. Who are there any person? It's a very, very sensitive and, as I said earlier, sensitive bill. We are afraid. You are armoring yourself with much more draconian laws. Already the UAPA you amended, which declared that even an individual can be identified as a terrorist and can be detained by the NIA. Now what is this going to lead? Everyone has got their own thing. Even a person under preventive detention will be compelled to have measurements. But if the person refuses, automatically what will happen? It shall be lawful for the police officer or prison officer to take such measurements in such manner as may be prescribed. And who is the police officer? As per the bill, a head constable. And who is the prison officer? A head warder. How will he take the measurements? Because the measurements are not just like ordinary fingerprints, finger impressions, palm print or footprint, photographs. It doesn't stop with that. It goes to retina and iris. It goes to biological and physical samples. And also behavioral attitude, including signatures, handwriting. And such other examination referred to in section 53 of the CRPC. That is much more, because everyone knows that. I think I may not have enough time to explain that. Section 53 of CRPC very clearly says that, which may afford us, and to use such force as a reasonably necessary for that purpose. What such force? See, the police officer or anyone can use force against anyone. Sir, I think I thought I have left with 5 more minutes, but 5 more minutes is exhausted. I got just 1 more minute. Let me complete, please. And it says the preventive detention. See, when you have expanded the ambit of persons, it is bothering. We are having the apprehension that the government may use this against the political parties, against their personal whims and fancies. Wait, just 1 minute, just give me 1 minute. Please conclude. And anyone who is not in favor. Political activities, not only political, social activities, even writers, literate, everyone will be punished. Thank you, Triji. So one moment. Thank you. I would like to conclude Please. with one word. Yes. I would like to say very humbly, in the natural process of democracy, I would like to remind the ruling party, one day you will be out of power. Thank you, Triji. One moment. Thank you, please. And at that time, Call next speaker, please you conclude. will be regretting for all the Please. laws you have enacted Next in this speaker, house during your tenure. Shri Thank you very much. Sujit Kumar. Seeks to replace the Identification of Prisoners Act 1920, over 100 years old. And also, it shall interact with the provisions of CRPC
and also with the DNA Technology Regulation Bill 2019 whenever it becomes an act. Sir, the bill seeks to collect what it terms as measurement defined in clause 2(1)(b) from certain classes of persons mentioned in clause 3 and allows for processing, storage, dissemination and destruction of these measurements. And the stated aims and objectives are prevention of crime and better identification and investigation in criminal matters. Sir, who can dispute these aims and objectives? We do acknowledge that in our country we have serious internal security challenges from anti-India forces, and also the conviction rate in our country is amongst the lowest in the world. Sir, there is a cardinal principle of criminal justice system that what deters crime is not the quantum of punishment, but rather the certainty of punishment. So, sir, any legislation which empowers our law enforcement agencies and government to prevent crime and better the conviction rate is always welcome. Now, sir, what measurements can be collected under the bill, who may be compelled to provide the measurements, and who can compel it? These are all mentioned in the bill, and in the interest of time, because of paucity of time, I will not get into details. Rather, sir, I will limit myself to two brief points. One is regarding the constitutionality of the bill, which my previous erudite and learned speakers have already touched upon. And secondly, regarding the administrative and procedural matters in implementing this bill. Sir, first and foremost, there are certain ambiguity with regards to definition. Certain terms have been left undefined and unclarified. The bill does not provide an exact definition of measurement. The definition provided in clause 2(1)(b) is open to an expansive interpretation. Further, terms used like biological samples and the analysis of biological samples remain undefined. This is a deviation from section 53 of CRPC, which clearly defines samples on which examinations can be conducted. However, under this bill, it is not clear what kinds of measurements constitute biological samples. I'm not even getting into Selvis, the famous judgment which Honorable Member Mahesh Jetmalani and Honorable Member P. Chidambaram went into. But, sir, I'll definitely highlight clause 2(1)(c). Clause 2(1)(c) defines police officer, means the OIC of a police station or an officer not below the rank of head constable. Sir, with due respect to head constables of this country, sir, I think they are not adequately trained to handle such sensitive matters. So at least the police officer should be of the rank of sub-inspector. Sir, thirdly, in my humble view, many provisions of the bill are manifestly arbitrary. Sir, in Saira Bano versus Union of India, the test of arbitrariness was established as a ground for invalidating legislation, parliamentary legislation under Article 14. In that case, Justice Nariman observed that a legislation is manifestly arbitrary if the same, and I'm quoting Justice Nariman, done by the legislature capriciously, irrationally, and or without adequate determining principle, then the law is excessive and disproportionate, unquote. So this test as a means of invalidating legislation has been acknowledged by the majority opinion in the Aadhaar judgment as well. Sir, I have 2-3 more minutes. Please. It is my argument that at several instances the bill does not disclose any rational principle and probably is arbitrary, which may face judicial scrutiny. Sir, I'll give an example from the bill itself. Clause 6 fails to provide clear guidance to individuals as to when a refusal to allow the collection of measurements constitutes an offence. Sir, in Sriya Singhal versus Union of India, section 66A. Sir, I have 6 minutes, sir. आपका समय समाप्त हो गया. Sir, 6 minutes, sir. नहीं, please. Sir, 2 more minutes, sir. Please, 2 more minutes. Sir, in Sriya Singhal versus Union of India, section 66 of the IT Act 2000 was struck down for its arbitrariness and vagueness, with the court observing that 66A did not provide any manageable standard by which to book a person for an offence. It arbitrarily, excessively, and disproportionately restricted the freedom of speech. Sir, I fear the same is the case here,
and the legislation may be open to unnecessary challenges in the court of law. Sir, I agree with my previous speakers regarding section 3, which brackets convicts with people, activists like us who are in public life, who are often asked to give security for good behavior. So, sir, this is unfair. And, sir, right to be forgotten, as was articulated by Tichi Shivaji previously, as enshrined in the Puttaswamy judgment, also probably has not been taken into account in this bill. And the three tests, legality, need, and proportionality. So I think it meets the legality and need test, but the proportionality test may not be met. Sir, to conclude, give me 30 more seconds, sir. While I agree with the intention, probably the intention of the government is noble, and it's an important endeavor to improve the effectiveness and efficiency of investigation in our country. And also the Honorable HM in his reply in Lok Sabha mentioned that the government has brought this bill with the intention of preventing crime, protecting human rights of crores of Indian citizens, and enhancing our security. Concede, sir, I concede these intentions. But, sir, I think this bill will create great administrative burdens and may not deliver on the promised returns while also infringing on the fundamental rights. So, sir, to conclude, while the bill has a legitimate aim of improving investigation, detection, and prevention of crime, it fails to meet various tests of constitutionality, like the test of proportionality, and also fails to satisfy administrative and procedural aspects of implementing the bill. So, sir, I request the government to send it to a select committee. Please. Next speaker, Sri V. Vijay Sai Reddy. Vice Chairman, sir. Sir, I, on behalf of my party, YSR Congress Party, stand to support this bill, sir. Yes, I'll come to you also. I'll address your issues also. Even though the bill is draconian, even though the bill can be described as strengthening of police, lawyers and judges, 2022, this should be named as that. Still, I support this bill because of these misdeeds of the Congress party. I am addressing that, sir. This bill I am supporting for 3 reasons. I support the Honorable Home Minister and I appreciate the Honorable Home Minister and his efforts in this regard. Sir, there is a low conviction. This bill will ensure that there will be low conviction. As of now, there is a low conviction rate in India. This will improve the conviction rate. Murder, the conviction rate in India, murder 41%, rape 39%, attempt to murder 24%. Accused were convicted only, this is the percentage. Let us compare with that of the conviction rate abroad. United Kingdom, 83.6%, USA 93%, Japan 99%. This is the first reason why we are supporting this bill. Sir, then efficient investigation. Sir, this fingerprints already practiced in our country and it is there in the World Act. Sir, I'll refer to one example. Bodh Gaya blast in 2013. Buddhist robe was found abandoned at the crime site. What happened? Sir, the strands of hair from the robe matched with the strands of the suspected, therefore he was caught. Therefore, there is absolute necessity as of now to strengthen the law, and it is the honorable it is the former finance minister and former home minister of this country belonging to Congress party has misled this house, sir. Sir, this CCTNS connects all police stations in the country into one central database and facilitates real-time information sharing between the different states, which is laudable. At this point of time, sir, I request the Honorable Home Minister, the enactment that has been done by Andhra Pradesh government, that is AP Disha bill, which is more stringent, which will prevent the assault of women and women. Therefore, I request, because it is pending with the Honorable Home Minister, I request the Honorable Home Minister to clear AP Disha bill immediately, instantaneously, without any further delay, sir. Sir, I would like to mention few points in this regard.
Sir, there are only 2 minutes. Give me three more minutes. Let me explain the Congress rule. What happened? 26/11/2008 blast, Ajmal Kasab massacre. It has happened during Congress regime. Pune bombing, February 2010, happened during Congress regime. 2007, Samjhauta Express blast, happened during that Congress regime. 2008 Assam bombings, happened during Congress regime. It is Congress party which has encouraged all terrorist activities, and the country has suffered the most. Sir, at least now, sir, let me say that under Modi. Please sit down, please. Sir, please sit down. Please sit down. Please sit down. Please sit down. You sir, can, let me you say continue, that. please. You sit down, please. During Please Congress sit down. rule, during Please sit Congress down. rule, Please. more particularly No. during Chidambaram and also Ghulam Nabi Azad. तो विजय साई रेड्डी जी बोल रहे हैं रिकॉर्ड में जाएगा. Nothing will go on record. No, please sit down. Please sit down. Internationally as a weak nation. Sir, let me say, Please sit sir. down. Please sit down. Sir, during Modi ji rule, Modi ji regime has changed the national विजय साई रेड्डी जी, security. please. मान्य. You sit down, please. मान्य गृह मंत्री. माननीय अध्यक्ष, मैं इतना ही कहना चाहता हूं, कांग्रेस के मित्र को सहनशीलता और धैर्य दोनों रखना चाहिए. हम आराम से उनकी बात सुन रहे हैं, वो इनके खिलाफ बोलते ही क्यों खड़े हो जाते हैं? जब आपके सदस्य की बारी आए तब आप बोलिए ना, इसका जवाब दीजिए. विजय साई रेड्डी जी, please. Sir, during Modi ji's regime, the national security software has changed, and the country and India, if some other country invades India, the Modi ji can retaliate. This is what the people of the country as of now think. Sir, Modi ji no running commentary, please. does not No running recognize commentary, even please. national borders. He can even conduct surgical strikes even to the neighboring countries also, sir. Therefore, sir, let me say, sir, few words. Sir, Honorable Finance Minister, Chidambaram ji, please keep quiet. Please. You continue. Sir, केवल जो विजय साई रेड्डी जी बोले वो रिकॉर्ड में जाएगा. Nothing will go on record. You continue, please. Sir, I am not wasting time. Let me resume, sir. Honorable former Finance Minister, Thank you, Chidambaram, Vijay Sai Reddy ji. and also former Home Minister, has said that it should be referred to the Select Committee. I am asking one question to Chidambaram ji. During his regime, Congress regime, as Home Minister and Finance Minister, how many referrals he has made from this House to the Select Committee or Standing Committee? Let him introspect, sir. 2 more points, Thank sir. you. Sir, Thank you, Vijay Sai Reddy ji. Sir, Please conclude. One point, last point. Sir, Chidambaram preaches something and practices differently, sir. That is his habit. That is an example what the false cases he has foisted on YSR Congress party leaders and our leader YS Jagan Mohan Reddy and myself. The person with an ulterior motives, he is working here as a member of this parliament, and we strongly oppose his governments made in this House, sir. धन्यवाद Thank विजय you साई very रेड्डी much. जी. श्री ए नवनीत कृष्णा. I have done it. Do you counter it? Nasir Hussain ji, no running commentary, please. Please, no running commentary, please. No, please sit down. You sit down, please. You sit down, please. You sit down, please. No, you sit down, please. You sit down, please. Please sit down. No, you sit down, please. I am on the lax, the chair on the lax. Please sit down. No, you please sit down. Mr. Naveen Krishnan ji. Thank you, sir. Wait a minute. Sir, please hear me. This is the rightly legislative intervention made by our central government, especially our Honorable Home Minister. I am reading from the judgment. While these arguments merit consideration, it must be noted that ordinarily it is a task of the legislature to arrive at a pragmatic balance between the often competing interests of personal liberty and public safety. This is the portion available in
Selvi versus State of Karnataka. It is, I am reading only from Selvi versus State Please of address the Karnataka. chair. So the competing interest of personal liberty and public safety. So now everybody is suffering from want of good opportunity to commit offence. This is the order of the day. So now what is happening? And also I am telling, I quote from Albert Einstein. It has become apparently obvious that our technology has exceeded our humanity. This is Albert Einstein. Now already I have made my statement several times. The technology has taken over the human race. So now this is my statement. So my humble submission would be, the bill is well within the constitution. It does not violate any law, any right. So you want to remain to be silent after committing offence. That's all right. It can be done. No wrong in it. Because of Article 20, subclause 3, you are saying that right to remain absent is my constitutional right. It is only a testimonial compulsion alone is prohibited. Other evidences, taking for example, taking blood from me. I am driving a vehicle after consuming alcohol. I am bound to provide blood. So I cannot say that Article 20, subclass 3 will come into picture. So the larger public interest demand this kind of bill. The bill is the right intervention to save India. Integrity of India, it is in the Constitution part 3. Public order, it is available in the part 3 of the Constitution. So it is only to fulfill, to enforce the fundamental rights, personal liberty of each and every citizen. The bill is being brought in, that too, without any delay. This is my view. 1 minute, sir. Sir, I would like to say the Puttaswamy case is arranged the right to privacy and Article 21, but it is subject to reasonable restrictions. Reasonable restrictions. It is not a freehold right. You can do whatever you want. So Puttaswamy case is only in favor of this bill. And also Selvi versus State of Karnataka also only in favor of this bill. I would like to draw the kind attention of this August body. I am trying to place it, this article 1 minute, sir. Thank you. Expanding frontier of Nero law. Thank you, Deputy Kishanji. Selvi versus State of Karnataka. Now the technology has developed without right to silence, without remain silence. One can be subjected to technology. Thank you, Deputy Kishanji. Truth can be found out. This is one line, sir. Please conclude. Sir, one line. The conclusion, Nero scientific development is constantly expanding horizon to understanding various mental aspects as well as an association of neuron to the behavior of a person. The above findings suggest there is a potential for the neuroscience to affect change on the jurisprudence. It can make a positive contribution to the legal discipline. The decision of Supreme Court of India in Srimati Selvi and others versus State of Karnataka and another case is affected by this new development in neuroscience, which is neuro law to study. Thank you. Thank you. Next speaker, Professor Ram Gopal Yadav ji. Right, sir. Thank you, sir. धन्यवाद श्रीमान। केवल 2-3 मिनट हैं। पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं इस विधेयक का विरोध करता हूँ। इसलिए क्योंकि ये जो मौजूदा विधेयक जो लाया गया है वो देश के कई प्रचलित कानूनों का उसमें उल्लंघन हो रहा है और जब ये पास भी यहाँ से हो जाएगा तो ये आप भी जानते हैं और सारे लोग जानते हैं, ये निश्चित रूप से देश के सर्वोच्च न्यायालय में चैलेंज किया जाएगा और कई चीज़ों में इसमें सुधार होगा। फिर कोर्ट कई बातों को, कई शब्दों को इसमें से हटा देगा।
जो अनावश्यक रूप से जोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं। आप जानते हैं कि ये कोई फर्क नहीं करता है हार्डन्ड क्रिमिनल और सामान्य व्यक्ति में। जैसे ही गिरफ्तार होते हैं बड़े अपराधी टेररिस्ट के फिंगरप्रिंट लिए जाएंगे, जैसे ही वैसे आपके भी लिए जाएंगे। तो ये प्रोफेसर डायसी ने जो रूल ऑफ लॉ में कहा था, ये उसका भी फर्क है, और जो उसके अनुसार भी नहीं है, और हमारे संविधान के अनुसार भी, चाहे आर्टिकल 14 हो, चाहे 19 हो, चाहे 20 हो, चाहे 21 हो, स्पष्ट रूप से ये है कि किसी व्यक्ति को अपने ही खिलाफ गवाह नहीं बनाया जा सकता। फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन है, लेकिन इसमें हो रहा है। तो ये सारी बातें हैं जिसकी वजह से इस विधेयक, इस कानून का जो बन जाएगा कानून यहाँ से पारित होने के बाद, उसका कुछ न कुछ उसमें संशोधन होना, और जब रिव्यू हुआ जुडिशियल रिव्यू, तो निश्चित रूप से होना है। जो हमारे मित्र लोग यहाँ अभी बोल रहे थे, ज़्यादातर वकील लोग थे, और आप जानते हैं वकील बुरा न माने, किसी भी सफ़ेद को स्याह और स्याह को सफ़ेद कर सकते हैं, उसमें कोई बात ही नहीं। दे आर कॉम्पिटेंट इनफ टू प्रूव देयर पॉइंट इन एनी वे। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर ये लोग मांग करते हैं, विपक्ष ये मांग करता है कि इसको सिलेक्ट कमेटी में दे दिया जाए, तो श्रीमान माननीय गृह मंत्री जी, सिलेक्ट कमेटी में आपका ही बहुमत होगा, आपके द्वारा नॉमिनेटेड किया गया चेयरमैन होगा, तो उसमें दिक्कत क्या है? कानून की जब भी स्क्रूटनी होती है तो कानून की क्वालिटी में सुधार होता है, सुधार होता है। और जब आपका बहुमत है, आपका चेयरमैन होगा, उसमें आपके द्वारा बनाई गई सिलेक्ट कमेटी होगी, सिर्फ ये है कि अगले सेशन के पहले दिन आखिरी दिन तक रिपोर्ट देने के लिए चेयर कहेंगी, तो तब आ जाएगा। कोई पहाड़ नहीं टूटा जा रहा है, कितने देर बाद यह आए। और जहां तक नई टेक्नोलॉजी का सवाल है, इसमें से कई चीजें पहले से भी प्रयोग में हो रही हैं, फिंगरप्रिंट और ये सारी चीजें। मैं ये कहना चाहता हूं कि 1920 के बाद से जैसे जैसे नई टेक्नोलॉजी आई है, रेट ऑफ कन्विक्शन कम हुआ है। पिछला रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, रेट ऑफ कन्विक्शन कम हुआ है। अगर टेक्नोलॉजी की वजह से ही आप उम्मीद करते हैं कि रेट ऑफ कन्विक्शन बढ़ जाएगा और अपराधी पकड़ लिए जाएंगे या सजा में चले जाएंगे, तो ये गलत फिर आपका सोच है, सबका सोच गलत है। रिकॉर्ड देख लीजिएगा कि जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है, टेक्नोलॉजी बढ़ती जाती है, अपराधियों के सजा होने की दर कम होती जा रही है। ये गलत परसेप्शन है। परसेप्शन है कि आपका जो इन्फोर्समेंट का तौर तरीका है वो किस तरीके का है, कैसे लोग हैं। अगर ईमानदारी से काम करने वाले हैं तो ठीक होगा, अगर बेईमान हैं तो छूटेंगे लोग, अपराधी छूट जाएंगे, निरपराध जेल चले जाएंगे। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि इसको सिलेक्ट कमेटी को सौंपिए। आप जैसी चाहें वैसी सिलेक्ट कमेटी बना दीजिए, आपका अध्यक्ष होगा, बहुमत आपका होगा, और कानून जो आप बनाएंगे वो बेहतर कानून होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट स्पीकर श्री एडी सिंह जी। Select committee. I raised to, thank you for giving me an opportunity to speak. I raised to oppose the bill, and I agree with my other colleagues that it should be sent to a standing committee or a select committee. Individual liberty is very important, and for everything we should not blame the colonial law. एक चीज तो बड़ा जो हमने अपने बिहार में देखा है कि थानेदार इतना एफिशिएंट है कि उसके थाने से परिंदा भी नहीं जा सकता है। तो हमें उनका रिसोर्सेज बढ़ाना है। जो पुलिस ऑन द स्पॉट है उनके पास रिसोर्सेज बहुत कम है। अगर सचमुच हम लोग को लॉजिकल एंड में क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को लाना है तो एक तो हमें वो करना होगा, और दूसरा हमें जुडिशरी में हर लेवल पर नंबर ऑफ जजेस को बढ़ाना होगा, तब जाएगा। मेरे हिसाब से ये जो साइंटिफिक की बात हो रही है मैं बिल्कुल अग्री नहीं करता हूँ, एंड इट वायलेट्स आवर फंडामेंटल राइट। The bill is illegal in as much as it violates 23 of the subclause 3 of the Constitution, which secures the right of an accused against self-incrimination.
No person accused of any offence shall be propelled to be a witness against himself. The bill mitigates the right to life and privacy enshrined under Article 21 of the Constitution, and thus the bill is beyond the legislative competence of the Parliament. Clause 4, subclause 2 of the bill permits that record of measurements may be retained for 75 years. This violates the right to be forgotten, recognized by the Supreme Court in the case of Justice Puttaswamy versus Union of India. The words biological sample and the analysis in clause 2(1)(b) under the Act could extend to narco analysis and brain mapping, and when it is made cohesive in terms of clause 5, it becomes violative of above mentioned fundamental rights. Implied use of force to take measurements violates the rights of prisoners laid down by the Supreme Court in various judgments, including A.K. Gopalan versus State of Madras, Harak Singh versus State of UP, Charles Sobraj versus Jail Superintendent, Sheel Bars versus State of Maharashtra, and Pramod Kumar Saxena versus Union of India. The bill not only proposes to collect biometrics of convict, but also persons who are under trial or are suspected to be involved in any criminal case, or there is a presumption against the persons that they may in future do any illegal act. This is said is violative of right to privacy, freedom, and personal liberty under Article 21 of the Constitution. तो ये आज के देश में क्या हो रहा है कि अगर कोई अक्यूज हो जाता है किसी क्राइम के लिए, तो उसको सोसाइटी ऑलरेडी प्रोनाउंस किया जाता है कि ये कन्विक्टेड हो गया है. So this concept should be changed in this country. If you are accused in any economic offence, from banks to various institutions will oppose that you are already a criminal. So basically, this bill violates the fundamental right, and I strongly oppose it. Thank you. Thank you. Next speaker, Sri Ramnath Thakur. उपसभापति महोदय, आपने मुझे दंड प्रक्रिया शनाख्त विधेयक 2022 की चर्चा में भाग लेने की अनुमति दिया. आपको बहुत बहुत धन्यवाद. मैं इस बिल के समर्थन में बोल रहा हूं. 102 वर्षों के बाद जांच प्रक्रिया के बदलाव के बारे में विधि आयोग ने जो रिपोर्ट दी है, उसके समर्थन के लिए भारत सरकार के मंत्री ने यह विधेयक लाने का काम किया है. जब हम वोटर लिस्ट अपना नाम बनाने के लिए जाते हैं, या आधार कार्ड बनवाने के लिए जाते हैं, या मोबाइल का सिम लेने के लिए जाते हैं, तो हमको सब प्रिंट आउट देना पड़ता है, सब चीज देना पड़ता है. तो अगर क्राइम रोकने के लिए सब जांच कराना हो तो उसमें क्या हर्ज है? जेल में जो कैदी हैं उसकी भी जांच होनी चाहिए, और इसका प्रयोगशाला में भी, विधि विभाग द्वारा प्रयोगशाला में भी जांच का सर्वेक्षण होना चाहिए, प्रशिक्षण होना चाहिए, और ये क्षण के बात आएगी तो क्राइम होने में कमी आएगी. अब विरोधी पक्ष का और जो तटस्थ हैं उनका यही है शंका कि पॉलिटिकल आदमी जो है, राजनीतिक आदमी जो है, उस पर कोई कार्रवाई न हो, उसको इसमें फंसाया न जाए. यही है मतलब. मेरा भी मतलब है कि इन पॉलिटिकल पार्टीज के या जो सधे हुए आदमी, अच्छे आदमी हैं, उनको इस जांच करा करके इसको इसमें फंसाया ना जाए. यही इच्छा है मेरी भी. अंत में मैं एक बात कहना चाहता हूं. क्या दुर्भाग्य है कि कल जब दिल्ली के म्युनिसिपैलिटी के बारे में विधेयक आया, तो
सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ विद्वान वकील सिंघवी साहब ने कहा कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, असंवैधानिक है, और आज भी सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ वकील भी कहा कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो भाई, जब कानून जब बनता है तो अपने अपने तरीके से बहस करने की जरूरत पड़ती है। और एक बात मैं निवेदन करना चाहता हूं कि प्रथम वक्ता चित्ररंजन साहब और उसके जवाब देने वाले महेश जेठमलानी साहब, उसके बाद तृणमूल कांग्रेस के नेता सुकेंद्र दा, ये 6 वक्ता अंग्रेजी में बोले। हमको तो समझ में नहीं आई, सिर्फ समझ में आई कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। उसका जवाब दिए जेठमलानी साहब। तो 2 डॉक्टर राम गोपाल बाबू हिंदी में बोले, आए वो मैं बोल रहा हूं, उसके बाद और जिनको बोलना होगा बोलेंगे। तो इस पर भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। वकील लोग जो कोर्ट में जाते हैं तो बहस करते हैं अंग्रेजी में। अब मुवक्किल शब्द है कि हमारे वकील खूब बहस किए, और जब रिजल्ट निकलता है तो जज मैनेज हो गए। तो समाप्त कीजिए। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप जिस जगह पर बैठे हुए हैं आगे से निर्देश देने का काम, कि हिंदी में भी हम लोगों के जैसे अनपढ़ आदमी को समझने का मौका मिले। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं और इस विधेयक का सपोर्ट करता हूं। नेक्स्ट स्पीकर अब्दुल वहाब। थैंक यू सर। इफ आई एम स्टार्टिंग इन हिंदी, हम शुरू करेगा तो आपको कुछ नहीं मालूम होगा, इसलिए आप अच्छा हिंदी बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं। ये चिदम्बरम जी एंड महेश जी, they were talking and they will talk again in Supreme Court. So I am not going to say the constitutional and unconstitutional. Let them decide in the Supreme Court. My problem is anyone. This anyone can be difficult for BJP in Kerala. That is happened. That is happening. Even Communist Party members are not convicted, accused by UAPA, by their police themselves. That is happening in Kerala also. How many non-BJP states are there? So just give this power. I am okay, because those who are criminals, let them pass records, let them have this one, what you call, let them have test, any measurement. Body ka parts, let them measurement. No problem. Only problem is this one. This can be misused. So my request to our Honorable Minister is, this one can be, okay, it may be necessary for some categories, not any person. Not only this one, Mahesh was telling 7 years. 7 years FIR can be, who is making the FIR? That same policeman, he can put any clause and they can make all the measurements. So please do this one on a categorized basis. Okay? Thank you very much, and I hope that... Thank you. One more thing, sir. Okay, I am not moving my, this one, I was absent because just like John Britta's keeping on moving, yes, no, what is, why wasting your time? Anyway, it will be passed. Okay, thank you. Next speaker is G.K. Watson. I stand here to support this bill. In a simple language, sir, this bill, sir, is to replace the old bill. Why replace the old bill? What is the statistics today? Crimes are increasing throughout the country. What do you do to curb the crime? You need international standard laws to maintain peace in the country. What do you do with the old law? Fingerprints, palm print, and other basic things collected from suspects. Nowadays, they cheat police, they cheat the government, they cheat the public. Innocents get charged. They are not able to get justice. So, sir, this bill is on international standards that our investigation agencies can function
with par with advanced countries, sir. This bill protects innocent people, give them confidence in identifying the suspect within a short time. In many countries, sir, with the help of technology and techniques, the law enforcement agencies are able to nab the culprits within a short time, which is the need of the hour for our country, sir. Sir, to conclude 2 points, there is a provision in this bill, collection of biological samples. Sir, I will only tell, having a central DNA database will deter serial offenders from committing more heinous crimes and will also help in solving the cases faster. Finally, sir, there is a general concern about privacy connected with the bill. I am sure, sir, the government will give highest priority for safeguarding the sensitive details, and it will be used only to identify serious crimes. I thank the Honorable Minister, Government for bringing this fresh piece of legislation to replace the century-old law. Thank you, sir. Thank you. Next speaker, Sri Sanjay Raut. Thank you, sir. धन्यवाद. क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन बिल सरकार लेकर आई है. मैं प्रोफेसर राम गोपाल यादव जी का आभारी हूँ कि बहुत ही संक्षिप्त में कहा ये बिल क्या है. आपने कहा कि इस बिल में कोई फर्क नहीं है हार्डन क्रिमिनल और सामान्य व्यक्ति. हमको भी यही डर है इस बिल से कि आने वाले दिनों में क्या होगा क्या नहीं होगा, ये बिल को पढ़कर अब धीरे धीरे समझ में आ रहा है. आप क्रिमिनल्स की ठीक तरह से पहचान करना चाहते हो, जो क्रिमिनल्स है उसको लगाम लगाना चाहते हो, तो सवाल ये है कि 102 साल में अब तक इतने लाखों करोड़ों क्रिमिनल्स की पहचान नहीं हो पाई. हो गई है. अफजल गुरु फांसी पर चला गया, कसाब को मुंबई में फांसी दी गई, याकूब मेमन को महाराष्ट्र सरकार ने फांसी पर चढ़ाया है. सबको दिया है, ऐसा नहीं आप भी करते हो. तो 102 साल पुराना कानून अभी आप बदलने जा रहे हो. अगर कानून जो आप ला रहे हो वो देश के हित में है, समाज के हित में है, तो उसको विरोध करने का कोई कारण ही नहीं है. अगर आपके इरादे साफ है, आपके मन साफ है, आपके मन में कोई समस्या नहीं है, तो ऐसे हर कानून का समर्थन पूरे सदन ने करना चाहिए. लेकिन अब एक बड़ा सवाल इस देश में और समाज में पैदा हुआ है कि अपराधी कौन है, क्रिमिनल कौन है. जो आपको विरोध करेगा, जो आपको सवाल पूछेगा, आप उसको क्रिमिनल मानकर चल रहे हो. यहां बैठी हुई हर व्यक्ति यहां आपके लिए अपराधी है. प्लीज एड्रेस द चेयर. अब जो नया प्लीज एड्रेस द चेयर. संजय राउत जी, प्लीज एड्रेस द चेयर. हाँ, तो गड़बड़ी आपकी भी है, देख लेंगे कौन गड़बड़ी करता है. संजय जी प्लीज एड्रेस चेयर. तो ये जो नया कानून है उससे एजेंसी को ताकत मिलेगी, अच्छी बात है. ज्यादा शक्ति मिलेगी. ज्यादा यानी कितनी? देखो, आप पुलिस को राक्षस बनाने जा रहे हो, शैतान बनाने जा रहे हो. तो उससे अच्छा है कि आप मार्शल लॉ ही लगा दो. मार्शल लॉ ही लगा दो, कोई बात नहीं. कानून में कुछ प्रावधान है. आप इस कानून के नए कानून जो कहता है कि जो क्रिमिनल्स है उसके बायोलॉजिकल सैंपल्स लिए जाएंगे, अच्छी बात है, ठीक है. अपराधियों के रेटिना स्कैन हो सकता है, उसकी तस्वीर, रेटिना के साथ साथ फुटप्रिंट्स, हाथों के फिंगरप्रिंट सब लिया जाएगा. ये सब कुछ ठीक है. मतलब पुलिस जो चाहे उनकी मर्जी, चाहे हार्डन क्रिमिनल हो, चाहे राम गोपाल जी यादव हो, चाहे जया बच्चन जी हो, चाहे हम हो,
आप संजय जी प्लीज समाप्त कीजिए। तो सबको आप एक तरह से पुलिस स्टेट बनाने जा रहे हो। संविधान में कहा है प्लीज समाप्त कीजिए कि किसी को भी उसके खुद के खिलाफ गवाही के लिए फोर्स किया नहीं जा सकता। सेक्शन 20 के अनुसार हर नागरिक को चुप रहने का अधिकार है, उसे किसी के खिलाफ बयान देने के लिए फोर्स नहीं कर सकते। संजय जी प्लीज। नार्को, ब्रेन मैपिंग, इसी तरह से दूसरे किसी भी साइंटिफिक टेस्ट की भी आप उसके दायरे में नहीं आ सकते। धन्यवाद संजय जी। उसे कारण 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने नार्को टेस्ट को भी गैर कानूनी कहा टाइम है था। उससे ज्यादा संविधान कहता है, प्लीज कंक्लूड सर, हमारा फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात कर नहीं सर, मैं गृह मंत्री जी का आभारी हूं। मैं उनका भाषण सुन रहा था लोकसभा का। गृह मंत्री जी ने कहा है कि गवर्नमेंट will do everything to ensure that there is no misuse of the law. इस कानून का मिसयूज नहीं होगा, यह आपने आश्वस्त किया है। संजय जी धन्यवाद प्लीज। लेकिन क्या आपने आश्वस्त किया है, लेकिन क्या हमारे आंख में आंख डालकर आप बोल सकते कि कानून का मिसयूज नहीं होगा, नहीं हो रहा है? धन्यवाद संजय जी। आप मुझे बताइए नेक्स्ट स्पीकर क्या हो रहा है? नेक्स्ट स्पीकर श्री के रविंद्र कुमार। एजेंसी श्री के रविंद्र कुमार नॉट प्रेजेंट, नहीं कर रही है। नेक्स्ट स्पीकर डॉक्टर फौजिया खान। धन्यवाद। केवल फौजिया खान जी का जो रिकॉर्ड, प्लीज फौजिया जी प्लीज, फौजिया जी प्लीज, संजय राव जी प्लीज, अब आपका रिकॉर्ड में नहीं जाएगा प्लीज। आप सर फौजिया खान जी धन्यवाद प्लीज। अजय आपको समय दे प्लीज 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 प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है, आपका समय समाप्त करो प्लीज। फौजिया खान जी, फौजिया खान जी, केवल जो फौजिया खान जी बोलेंगी वो रिकॉर्ड में जाएगा। नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड। चेयरमैन जी, सर आप प्लीज यू कंटिन्यू प्लीज, अदरवाइज आई विल कॉल नेक्स्ट स्पीकर। सर, अदरवाइज आई विल कॉल नेक्स्ट स्पीकर। नो सर, थैंक यू वेरी मच। इस सदन में सर हम सदस्यों को, संजय राव जी प्लीज, आप सीनियर मेंबर है प्लीज। नहीं प्लीज, कोई कुछ रिकॉर्ड में नहीं जाएगा। जो फौजिया खान जी बोलेंगे केवल वो रिकॉर्ड में जाएगा। प्लीज फौजिया खान जी, अदरवाइज आई विल कॉल नेक्स्ट स्पीकर। फौजिया खान जी आप बोलिए प्लीज। थैंक यू सर। सर, इस सदन में हम सदस्यों को देश की जनता ने विपक्ष की हैसियत से सरकार से सवाल पूछने की जिम्मेदारी दी है, उसको हम निभाने की कोशिश करते हैं सर। लेकिन सामने से जिस तरह की चर्चा सुनने को मिलती है सर, तो मन कह उठता है कि हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही कहो कि ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है। सर, जहां तक इस बिल का संबंध है, विपक्ष की जिम्मेदारी निभाने की आज कोशिश मैं करूंगी सर। It is important to ensure that the bill is not in the violation of the basic principles of equality and justice. Sir, according to the Internet Freedom Foundation, bills that involve data collection in any manner have to comply with the right to privacy decision of the Supreme Court. And this bill, if passed, would stand in the violation of the aforesaid procedures, sir. What with the already ambiguous privacy laws and rules in the country, is this not an attempt to impair one of the most important fundamental rights, is my question. Sir, infringing the right to privacy and such excessive policing is bound to create a perpetual state of fear in the minds of citizens, and we should be cautious about that. From what is understood, the basic goals seem to it being data collection rather than criminal identification. I personally have many reservations regarding misuse of this bill if passed. Wrong accusations are possible for personal vendetta, political vendetta, for blackmailing. There have been cases cited about blackmailing. According to, sir, the Global Corruption Barometer,
the percentage of people in India who think government corruption is a big problem is 89%. 39% have paid bribes in the previous 12 months. So, sir, the World Corruption Perception Index is 85 out of 180 countries. Where there is corruption, misuse is bound to be there, sir. Every clause in the bill aims to widen the powers of the police and the magistrate in an extremely authoritative way. So how we are giving such unrestrained power to the police to pick up anyone for any offense, sir, which could be as trivial as a traffic offense or a protest against the government? Sir, I have a lot to say, but I'll end with a quote. Today's human rights violations are the causes of tomorrow's conflicts. This was said by Mary Robinson, and I request the Honorable Home Minister to please refer this bill to a select committee. Next speaker, Shri Sanjay Singh ji. बोलने का मौका दिया। मान्यवर, कल इस सदन में आपातकाल की चर्चा हो रही थी और मुझे आपातकाल की एक घटना याद है। हमारे जिले में 75 वर्ष के एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, उनके ऊपर मीसा एक्ट में मुकदमा लिखा गया और मुकदमा लिखा गया कि वो रेलवे में जो सिग्नल होता है उसको चढ़ के तोड़ रहे थे। 75 साल के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के ऊपर ये कानून मान्यवर कहीं ना कहीं उसी की झलक दिखाता है। आप इस देश में फिर से एक बार आपातकाल लाना चाहते हैं, तानाशाही की व्यवस्था लाना चाहते हैं और एफआईआर की बात आप कर रहे हैं। मान्यवर, इन लोगों ने कैसे कैसे लोगों पे एफआईआर की। राजदीप सरदेसाई एक वरिष्ठ पत्रकार है मान्यवर, उन पे एफआईआर कर दी। बिल पर अच्छा श्याम मीरा सिंह एक पत्रकार है मान्यवर, उन पे एफआईआर कर दी। कृपया बिल पर बोले। बिल पर मैं कानून के दुरुपयोग पे बोल रहा हूं सर। त्रिपुरा में जांच करने के लिए, घटनाओं की जांच करने के लिए वकील गए मान्यवर, उन पे इन लोगों ने एफआईआर कर दी, यूएपीए लगा दिया। कानून के दुरुपयोग की अगर बात करें मान्यवर, एक दिन में 9 एफआईआर मेरे खिलाफ उत्तर प्रदेश में हुआ। 9 एफआईआर। कृपया बिल पर बोले। राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लिखा इन लोगों ने, राष्ट्रद्रोह का मुकदमा 21 मुकदमे लिखे। आप आज खुश हो सकते हैं, खुश होइए, कानून बनाइए, आपके पास संख्या है, आप बनाएंगे। लेकिन कल जब आप सत्ता में नहीं रहेंगे, मेरे वाक्य को याद रखिएगा, इन्हीं कानूनों का आपके खिलाफ दुरुपयोग होगा। जैसे आपातकाल का रोना आज तक रो रहे हो ना आप, ऐसे ही रोना रोगे जब यही कानून आपके खिलाफ होगा। और मैं एक चीज और कहना चाहता हूं मान्यवर, आप सारी जानकारी रख लीजिए किसी अपराधी के बारे में, उसके बाद वो भाग जाता है हिंदुस्तान छोड़ के। 20,000 करोड़ रुपए नीरव मोदी लेके भाग गया, 10,000 करोड़ रुपए विजय माल्या लेके भाग गया, 6,000 करोड़ रुपए नितिन संदेशरा लेके भाग गया। जिस देश के साथ आपकी प्रत्यार्पण संधि नहीं है, वहां से इन लाखों करोड़ के लुटेरों को बुलाओगे कैसे हिंदुस्तान? कैसे बुलाओगे आप? मैंने एक सुझाव सदन में दिया था और माननीय गृह मंत्री जी हैं यहां पे, मैं चाहूंगा आप वो संशोधन कीजिए, कानून लाइए इस देश में। जिसके पास 50 करोड़ से ज्यादा का कर्ज हो, उसका पासपोर्ट जब्त करके रख लीजिए, हिंदुस्तान छोड़ के भागने नहीं पाएगा। आप वो करना नहीं चाहते, आपको पकड़ना है विपक्ष के नेताओं को बिल पर। लेकिन एक बात और कह रहा हूं मानवर, एक बात कह के खत्म कर रहा हूं अपनी बात। जितना समय उतना तो बोलने दीजिए, बोलिए प्लीज। जितना समय उतना तो बोलने दीजिए। बोलिए आप। ये इस बिल से कुछ करेंगे नहीं करेंगे मान्यवर, सबका साथ सबका विकास जरूर करेंगे, सबका विकास करेंगे और अलग अलग राज्यों में अलग अलग विकास देखने को मिलेगा। गुजरात में किसी टीएमसी वाले नेता पे एफआईआर होगी तो गुजरात में विकास करेंगे। अब बंगाल में टीएमसी वाला नेता इनके खिलाफ मुकदमा लिख देगा तो वहां इनका विकास होगा। पूरे देश में एक दूसरे का विकास करने में लग जाएंगे। और शिवसेना वाले हमारे संजय रावत भाई बैठे हैं, ये अगर विकास करने में लग गए
तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। महाराष्ट्र रोज रोज जाना पड़ेगा आप लोगों को, रोज रोज धन्यवाद जाना संजय सिंह पड़ेगा। जी। धन्यवाद और संजय हमारे सिंह। यहाँ आम आदमी पार्टी की भी सरकार धन्यवाद। नहीं है पंजाब में। धन्यवाद संजय सिंह। इन झगड़ों में मत पड़ो। धन्यवाद। ऐसे एक दूसरे राज्यों में FIR होती धन्यवाद संजय सिंह रहेगी, जी। आप लोगों को बुलाया जाता रहेगा। धन्यवाद। सारे काम इसी में लग जाओगे, देश का विकास नेक्स्ट तरक्की स्पीकर कब श्री करोगे? विनय विश्वम। शिक्षा पे काम करो, स्वास्थ्य पे धन्यवाद। सर खत्म कर रहा हूँ, सबको 5-5, 10-10 मिनट दिया आपने। प्लीज धन्यवाद। मुझे आप एकदम नहीं बोलने दे रहे। नहीं आपको सर ये न्याय नहीं है मेरे साथ। प्लीज, ये मेरे हाथ में नहीं है। मैं खत्म कर रहा हूँ सर, मैं खत्म कर रहा हूँ। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, आप ये झगड़े लड़ाई की राजनीति छोड़ के कुछ ऐसा काम कीजिए जो लगे कि आप न्याय दिलाना चाहते हैं। करोड़ों केसेस पेंडिंग है इस देश में, धन्यवाद। करोड़ों केसेस, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसी सदन में कहा था फास्ट ट्रैक कोर्ट बना के हम न्याय करेंगे, अपराधियों पे कार्रवाई करेंगे। विनय विश्वम जी, विनय विश्वम जी प्लीज, भारतीय जनता अदरवाइज ऑल नेक्स्ट स्पीकर विनय विश्वम जी। नेताओं पे कार्रवाई, केवल जो विनय विश्वम जी बोलेंगे वो रिकॉर्ड में जाएगा, नथिंग विल गो इन रिकॉर्ड। बहुत बढ़िया, थैंक यू सर। सर, we all call this year as the Amrit Varsh, and the government says we are heading to Amrit Kal. That also is good. In this Amrit Varsh mein, Amrit Kal mein, Honorable Home Minister has come with a bill. With all respect to you, Amit Shah ji, I would like to call it a draconian bill. Draconian in every sense. It doesn't suit the will of the people, the spirit of the nation. It has no meaning when the country's struggle for independence was consulted. No. This is a bill completely in line with the British colonial rule. You are telling us 1920 is, no, 1920 was too old. Colonial it was. So you want to change it. But I'm asking you, what about 124A? Is it not colonial? But you embrace that. You keep it high. And you impose 124A on anybody whom you don't like. And you call them as tradition to the nation. Sir, one who speaks about the rulers, they are imprisoned under 124A. Sir, whom should you believe? Respect the nation, the country, or the rulers. When rulers do a mistake, the country has a right to tell it's a mistake, it's a wrongdoing. That's what we call freedom. Sir, do you know P.G. Woodhouse, renowned writer, has a book. A prisoner in a jail in India, in free India, asked for that book to be read. And the prisoners, the authorities, they responded, it's a threat to the nation's independence. This is the background of India. A government which came with the UAPA activities, a government which came with the AFSPA bill, a government which is keeping in the fridge the DNA bill, that government is coming today with this bill. The purpose is very clear. You want to threaten everybody. You want to take away all the human rights. You want to take the rights of democratic movement of the country. And you want to punish the workers, the peasants, the students, the teachers, everybody who dream of freedom. And that's why this bill. Yes, this government is a government which has no regard for freedom. And you are telling, let me say one more. Don't make a noise. Please address the chair. Yes, sir. Sir, Uttaswamy case was mentioned here. I was a party to that case, Aadhaar case. In that case, the government argued the iris, the footprint, the fingerprints, and all the biometrics are not the individuals. Please conclude. And said the government has the right to do whatever the electoral. Time is over, please. And with that approach, the government is armed with any kind of rules of the draconian nature. It will be a harmful thing for the country's future. That's why the Communist Party of India Your time is over. has to oppose it.
and you oppose it. Thank you. I believe, sir, Thank you. last sentence, sir, last sentence, Maanniya last Brijlal ji, sentence, please, sir, last it's sentence, already, please. last sentence, Please. sir, last sentence. I believe Amit Shah ji will change section 3 of this bill because you heard what your advocates said here. Thank you. Section 3 Thank you. is Thank you. Thank you. Thank you, Maanniya Brijlal ji. धन्यवाद उपसभापति महोदय। मेरा कितना समय है सर, उसके अनुसार मैं पार्टी टाइम इज 34 मिनट्स लेफ्ट। आप कितना बोलना चाहते हैं? 15 मिनट। 15 मिनट सर। माननीय बिजलाल जी 15। उपसभापति महोदय, मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन बिल 2022 पर बोलने का मौका दिया है। अभी मैं इस अगस्त हाउस के वक्ताओं के चर्चाएं सुन रहा था। मैं बोलना चाहता हूं, थोड़ा मुझे समय दिया जाए। एक पुलिस अधिकारी का जिसने 37.5 बरस वर्दी पहनी, और मैं जो बोलूंगा वो केवल तथ्यों पर बोलूंगा। महोदय, ये शिनाख्त शब्द जो है अंग्रेजी में आइडेंटिफिकेशन, ये सेक्शन 9 इंडियन एविडेंस एक्ट से निकला है, और इसके तहत जो शब्द है पर्सन्स एंड एनीथिंग, पहले आदमी का शिनाख्त होता है और माल का भी शिनाख्त होता है। मैं इस पर एक छोटा सा शेर कहना चाहूँगा, और वो शेर था, मैं एक जिले में एसएसपी था, एक बड़ी चोरी हुई और चोरी के बाद रिकवरी हुई, अच्छी रिकवरी हुई, और उस रिकवरी में हम लोगों को सम्मानित किया। खान साहब थे और वो बड़े खुश हुए, उनका पूरा सामान रिकवर हो गया। उन्होंने एक शेर कहा हम लोगों को सम्मानित करने में, या खुदा किसी के घर में चोरी ना हो, या खुदा किसी के घर में चोरी ना हो, और चोरी हो जाए तो रिकवरी ना हो। तो ये उन्होंने इसलिए कहा कि रिकवरी का आइडेंटिफिकेशन का प्रोसेस इतना कम्बरसम है कि रिकवरी हुई लेकिन वो उसके हाथ में नहीं आ रही। इसी तरह से महोदय, जो आइडेंटिफिकेशन का प्रश्न है, ये 9 सितंबर 2020 को ये एक्ट आया था, और जो अब तक चलता रहा, जिसे एक्ट नंबर 33 ऑफ 1920 कहा जाता है। इस अधिनियम में, इस पुराने अधिनियम में यह व्यवस्था की गई थी कि 1 वर्ष या उससे अधिक कारावास में दंडनीय किसी अपराधी को गिरफ्तार किया जाता है तो पुलिस अधिकारी उसका फिंगरप्रिंट, फुटप्रिंट, इंप्रेशन ले सकता है, और फोटो लेना है तो मजिस्ट्रेट की जरूरत पड़ेगी। महोदय, केवल 3 था, फुटप्रिंट और फिंगरप्रिंट और फोटोग्राफ। लेकिन इधर जो प्रगति हुई, टेक्नोलॉजी आई, और टेक्नोलॉजी इतनी आई कि अपराधियों ने भी नई नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया अपराध करने में। जब हम सेवा में आए तो कट्टा मिल जाता था, कभी कभी 12 बोर गन मिल जाए, पैक्टीमेट 315 बोर राइफल मिल जाए, तो हम लोग समझते थे बहुत बड़ा हथियार मिल गया। लेकिन इसी सेवा में RDX भी देखा, चाइनीज ग्रेनेड भी देखा, AK-47, G3, ये तमाम चीजें जो आई, और साइबर क्राइम 2000 के पहले को कोई नाम नहीं जानता था। साइबर क्राइम क्या है? हेरोइन, मार्फिन कोई नहीं जानता था, गांजा, चरस के बारे में जानते थे, इसके बारे में। तो ये मेरा कहना है कि जिस तरह से अपराधियों ने नई नई तकनीकी का इस्तेमाल किया, इसलिए वो जो कानून था तो 1920 का, वो उसकी कोई उपयोगिता नहीं रह गई थी, और मैं इसलिए ये कानून लाया गया है। महोदय, ये जो अपराधी हैं, आतंकवादी हैं, मैं इनके बारे में बात करूं। महोदय, मैं कुछ घटनाओं का जिक्र करना चाहूंगा, और उसमें किस तरह से इस देश को टेरराइज किया गया। मैं उत्तर प्रदेश में सेवा में था। 23 नवंबर 2007 को कचहरी में ब्लास्ट हुए, लखनऊ, अयोध्या और बनारस।
मारे गए 1.5 दर्जन लोग। और उसके बाद जब ये घटना हुई उसके 2 मिनट पहले टेरर मेल आया मीडिया को, हम ब्लास्ट करने जा रहे हैं, जो करना हो कर लो। और उस टेरर मेल में ये भी कहा गया कि हमने श्रमजीवी ब्लास्ट किया है, हमने दिल्ली ब्लास्ट किया है, सरोजनी नगर ब्लास्ट किया है। उसी घटना में और बॉम्बे में सीरियल ब्लास्ट हुआ था 11 जुलाई 2006, जिसमें 209 लोग मारे गए। महोदय, ये ऐसी घटना थी जिसने हिला कर रख दिया था। और वो टेरर मेल लिखित में आया और उससे पूरे देश को हिलाने का प्रयास किया गया। अभी मैं अपने कुछ मित्रों का सुन रहा था और ये कहा जा रहा था कि साहब इसका मिसयूज होगा। महोदय, उस पार्टी को कहने का हक नहीं है जो आतंकवादियों के 15 केसेज उत्तर प्रदेश में वापस लेती है। कोई हक नहीं उनको कहने का। महोदय, मैं उसका भुक्तभोगी हूँ, आज पार्लियामेंट में खड़ा हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे मौका मिलेगा, लेकिन आज मौका मिलेगा। आज मैं बोलूंगा उस पर और तथ्यों पर बोलूंगा। महोदय, उस कचहरी ब्लास्ट केस में हमने गिरफ्तार किया आतंकवादी। 18 मई 2013 को वो आतंकवादी लखनऊ से गए थे फैजाबाद, कोर्ट्स में ट्रायल के बाद लौट रहे थे। एक को लू लग गई, खालिद मुजाहिद फौजी का आतंकवादी, बाराबंकी आते आते डेथ हो गई। मैं उस समय डायरेक्टर जनरल सिविल डिफेंस था, डीजीपी के पद से हटा दिया गया था और उस पार्टी में समाजवादी पार्टी की सरकार थी। मेरे खिलाफ बाराबंकी कोतवाली में 19 मई 2013 को मर्डर का मुकदमा कायम किया गया था मेरे खिलाफ। और मेरे साथ जो डीजी थे रिटायर्ड विक्रम सिंह, जी हाँ, ये जरा सुनने का मादा भी रखिए साहब। और वो जो मुकदमा कायम किया गया, जेल भेजने का प्रयास किया गया मुझे, क्या था? तुष्टीकरण के राजनीति, ब्रजलाल को जेल भेज दो तो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का वोट पूरा मिल जाएगा। ये चीजें हुई। और वो पार्टी जिसने सीआरपी केस हुआ था, वो घटना मैं ही था उस समय प्रदेश का एडीजी लॉ एंड ऑर्डर। रामपुर सीआरपीएफ हमारे 7 जवान मारे गए थे। 31 दिसंबर बटे 1 जनवरी 2008 की रात में हुआ था। AK-47 से हमला हुआ था और हमारे निर्देशन में इंडिया कमांडर लश्कर तोयबा का हाफिज सईद का मैं लाया था। दोनों पाकिस्तानी फिदाइन मोहम्मद फारूक, इमरान, लोकल मैन, और ला करके हमने चार्जशीट लगाई। RDX मिला, AK-47 मिला। और वो जो समाजवादी पार्टी सरकार आई तो उस केस को भी वापस लिया गया। मैं हाई कोर्ट इलाहाबाद को मैं सलाम करता हूं। हाई कोर्ट ने जानते क्या कहा था? महोदय, आप कौन होते हैं केस वापस लेने वाले? आप कौन कह रहे हैं कि निर्दोष है? दोषी और निर्दोष तय करेगा कोर्ट। और इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक कमेंट था कि आज आप केस वापस ले रहे हो, कल को उनको पद्म विभूषण दे दोगे। ये इलाहाबाद हाई कोर्ट का था। और वो सीआरपीएफ अटैक का केस जो सरकार ने वापस लिया था, उसमें 4 को फांसी की सजा हो गई, 1 को आजीवन कारावास हो गया, 1 को 10 साल। तो महोदय, ये जो बात करते हैं कि दुरुपयोग होगा, फला होगा, इनको ये दुरुपयोग और सदुपयोग कहने का कोई हक नहीं है। तो ये जो टेक्नोलॉजी बढ़ी तो ऐसे उसकी जरूरत थी। क्योंकि अभी मैं देख रहा था, एक साहब ने कहा कि बड़ा दुरुपयोग होगा दिल्ली के। महोदय, इसमें कुछ ऐसी पार्टियां हैं जिन्होंने याकूब मेमन और अफजल गुरु को फांसी जब सजा दी गई तो उस फांसी को सजा को रोकने के लिए रात में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया। वो पार्टियां आज का कह रही है दुरुपयोग होगा। फांसी की सजा जिसको सुप्रीम कोर्ट से हो चुकी है, जो लटकने जा रहा है, और उसके पक्ष में खड़े हैं टुकड़े टुकड़े गैंग को सपोर्ट करने वाले। अफजल, हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया इस पार्लियामेंट पर अटैक का महोदय। और पार्लियामेंट अटैक के जब होता है उस मुलजिम को सजा होती है
तो ये पार्टियां तमाम ऐसी हैं जो दस्तखत करके रात में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया था उनको छुड़वाने के लिए। इसलिए महोदय ये जो कहा गया दुरुपयोग होगा, ये दुरुपयोग नहीं, वो पार्टियां बोल रही हैं जो हमेशा इसका दुरुपयोग करती रही हैं। महोदय एक एक्ट था, हमने उसका काफी प्रयोग किया है, वो होता था टाडा, और टाडा नहीं होता तो आज पंजाब खालिस्तान होता। महोदय मैंने वो भी आतंकवाद झेले हैं, ऐसे जिले में था। और जब उसकी उपयोगिता खत्म हो गई, जब कश्मीर में आतंकवाद बढ़ रहा था, कश्मीरी पंडित भगा दिए गए थे, उनके मर्डर्स हो रहे थे, तो पार्लियामेंट में हमारी जो उस समय सबसे बड़ी पार्टी देश की थी, उसको लोग लेट गए कि टाडा वापस ले लो, और टाडा वापस लिया गया। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, वो जब आए तो क्या लाए? ओटा, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, और उसको भी 2004 में वापस लिया गया। अभी मैं सुन रहा था हमारे एक मित्र आरजेडी के, वो कह रहे थे साहब दुरुपयोग होगा। अरे वो पार्टी बोल रही है जिसने गोधरा दंगे को दूसरा रूप दे दिया था, उसका परिदृश्य बदल दिया था। महोदय 27 फरवरी 2002 साबरमती एक्सप्रेस, He is not yielding. साबरमती, He is not yielding. He is not yielding. Please. मैं फैक्ट पर बोल रहा हूँ, Not yielding. मैं फैक्ट पर बोल रहा हूँ, फैक्ट पर बोल रहा हूँ। 27 दिसंबर 2002 गोधरा में ट्रेन गई, साबरमती एक्सप्रेस, कोच नंबर ये 6। माननीय लोग हिंट करेंगे तो मैं दूंगा, हिंट करेंगे तो मैं दूंगा, प्लीज। और महोदय उसमें जला दिया गया पेट्रोल से 59 राम भक्तों को जला दिया गया। प्लीज महोदय उसके बाद एक रेल मंत्री हुए 2004 में, जा रही है, प्लीज आरजेडी के थे, उन्होंने आफ्टर हिम आई विल गिव यूसी बनर्जी आयोग बनाया। You cannot force chair to give. Let him speak. I will give him opportunity. Let him finish his speech. 2015 को 17 जनवरी 2000 बोल लेने के बाद मैं कह रहा हूँ क्या उसको दूंगा, अभी वो बोल रहे हैं, प्लीज। और वो रिपोर्ट क्या था कि साहब ये आग तो एक्सीडेंटल है, आग ये लगाई नहीं गई है। Nothing will go on record except his speech. इसमें साधु लोग थे, चिलम पी रहे थे, उसको अहमदाबाद हाईकोर्ट ने रोक दिया, पार्लियामेंट में पेश नहीं हो पाया, और वो अल्टीमेटली उस केस में गोधरा में फांसी की सजा हुई। और आज हम Let him finish his speech. I have told you, Jhaji, I will give you. Let him finish his speech. Let him finish. तो महोदय टेररिज्म इस देश के लिए सबसे बड़ा खतरा है। मैं अपने देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को प्रणाम करता हूं, आभार व्यक्त करना हूं कि उनके राज में अपराध को, आतंकवाद को पूरी जड़ समूत उसको खत्म करने का निर्णय लिया गया। महोदय मैं एटीएस चीफ रहा 4.5 साल उत्तर प्रदेश का। महोदय यहाँ पर इंडियन मुजाहिदीन उन्होंने क्या किया था, फंडिंग करने के लिए यहाँ व्यापारियों के अपहरण किए गए थे, आतंकवाद के फंडिंग जो मेंबर है। महोदय 2 घटना का मैं जिक्र करना चाहूंगा। 12 नवंबर 2000 को राजकोट से भास्कर परेशान लोग की किडनैपिंग की गई, करोड़ों रुपए लिए गए और उसको इंडियन मुजाहिदीन की फंडिंग हुई। 25 जुलाई 2001 को किडनैपिंग हुआ पार्थो प्रतिम राय बर्मन, खादिम सूज के मालिक थे। महोदय उनका किडनैपिंग हुआ, रैंसम के लिए हैदराबाद में हवाला से 3 करोड़ 75 लाख ले लिए गए थे, और उस 3 करोड़ 75 लाख में से $1 लाख पाकिस्तान के आतंकवादी मोहम्मद सईद शेख हाफिज सईद का गुर्गा, उस $1 लाख भेजा गया था मोहम्मद अत्ता ऑफ इजिप्ट, अल कायदा का, जिसने अमेरिका के ट्विन टावर पर हमला करके बस कर दिया गया था। तो महोदय इस देश में आज का नहीं है, आतंकवादी जो किडनैपिंग के लिए फंडिंग होते हैं, आतंकवाद हुआ
अहमदाबाद ब्लास्ट हुआ महोदय, मैं तो उस सब केस से जुड़ा हूं। कचहरी ब्लास्ट हुआ, संकट मोचन ब्लास्ट हुआ, शीतला घाट ब्लास्ट हुआ, जयपुर ब्लास्ट हुआ, दिल्ली ब्लास्ट हुआ, बटला हाउस हुआ। ये तमाम घटनाएं कांग्रेस के रिजीम में होती रही और आज को नहीं हो रही है, क्योंकि सरकार का इकबाल है। और जब सरकार का इकबाल होता है तब ऐसी घटनाएं महोदय रुकती हैं। तो ये घटनाएं, और मैं जानना चाहूंगा बटला हाउस जब हुआ, मैं एक पार्टी और कहूंगा, बंगाल की पार्टी, प्लीज जब बटला हाउस हुआ, MC शर्मा मारे गए, इंस्पेक्टर शर्मा, और 2 आतंकवादी मारे गए थे, आतिफ अमीन इंडियन मुजाहिदीन का नॉर्थ इंडिया कमांडर था महोदय, आजमगढ़ का। वो आजमगढ़ मॉड्यूल 25 लोग पाकिस्तान में ट्रेंड थे। आतिफ अमीन, मोहम्मद साजिद मारे गए थे, सैफ गिरफ्तार हुआ था। उसके बाद हंगामा मच गया, क्योंकि एक शहजाद था, उसको मैंने गिरफ्तार करके आजमगढ़ से दिया था, जिसको दिल्ली कोर्ट ने आजम कारावास की सजा दे दी। और ऐसे केसेस में आंसू बहाए जा रहे थे। 15 मिनट का समय पार्टी ने दिया था आजमगढ़ को, हमारे कांग्रेस के नेता 15 मिनट का समय दिया था आपका। एक हमारे कांग्रेस के नेता, उन्होंने आजमगढ़ को उन आतंकवादियों के घरों को तीर्थ स्थल बना लिया था। वहां जा करके वहां से गुमराह करके लोगों को दिल्ली भेज करके प्रदर्शन कराए जा रहे थे। और एक नेता और कांग्रेस के थे, 15 मिनट पार्टी ने दिया था। 11 फरवरी 2012, और ये कहा था बटला हाउस की तस्वीर देख करके उनकी नेता की आंखों से आंसू गिर रहे थे। आज ये पार्टी के लोग ये कह रहे हैं दुरुपयोग होगा। महोदय, ये कानून आज के रिक्वायरमेंट को देखते हुए जिस तरह से अपराधी हाईटेक हो गए हैं, अगर हम हाईटेक नहीं होंगे तो उसका मुकाबला हम नहीं कर पाएंगे महोदय। इसलिए ये जो बिल है ये बहुत जरूरी है। इसमें कहीं किसी का मानवाधिकार का हनन नहीं है। और आज की परिस्थितियों को देखते हुए और आज के रिक्वायरमेंट को देखते हुए ये एक्ट पास होना चाहिए, क्योंकि जितने ये चीजें पैरामीटर्स हैं जो मेजरमेंट की श्रेणी में लाए गए हैं आज से अपराधों से लड़ने के लिए, वो जरूरी है। मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी का और अपने गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी का आभारी हूं कि इस एक्ट को लाया गया और आज पास होगा। और ये नरेंद्र मोदी जी का सपना जो है, इस देश को अपराधियों से, आतंकवादियों से, नक्सलाइट से मुक्त किया जाएगा। और मैं इस बिल को सपोर्ट करता हूं। और ये सपोर्ट करने के बाद अभी कहा जा रहा था कि साहब इसमें कन्विक्शन रेट में कमी आएगी। महोदय, कन्विक्शन रेट आप देखिएगा बढ़ेगा, क्योंकि ये साइंटिफिक एविडेंस है। और साइंटिफिक एविडेंस जो होता है वो झूठ नहीं बोलता। आदमी झूठ बोलता है, परिस्थितियां झूठ नहीं बोलती, फैक्ट झूठ नहीं बोलते। इसलिए इस एक्ट से हमारा कन्विक्शन रेट बढ़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। और बिल का सपोर्ट। माननीय सदस्यगण प्लीज, माननीय सदस्यगण प्लीज, मैं मिस्टर मनोज झा को बुलाऊं, माननीय झा जी को पॉइंट ऑफ ऑर्डर के लिए। उसके पहले आपसे निवेदन करना चाहता हूं, परंपरा ये है कि जो सदस्य बोल रहे हैं जब पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठता है तो बैठ जाएं, यील्ड करें। हम चेयर फोर्स नहीं कर सकता। जैसे आपको पॉइंट ऑफ ऑर्डर पूछने का अधिकार है, वैसे चेयर कह सकता है। अगर वो यील्ड नहीं करते तो आई कैन नॉट फोर्स। प्लीज, नो एलओपी, प्लीज, नो प्लीज। हाँ, नो, इट्स नॉट रूल। आप रूल पढ़िए और परंपरा जानिए। मानिए एलओपी, नो। Thank you. हाँ, रूल नंबर। Sir, rule number 2, 110 and 238, 1 and 2 to be read together. Both the rules, 110 and 238, 1 and 2. So, having said that, today the discussion begins so beautifully from this side by Honorable former Finance Minister Chidambaram ji, and from that side, the first time I heard Mahesh Jethmalani ji. Look at the vitiation towards the end of the debate. We are passing a legislation, और अगर उस पर
झा जी प्लीज ऑप्शन प्लीज झा जी एक मिनट मैंने पढ़ लिया मैंने आपने 110 का रेफर किया था, मैंने पढ़ा, आपका इंटेंशन समझा। माननीय सदस्यगण, मैं शुरू से सबसे निवेदन करता रहा हूं कि आप बिल पर बोले, आप सबसे, लेकिन क्या स्थिति हो रही है मैं समझ गया। प्लीज नो प्लीज सर कोई भी घटना हुई हो कश्मीर में या गोधरा में या गुजरात में या दिल्ली में, हम सब सामूहिक रूप से उसके लिए दोषी हैं। आप दोषी प्लीज नो आपस में कोई डिबेट नहीं, जहां भी कोई डिबेट नहीं, नो प्लीज। माननीय गृह मंत्री जी का जवाब प्लीज। माननीय गृह मंत्री जी। मान्यवर, उन्होंने पूरा भाषण शायद रुद्रलाल जी का नहीं सुना है। रुद्रलाल जी ने तर्कहीन बात नहीं रखी, उन्होंने पीछे पूरी प्रक्रिया समझाई कि वो क्यों ऐसा बोल रहे हैं। उन्होंने कहा 60 लोगों को जिस जघन्य कांड के अंदर जिंदा जला दिया, उसको अलग स्वरूप देने का प्रयास उस वक्त के तत्कालीन रेलवे मंत्री ने एक सुप्रीम कोर्ट के चयनित किए हुए जज का जांच आयोग चल रहा है, फिर भी रेलवे एक्ट का उपयोग कर एक कमेटी रेलवे एक्ट के तहत बनाई, और ऐसा कारण वो कमेटी ने दिया कि वो एक्सीडेंट था, वो षड्यंत्र नहीं था। जिस तारण को माननीय सर्वोच्च अदालत ने खारिज कर दिया, माननीय, इसलिए उन्होंने कहा है कि उसको अलग स्वरूप देने का प्रयास किया है। ये जो कमेटी बनी थी, इसमें अब कोई राय नहीं हो रही है, सर्वोच्च अदालत का जजमेंट है, वो 60 लोगों को मारने वालों को बचाने का एक प्रयास था, वो श्री रुद्रलाल जी कहना चाहते थे। और सामूहिक जिम्मेदारी नहीं आ सकती। मंत्री जी आपका जवाब प्लीज, बिल पर माननीय मंत्री जी का जवाब प्लीज। धन्यवाद उपसभापति महोदय। आज जो बिल लेकर मैं इस महान सदन के सामने उपस्थित हुआ हूं, इसमें कांग्रेस पार्टी के श्रीमान पी चिदम्बरम से लेकर श्री ब्रजलाल जी तक 17 लोगों ने अपने अपने अभिप्राय, अपने अपनी विचार रखने का काम किया है। मान्यवर, कुछ सदस्यों ने कुछ धाराओं पर, इसके दुरुपयोग पर आशंकाएं भी व्यक्त की है कि इसका दुरुपयोग हो सकता है। कुछ सदस्यों ने इसकी संवैधानिक वैधता पर भी सवाल खड़े किए हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिए हैं, ये जजमेंट के हिसाब से यह बिल उचित नहीं है। इस सब का मैं डिटेल जवाब दूंगा माननीय। सबसे पहले मैं बिल को लेकर आने वाले मंत्री के नाते इस बिल का उद्देश्य सदन के सामने स्पष्ट करना चाहता हूं, क्योंकि रिकॉर्ड पर रहना चाहिए। मान्यवर, इस बिल का प्रमुख उद्देश्य है इस देश में कानून की अदालतों में जो मामले जाते हैं, उसमें दोष सिद्धि का प्रमाण बढ़ाना, ये इसका प्रमुख उद्देश्य है। पुलिस और फोरेंसिक टीम की कैपेसिटी बिल्डिंग करना, ये इस बिल का उद्देश्य है। थर्ड डिग्री को नाबूद कर दोष सिद्धि के लिए साइंटिफिक एविडेंस प्रोसिक्यूशन एजेंसीज को उपलब्ध कराना, ये बिल का मान्यवर उद्देश्य है। और डेटा को सुरक्षित प्लेटफॉर्म पर रखकर उसको निश्चित प्रक्रिया के तहत साझा कर किसी भी नागरिक की प्राइवेसी रिस्क में न आए, उसकी प्राइवेसी का भंग न हो, इस प्रकार का व्यवस्था तंत्र बनाना, ये 4 उद्देश्य लेकर मैं इस महान सदन के सामने ये बिल को लेकर मान्यवर आया हूं। मान्यवर, बहुत बात हुई,
ये बिल से ये कर देंगे, वो कर देंगे, इस बिल से इसका दुरुपयोग हो जाएगा। मगर मुझे थोड़ा दुख भी है मान्यवर, जो झा साहब ने कहा कि चर्चा का स्तर बहुत अच्छा रहा। झा साहब, चर्चा का स्तर तब अच्छा माना जाता है जब बात बैलेंस तरीके से की जाए। मान्यवर, एक भी विपक्ष के सदस्य ने दोष सिद्धि का प्रमाण कम है और उसको बढ़ाना चाहिए, इसकी जरूरियात ही महसूस नहीं की। हम किस प्रकार का क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम चाहते हैं, जिस क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर हत्या कर 100 में से 66 लोग बरी हो जाए, जिस सिस्टम के अंदर बलात्कार कर 100 में से 60 लोग बरी हो जाए, चोरी कर 100 में से 62 लोग बरी हो जाए, डकैती कर 100 में से 70 लोग बरी हो जाए, बाल अपराध कर 100 में से 62 लोग बरी हो जाए। दोष सिद्धि का प्रतिशत क्या है मान्यवर? कोई नहीं बोला। इतना सारा रिसर्च करते हैं, इतना भी तो कर लेते और इसको स्पिरिट से रख देते। मान्यवर, हत्या के अंदर सिर्फ 44% लोगों को देश में हम सजा दिला पाते। मैं तो प्राइमरी कोर्ट की बात करता हूं, ऊपर जब जजमेंट आता है तब ये और गिरता है। मान्यवर, बलात्कार के अंदर 39%, चोरी के अंदर 38%, डकैती के अंदर 29% और बाल अपराध के अंदर 37% सिर्फ मात्र। क्या हम इसको बढ़ाना नहीं चाहते हैं? किसी ने इसका सजेशन नहीं दिया, कुछ अच्छे सुझाव देते कि भाई ये बढ़ाने के लिए ये जरूरी है, मगर इसमें इतना ध्यान रखिए, इसमें इतना सुधार करिए, तब तो चर्चा का स्तर ऊपर आया, मैं मान सकता था माननीय अध्यक्ष। मैं और देशों की भी बहुत सारी बातें हुई, उस देश के कानूनों का अध्ययन करे बगैर इसका रेफरेंस दिया गया है। हमारा कानून तो शक्ति के हिसाब से बच्चा है मान्यवर, इससे कठोरतम कानून दुनिया के देशों के अंदर बने हैं। और वहां पर दोष सिद्धि का प्रतिशत देखें, दक्षिण अफ्रीका में 82%, यूनाइटेड किंगडम में 84%, कनाडा के अंदर 64%, ऑस्ट्रेलिया में 97% और अमेरिका में 93%। ये क्यों है? क्योंकि वहां प्रोसिक्यूशन एजेंसी को साइंटिफिक एविडेंस का आधार मिला हुआ। साइंटिफिक एविडेंस, फोरेंसिक एविडेंस, इसके आधार पर प्रोसिक्यूशन एजेंसी आगे बढ़ती है, इसलिए अदालतों को सजा करना बहुत सरल हो जाता है और जो गुनहगार है उसको कानून की गिरफ्त से भागना बहुत कठिन हो जाता है। क्या हम हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को उस ओर मोड़ना नहीं चाहते? मोड़ना चाहिए या नहीं चाहिए? ये सदन के सामने ये बिल आया, इसलिए मैं पूछना चाहता हूं, क्या हम सिर्फ राजनीति की कोरी चिंता करेंगे? राजनीतिक चिंताओं का सम्मान है, आपकी शंकाओं का भी जवाब देने का मेरा दायित्व है और मैं दूंगा भी, परंतु आप में से कोई एक तो भला बोलता कि भैया ये जरूरी है मगर इतनी चिंता करिए। एक का मैंने सब भाषण धैर्य से सुने मान्यवर, कहीं पर भी कोई नहीं बोला। मान्यवर, ये बिल लाने का उद्देश्य दोष सिद्धि को बढ़ाना और साइंटिफिक एविडेंस को हमारी प्रोसिक्यूशन एजेंसियों को उपलब्ध कराना है। मान्यवर, एक देश में एक प्रथा होगी, लोकतंत्र में पक्ष और प्रतिपक्ष होना स्वाभाविक है, होना भी चाहिए। हम तो चाहते प्रतिपक्ष मजबूत हो, मगर जनता जो चाहती है वही यहां आता है। हम तो चाहते हैं प्रतिपक्ष मजबूत हो, परंतु अल्टीमेटली वो तो जनता को निर्णय करना है। मान्यवर, कोई भी सरकार बनती है वो विधि से स्थापित होती है। कोई भी सरकार जो बनती है वो विधि से स्थापित होती है और सरकार लोगों के मैंडेट का प्रतिनिधित्व करती है।
सरकार की हर लेजिस्लेशन को, हर कानून को शंका की दृष्टि से देखकर एक शंका का गहरा बादल देश के विचारों के आकाश पर बना देना कितना उचित है। जन भावनाओं को गुमराह करना, शंकाओं के औथार के नीचे आप हर चीज को जनता के मन में भय उत्पन्न करना, ये कितना ठीक है। मानिए, हमने कहीं ना कहीं इसका विचार करना पड़ेगा। ये सरकार कोई पार्टी नहीं बनाती है। पार्टी तो अपना एजेंडा लेकर जनता के सामने जाती है, जनता वोट करती है और उसमें से सरकार बनती है। ये सरकार संविधान बनाता है, संविधान की धाराएं बनाती है, शपथ संविधान के लेने पड़ते हैं। तो सरकार के हर इंटेंट शंका खड़ी करना और शंका का एक बादल खड़ा कर लोगों को गुमराह करने का प्रयास मान्यवर लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। और मैं देख रहा हूं हर एक सरकार के कदम को राजनीतिक तराजू के अंदर ही तोला जाता है। हर एक सरकार के कदम को पक्ष और विपक्ष की भाषा में ही देखा जाता है। सरकार के हर उद्देश्य को इसका ये उपयोग हो जाएगा, उसका वो उपयोग। मैं समझ रहा हूं आपको शंका आना स्वाभाविक है, जब आप पावर में थे तब किया है दुरुपयोग, आपने किया है दुरुपयोग, मगर हम उनमें से नहीं है, नहीं है, निश्चित रूप से नहीं है। मैं बोलूंगा तो पसंद नहीं आएगा, कहेंगे पुरानी बात है। मैं बोलूंगा तो पसंद नहीं आएगा, आप तुरंत कहेंगे पुरानी बातें। पुरानी ही है क्योंकि आपकी सत्ता पुरानी हो गई, तो बात तो पुरानी ही आएगी। आज तो आप विपक्ष में बैठे हो मान्यवर, पर मैं इसमें जाना नहीं चाहता। कुछ सदस्यों ने ह्यूमन राइट की बात करी। मैंने कल भी लोकसभा में कहा था 2 दिन पहले कि मान्यवर ह्यूमन राइट के 2 पहलू होते हैं। मैं मानता हूं कि जिसको कानून पकड़ता है उसका भी ह्यूमन राइट है, उसका भी सम्मान होना चाहिए। परंतु उपसभापति महोदय, हत्या जिसकी होती है, जो घर निराधार हो जाता है, जो घर का एक ही कमाकर घर का पालन पोषण करने वाला व्यक्ति मर जाता है, उसके बाल बच्चों का भी कोई ह्यूमन राइट होता है या नहीं होता है? इसकी चिंता भी सदन ने करनी है या नहीं करनी है? ह्यूमन राइट कभी एक तरफा नहीं हो सकता। जब बम धमाके होते हैं, टेररिज्म फैलता है, हजारों लोग मारे जाते हैं, मरने वालों का भी ह्यूमन राइट है, सिर्फ टेररिस्टों का ह्यूमन राइट नहीं है। गुनाह के विक्टिम, उसका भी ह्यूमन राइट है, सिर्फ गुनहगार का ह्यूमन राइट नहीं है। अगर हम कानून बनाने वाली संस्थाएं ये दोनों ह्यूमन राइट के बीच में भले बुरे का अर्थ नहीं समझेगी, दोनों के बीच में संतुलन नहीं बनाएगी, तो हम किसको प्रोटेक्ट करना चाहते? जो लोग कानून के भरोसे अपना जीवन जीना चाहते हैं, जिनकी संख्या 97% से ज्यादा है, इसकी चिंता न करें। इसकी चिंता जरूर करनी चाहिए मान्यवर। आप लोगों को जिसकी चिंता करनी है करिए। हम तो वो 57% कानून के हिसाब से लोगों को, जीने वाले लोगों के ह्यूमन राइट की चिंता करने वाले मान्यवर। स्वतंत्रता का सबको अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट के कई जजमेंट विद्वान लोगों ने यहां कोट किए, मगर हर जजमेंट में से सिलेक्टिव पार्ट ही अपना लेकर पढ़े। उसके आगे लिखा है कि स्वतंत्रता इस मात्रा में ही उपयोग होनी चाहिए कि किसी और की स्वतंत्रता का हनन न हो जाए। स्वतंत्रता का मतलब स्वच्छंदता नहीं होता है। स्वतंत्रता के दायरे हैं। स्वतंत्रता कानून के दायरे में संविधान के 4 कोने के बीच में दी गई है, और स्वतंत्रता की व्याख्या और किसी की स्वतंत्रता का हनन करने के लिए नहीं उपयोग की जा सकती। ये स्वतंत्रता नहीं। मान्यवर, स्वतंत्रता का सम्मान हम भी करते हैं, स्वतंत्रता का सम्मान। मान्यवर, फौजिया खान जी, संजय जी, सबने शंका का वातावरण खड़ा करने का उपयोग किया है, प्रयास किया है, सवाल भी उठाए हैं, उनका अधिकार है। मगर मैं आश्वस्त करना चाहता हूं सदन के सभी सदस्यों को, ये बिल लाने के पीछे मेरी या हमारी सरकार की, ना हमारे प्रधानमंत्री की, किसी की भी मंशा नहीं है।
ये बिल लाने के पीछे मंशा एकमात्र मंशा है इस देश में गुनाहों के प्रमाण को कम किया जाए, इस देश में सजा के प्रमाण को बढ़ाया जाए और इस देश के कानून और व्यवस्था की स्थिति को सुधारा जाए और इस देश की आंतरिक सुरक्षा को सुदृढ़ किया। और मैं आगे बताता हूं कि किस प्रकार से एक कहा गया कि भाई इसका दुरुपयोग होगा, निजता का हनन होगा। मान्यवर, सारा डेटा जो आएगा वो एनसीआरबी के पास रहेगा और मैं सबको आश्वस्त करना चाहता हूं कि एनसीआरबी में जो डेटा आएगा वो सुरक्षित प्लेटफॉर्म पर और सुरक्षित हार्डवेयर के अंदर ही रहेगा। डेटा भंडारण में किसी तीसरे पक्ष, थर्ड पार्टी या निजी एजेंसियों को कोई स्थान नहीं मिलेगा। एनसीआरबी ही उसको मैनेज करेगी। मान्यवर, एनसीआरबी का जो डेटा भंडारण है उसको सरकार की उच्च से उच्च कक्षा की कमेटी इसका परीक्षण करेगी और डेटा साझा करने के लिए भी एक पद्धति बनाएगी। इसके लिए भी फॉरेंसिक्स एक्सपर्ट्स और इस क्षेत्र के एक्सपर्ट की एक कमेटी बनेगी। वो डेटा साझा करने की पद्धति को बनाकर रूल्स के अंदर व्याख्यायित कर ये नोटिफाइड करेगी। मान्यवर, मैं थोड़ा एक उदाहरण देना चाहता हूं। अभी एनसीआरबी के पास एक नफीस कर सिस्टम बनाया है। इसके तहत 1 करोड़ फिंगरप्रिंट का डेटा है और अगर ये बिल राज्यसभा के सदस्य पास कर देते हैं तो डेटा बहुत बढ़ेगा, फिंगरप्रिंट का डेटा बढ़ेगा। अब किसी भी राज्य के कोई एक दूर के गांव में चोरी होती है और पुलिस जाकर फिंगरप्रिंट लेती है तो फिंगरप्रिंट लेने के बाद पुलिस इसको प्रिजर्व करती है, क्योंकि जब चोर पकड़ा जाएगा तब फिंगरप्रिंट मैच कर उसको सजा कराने के काम में आएगा। चिदम्बरम साहब ने तो फिंगरप्रिंट पर ही क्वेश्चन कर दिया, मगर अभी तो अदालतें मानती है इसको, इसलिए उसको सजा कराने के काम में आएगा। अब ये सिस्टम आने के बाद क्या होगा, किसी घर में चोरी होगी तो पुलिस अफसर फॉरेंसिक साइंस की टीम को बुलाकर वहां जो उपलब्ध फिंगरप्रिंट है उसको लेगा, घर के लोगों के फिंगरप्रिंट लेकर उसमें से घर के लोगों के फिंगरप्रिंट को बाहर निकालेगा। जो बच जाएगा वो फिंगरप्रिंट चोरी करने वाले शंकास्पद व्यक्ति के है। आज स्थिति है, पुलिस उसको ढूंढती है, उसका फिंगरप्रिंट लेती है और फिर मैच करती है। अब क्या होगा, वो फिंगरप्रिंट वो भेजेगा एनसीआरबी को, वो पुलिस स्टेशन को या पुलिस को पूरे फिंगरप्रिंट का एक्सेस नहीं है। वो पुलिस स्टेशन भेजेगा फिंगरप्रिंट एनसीआरबी को, एनसीआरबी 1 करोड़ फिंगरप्रिंट के डेटा को 3.5 मिनट में रन कर अगर उसमें वो चोर है तो उसका नाम पुलिस स्टेशन को भेज देगा, पुलिस को ढूंढने की जरूरत नहीं। अब भला बताइए इसमें क्या निजता का हनन होगा, क्या हनन होगा? किसी महिला पर अगर बलात्कार हुआ है, वहां से जो बायोलॉजिकल सैंपल मिलेगा उसका बायोलॉजिकल सैंपल के डेटा के साथ जिन्होंने महिलाओं के अपराध किया है इसके साथ मैचिंग कर अपराधी को जल्दी पकड़ लिया जाए और 1 साल के अंदर उसे सजा हो, इसमें क्या आपत्ति हो सकती है? निजता का हनन तो तब होगा जब ये डेटा पुलिस स्टेशन को उपलब्ध कराएंगे। किसी को ये डेटा नहीं देना है, पुलिस स्टेशन से क्वेश्चन आएगा, इसका मैचिंग कर जवाब पुलिस स्टेशन पर जाएगा जो कोर्ट में एडमिसेबल एविडेंस होगा। माननीय गृह मंत्री जी, 1 मिनट। It's up to 6 o'clock. But since we are discussing this bill, we may extend the sitting of the house. Let's dispose Disposed of, and then the special mention is also taken. थैंक यू, सहमति। मान्यवर, मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि इससे किसी का भी निजता का हनन नहीं होने वाला है। कोई डेटा लीकेज का क्वेश्चन डज नॉट अराइज। रूल्स के अंदर इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फिक्स की जाएगी और इसकी जिम्मेदारी भी तय की जाएगी। जो डेटा रखने वाले हैं उसकी जिम्मेदारी। और आजकल तो मान्यवर टेक्निक बहुत आगे गई है।
कोड के बगैर डेटा नहीं मिलेगा। इसका कंप्यूटर की क्लॉक में समय भी निश्चित हो जाएगा और उसका एक कंप्यूटराइज रजिस्टर होगा कि किसकी डिमांड पर, किस एजेंसी की डिमांड पर ये डेटा का एक्सेस किया गया है। मान्यवर, इसके अंदर इतनी शंका ना मान्य संसद सदस्य रखे, ना जनता को रखने की जरूरत है। नहीं, इसको पूरे विचार के साथ ही हम नोटिफाइड करेंगे, पूरी सिस्टम बनाने के बाद ही नोटिफाइड करेंगे और रूल्स भी इसके सारे तज्ञों के साथ चर्चा करने के बाद हम नोटिफाइड। मैं इसलिए कहता हूं कि अगर शंका राजनीति से प्रेरित नहीं है तो इसका निरसन जरूरी है। सभी लोगों की शंकाएं राजनीति से प्रेरित है ऐसा मैं नहीं मानता, इसलिए मैंने इसको समझाने का प्रयास किया। मान्यवर, 2014 में देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्मार्ट पुलिसिंग की एक व्याख्या देश के सामने रखी थी और स्मार्ट पुलिसिंग की व्याख्या को उन्होंने बहुत स्पष्ट किया है, क्योंकि इस देश में जब तक पुलिसिंग के पद्धति को बदला नहीं जाता, इस देश के अंदर दोष सिद्धि के प्रमाण को बढ़ाया नहीं जाता और गुनाहों के प्रमाण को भी कम नहीं किया जा सकता। मान्यवर, इन्होंने एस से कहा था स्ट्रिक्ट और सेंसिटिव, एम से कहा था मॉडर्न और मोबाइल, ए से कहा था अलर्ट बट अकाउंटेबल, आर से कहा था रिलायबल एंड रिस्पॉन्सिव, टी से कहा था ट्रेंड और टेक्नोसेवी। ये जो बिल है मान्यवर, ये टी को एड्रेस करने वाला है। देश भर के सभी प्रिजन के अफसर को, सभी पुलिस अफसरों को इसकी टेक्नोलॉजी से ट्रेन करने का अभियान भारत सरकार के बीपीआरएनडी और हमारा एनसीआर भी उठाने वाला है। इनको ट्रेन करेंगे और उनको टेक्नोसेवी भी बनाएंगे और तब जाकर ये बिल की मंशा सब पूरी होगी। मान्यवर, क्या हम आगे बढ़ना नहीं चाहते? मान्यवर, ये सदन में भी ये सोचना पड़ेगा कि हम वही रहना चाहते हैं कि सिर्फ राजनीति की गुल्ला डंडी खेलकर देश का विचार नहीं करेंगे हम। अरे बहुत सारी चीजें राजनीति के करने के लिए। मैं बंगाल आऊं चुनाव के लिए, तब कर लो भाई, कौन डरता है? कर लेंगे दो हाथ, हम नहीं डरते। मगर जहां तक जनता के संरक्षण का सवाल है, उसकी सुरक्षा का सवाल है, पुलिस को ताकत देने का सवाल है, गुनहगारों को सजा कराने का सवाल है, मुझे लगता है मान्यवर इसमें किसी ने राजनीति नहीं करनी चाहिए। और ये जो बिल मैं लेकर आया हूं, ये एक अकेला हमारा प्रयास नहीं है मान्यवर। विगत 2.5 साल के अंदर ढेर सारी चीजें मोदी जी के स्मार्ट पुलिसिंग की व्याख्या को चरितार्थ करने के लिए गृह विभाग ने की है। मोदी जी ने जो व्याख्या की है, इसके 8 बिंदुओं पर गृह मंत्रालय काम कर रहा है। अगर ये बिल आइसोलेशन में आता है तो शंका और गहरी हो सकती है कि भाई चलो ये अकेले बिल से क्या होगा। ऐसा नहीं है, हम इसके लिए एक एनवायरनमेंट भी बनाए हैं और बहुत सारे प्रयासों में से ये बिल एक प्रयास आइसोलेशन में नहीं है। मान्यवर, हमने फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी बनाई है। क्यों बनाई है? फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी इसलिए बनाई है कि बहुत सारे रिपोर्टों के अंदर है कि 6 साल से ज्यादा सजा वाले सभी धाराओं के अंदर फॉरेंसिक एविडेंस को कंपलसरी करना चाहिए। कर तो दे, मगर ट्रेन मैन फोर्स कहां है भाई? हमारे पास तो इतना मानव संसाधन बल है ही नहीं, तो क्या करना? फॉरेंसिक साइंस को बढ़ावा नहीं देना, फॉरेंसिक एविडेंस को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। तो हमने, मोदी जी जब गुजरात में मुख्यमंत्री थे, वहां गुजरात फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी बनाई थी। यहां प्रधानमंत्री बनने के बाद 2020 में फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी की हमने रचना की, जिससे वहां से जो विद्यार्थी निकलेंगे, बीएससी फॉरेंसिक साइंस, एमएससी फॉरेंसिक साइंस और इसके अंदर R&D करने वाले बच्चे भी निकलेंगे हर विधा के अंदर। मान्यवर, आज 2 साल के अंदर ये यूनिवर्सिटी ने 6 राज्यों में राज्य सरकारों के साथ एग्रीमेंट कर इस यूनिवर्सिटी से अटैच कैंपस और कॉलेज अलग अलग राज्य में खोले हैं। और मुझे पूरा भरोसा है कि कुछ ही सालों के अंदर ये यूनिवर्सिटी से और इसके संबंध कॉलेजों से अनेक विद्यार्थी बाहर आएंगे जो फॉरेंसिक साइंस के क्षेत्र में देश को न केवल मजबूत करेंगे, देश का नाम दुनिया में रोशन करेंगे।
मान्यवर, और ये फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के जो तज्ञ बाहर आएंगे वो केस को सजा कराने के लिए, अपराधी को सजा कराने के लिए फॉरेंसिक साइंस के साइंटिफिक एविडेंस के बेस को मजबूत कर प्रोसिक्यूशन एजेंसी की मदद में रहेंगे। मान्यवर, ये हमारा आइसोलेशन में प्रयास नहीं है। हमने रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी बनाया, रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी भी 2020 में बनाया, और रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी के तहत जो बच्चे, कुछ बच्चे चाहते हैं बचपन से कि मैं डॉक्टर बनूं, कुछ वकील बनना चाहते हैं, कोई पत्रकार बनना चाहते हैं, कोई राजनीति में आना चाहते हैं। इस तरह से बहुत सारे बच्चों की मनसा होती है कि मैं रक्षा के क्षेत्र में काम करूं, मेरी कैरियर में रक्षा के क्षेत्र में बनाऊं, तो उनके लिए कोई स्पेशलाइज कोर्स ही नहीं है। वो तो बेचारा बीएससी करता है, बीए करता है, बीकॉम करता है, फिर एग्जाम देता है, शरीर तगड़ा है तो सिलेक्ट हो जाता है, और फिर उसकी ट्रेनिंग होती है। तो क्यों नहीं ऐसी यूनिवर्सिटी बनाई जाए जो रक्षा के साथ जुड़े हुए सभी क्षेत्रों के अंदर एक स्पेशलाइज फोर्स खड़ा करे, एक एक्सपर्ट्स खड़ा करे। रक्षा के क्षेत्र के साथ बहुत सारी विधाएं जुड़ी हुई है, तो इसके लिए, उसकी ट्रेनिंग के लिए, उसके स्पेसिफिक अध्ययन के लिए हमने रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी बनाया है मान्यवर। और रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी भी आने वाले दिनों में पूरे देश के अंदर अपने संबंध कॉलेजों को बढ़ाने वाली है मान्यवर। नेक्स्ट जनरेशन क्राइम को हमने समझना भी पड़ेगा और उसके सर्कल को तोड़ना भी पड़ेगा। हम चाहते हैं कि पुलिस, देश की कानून प्रवर्तक एजेंसियां क्रिमिनल से 2 कदम आगे रहे, पुलिस से क्रिमिनल 2 कदम आगे न रहे। पुलिस को सुसज्ज करना पड़ेगा। आप ह्यूमन राइट, प्राइवेसी, ये सारी चीजों को कर पुलिस के हाथ में हथकड़ी लगा दोगे और उसको तैरने के लिए स्विमिंग पूल में डालोगे और कहोगे जाओ भैया गोल्ड मेडल लेकर आ जाओ, वो नहीं आ सकता। उसके हाथ को सशक्त करना पड़ेगा, उसके हाथ को मजबूत करना पड़ेगा, उसके हाथ में भी वेपन देना। तो ये प्रयास पुलिस को सशक्त करना, कानून प्रवर्तक एजेंसियों को सशक्त करने के लिए प्रयास है मान्यवर। नेक्स्ट जनरेशन क्राइम को हम चिर पुरातन पद्धतियों से हैंडल नहीं कर सकते। हमने भी नेक्स्ट जनरेशन की तकनीक को अपनाना होगा और पुलिस को इससे लैस करना होगा, पुलिस को इसके ट्रेन करना पड़ेगा। भारत सरकार ने मोदी जी के मार्गदर्शन में मॉडस ऑपरेंडी ब्यूरो भी बनाया है। ये ब्यूरो देश भर में एनसीआरबी के पास जो क्राइम का रिकॉर्ड आता है उसका एनालिसिस करता है और विशिष्ट प्रकार के क्राइम करने वाले लोगों की मॉडस ऑपरेंडी क्या होती है इसका स्टडी करता है, इस पर डिस्कशन होता है, इसके समाधान ढूंढे जाते हैं और वो समाधान बीपीआरएनडी के माध्यम से देश भर की पुलिस को भेजे जाते हैं। ये भी हमने नया इनिशिएटिव लिया है। आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट में भी हम बदलाव करने जा रहे हैं। ये भी बहुत पुराने हो चुके हैं, इसको भी बदलाव, मैंने सभी मान्य संसद सदस्यों को पत्र भी लिखे कि आपका कोई इसमें सुझाव हो तो आप जरूर भेज दीजिए, हम इसको अभी बना रहे हैं। और जहां तक बात करा कि भाई स्टैंडिंग कमेटी को देना, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं सीआरपीसी, आईपीसी और एविडेंस एक्ट तीनों को सुधार कर हम लाएंगे। निश्चित रूप से गृह विभाग की स्टैंडिंग कमेटी को देंगे और जांच परख कर ही मैं उसको ग्रुप के उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं, परंतु इस बिल में इतने बड़े बदलाव ही नहीं हो रहे। मैं बाद में एक्सप्लेन करता हूं, मैं तो रिक्वायरमेंट पर हूं। चिदम्बरम साहब ने और सारे लोगों ने जो जवाब दिए उसके मुझे जवाब देने मान्यवर। इसके अलावा हमने डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन का कार्यालय का भी सभी जगह, सभी राज्यों को मैंने पत्र लिखा है, एक डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन होना चाहिए जो प्रोसिक्यूशन एजेंसी को, हर राज्य की पुलिस को उस पर निगरानी रखे कि प्रोसिक्यूशन ठीक तरीके से हो। और ढेर सारे हमने ई गवर्नेंस इनिशिएटिव भी मान्यवर लिए हैं। मैं ई गवर्नेंस इनिशिएटिव को इसलिए बताना चाहता हूं कि सारी जो शंकाएं हो रही हैं वो शंकाओं का 2 मिनट में निरसन हो जाएगा ध्यान से सुनने के बाद। मान्यवर, एक CCTNS कर एक नेटवर्क सिस्टम भारत सरकार का चलता है
मैं इस ग्रुप को इन्फॉर्म करना चाहता हूं कि 16,390 मतलब 100% पुलिस थानों ने सीसीटीएनएस नेटवर्क को अपना लिया है और पूरे देश के थाने सीसीटीएनएस नेटवर्क से चलते हैं और 99% पुलिस स्टेशन में अब एफआईआर सीसीटीएनएस में सीधे दर्ज हो रही है। जहां नेटवर्क के थोड़े प्रॉब्लम है, इसका भी हम सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं। मान्यवर, सीसीटीएनएस नेटवर्क के अंदर 7.47 करोड़ एफआईआर उपलब्ध है। जो डेटा लीकेज की बात करते हैं, मैं उनको बताना चाहता हूं। मान्यवर, केंद्र शासित प्रदेश, राज्य और केंद्रीय जांच एजेंसी, ये सारी एजेंसियां, राज्य की पुलिस भी इसका उपयोग कर रही है। मान्यवर, ई प्रोसिक्यूशन भी हमने चालू किया है और 751 जिलों में, प्रोसिक्यूशन के जिलों में ई अभियोजन को लागू कर दिया गया है। आज तक कोई फरियाद नहीं। ई प्रिजन, देश की 1259 जेलों में ई प्रिजन लागू कर दिया गया है, कोई फरियाद नहीं आई। ई फॉरेंसिक्स, 117 फॉरेंसिक लैब में ये लागू हो चुका है, ऑनलाइन हो चुका है, आज तक कोई फरियाद नहीं। इंटर ऑपरेटेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ICJS वो भी लागू हो गया है और ICJS के तहत अब CCTNS, ई प्रिजन, ई कोर्ट और ई फॉरेंसिक को जोड़ने का भी काम अब चालू हो गया है और वो एकीकृत डेटाबेस से एनालिटिकल मॉड्यूल भी बनाए गए हैं, जिससे देश भर के क्राइम का एनालिसिस होकर उसके रोकने के मॉड्यूल बने। कई राज्य ऐसे होते हैं जहां समान प्रकार के क्राइम होते हैं, कई जिले ऐसे होते हैं जहां समान प्रकार के क्राइम होते हैं, कुछ सागर किनारे के जिले हैं वहां अलग प्रकार के क्राइम होते हैं। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार एक अलग प्रकार के क्राइम होते हैं जहां मैदानी इलाके हैं, कुछ जिले पहाड़ी हैं वहां अलग प्रकार। ये सबको ये एकीकृत डेटाबेस से एनालिटिकल मॉड्यूल से हम एनालिसिस करते हैं और इसके समाधान BPRND को भेजते हैं। गृह मंत्रालय का मतलब आपके मन में बहुत सीमित है। मैं बहुत बोलना नहीं चाहता था, मगर जो व्याख्या मेरे मंत्रालय की आप लोगों के मन में है, मुझे लगा इसे मुझे बदलना ही पड़ेगा, इसलिए मैं आज इतनी डिटेल बात करता हूं। मान्यवर, इन्वेस्टिगेशन ट्रैकिंग सिस्टम फॉर सेक्सुअल ऑफेंस ITSSO वो भी हमने लागू कर दिया है और देश भर में ये सिस्टम लागू हो गई। यौन अपराधियों का राष्ट्रीय डेटाबेस NDSO भी ऑनलाइन उपलब्ध है मान्यवर, और लगभग 11.83 लाख यौन अपराधियों का डेटा एजेंसियों के लिए ऑनलाइन उपलब्ध है, कोई फरियाद नहीं आई। क्राइम एक्ट, क्राइम मल्टी एजेंसी सेंटर, उसको भी हमने लॉन्च कर दिया गया है और लगभग 59,937 लोगों ने क्राइम एक्ट का इस्तेमाल किया है और लगभग 23,000 अलर्ट्स इससे जनरेट हुए। मान्यवर, मोडस ऑपरेंडी ब्यूरो की बात मैंने पहले आपको कर ही दी है। NCRB ने एक पोर्टल पर नागरिक सेवाएं शुरू की है, जिसके लॉन्च के बाद अब तक 2,27,400 लॉगिन हो चुके हैं और अलग अलग सेवाओं को उसको जवाब दिया गया। लापता व्यक्ति की खोज, ये CCTNS से लेकर हमने एक अलग सुविधा बनाई है। लापता व्यक्तियों की खोज, किसी भी व्यक्ति गुम हो जाता है तो उस पर पोर्टल पर आता है, वहां एक डेटाबेस होता है, इसके साथ मैचिंग होता है और मैं सदन को बताना चाहता हूं यही पोर्टल के तहत मान्यवर 14,513 लोग अपने परिवारजनों को वापिस लेने का काम मान्यवर। वाहन, सेकंड हैंड व्हीकल अगर किसी को खरीदना है तो चोरी का है नहीं है किसी को मालूम नहीं, लोग ले लेते हैं बेचारे, फिर पुलिस उनके घर पर पहुंच जाती है, उनको भी पकड़ कर ले जाती है चोर के साथ साथ, तो उसको पहले कैसे मालूम है? तो हमने लगभग इसके लिए एक डेटाबेस CCTNS से चोरी किए हुए वाहनों का जो कंप्लेन है उससे बनाया। लगभग 2,96,200 लोगों ने अपने खरीदने वाले वाहन का वहां डेटा भेजा, इसको मैच कर भेजा और 13,637 चोरी किए हुए लोग भी पकड़े गए और चोरी की हुई गाड़ियां भी पकड़ी गई। ये क्या उपयोग होना है मैं बताना चाहता हूं।
घोषित अपराधी, उसको भी सीसीटीएनएस पर लिया है और ये सारे एनालिटिक मॉड्यूल इसका एनालिसिस करें मान्यवर। तो घोषित अपराधी जो पुलिस ने हमारे यहाँ अलग अलग राज्यों के थानों ने, डीआईजी ने, आईजी ने या डीजी पुलिस ने भेजे, इसमें से घोषित अपराधी भगोड़े 16,176 लोगों को पकड़ने का काम इस नेटवर्क के माध्यम से। मान्यवर, आईसीजेएस के एनालिटिकल टूल के द्वारा भी हमने बहुत सारा खर्चा किया है मान्यवर। लगभग 2050 करोड़ का खर्चा भारत सरकार ने सारी व्यवस्थाओं की। मैं इसलिए कह रहा हूं कि बिल आइसोलेशन में नहीं है, ये बिल है सबके अंदर एक खूंटी कड़ी है। हमारे पास क्रिमिनल का डेटा नहीं है, वो क्रिमिनल का डेटा इसके अंदर ऐड होने से इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन बहुत सरल हो जाएगा। और क्या भय है, किस चीज का भय है मान्यवर? I4C के माध्यम से ढेर सारे और भी अलग अलग सेवाएं ली हैं और 112 के माध्यम से सभी पुलिस सेवाओं को एक ही फोन नंबर पर लाने का काम भी भारत सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में किया है। मान्यवर, मैं इसलिए बताना चाहता था कि ये जो हमें जिस तरह से कटघरे में खड़े करने का प्रयास हो रहा था कि इसके पीछे कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं है, ना जनता के मन में भी ऐसी भावना जानी चाहिए, ना सदन के सदस्यों के मन में भी ऐसी भावना जानी। हमें भी मालूम है ये जो लोकतंत्र के अंदर कुर्सी होती है ना, ये यावत चंद्र दिवाकरों नहीं होती है, कल कोई भी आ सकता है। तो मिसयूज का भय तो मुझे भी लग सकता है, मगर मुझे नहीं लगता है मिसयूज होगा तो देश की अदालतें हैं, मिसयूज हुआ भी है, लड़कर हम निकले भी है और अदालत ने चांटा भी लगा। मान्यवर, भय से हम नहीं जीते हैं और किससे भय के अध्ययन देश के करोड़ों लोगों को क्राइम की दुनिया से लड़ने का, उससे सुरक्षा का उपाय न करे, ये कोई ठीक बात नहीं है, ना जो सोचने का तरीका ठीक है। मान्यवर, दोष सिद्धि का जो प्रमाण कम है, इस पर कई सारी कमेटियों ने, कई सारे लोगों ने ढेर सारी चर्चाएं करके रिपोर्ट भारत सरकार को दी है। प्रमुखतः 3 ही कारण बताए गए हैं मान्यवर। एक तो सबूतों की कमी, सबूतों की कमी के आधार पर प्रतिवर्ष 7.5 लाख केस में आरोपी छोड़ दिए जाते। अदालत कहती है पर्याप्त सबूत नहीं है। अगर उसके साइंटिफिक सबूतों को अदालत के सामने रखें तो मैं मानता हूं कि ये केसों की संख्या आधे से भी कम हो जाएगी और लगभग 3.5 लाख केसों में सजा का प्रमाण हम बढ़ाएंगे। न्याय की प्रतीक्षा, अदालत बार बार प्रोसिक्यूशन एजेंसी को कहती है कि भाई आप और सबूत लेकर आइए, और सबूत लेकर आइए, और डेट पर डेट पड़ती है, न्याय लेट होता जाता है। जो निर्दोष है वो भी बेचारा आरोपी बना रहता है। माननीय उपसभापति महोदय, इससे समाप्त हो जाए। और वित्तीय क्षमता भी कम है, जब डेट पर डेट पड़ती है तो इस ओर से तो सरकार लड़ती है। जो आरोपी होता है कई गरीब भी होते हैं, इनके घर के घर बिक जाते हैं, वो ऋण के बोझ के तले दब जाते हैं। अगर प्रॉम्प्ट एकदम स्पीडी न्याय मिलेगा तो कुछ नहीं होगा। और मैं मानता हूं अगर साइंटिफिक एविडेंस का प्रमाण हमने बढ़ाया तो न्याय जल्दी मिलेगा। मान्यवर, ये बिल लाने के लिए उद्देश्य के लिए कुछ पूछ रहे थे, मैं ये भी आगे तो मैंने उद्देश्य बताया, मगर एक और उद्देश्य बताया। मान्यवर, इन्वेस्टिगेशन 3rd डिग्री पर इस जमाने में निर्भर नहीं रहना चाहिए। इन्वेस्टिगेशन को 3rd डिग्री पर से बदलकर तकनीक की डिग्री पर हम ले जाना चाहते हैं, डेटा की डिग्री पर ले जाना चाहते हैं और इंफॉर्मेशन की डिग्री पर ले जाना चाहते हैं। और ये सब सहमत हो गए कि 3rd डिग्री के आधार पर इन्वेस्टिगेशन नहीं हो करना चाहिए। कब बंद होगा? जब उसको साइंटिफिक एविडेंस का आधार लेंगे। इसलिए मान्यवर, ये बिल लेकर मैं यहां पर उपस्थित हुआ हूं। मान्यवर, ढेर सारी बातें हैं, मैं इसके दूसरे हिस्से में बताऊंगा। अब कुछ सदस्यों ने अलग अलग प्रकार के सवाल भी मुझे पूछे हैं,
शंकाएं भी करी है और मैं मानता हूं कि उनका अधिकार है। सबसे पहले श्री चिदम्बरम जी ने पूछा कि गृह मंत्री स्पष्ट करे ये जो आपने माप की व्याख्या की है वो व्याख्या के अंदर नार्को एनालिसिस, ब्रेन मैपिंग और पॉलीग्राफ टेस्ट आता है या नहीं आता है? ना जी, नहीं आता है। इस बिल का कोई प्रावधान किसी भी कैदी का नार्को एनालिसिस, पॉलीग्राफ टेस्ट या ब्रेन मैपिंग करने की इजाजत नहीं देता है। ये मैं रिकॉर्ड पर कह रहा हूं, इसलिए किसी को ये शंका रखने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा, इसके बाद पूछा मान्यवर कि पुत्तुस्वामी केस में जो निर्देश दिए गए हैं उसका उल्लंघन हो रहा है। जरा भी उल्लंघन नहीं हो रहा है। पुत्तुस्वामी केस के अंदर उन्होंने और लोगों की स्वतंत्रता पर इसका ओवरलैप न हो इसलिए 3 अपवाद दिए हैं। ऐसा कानून सक्षम विधायिका द्वारा बनाना चाहिए। मैं मानता हूं ये सक्षम विधायिका है, चिदम्बरम साहब भी मानते होंगे। ऐसा यह वैध देश हित में होना चाहिए। तो जिन्होंने गुनाह किया है उसको सजा कराने से बड़ा वैध देश हित क्या हो सकता है भाई? तो वैध देश हित के अंदर भी है। मान्यवर, तीसरा उन्होंने कहा है कि अनुपातिक होना चाहिए। मान्यवर, ये कानून जो है वो अनुपातिक भी है, इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है। कानून प्रवर्तन एजेंसियों का हाथ मजबूत करने और अपराध को सिद्ध करने के और इसके द्वारा व्यक्तियों के, जो प्रताड़ित व्यक्ति हुए, इसके मौलिक अधिकारों का रक्षा में के बीच में संतुलन बनाने के लिए कानून लेकर हम आए हैं। अभी एक तरफा ही है, जिसका अधिकार छीना जा रहा है, जो विक्टिम है, इसके अधिकार के लिए कोई प्रोविजन नहीं है। ये जो कानून है विक्टिम को प्रोटेक्ट करने के लिए है और जो अपराध करने वाले हैं उसको सजा करें। किसी भी तरह से ये पुत्तुस्वामी केस के निर्दोषों का उल्लंघन मान्यवर नहीं करता है। इन्होंने 14, 19, 20, 3 और 21 के तहत मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के लिए कहा। मैंने इसको मान्यवर एड्रेस किया है। उन्होंने कहा है, एक उल्लेख धारा 3 का किया। मैं वो ठीक है, बिल पढ़ेगा तो मैं पढ़ूंगा तो मैं भी कहूंगा, मगर मैं इतना स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि धारा 3 के अंदर रूल्स बनाने के लिए भारत सरकार को अधिकार है। इसकी व्याख्या भी हम करेंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि पॉलिटिकल आंदोलन वाले किसी भी व्यक्ति को सिर्फ पॉलिटिकल आंदोलन के लिए ये अपने माफ न दे। मगर पॉलिटिकल नेता का अगर क्रिमिनल केस में अरेस्ट होता है तो उसको फिर नागरिक के पार रहना पड़ेगा। परंतु पॉलिटिकल आज्ञा का मतलब पुलिस की आज्ञा का उल्लंघन या तो किसी भी प्रकार की निषेधाज्ञा का उल्लंघन, इस प्रकार के उल्लंघन के लिए किसी भी पॉलिटिकल व्यक्ति का नाम नहीं लिया जाएगा। मैं सदन को आश्वस्त करना हूं माननीय, और इसके लिए हम रूल्स में प्रोविजन भी करेंगे। रूल्स बनाने का हमने पीछे हमारा अधिकार भी रखा है। बिल को ध्यान से जिन लोगों ने पढ़ा होगा उसको मान्यवर मालूम होगा। मान्यवर, जो यही है, अगर नागरिक धरना देता है तो उस पर केस होगा, जिसकी मैंने बात कर ली। पुत्तुस्वामी केस वाली भी बात मान्यवर मैंने कर ली है। मान्यवर, इसके बाद विनय विश्वम जी ने कहा कि 124A सरकार लगा रहे हैं। हम 124A के दुरुपयोग के पक्ष के नहीं हैं, मगर विनय विश्वम जी केरल से कम्युनिस्ट पार्टी के सांसद को 124A का क्यों आप उठा रहे हो? आप तो लोगों को मार दिए भैया। मेरी पार्टी के 100 लोगों की हत्या राजनीतिक कारणों से केरल में हुई, पूरी की पूरी जान चली गई है उनकी, और आप हमें 124A समझा रहे हो? क्या 124A समझा रहे हो? प्लीज मैं 124A को मैं स्वीकार नहीं कर रहा हूं कि हम इसका दुरुपयोग करें। मैं इतना ही कहता हूं, कम से कम केरल से आए हुए कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता को, सांसद को ये नहीं उठाना चाहिए। ये
Please, please. No, please, please. 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 In Kerala, under 124A, nobody is implied. Thank you. Yes, please, please. Thank you, Vinay ji. I request you to correct yourself. Please, please. अरे ढेर सारे उदाहरण है भाई. The wrong statement. Thank you, Vinay ji. ढेर सारे उदाहरण. Thank you. Thank you. Thank you. Please, please, please. Hey, let homeless, please. Please, Vinay ji, please, no. मान्यवर, no, please, please. मान्यवर इनकी इच्छा है तो इसी सदन के सवाल जवाब में से मेरी नहीं कोई और सरकार ने जो जवाब दिए हैं वो मैं सदन पे रखने के लिए तैयार हूं. केरल विधानसभा में सवाल जवाब में जो जवाब आए वो मैं सदन पर रखने के लिए. मैं रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट नहीं करता. विश्वम साहब, मेरे 27 साल हो गए किसी विधायिका में काम करते हुए, चाहे विधानसभा, राज्यसभा. आपकी बात रिकॉर्ड पे नहीं जा रही. प्लीज स्टेटमेंट नहीं करता. मंत्री जी की बात जा रही. प्लीज मान्यवर, प्लीज 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 प्लीज. मान्यवर, एक सदस्य ने कहा कि आंख में से आंख डालकर जवाब दे सकते हो. मैं तो जरूर दे सकता हूं अगर कोई आंख में से आंख डालकर पूछने की हिम्मत रखता है. जरूर दे सकता हूं और किसी भी फोरम में रहे, क्योंकि मेरे मन में चोर नहीं है साहब. हम वही करते हैं जो हमारी आत्मा कहती है और हम वही करते हैं जिसको आत्मा कानून के हिसाब से मानता है. मान्यवर, मुझे कोई तकलीफ नहीं है. कोई आंख में से आंख डालकर सवाल पूछे, मैं आंख में आंख डालकर जवाब भी जरूर दे दूंगा. मान्यवर, संजय सिंह जी ने कहा कि गुजरात में ये FIR. अरे संजय बाबू, मान्यवर, आपके माध्यम से मैं संजय बाबू को कहना चाहता हूं, अभी तो आप गुजरात गए हो, मुझे तो मालूम नहीं कोई FIR हुई या नहीं हुई इनकी पार्टी पर. कुछ करा होगा तो हो भी सकती है, मगर बंगाल चले जाओ, जान चली जाएगी. अच्छा है अभी वहां गए नहीं हो आप. मान्यवर, नड्डा जी का उदाहरण नहीं दीजिए. प्लीज गाड़ी को अटैक रखिए. प्लीज प्लीज प्लीज. माननीय गृह मंत्री जी, आपकी बात ही रिकॉर्ड पे जा रही है. माननीय सदस्यगण, प्लीज बैठ जाओ. आप बोले प्लीज बोले. मान्यवर, ये पूछते हैं आप गए हो. मैं गया था 2019 के चुनाव में. मेरे रोड शो पर आग के गोले फेंके गए. हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष गए नड्डा जी, इनकी गाड़ी को घेर कर उन पर जघन्य हमला किया गया. क्या पूछ रहे हो? कैसे ना बोल सकते हो? ये रिकॉर्ड पर है, कोर्ट ने संज्ञान लिए है. मान्यवर, माननीय गृह मंत्री जी की ही बातें जा रही है रिकॉर्ड पे और किसी की नहीं. प्लीज प्लीज प्लीज. मान्यवर, प्लीज 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 प्लीज. माननीय गृह मंत्री जी को आप बोल रहे थे. प्लीज 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 प्लीज. थैंक यू प्लीज प्लीज. माननीय गृह मंत्री जी की बात रिकॉर्ड पे जाएगी. माननीय गृह मंत्री जी, प्लीज प्लीज. मान्यवर, सुखेंदु शेखर रॉय जी ने कहा कि SC ST माइनॉरिटी की DNA प्रोफाइलिंग. भाई, पूरे सदन को मैं पूछना चाहता हूं, इसमें ST SC माइनॉरिटी कोई शब्द है क्या? किस चश्मे से पढ़ते हो सुखेंद्र रॉय जी? किस चश्मे से पढ़ते हो बिल को? अरे बिल बोले हैं आप, मैं तो सुनकर लिखा है. वो 60% अंडर ट्रायल्स है, OBC SC ST माइनॉरिटी. यही मैं बोला. थैंक यू. तो मान्यवर, अंडर ट्रायल है, इसकी जात या धर्म क्या देखना? अंडर ट्रायल जो है वो है, कानून की नजर में सब एक समान है. किसी अपराधी की जाति धर्म क्या देखना है?
और क्यों नहीं होना चाहिए? मान्यवर, उन्होंने कहा है फासिस्ट बिल है। मैं ज्यादा टिप्पणी नहीं कर सकता। वो टीवी पर ममता दीदी देखती होगी, सारे सीआर सुधारने के लिए खड़े हो जाते हैं, इसलिए मैं ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहता मान्यवर। मगर फासिस्ट शब्द की कड़ी से कड़ी व्याख्या को बंगाल की सरकार ने बदल दिया है मान्यवर, और फासिस्ट की नई डेफिनेशन, फासिस्ट मान्यवर, में ममता दीदी का नाम वापिस ले, बैठ जाओ, ले लिया वापिस, ममता जी का नाम लिया, प्लीज बैठ जाइए। ममता दीदी का नाम में वापिस ले। मान्यवर, फासिस्ट शब्द की डेफिनेशन को, जो डेफिनेशन में है, उससे अलग प्रकार के मायने देने का काम बंगाल की सरकार ने कहा। बाबा, आप कम से कम फासिस्ट का रेफरेंस मत लीजिए। अंत में मान्यवर, मैं इतना ही कहना चाहता हूं, नथिंग इज गोइंग ऑन रिकॉर्ड। सीट पर बैठ करना बोले, प्लीज 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 मान्यवर, प्लीज अंत में प्लीज प्लीज मान्यवर, मैं अंत में इतना ही कहना चाहता हूं कि बिल लाने के पीछे सरकार की मंशा किसी भी निजता का भंग करने की नहीं है, किसी के भी ह्यूमन राइट का वायोलेशन करने की नहीं है मान्यवर, और ना किसी की भी निजता का भंग हो या ह्यूमन राइट का वायोलेशन हो, ऐसे लूप होल्स भी हम नहीं रखेंगे। मैं आश्वस्त करना चाहता हूं, ये एक्ट और इसके रूल्स दोनों मिलकर एक अच्छी मजबूत प्रणाली बनाएंगे, जिससे कानून की मदद तो जरूर होगी, मगर सभी का निजता और ह्यूमन राइट का वायोलेशन भी नहीं। धन्यवाद। Thank you. I shall first put the amendment moved by Sri Tripura Siva for reference of the Criminal Procedure Identification Bill 2022. Let me, please, sir. No, I pass by Lok Sabha to a select committee of the Rajya Sabha to vote. The question is that, please, 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 please. I cannot allow debate now. Please. Mani sir, I cannot allow debate. No, Vijay sir, please, no, please. Mr. Chidambaram, please. Please. Please, please. Please, please. Mr. Chidambaram, please speak. Mr. Chidambaram, please speak. Please speak. Please. Please. Honorable Home Minister, Honorable, just a moment, Mr. Just a moment. Let me. Please call me. Please call me. Please call me now. Please, please. The Honorable Home Minister. Please. The Honorable Home Minister has answered two of my questions. Please, better. Please. Then I'll move to the bill. I'll move to the bill now. I shall first put, no, I am moving it. I shall first put the amendment moved by Sri Tripura Siva for reference of the Criminal Procedure Identification Bill 2022 as passed by Lok Sabha to a select committee of the Rajya Sabha to vote. The question is that the bill to authorize for taking measurement of convicts and other persons for the purpose of identification and investigation in criminal matters and to preserve records and for matters, कोई चीज रिकॉर्ड पे नहीं जा रही आप लोगों की बात, for the matters connected therewith and incidental thereto passed by Lok Sabha be referred to a select committee of the Rajya Sabha consisting of the following members: Sri John Betas, Sri G.C. Chandrasekhar, Srimati Bandana Chauhan, Sri Shakti Singh Gohil, Professor Manoj Kumar Jha, Sri Jose K. Mani, Sri Sanjay Raut, Sri Sukhendra Shekhar Roy, Sri Sanjay Singh, Sri Tripura Siva, with Binay Vishwam, with instruction to report by the last day of the first week of the next 257 session of the Rajya Sabha. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the noes have it, division. Okay, please. Division. Please.
Please clear the lobby for division. क्या करना है? Division. Let the lobbies be cleared. Please let the lobbies be cleared for division. माननीय सदस्यगण कृपया प्लीज शांति बनाएं प्लीज. अभी क्या करना? प्लीज शांति बना रखें प्लीज प्लीज प्लीज. प्लीज 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 बैठे. कोई चीज रिकॉर्ड पे नहीं जा रही है. आपके डिवीजन के लिए प्रोसेस में चल. माननीय सांसदगण प्लीज अपने सीट पर बैठे. डिवीजन का प्रोसेस चल रहा है. एक आदमी बताइए. एक आदमी स्लिप से ही होगा. प्लीज 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 बट प्लीज प्लीज. पूछ लीजिए. क्या अभी क्या पढ़े? Honorable members, now Secretary General will explain the voting procedure. Honorable members, as you are aware that during these pandemic days, special sitting arrangements have been made and specific seats have not been assigned to the members. Therefore, it is not possible to conduct voting through the automatic vote recording system in this sitting arrangement. Therefore, voting will be done through the division slips. Members are requested to legibly write their names, date, and in place of division number, their identity card numbers on the division slips if they remember.
The division slips will be distributed to the honorable members in the Rajya Sabha chamber and the Rajya Sabha galleries simultaneously by the officials of the Secretariat on duty. Honorable members may cast their votes by ticking the relevant box titled as ayes, noes, or abstain on the division slips as per their choice, and then hand over the slip to the officials after putting their full signatures. The officials of the Secretariat will collect the duly filled in division slips from the members and hand it over to the officers at the table in the Rajya Sabha chamber. As the slips have to be collected from the galleries also and then brought to the table here, members are requested to kindly be patient and wait for the result of the voting to be announced. Your cooperation will be highly appreciated. I shall now put the amendment for reference of the bill to select committee of the Rajya Sabha to vote. The question is put. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the noes have been division. Secretary General. Honorable members, division clerks will now distribute the division slips. Members may record their option on the division slips and ensure that they have put their signature and written their names and IC numbers legibly before handing over the slips to the division clerks. This is the division on the amendment. ये सब तो हट जाता है।
The door is closed. Please. Honorable members, result of the division on the motion for reference of the bill to select committee, subject to correction, ayes 59, noes 97, abstain nil. The motion is negative. The motion is negative. Honorable members, since the House has already expressed its opinion for not referring the bill to a select committee on the amendment moved by Sri Tiruchi Sivaji, the other amendment given by Sri Sukhendu Shekhar Royji has become infructuous. I shall now put the motion moved by Sri Amit Shah to vote. The question is that the Criminal Procedure Identification Bill 2022 as passed by Lok Sabha be taken into consideration. Those in favor will please say aye. Aye. Those against will please say no. No. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The motion is adopted.
We shall now take up clause by clause consideration of the bill. Clause 2 stands part of the bill. There are 7 amendments. Number 1 by Sri Trichu Sivaji. Are you moving? Number 3 to 5 by Sri John British. Absent. Number 22 to 24 by Sri Binay Viswamji. Are you moving? Amendments moved. I shall first put the amendment moved by Sri Trichu Sivaji to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the noes have it, the noes have it, the noes have it. The amendment is negative. I shall now put the amendments moved by Sri Vinay Vishwam to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the noes have it, the noes have it, the noes have it. The amendments are negative. I shall now put clause 2 to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 2 is adopted. Clause 3 stands part of the bill. There are 9 amendments. Number 6 to 11 by Sri John Britas. Absent. Number 25 to 27, Sri Vinay Vishwam. Moving. So amendment moved. I shall now put the amendments moved by Sri Vinay Vishwam to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the noes have it, the noes have it, the noes have it. The amendments are negative. I shall now put clause 3 to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 3 is adopted. Clause 4 stands part of the bill. There are 5 amendments. Number 12 to 13 by Sri John Britas. Abstain. Not moved. Number 28 to 30 by Sri Vinay Vishwam. Amendments moved. I shall now put the amendments moved by Sri Vinay Vishwam to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the noes have it, the noes have it, the noes have it. The amendments are negative. I shall now put clause 4 to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 4 is adopted. Clause 5 stands part of the bill. There are 4 amendments. Number 2 by Sri Trichu Siva. Moving, sir. Moved. Number 14 to 16 by Sri John Britas. Abstain. Amendments moved. I shall first put the amendment moved by Sri Trichu Siva to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the noes have it, the noes have it, the noes have it. The amendment is negative. I shall now put clause 5 to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 5 is adopted. Clause 6 stands part of the bill. There are 3 amendments. Number 17 and 18 by Sri John Britas. Abstain. Number 31 by Sri Vinay Vishwam. Moved. Amendments moved. I shall now put the amendment moved by Sri Vinay Vishwam to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the noes have it, the noes have it, the noes have it. The amendment is negative. I shall now put clause 6 to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 6 is adopted. Clause 7 stands part of the bill. There is 1 amendment. Number 32 by Sri Vinay Vishwam. Amendment moved. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the noes have it, no, the noes have it, the noes have it. The amendment is negative. I shall now put clause 7 to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 7 is adopted. Clause 8 stands part of the bill. There are 2 amendments. Number 19 and 20 by Sri John Britas. Abstain. I shall now put clause 8 to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 8 is adopted. Clause 9 stands part of the bill. There is 1 amendment. Number 21 by Sri John Britas. Not absent. I shall now put clause 9 to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 9 is adopted.
Clause 10 stands part of the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 10 is adopted. Clause 1, the enacting formula and the title stand part of the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 1, the enacting formula and the title are adopted. Shri Amit Shah to move that the bill be passed. Shri Amit Shah ji to move that the bill be passed. महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक को पारित किया जाए. Motion moved that the bill be passed. The question is that the bill be passed. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The bill is passed. Let the lobbies open. Let the lobbies open. Message from Lok Sabha Secretary General. Sir, with your kind permission, I rise to report that the Lok Sabha at its sitting held on 6th April 2022 passed the Weapons of Mass Destruction and Their Delivery Systems Prohibition of Unlawful Activities Amendment Bill 2022. I lay a copy of the said bill on the table. Thank you. Now special mentions, Shri Jawahar Sarkar ji. Please. माननीय सदस्यगण स्पेशल मेंशन हो रहा है. प्लीज हाउस. I take it as late, sir. प्लीज ले. थैंक यू. अब पढ़ दें. A statement. किसको देना है? 10-15 गांधी स्टेट. ले कर दिया हूँ. श्री फूलो देवी नेताम एसोसिएट. अध्यक्ष महोदय, एनबीसीसी द्वारा घटिया निर्माण कार्य से पीड़ित सेवानिवृत्त कर्मचारी को न्याय दिलाने के संबंध में मैं ले करती हूँ. थैंक यू. धन्यवाद. श्री संजय राउत जी. माननीय संजय राउत जी, प्लीज. हाँ, माइक प्लीज, माइक. हाँ, I am laying the special mention regarding need to establish fast track development tribunal in the country. थैंक यू. Susmita Dev ji, please. Sir, are we allowed to read or? Yes, you can read. Can I? Yes. Text updation of National Register of Citizens was conducted in Assam under the supervision of the Supreme Court. A draft NRC was published on 30th July 2018, leaving out 40,70,707 persons as ineligible for inclusion. Wide order dated 13th August 2019, the Supreme Court directed the NRC coordinator to set up a security regime for NRC biometric data as per Aadhaar regime. On 31st August 2019, a final list of NRC was released. 21 lakh people were included and about 19 lakh were left out, sir. The biometrics have been withheld of about 26 lakh people, including those whose names appeared in the NRC final draft list, citing the modalities. Clause 9 of the said modalities state that once the final NRC has been published, persons who are included in it will be given an Aadhaar number as citizens. However, that has not happened on the grounds that the process of claims and objections have to be completed, which can take a long time. As a consequence, lakhs of people are deprived of basic amenities connected to Aadhaar, even though they are not declared as foreigners, depriving them from their fundamental right of life, livelihood, education, and prevents access to government schemes requiring mandatory Aadhaar registration. The court has stated that no coercive action shall be taken against the people left out of the NRC until final notification. The central government should take steps either in court or other legislative action to release the biometric data and remove this anomaly. Thank you, sir. Thank you, Susmita ji. माननीय सदस्यगण, अगर आपकी अनुमति हो तो फौजिया खान जी को कुछ आवश्यक काम से बाहर जाना है, तो उन्हें पहले मैं पढ़ने की इजाजत दे दूं. फौजिया जी. Thank you very much, Honorable Deputy Chairman, sir. I would like to throw light onto the growing issue of a relatively untapped disability, which is the learning disability.
Learning disabilities constitute a heterogeneous group of disorders of which the center impairment is cognitive processing. While there has been no macro-level study to estimate the prevalence of such learning disabilities amongst children, multiple independent studies calculate the range of its occurrence between 10 and 12% of the school-going population. Roughly, this translates into at least 4 children in a classroom with learning disabilities. This issue gets further complicated due to the lack of teacher awareness, of clear-cut assessment procedures, or indigenous tools for assessment of processing deficits, intelligence testing, and testing for proficiency in reading and writing. Having said that, learning disability being relatively newly recognized in India, there are still no clear-cut and commonly accepted assessment procedures, policies, or indigenous tools to diagnose LD in India. And if not addressed, we stand to lose out on a significant chunk of the literate population from the future productive workforce of the country. Hence, the government needs to formulate a constructive policy in this regard under the ambit of the Mental Health Care Act, as well as an educational law must be brought in for this. This would ensure the much deprived support that could turn schools and educational institutions into inclusive and accessible spaces for all, sir. Thank you very much, sir. Thank you. Dr. Binay P. Sahasrabuddhe. Particular subject has special mention on the table of the House, which is about developing a prudent ecosystem for esports, including legally permissible e-gaming. This has earlier also been mentioned over here, but I would like to draw the attention of the House to the fact that out of the 8 games that are medal sports in the Asian Games 2022, 2 are banned in India by the Ministry of Electronics and Information Technology due to data pilferage concerns. What is required is to have a more holistic outlook towards esports and gaming. And in that regard, there has to be some efforts on the part of the government to ensure that India's flag is represented and players are selected for these tournaments in fair and transparent manner. I request that wider consultations need to be held to develop a prudent esports ecosystem in India to further economic growth as well as job creations. Thank you. Sri Muhammad Nadimul Haq ji. Thank you, sir. My special mention is need to address the lags under the Jal Mission project. The Union government has set a target of 49 million households to provide piped water connections under Jal Mission in financial year 2021-22. However, the government has been able to cover only 19.8 million households, which is far below the target. The pace of providing piped water connections in financial year 22-23 is also likely to drop by 60%, which is extremely concerning. Some states such as Uttar Pradesh are also lagging behind, where the state government has been able to provide hardly 6.5 lakh connections. Bengal, on the other hand, has outperformed all other states. It ranked first among all states in terms of providing tap water connections to households since November 2021. Bengal has provided tap water connection to approximately 23 lakh households in the current fiscal year and has set a target of providing tap water connections to 1,77 lakh families by 2024. Under its Jal Swapno project, Bengal can be a golden example of how the targets of providing water connections to all households can be achieved in an expedited manner without any lags. I urge the government to take steps to ensure that the work under the Jal Mission project is expedited to ensure that every household in a country has access to water. Thank you, Nadimul. Honorable Sri M. Sanmugam. Thank you, sir. I raise to this subject need to make permanent the services of doctors and healthcare workers employed on contract basis under the National Health Mission. Sir, since 2005,
The National Health Mission, Rashtriya Swasthya Mission, is being run by the Government of India, in which the doctors are recruited on contract basis. As you know, during the COVID pandemic, the health facilities were in great demand, and these doctors and health workers engaged in a contract basis served the patients even under the adverse circumstances without worrying about their lives. Due to less number of COVID reported cases in various hospitals, orders are being issued to terminate the services of these contract doctors and health workers. Recently, many doctors, nurses and health workers engaged in various hospitals in Delhi like RML Hospital, Lady Harding Hospital, Rajkumari Amrit College of Nursing have been terminated despite the labor dispute are pending in the labor tribunals. Thousands of doctors or health workers are in the street and staging dharna protests against the termination of these services. Saviors who really saved the lives of lakhs and lakhs of people in the country in the worst COVID pandemic. I would therefore urge upon the Minister of Health and Family Welfare to honor the hard work of these doctors and health workers. Their services should be regularized and they should be given permanent jobs and on the respective posts so that the doctors-patients ratio could be improved in the country, and the nation is ever prepared to face such challenges. Basic health facilities should reach the lowest rung of the society, and you can make Ayushman Bharat scheme success. Thank you, sir. Thank you, Shanmugam ji. Mani Ajodhya Rami Reddy. Thank you, sir. My special mention today is on awareness for importance of soil health. With the incessant rain and flash floods happening regularly along with climate changes, the top fertile soil and its nutrients are washed away, leaving the soils infertile without any proper nutrients. According to the United Nations Food and Agriculture Organization, a third of world soil is now moderately to heavily degraded due to various reasons, including topsoil erosion and loss of essential nutrients. It is essential that we do everything to protect the soil, to keep it safe and fertile with essential nutrients and its quality intact. Around 12 million hectares of land are lost due to desertification every year. Climate change, spread of intensive agriculture, deforestation and industrial activities have accelerated the degradation of topsoil, affecting the quality of soils everywhere. Even the farming practices such as tilling and breakup of the soil destroys its natural structure, killing many of the vital bacteria and fungi that live there, which add value to the soil and its fertility. Soil is also a key to storing and preserving water and acts like a sponge that soaks up in rain and keeps the moisture and other essentials intact. Excessive use of pesticide and use of inorganic fertilizers can accumulate matter in the soil, affecting it and leave the soil in a very unhealthy way. I appeal to the government to help protect the soil of our agricultural lands by creating more awareness about the importance of soil health for our future generations. Thank you, sir. Thank you, Ajodhya Reddy ji. Honorable Sri Luigino Falero. Thank you, sir. Demand for representation of ST community in the Goa Assembly. Goa comprises of 10.23% scheduled tribe population consisting of Gaudas, Kunbis and Velips. Even after 60 years of Goa's liberation, these members have been unable to find full and proper representation in the State Assembly of Goa. Gaudas, Kunbis and Velips were notified under Scheduled Caste, Scheduled Tribe Amendment Act 2002 on 8 January 2003. Yet, 19 years pass, they are kept outside the Goa Assembly. This is a clear violation of Article 332 and Article 330 of our Constitution. I remember with nostalgia in 1980, I was privileged to lead the movement of Goa's scheduled tribes as president of Gauda Vikas Mandal.
Even though I don't belong to this community, we fought for the reservation of professional colleges and in employment. Today, they have the reservation in panchayats, municipalities, Zila panchayats, except in the Goa Assembly. This step empowered the communities to live more dignified lives as at par with other citizens of Goa. However, this progress has been left incomplete as these communities were not provided the due representation in the Goa Assembly. India is the world's largest democracy, and yet it is very sad that Gaudas, Kumbis and Velips are oppressed, suppressed and exploited socially, economically and politically. Even after 60 years of liberation of Goa and 19 years after the declaration of India's scheduled tribes, first by the colonial powers and now due to lack of political representation, I urge the Government of India to end this hostile discrimination and provide proportional and equitable representation in the Goa Assembly as per mandate of the Constitution. Thank you. Thank you. श्रीमती छाया वर्मा. महोदय, केंद्र सरकार द्वारा विभिन्न केंद्रीय योजनाओं के तहत कम राशि छत्तीसगढ़ राज्य को जारी की जा रही है। वर्ष 14-15 में जहां केंद्रीय योजनाओं के तहत 75% का अनुपात था, वहीं छत्तीसगढ़ राज्य को केंद्रीय योजनाओं के तहत 64 से लेकर 50% तक ही धनराशि जारी की जा रही है। इससे जहां 2014 में राज्य की तत्कालीन सरकार को 15% राशि केंद्रीय योजनाओं के तहत संपन्न होने वाले कार्यों पर अपने संसाधन से खर्च करना पड़ता था, वहीं अब वर्तमान राज्य सरकार को 36 से लेकर 50% तक की राशि अपने संसाधनों के तहत खर्च करना पड़ रहा है। मेरी मांग है कि केंद्र सरकार राष्ट्रीय बागवानी मिशन, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, मनरेगा, इंदिरा आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, राजीव आवास योजना, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम, सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, एकीकृत बाल विकास योजना और राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल जल जीवन मिशन योजना के तहत केंद्र सरकार वर्ष 2014-15 की भांति केंद्रीय अंश की राशि 75% दे, न कि कम करके 50%। इस मानवीय विसंगति को छत्तीसगढ़ की जनता के हित में अविलंब दूर किया जाना चाहिए। धन्यवाद। धन्यवाद सर। माननीय अनिल देसाई जी. Deputy Chairman, sir. Sir, my subject is regarding scam of fake GST billing. Sir, there are media reports suggesting that in several states, there are instances of creating of fake billing transactions worth of crores of rupees by unscrupulous and dummy business houses, traders, and draining several crores of rupees from the government coffers through fraudulent claims for input tax credit. This shows that there are still several loopholes in the GST system introduced by the government in July 2017. There are some basic lacunas in the system, and grant of GST registrations without any physical verification of the location of businesses is one of it. There is no office or establishment, but these dummy firms obtain GST registration numbers and submit fraudulent claim for credit. The fraudsters have floated multiple dummy firms, obtained GST registrations, issued fake GST invoices of GST without actual supply of goods and services, and passed on ineligible ITC, that is input tax credit accrued from the bogus invoices, to clients for a commission, who subsequently used it to make GST payments, causing losses to the government. In such a situation, government must consider the ways and means to stop this malpractice. Government should deploy more staff and offer incentives to detect such frauds and save government money from draining to these dummy firms and people. Thank you. धन्यवाद अनिल. Professor Manoj Kumar Jha ji. Thank you, Honorable Deputy Chairman, sir, and must express my gratitude. My subject is demand to publish employment calendar, sir. The persistence of sizable unemployment in the midst of the rising poverty is a matter of concern for the country. This high unemployment needs to be seen in the context of vacant seats in public sector institutions, particularly the reserved seats. With government jobs being limited, high vacancy in view of outsourcing of jobs for substantive posts have created unrest among the applicants.
it has been observed that the continuous backlog of vacancies is a continuing process in different departments and ministries. The lack of transparent and periodic data about employment goes against the spirit of active citizenship and democracy. Hence, there is an urgent need to have current, accurate, and publicly available data about employment and vacancies in government departments. In this regard, the Ministry of Labour and Employment must collect information from every department, area, corporations about vacancies in a year and publish an employment calendar at the earliest. The employment calendar should also contain the estimates of the labour force, employment and unemployment on an annual basis in rural and urban areas, and for the two areas combined at the national and state levels for the entire population. Thank you very much. धन्यवाद हाजी। डॉक्टर प्रशांत नंदा जी। Thank you, sir. My subject is establishing marine police stations and 3 new cities. There is critical gap in the coastline of Odisha in the district of Baleswar. South of Balramgadi, Marine Police Station, and huge gap after Arakkuda Marine Police Station in coastal areas of Puri district. Hence, it is required to establish one marine police station each in Baleswar and Puri district. Accordingly, a proposal has been submitted to the Ministry of Home Affairs by letter number 432/CS dated 28/2016. Sanction of the government is yet to be received. There is no exclusive jetties for marine police in the state of Odisha. A proposal has been sent to the Ministry of Home Affairs, New Delhi, by letter number 309/CS dated 28/2015 for provision of additional funds of rupees 400 crore for construction of 3 jetties at Bhubaneswar in Baleswar district, Chipasarwali in Puri district and Maluda in Khordha district along Odisha coast. Will the government of India make provision for construction of 3 new jetties along Odisha coast? Government of Odisha have submitted a proposal to Ministry of Home Affairs, New Delhi, for establishment of a coastal security headquarters with modern control room in Bhubaneswar to monitor movements of boats in coastal area, including boats of marine police stations, by using GPS technology and modern communication facilities. I urge the Government of India to sanction the above proposal. Thank you, Dr. Prasad Nanda ji. Srimati Mausam Noor ji. My special mention is on delay in dispersal of funds of Bengal. The West Bengal government has not received any money from central funds since 26 December 2021, in exception to the rule that MGNREGA funds should be dispersed after 15 days work. Rupees 1613.61 crore against 8 crore mandates have not been released by the center under MGNREGA. Bengal is currently rated second in the country in terms of mandates created under the 100-day job scheme and first in terms of workforce strength. Until 7th March, approximately 34 crore mandates have been created in the current fiscal year. In terms of workforce strength, the state stands first in the country, having managed to employ a total of 1,798,452 workers under this scheme. Moreover, the union government has given approval of rupees 645 crores in connection with Mission Nirmal Bangla, but no money has been released till date in the financial year 2021-2022. Similarly, 38.95 lakh families were determined eligible after 56.86 lakh families were registered under the Bangla Awas Yojana. However, Bengal did not receive the sanction despite the fact that 23 other states did. There is an urgent need to address the delays in disbursal of funds to Bengal government. In the past as well, there has been delays in clearing the dues of the state government by the union government. It is therefore imperative that the union government takes cognizance of the situation and immediately disburse the dues owed to the state. Thank you, sir. Thank you. माननीय विश्वंभर प्रसाद निषाद जी. Thank you, sir. उपाध्यक्ष महोदय, उपसभापति महोदय,
मैं विशेष उल्लेख के माध्यम से उत्तर प्रदेश के जनपद फतेहपुर बांदा राष्ट्रीय मार्ग के बीच कस्बों में बाईपास रोड बनाने हेतु रख रहा हूं। महोदय, आपका ध्यान अवलंबनीय लोक महत्व के विषय की तरफ दिलाना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर बांदा बहराइच के राष्ट्रीय मार्ग वन मार्गों के कस्बा तिंदवारी, ललौली, शाह, गाजीपुर, बिंदकी कस्बा में घनी आबादी तथा बाजार होने के कारण आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। कई कई घंटे रास्ते जाम रहते हैं। इसलिए उपरोक्त कस्बों में बाईपास रोड बनाना आवश्यक है। अतः सदन के माध्यम से मांग करता हूं कि उत्तर प्रदेश के फतेहपुर बांदा बहराइच के राष्ट्रीय मार्गों के कस्बा तिंदवारी, ललौली, शाह, गाजीपुर, बिंदकी कस्बा में बाईपास रोड बनाने हेतु सरकार को निर्देश देने की कृपा करें। धन्यवाद। धन्यवाद। माननीय डेरिक जी। Sir, thank you. Sir, you didn't allow us a discussion on price rise. Thank you for this. Sir, the special mention is on the need to address the delay in dispersal of Provident Fund for those with Portuguese origin names in Goa and the rest of India. So, owing to the computer programming, people are facing hardship redeeming their Provident Fund, and NEFT transfers are being refused by the EPFO. So the software actually is unable to process any name which has an apostrophe or a dash in it. Please. EPFO officials are now asking individuals to change their surnames in government-issued KYC documents such as Aadhaar, passport, and PF processing. So the names were accepted earlier in these documents, but now they are not. Sir, asking to change such surnames, sir, is, you will agree, very unfair and illegal. Why should Indian citizens who have an apostrophe or a hyphen in their names be pressurized to change their names? Sir, this hurts citizens, especially the citizens of Goa. Let me tell you why. Because names with an apostrophe in their surnames, such as De Cruz, De Rosario, De Silva, De Gama, Desa, De Mello, these are common names, sir, especially from Salsette in South Goa. And there are many with these surnames who live across Goa, but especially in Nuvim, Fatorda, Kurturim, Margao, Naveli, Benauli, Velim, Kunkulam, no long list. Sir, besides these names of Portuguese descent, there's a microscopic community, sir, only few 100,000. The community I belong to, the Anglo-Indian community. So some of us also have, because of some European descent, someone's great-grandfather, Anglo. So those names also have apostrophes, like O'Connor, O'Donnell. Okay. Right. Similarly, there are certain double-barrel names. So, say Taylor Smith or any name with a hyphen in it would be rejected, sir, by the EPFO. Asking Indian citizens to change their names because of a computer program, sir, is quite unnecessary. Sir, the government had promised us a seamless digital experience. The Home Minister gave us a half-an-hour speech on that, sir. Please. I urge the government to modify the EPFO software to accommodate all names with apostrophes and hyphens. No one should be deprived of their Provident Fund, and no one in the beautiful state of Goa must be humiliated. Thank you, sir. Maanनीय John Britas, absent. Honorable members, the House stands adjourned to meet at 11 hours on Thursday, the 7th April 2022. कुछ सदस्यों ने कुछ धाराओं पर इसके दुरुपयोग पर आशंकाएं भी व्यक्त की है कि इसका दुरुपयोग हो सकता है। कुछ सदस्यों ने इसकी संवैधानिक वैधता पर भी सवाल खड़े किए हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिए हैं, इस जजमेंट के हिसाब से यह बिल उचित नहीं है। इस सब का मैं डिटेल जवाब दूंगा माननीय। सबसे पहले मैं बिल को लेकर आने वाले मंत्री के नाते इस बिल का उद्देश्य सदन के सामने स्पष्ट करना चाहता हूं, क्योंकि रिकॉर्ड पर रहना चाहिए। मान्यवर, इस बिल का प्रमुख उद्देश्य है इस देश में कानून की अदालतों में जो मामले जाते हैं
उसमें दोष सिद्धि का प्रमाण बढ़ाना, ये इसका प्रमुख उद्देश्य है। पुलिस और फॉरेंसिक टीम की कैपेसिटी बिल्डिंग करना, ये इस बिल का उद्देश्य है। थर्ड डिग्री को नाबूद कर दोष सिद्धि के लिए साइंटिफिक एविडेंस प्रोसिक्यूशन एजेंसीज को उपलब्ध कराना, ये बिल का मान्यवर उद्देश्य है। और डेटा को सुरक्षित प्लेटफॉर्म पर रखकर उसको निश्चित प्रक्रिया के तहत साझा कर किसी भी नागरिक की प्राइवेसी रिस्क में न आए, उसकी प्राइवेसी का भंग न हो, इस प्रकार का व्यवस्था तंत्र बनाना, ये 4 उद्देश्य लेकर मैं इस महान सदन के सामने ये बिल को लेकर मान्यवर आया हूं। मान्यवर, बहुत बात हुई, ये बिल से ये कर देंगे, वो कर देंगे, इस बिल से इसका दुरुपयोग हो जाएगा, मगर मुझे थोड़ा दुख भी है मान्यवर। जो झा साहब ने कहा कि चर्चा का स्तर बहुत अच्छा रहा। झा साहब, चर्चा का स्तर तब अच्छा माना जाता है जब बात बैलेंस तरीके से की जाए। मान्यवर, एक भी विपक्ष के सदस्य ने दोष सिद्धि का प्रमाण कम है और उसको बढ़ाना चाहिए, इसकी जरूरियात ही महसूस नहीं की। हम किस प्रकार का क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम चाहते हैं, जिस क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर हत्या कर 100 में से 66 लोग बरी हो जाए, जिस सिस्टम के अंदर बलात्कार कर 100 में से 60 लोग बरी हो जाए, चोरी कर 100 में से 62 लोग बरी हो जाए, डकैती कर 100 में से 70 लोग बरी हो जाए, बाल अपराध कर 100 में से 62 लोग बरी हो जाए। दोष सिद्धि का प्रतिशत क्या है मान्यवर? कोई नहीं बोला। इतना सारा रिसर्च करते हैं तो इतना भी तो कर लेते और इसको स्पिरिट से रख देते। मान्यवर, हत्या के अंदर सिर्फ 44% लोगों को देश में हम सजा दिला पाते। मैं तो प्राइमरी कोर्ट की बात करता हूं, ऊपर जब जजमेंट आता है तब ये और गिरता है। मान्यवर, बलात्कार के अंदर 39%, चोरी के अंदर 38%, डकैती के अंदर 29% और बाल अपराध के अंदर 37% सिर्फ मात्र। क्या हम इसको बढ़ाना नहीं चाहते हैं? किसी ने इसका सजेशन नहीं दिया, कुछ अच्छे सुझाव देते कि भाई ये बढ़ाने के लिए ये जरूरी है, मगर इसमें इतना ध्यान रखिए, इसमें इतना सुधार करिए, तब तो चर्चा का स्तर ऊपर आया, मैं मान सकता था माननीय अध्यक्ष। मैं और देशों की भी बहुत सारी बातें हुई, उस देश के कानूनों का अध्ययन करें, मगर इसका रेफरेंस दिया गया है। हमारा कानून तो शक्ति के हिसाब से बच्चा है मान्यवर, इससे कठोरतम कानून दुनिया के देशों के अंदर बने हैं। और वहां पर दोष सिद्धि का प्रतिशत देखें, दक्षिण अफ्रीका में 82%, यूनाइटेड किंगडम में 84%, कनाडा के अंदर 64%, ऑस्ट्रेलिया में 97% और अमेरिका में 93%। ये क्यों है? क्योंकि वहां प्रोसिक्यूशन एजेंसी को साइंटिफिक एविडेंस का आधार मिला हुआ। साइंटिफिक एविडेंस, फोरेंसिक एविडेंस, इसके आधार पर प्रोसिक्यूशन एजेंसी आगे बढ़ती है, इसलिए अदालतों को सजा करना बहुत सरल हो जाता है और जो गुनहगार है उसको कानून की गिरफ्त से भागना बहुत कठिन हो जाता है। क्या हम हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को उस ओर मोड़ना नहीं चाहते? मोड़ना चाहिए या नहीं चाहिए? ये सदन के सामने ये बिल आया, इसलिए मैं पूछना चाहता हूं, क्या हम सिर्फ राजनीति की कोरी चिंता करेंगे? राजनीतिक चिंताओं का सम्मान है, आपकी शंकाओं का भी जवाब देने का मेरा दायित्व है और मैं दूंगा भी, परंतु आप में से कोई एक तो भला बोलता कि भैया ये जरूरी है मगर इतनी चिंता करिए।
एक का मैंने सब भाषण धैर्य से सुने मान्यवर, कहीं पर भी कोई नहीं बोला। मान्यवर, ये बिल लाने का उद्देश्य दोष सिद्धि को बढ़ाना और साइंटिफिक एविडेंस को हमारी प्रोसिक्यूशन एजेंसियों को उपलब्ध कराना है। मान्यवर, एक देश में एक प्रथा होगी, लोकतंत्र में पक्ष और प्रतिपक्ष होना स्वाभाविक है, होना भी चाहिए। हम तो चाहते हैं प्रतिपक्ष मजबूत हो, मगर जनता जो चाहती है वही यहां आता है। हम तो चाहते हैं प्रतिपक्ष मजबूत हो, परंतु अल्टीमेटली वो तो जनता को निर्णय करना है। मान्यवर, कोई भी सरकार बनती है वो विधि से स्थापित होती है। कोई भी सरकार जो बनती है वो विधि से स्थापित होती है और सरकार लोगों के मैंडेट का प्रतिनिधित्व करती है। सरकार की हर लेजिस्लेशन को, हर कानून को शंका की दृष्टि से देखकर एक शंका का गहरा बादल देश के विचारों के आकाश पर बना देना कितना उचित है। जन भावनाओं को गुमराह करना, शंकाओं के औथार के नीचे आप हर चीज को जनता के मन में भय उत्पन्न करना, ये कितना ठीक है। मानिए, हमने कहीं ना कहीं इसका विचार करना पड़ेगा। ये सरकार कोई पार्टी नहीं बनाती है। पार्टी तो अपना एजेंडा लेकर जनता के सामने जाती है, जनता वोट करती है और उसमें से सरकार बनती है। ये सरकार संविधान बनाता है, संविधान की धाराएं बनाती है, शपथ संविधान के लेने पड़ते हैं। तो सरकार के हर इंटेंट शंका खड़ी करना और शंका का एक बादल खड़ा कर लोगों को गुमराह करने का प्रयास मान्यवर लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। और मैं देख रहा हूं हर एक सरकार के कदम को राजनीतिक तराजू के अंदर ही तोला जाता है। हर एक सरकार के कदम को पक्ष और विपक्ष की भाषा में ही देखा जाता है। सरकार के हर उद्देश्य को इसका ये उपयोग हो जाएगा, उसका वो उपयोग। मैं समझ रहा हूं आपको शंका आना स्वाभाविक थी। जब आप पावर में थे तब किया है वो दुरुपयोग, आपने किया है दुरुपयोग, मगर हम उनमें से नहीं है, नहीं है, निश्चित रूप से नहीं है। मैं बोलूंगा तो पसंद नहीं आएगा, कहेंगे पुरानी बात है। मैं बोलूंगा तो पसंद नहीं आएगा, आप तुरंत कहेंगे पुरानी बातें पुरानी ही है, क्योंकि आपकी सत्ता पुरानी हो गई, तो बात तो पुरानी ही आएगी। आज तो आप विपक्ष में बैठे हो मान्यवर, पर मैं इसमें जाना नहीं चाहता। कुछ सदस्यों ने ह्यूमन राइट की बात करी। मैंने कल भी लोकसभा में कहा था 2 दिन पहले कि मान्यवर ह्यूमन राइट के 2 पहलू होते हैं। मैं मानता हूं कि जिसको कानून पकड़ता है उसका भी ह्यूमन राइट है, उसका भी सम्मान होना चाहिए। परंतु उपसभापति महोदय, हत्या जिसकी होती है, जो घर निराधार हो जाता है, जो घर का एक ही कमाकर घर का पालन पोषण करने वाला व्यक्ति मर जाता है, उसके बाल बच्चों का भी कोई ह्यूमन राइट होता है या नहीं होता है? इसकी चिंता भी सदन ने करनी है या नहीं करनी है? ह्यूमन राइट कभी एक तरफा नहीं हो सकता। जब बम धमाके होते हैं, टेररिज्म फैलता है, हजारों लोग मारे जाते हैं, मरने वालों का भी ह्यूमन राइट है, सिर्फ टेररिस्टों का ह्यूमन राइट नहीं है। गुनाह के विक्टिम, उसका भी ह्यूमन राइट है, सिर्फ गुनहगार का ह्यूमन राइट नहीं है। अगर हम कानून बनाने वाली संस्थाएं ये दोनों ह्यूमन राइट के बीच में भले बुरे का अर्थ नहीं समझेगी, दोनों के बीच में संतुलन नहीं बनाएगी, तो हम किसको प्रोटेक्ट करना चाहते? जो लोग कानून के भरोसे अपना जीवन जीना चाहते हैं, जिनकी संख्या 97% से ज्यादा है, इसकी चिंता न करें। इसकी चिंता जरूर करनी चाहिए मान्यवर। आप लोगों को जिसकी चिंता करनी है करिए, हम तो वो 57% कानून के हिसाब से लोगों को, जीने वाले लोगों के ह्यूमन राइट की चिंता करने वाले मान्यवर। स्वतंत्रता का सबको अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट के कई जजमेंट विद्वान लोगों ने यहां कोट किए, मगर हर जजमेंट में से सिलेक्टिव पार्ट ही अपना लेकर पढ़े। उसके आगे लिखा है कि स्वतंत्रता
इस मात्रा में ही उपयोग होनी चाहिए कि किसी और की स्वतंत्रता का हनन न हो जाए। स्वतंत्रता का मतलब स्वच्छंदता नहीं होता है। स्वतंत्रता के दायरे हैं। स्वतंत्रता कानून के दायरे में संविधान के 4 कोने के बीच में दी गई है। और इस स्वतंत्रता की व्याख्या और किसी की स्वतंत्रता का हनन करने के लिए नहीं उपयोग की जा सकती। ये स्वतंत्रता नहीं। मान्यवर, स्वतंत्रता का सम्मान हम भी करते हैं स्वतंत्रता का सम्मान। मान्यवर फौजिया खान जी, संजय जी, सबने ये शंका का वातावरण खड़ा करने का उपयोग किया है, प्रयास किया है, सवाल भी उठाए हैं, उनका अधिकार है। मगर मैं आश्वस्त करना चाहता हूं सदन के सभी सदस्यों को, ये बिल लाने के पीछे मेरी या हमारी सरकार की, ना हमारे प्रधानमंत्री की, किसी की भी मंशा नहीं है। ये बिल लाने के पीछे मंशा एकमात्र मंशा है, इस देश में गुनाहों के प्रमाण को कम किया जाए, इस देश में सजा के प्रमाण को बढ़ाया जाए और इस देश के कानून और व्यवस्था की स्थिति को सुधारा जाए और इस देश की आंतरिक सुरक्षा को सुदृढ़ किया। और मैं आगे बताता हूं कि किस प्रकार से एक कहा गया कि भाई इसका दुरुपयोग होगा, निजता का हनन होगा। मान्यवर, सारा डेटा जो आएगा वो एनसीआरबी के पास रहेगा और मैं सबको आश्वस्त करना चाहता हूं कि एनसीआरबी में जो डेटा आएगा वो सुरक्षित प्लेटफॉर्म पर और सुरक्षित हार्डवेयर के अंदर ही रहेगा। डेटा भंडारण में किसी तीसरे पक्ष, थर्ड पार्टी या निजी एजेंसियों को कोई स्थान नहीं मिलेगा। एनसीआरबी ही उसको मैनेज करेगी। मान्यवर, एनसीआरबी का जो डेटा भंडारण है उसको सरकार की उच्च से उच्च कक्षा की कमेटी इसका परीक्षण करेगी और डेटा साझा करने के लिए भी एक पद्धति बनाएगी। इसके लिए भी फॉरेंसिक्स एक्सपर्ट्स और इस क्षेत्र के एक्सपर्ट की एक कमेटी बनेगी। वो डेटा साझा करने की पद्धति को बनाकर रूल्स के अंदर व्याख्यायित कर ये नोटिफाइड करेगी। मान्यवर, मैं थोड़ा एक उदाहरण देना चाहता हूं। अभी एनसीआरबी के पास एक नफीस कर सिस्टम बनाया है। इसके तहत 1 करोड़ फिंगरप्रिंट का डेटा है और अगर ये बिल राज्यसभा के सदस्य पास कर देते हैं तो डेटा बहुत बढ़ेगा, फिंगरप्रिंट का डेटा बढ़ेगा। अब किसी भी राज्य के कोई एक दूर के गांव में चोरी होती है और पुलिस जाकर फिंगरप्रिंट लेती है तो फिंगरप्रिंट लेने के बाद पुलिस इसको प्रिजर्व करती है, क्योंकि जब चोर पकड़ा जाएगा तब फिंगरप्रिंट मैच कर उसको सजा कराने के काम में आएगा। चिदम्बरम साहब ने तो फिंगरप्रिंट पर ही क्वेश्चन कर दिया, मगर अभी तो अदालतें मानती है इसको, इसलिए उसको सजा कराने के काम में आएगा। अब ये सिस्टम आने के बाद क्या होगा, किसी घर में चोरी होगी तो पुलिस अफसर फॉरेंसिक साइंस की टीम को बुलाकर वहां जो उपलब्ध फिंगरप्रिंट है उसको लेगा, घर के लोगों के फिंगरप्रिंट लेकर उसमें से घर के लोगों के फिंगरप्रिंट को बाहर निकालेगा। जो बच जाएगा वो फिंगरप्रिंट चोरी करने वाले शंकास्पद व्यक्ति के है। आज स्थिति है, पुलिस उसको ढूंढती है, उसका फिंगरप्रिंट लेती है और फिर मैच करती है। अब क्या होगा, वो फिंगरप्रिंट वो भेजेगा एनसीआरबी को। वो पुलिस स्टेशन को या पुलिस को पूरे फिंगरप्रिंट का एक्सेस नहीं है, वो पुलिस स्टेशन भेजेगा फिंगरप्रिंट एनसीआरबी को। एनसीआरबी 1 करोड़ फिंगरप्रिंट के डेटा को 3.5 मिनट में रन कर अगर उसमें वो चोर है तो उसका नाम पुलिस स्टेशन को भेज देगा, पुलिस को ढूंढने की जरूरत नहीं। अब भला बताइए इसमें क्या निजता का हनन होगा, क्या हनन होगा? किसी महिला पर अगर बलात्कार हुआ है, वहां से जो बायोलॉजिकल सैंपल मिलेगा उसका बायोलॉजिकल सैंपल के डेटा के साथ जिन्होंने महिलाओं के अपराध किया है इसके साथ मैचिंग कर अपराधी को जल्दी पकड़ लिया जाए और 1 साल के अंदर मुझे सजा हो, इसमें क्या आपत्ति हो सकती है? निजता का हनन तो तब होगा
जब ये डेटा पुलिस स्टेशन को उपलब्ध कराएंगे। किसी को ये डेटा नहीं देना है, पुलिस स्टेशन से क्वेश्चन आएगा, इसका मैचिंग कर कर जवाब पुलिस स्टेशन पर जाएगा, जो कोर्ट में एडमिसेबल एविडेंस होगा। माननीय गृह मंत्री जी, एक मिनट। Normally, it's up to 6 o'clock. But since we are discussing this bill, we may extend the sitting of the house. Till it's disposed of, and then the special mention is also taken. थैंक यू, सहमति। मान्यवर, मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि इससे किसी का भी निजता का हनन नहीं होने वाला है। कोई डेटा लीकेज का क्वेश्चन डज नॉट अराइज। इस रूल्स के अंदर इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फिक्स की जाएगी और इसकी जिम्मेदारी भी तय की जाएगी। जो डेटा रखने वाले हैं उसकी जिम्मेदारी। और आजकल तो मान्यवर टेक्निक बहुत आगे गई, कोड के बगैर डेटा नहीं मिलेगा। इसका कंप्यूटर की क्लॉक में समय भी निश्चित हो जाएगा और उसका एक कंप्यूटराइज रजिस्टर होगा कि किसकी डिमांड पर, किस एजेंसी की डिमांड पर ये डेटा का एक्सेस किया गया है। मान्यवर, इसके अंदर इतनी शंका ना मान्य संसद सदस्य रखे, ना जनता को रखने की जरूरत है। नहीं, इसको पूरे विचार के साथ ही हम नोटिफाइड करेंगे, पूरी सिस्टम बनाने के बाद ही नोटिफाइड करेंगे और रूल्स भी इसके सारे तज्ञों के साथ चर्चा करने के बाद हम नोटिफाइड। मैं इसलिए कहता हूं कि अगर शंका राजनीति से प्रेरित नहीं है तो इसका निरसन जरूरी है। सभी लोगों की शंकाएं राजनीति से प्रेरित है ऐसा मैं नहीं मानता, इसलिए मैंने इसको समझाने का प्रयास किया। मान्यवर, 2014 में देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्मार्ट पुलिसिंग की एक व्याख्या देश के सामने रखी थी और स्मार्ट पुलिसिंग की व्याख्या को उन्होंने बहुत स्पष्ट किया है, क्योंकि इस देश में जब तक पुलिसिंग के था स्ट्रिक्ट और सेंसिटिव, एम से कहा था मॉडर्न और मोबाइल, ए से कहा था अलर्ट बट अकाउंटेबल, आर से कहा था रिलायबल एंड रिस्पॉन्सिव, टी से कहा था ट्रेन और टेक्नो सेवी। ये जो बिल है मान्यवर, ये टी को एड्रेस करने वाला है। देश भर के सभी प्रिजन के अफसर को, सभी पुलिस अफसरों को इसकी टेक्नोलॉजी से ट्रेन करने का अभियान भारत सरकार के बीपीआरएनडी और हमारा एनसीआर भी उठाने वाला है। इनको ट्रेन करेंगे और उनको टेक्नो सेवी भी बनाएंगे और तब जाकर ये बिल की मंशा सब पूरी होगी। मान्यवर, क्या हम आगे बढ़ना नहीं चाहते? मान्यवर, ये सदन ने भी ये सोचना पड़ेगा कि हम वही रहना चाहते हैं कि सिर्फ राजनीति की गुल्ला डंडी खेलकर देश का विचार नहीं करेंगे हम। अरे बहुत सारी चीजें हैं राजनीति के करने के लिए। मैं बंगाल आऊं चुनाव के लिए तब कर लो भाई, कौन डरता है? कर लेंगे दो हाथ, हम नहीं डरते। मगर जहां तक जनता के संरक्षण का सवाल है, उसकी सुरक्षा का सवाल है, पुलिस को ताकत देने का सवाल है, गुनहगारों को सजा कराने का सवाल है, मुझे लगता है मान्यवर इसमें किसी ने राजनीति नहीं करनी। और ये जो बिल मैं लेकर आया हूं, ये एक अकेला हमारा प्रयास नहीं है मान्यवर। विगत 2.5 साल के अंदर ढेर सारी चीजें मोदी जी के स्मार्ट पुलिसिंग की व्याख्या को चरितार्थ करने के लिए गृह विभाग ने की है। मोदी जी ने जो व्याख्या की है, इसके 8 बिंदुओं पर गृह मंत्रालय काम कर रहा है। अगर ये बिल आइसोलेशन में आता है तो शंका और गहरी हो सकती है कि भाई चलो एक अकेले बिल से क्या होगा। ऐसा नहीं है, हम इसके लिए एक एनवायरनमेंट भी बनाए हैं और बहुत सारे प्रयासों में से ये बिल एक प्रयास है, आइसोलेशन में नहीं है। मान्यवर, हमने फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी बनाई है। क्यों बनाई है? फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी इसलिए बनाई है कि बहुत सारे रिपोर्टों के अंदर है कि 6 साल से ज्यादा सजा वाले सभी धाराओं के अंदर फॉरेंसिक एविडेंस को कंपलसरी करना चाहिए। कर तो दे, मगर ट्रेन मैन फोर्स कहाँ है भाई? हमारे पास तो इतना मानव संसाधन बल है ही नहीं। तो क्या करना? फॉरेंसिक साइंस को बढ़ावा नहीं देना, फॉरेंसिक एविडेंस को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। तो हमने
मोदी जी जब गुजरात में मुख्यमंत्री थे, वहां गुजरात फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी बनाई थी। यहां प्रधानमंत्री बनने के बाद 2020 में फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी की हमने रचना की, जिससे वहां से जो विद्यार्थी निकलेंगे, बीएससी फॉरेंसिक साइंस, एमएससी फॉरेंसिक साइंस और इसके अंदर R&D करने वाले बच्चे भी निकलेंगे हर विधा के अंदर। मान्यवर, आज 2 साल के अंदर ये यूनिवर्सिटी ने 6 राज्यों में राज्य सरकारों के साथ एग्रीमेंट कर इस यूनिवर्सिटी से अटैच कैंपस और कॉलेज अलग अलग राज्य में खोले हैं। और मुझे पूरा भरोसा है कि कुछ ही सालों के अंदर ये यूनिवर्सिटी से और इसके संबंध कॉलेजों से अनेक विद्यार्थी बाहर आएंगे, जो फॉरेंसिक साइंस के क्षेत्र में देश को न केवल मजबूत करेंगे, देश का नाम दुनिया में रोशन करेंगे। मान्यवर, और ये फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के जो तज्ञ बाहर आएंगे, वो केस को सजा कराने के लिए, अपराधी को सजा कराने के लिए फॉरेंसिक साइंस के साइंटिफिक एविडेंस के बेस को मजबूत कर प्रोसिक्यूशन एजेंसी की मदद में रहेंगे। मान्यवर, ये हमारा आइसोलेशन में प्रयास नहीं है। हमने रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी बनाया। रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी भी 2020 में बनाया। और रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी के तहत जो बच्चे, कुछ बच्चे चाहते हैं बचपन से कि मैं डॉक्टर बनूं, कुछ वकील बनना चाहते हैं, कोई पत्रकार बनना चाहते हैं, कोई राजनीति में आना चाहते हैं। इस तरह से बहुत सारे बच्चों की मनसा होती है कि मैं रक्षा के क्षेत्र में काम करूं, मेरी कैरियर में रक्षा के क्षेत्र में बनाऊं। तो उनके लिए कोई स्पेशलाइज कोर्स ही नहीं है। वो तो बेचारा बीएससी करता है, बीए करता है, बीकॉम करता है, फिर एग्जाम देता है, शरीर तगड़ा है तो सिलेक्ट हो जाता है और फिर उसकी ट्रेनिंग होती है। तो क्यों नहीं ऐसी यूनिवर्सिटी बनाई जाए जो रक्षा के साथ जुड़े हुए सभी क्षेत्रों के अंदर एक स्पेशलाइज फोर्स खड़ा करे, एक एक्सपर्ट्स खड़ा करे। रक्षा के क्षेत्र के साथ बहुत सारी विधाएं जुड़ी हुई है, तो इसके लिए, उसकी ट्रेनिंग के लिए, उसके स्पेसिफिक अध्ययन के लिए हमने रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी बनाया है मान्यवर। और रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी भी आने वाले दिनों में पूरे देश के अंदर अपने संबंध कॉलेजों को बढ़ाने वाली है। मान्यवर, नेक्स्ट जनरेशन क्राइम को हमने समझना भी पड़ेगा और उसके सर्कल को तोड़ना भी पड़ेगा। हम चाहते हैं कि पुलिस, देश की कानून प्रवर्तक एजेंसियां क्रिमिनल से 2 कदम आगे रहे, पुलिस से क्रिमिनल 2 कदम आगे न रहे। पुलिस को सुसज्ज करना पड़ेगा। आप ह्यूमन राइट, प्राइवेसी, ये सारी चीजों को कर पुलिस के हाथ में हथकड़ी लगा दोगे और उसको तैरने के लिए स्विमिंग पूल में डालोगे और कहोगे जाओ भैया गोल्ड मेडल लेकर आ जाओ, वो नहीं आ सकता। उसके हाथ को सशक्त करना पड़ेगा, उसके हाथ को मजबूत करना पड़ेगा, उसके हाथ में भी वेपन देना। तो ये प्रयास पुलिस को सशक्त करना है, कानून प्रवर्तक एजेंसियों को सशक्त करने के लिए प्रयास है। मान्यवर, नेक्स्ट जनरेशन क्राइम को हम चिर पुरातन पद्धतियों से हैंडल नहीं कर सकते। हमने भी नेक्स्ट जनरेशन की तकनीक को अपनाना होगा और पुलिस को इससे लैस करना होगा, पुलिस को इसके ट्रेन करना पड़ेगा। भारत सरकार ने मोदी जी के मार्गदर्शन में मॉडस ऑपरेंडी ब्यूरो भी बनाया है। ये ब्यूरो देश भर में एनसीआरबी के पास जो क्राइम का रिकॉर्ड आता है उसका एनालिसिस करता है और विशिष्ट प्रकार के क्राइम करने वाले लोगों की मॉडस ऑपरेंडी क्या होती है इसका स्टडी करता है, इस पर डिस्कशन होता है, इसके समाधान ढूंढे जाते हैं और वो समाधान बीपीआरएनडी के माध्यम से देश भर की पुलिस को भेजे जाते हैं। ये भी हमने नया इनिशिएटिव लिया है। आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट में भी हम बदलाव करने जा रहे हैं। ये भी बहुत पुराने हो चुके, इसको भी बदलाव, मैंने सभी मान्य संसद सदस्यों को पत्र भी लिखे कि आपका कोई इसमें सुझाव हो तो आप जरूर भेज दीजिए, हम इसको अभी बना रहे हैं। और जहां तक बात करा कि भाई स्टैंडिंग कमेटी को देना, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं सीआरपीसी, आईपीसी और एविडेंस एक्ट तीनों को सुधार कर हम लाएंगे। निश्चित रूप से गृह विभाग की स्टैंडिंग कमेटी को देंगे और जांच परख कर ही मैं उसको उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं, परंतु इस बिल में इतने बड़े बदलाव ही नहीं हो रहे। मैं बाद में एक्सप्लेन करता हूं, मैं तो रिक्वायरमेंट पर हूं।
चिदम्बरम साहब ने और सारे लोगों ने जो जवाब दिए उसके मुझे जवाब देने। मान्यवर, इसके अलावे हमने डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन का कार्यालय का भी सभी जगह सभी राज्यों को मैंने पत्र लिखा है, एक डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन होना चाहिए जो प्रोसिक्यूशन एजेंसी को, हर राज्य की पुलिस को उस पर निगरानी रखे कि प्रोसिक्यूशन ठीक तरीके से हो। और ढेर सारे हमने ई गवर्नेंस इनिशिएटिव भी मान्यवर लिए हैं। मैं ई गवर्नेंस इनिशिएटिव को इसलिए बताना चाहता हूं कि सारी जो शंकाएं हो रही हैं वो शंकाओं का 2 मिनट में निरसन हो जाएगा ध्यान से सुनने के बाद। मान्यवर, एक CCTNS कर एक नेटवर्क सिस्टम भारत सरकार का चलता है। मैं इस ग्रुप को इन्फॉर्म करना चाहता हूं कि 16,390 मतलब 100% पुलिस थानों ने CCTNS नेटवर्क को अपना लिया है और पूरे देश के थाने CCTNS नेटवर्क से चलते हैं। और 99% पुलिस स्टेशन में अब FIR CCTNS में सीधे दर्ज हो रही है। जहां नेटवर्क के थोड़े प्रॉब्लम है, इसका भी हम सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं। मान्यवर, CCTNS नेटवर्क के अंदर 7.47 करोड़ FIR उपलब्ध है। जो डेटा लीकेज की बात करते हैं मैं उनको बताना चाहता हूं। मान्यवर, केंद्र शासित प्रदेश, राज्य और केंद्रीय जांच एजेंसी, ये सारी एजेंसियां, राज्य की पुलिस भी इसका उपयोग कर रही है। मान्यवर, ई प्रोसिक्यूशन भी हमने चालू किया है और 751 जिलों में, प्रोसिक्यूशन के जिलों में ई अभियोजन को लागू कर दिया गया है। आज तक कोई फरियाद नहीं। ई प्रिजन, देश की 1259 जेलों में ई प्रिजन लागू कर दिया गया है, कोई फरियाद नहीं आई। ई फोरेंसिक्स, 117 फोरेंसिक लैब में ये लागू हो चुका है, ऑनलाइन हो चुका है, आज तक कोई फरियाद नहीं। इंटर ऑपरेटेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ICJS वो भी लागू हो गया है और ICJS के तहत अब CCTNS, ई प्रिजन, ई कोर्ट और ई फोरेंसिक को जोड़ने का भी काम अब चालू हो गया है और वो एकीकृत डेटाबेस से एनालिटिकल मॉड्यूल भी बनाए गए हैं जिससे देश भर के क्राइम का एनालिसिस होकर उसके रोकने के मॉड्यूल बने। कई राज्य ऐसे होते हैं जहां समान प्रकार के क्राइम होते हैं, कई जिले ऐसे होते हैं जहां समान प्रकार के क्राइम होते हैं, कुछ सागर किनारे के जिले हैं वहां अलग प्रकार के क्राइम होते हैं। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार एक अलग प्रकार के क्राइम होते हैं जहां मैदानी इलाके हैं, कुछ जिले पहाड़ी हैं वहां अलग प्रकार। ये सबको ये एकीकृत डेटाबेस से एनालिटिकल मॉड्यूल से हम एनालिसिस करते हैं और इसके समाधान BPRND को भेजते हैं। गृह मंत्रालय का मतलब आपके मन में बहुत सीमित है। मैं बहुत बोलना नहीं चाहता था मगर जो व्याख्या मेरे मंत्रालय की आप लोगों के मन में है मुझे लगा इसे मुझे बदलना ही पड़ेगा, इसलिए मैं आज इतनी डिटेल बात करता हूं। मान्यवर, इन्वेस्टिगेशन ट्रैकिंग सिस्टम फॉर सेक्सुअल ऑफेंस ITSSO वो भी हमने लागू कर दिया है और देश भर में ये सिस्टम लागू हो गई। यौन अपराधियों का राष्ट्रीय डेटाबेस NDSO भी ऑनलाइन उपलब्ध है मान्यवर और लगभग 11.83 लाख यौन अपराधियों का डेटा एजेंसियों के लिए ऑनलाइन उपलब्ध है, कोई फरियाद नहीं आई। क्राइम एक्ट, क्राइम मल्टी एजेंसी सेंटर, उसको भी हमने लॉन्च कर दिया गया है और लगभग 59,937 लोगों ने क्राइम एक्ट का इस्तेमाल किया है और लगभग 23,000 अलर्ट्स इससे जनरेट हुए। मान्यवर, मोडस ऑपरेंडी ब्यूरो की बात मैंने पहले आपको कर ही दी है। NCRB ने एक पोर्टल पर नागरिक सेवाएं शुरू की है जिसके लॉन्च के बाद अब तक 2,27,400 लॉगिन हो चुके हैं और अलग अलग सेवाओं को उसको जवाब दिया गया। लापता व्यक्ति की खोज, ये CCTNS से लेकर हमने एक अलग सुविधा बनाई है। लापता व्यक्तियों की खोज, किसी भी व्यक्ति
गुम हो जाता है तो उस पर पोर्टल पर आता है, वहां एक डेटाबेस होता है, इसके साथ मैचिंग होता है। और मैं सदन को बताना चाहता हूं, यही पोर्टल के तहत मान्यवर 14,513 लोग अपने परिवारजनों को वापिस लेने का काम मान्यवर हो। वाहन सेकंड हैंड व्हीकल अगर किसी को खरीदना है तो चोरी का है नहीं है किसी को मालूम नहीं, लोग ले लेते हैं बेचारे, फिर पुलिस उनके घर पर पहुंच जाती है, उनको भी पकड़ कर ले जाती है चोर के साथ साथ। तो उसको पहले कैसे मालूम है? तो हमने लगभग इसके लिए एक डेटाबेस सीसीटीएनएस से चोरी किए हुए वाहनों का जो कंप्लेन है उससे बनाया। लगभग 2,96,200 लोगों ने अपने खरीदने वाले वाहन का वहां डेटा भेजा, इसको मैच कर भेजा और 13,637 चोरी किए हुए लोग भी पकड़े गए और चोरी की हुई गाड़ियां भी पकड़ी गई। ये क्या उपयोग होना है मैं बताना चाहता हूं। घोषित अपराधी उसको भी सीसीटीएनएस पर लिया है और ये सारे एनालिटिक मॉड्यूल इसका एनालिसिस करें मान्यवर। तो घोषित अपराधी जो पुलिस ने हमारे यहाँ अलग अलग राज्य के थानों ने, डीआईजी ने, आईजी ने या डीजी पुलिस ने भेजे, इसमें से घोषित अपराधी भगोड़े 16,176 लोगों को पकड़ने का काम इस नेटवर्क के माध्यम से। मान्यवर आईसीजेएस के एनालिटिकल टूल के द्वारा भी हमने बहुत सारा खर्चा किया है मान्यवर। लगभग 2050 करोड़ का खर्चा भारत सरकार ने सारी व्यवस्थाओं की। मैं इसलिए कह रहा हूं कि बिल आइसोलेशन में नहीं है, ये बिल सबके अंदर एक खूंटी कड़ी है। हमारे पास क्रिमिनल का डेटा नहीं है, वो क्रिमिनल का डेटा इसके अंदर ऐड होने से इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन बहुत सरल हो जाएगा। और क्या भय है, किस चीज का भय है मान्यवर? I4C के माध्यम से ढेर सारे और भी अलग अलग सेवाएं ली हैं और 112 के माध्यम से सभी पुलिस सेवाओं को एक ही फोन नंबर पर लाने का काम भी भारत सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में किया है। मान्यवर मैं इसलिए बताना चाहता था कि ये जो हमें जिस तरह से कटघरे में खड़े करने का प्रयास हो रहा था कि इसके पीछे कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं है, ना जनता के मन में भी ऐसी भावना जानी चाहिए, ना सदन के सदस्यों के मन में भी ऐसी भावना जानी। हमें भी मालूम है ये जो लोकतंत्र के अंदर कुर्सी होती है ना, ये यावत चंद्र दिवाकरों नहीं होती है, कल कोई भी आ सकता है। तो मिसयूज का भय तो मुझे भी लग सकता है, मगर मुझे नहीं लगता है मिसयूज होगा तो देश की अदालतें हैं, मिसयूज हुआ भी है, लड़कर हम निकले भी है और अदालत ने चांटा भी लगा है। मान्यवर भय से हम नहीं जीते हैं और तीसरे भय के अध्ययन देश के करोड़ों लोगों को क्राइम की दुनिया से लड़ने का, उससे सुरक्षा का उपाय न करे, ये कोई ठीक बात नहीं है, ना जो सोचने का तरीका ठीक है। मान्यवर दोष सिद्धि का जो प्रमाण कम है, इस पर कई सारी कमिटियों ने, कई सारे लोगों ने ढेर सारी चर्चाएं करके रिपोर्ट भारत सरकार को दी है। प्रमुखतः 3 ही कारण बताए गए हैं मान्यवर। एक तो सबूतों की कमी, सबूतों की कमी के आधार पर प्रतिवर्ष 7.5 लाख केस में आरोपी छोड़ दिए जाते। अदालत कहती है पर्याप्त सबूत नहीं है। अगर उसके साइंटिफिक सबूतों को अदालत के सामने रखें तो मैं मानता हूं कि ये केसों की संख्या आधे से भी कम हो जाएगी और लगभग 3.5 लाख केसों में सजा का प्रमाण हम बढ़ाएंगे। न्याय की प्रतीक्षा, अदालत बार-बार प्रोसिक्यूशन एजेंसी को कहती है कि भाई आप और सबूत लेकर आइए, और सबूत लेकर आइए, और डेट पर डेट पड़ती है, न्याय लेट होता जाता है। जो निर्दोष है वो भी बेचारा आरोपी बना रहता है। माननीय उपसभापति महोदय, इससे ये समाप्त हो जाए। और वित्तीय क्षमता भी कम है, जब डेट पर डेट पड़ती है तो इस ओर से तो सरकार लड़ती है। जो आरोपी होता है कई गरीब भी होते हैं, इनके घर के घर बिक जाते हैं, वो ऋण के बोझ के तले दब जाते हैं। अगर प्रॉम्प्ट एकदम स्पीडी न्याय मिलेगा तो कुछ नहीं होगा। और मैं मानता हूं अगर साइंटिफिक एविडेंस का प्रमाण हमने बढ़ाया तो न्याय जल्दी मिलेगा। मान्यवर ये बिल लाने के लिए
उद्देश्य के लिए कुछ पूछ रहे थे। मैं ये भी आगे तो मैंने उद्देश्य बताया, मगर एक और उद्देश्य बताया। मान्यवर, इन्वेस्टिगेशन थर्ड डिग्री पर इस जमाने में निर्भर नहीं रहना चाहिए। इन्वेस्टिगेशन को थर्ड डिग्री पर से बदलकर तकनीक की डिग्री पर हम ले जाना चाहते हैं, डेटा की डिग्री पर ले जाना चाहते हैं और इंफॉर्मेशन की डिग्री पर ले जाना चाहते हैं। और ये सब सहमत हो गए कि थर्ड डिग्री के आधार पर इन्वेस्टिगेशन नहीं हो करना चाहिए। कब बंद होगा? जब उसको साइंटिफिक एविडेंस का आधार लेंगे। इसलिए मान्यवर, ये बिल लेकर मैं यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। मान्यवर, ढेर सारी बातें हैं, मैं इसके दूसरे हिस्से में बताऊंगा। अब कुछ सदस्यों ने अलग अलग प्रकार के सवाल भी मुझे पूछे हैं, शंकाएं भी करी है और मैं मानता हूं कि उनका अधिकार है। सबसे पहले श्री चिदम्बरम जी ने पूछा कि गृह मंत्री स्पष्ट करे ये जो आपने माप की व्याख्या की है, वो व्याख्या के अंदर नार्को एनालिसिस, ब्रेन मैपिंग और पॉलीग्राफ टेस्ट आता है या नहीं आता है? ना जी, नहीं आता है। इस बिल का कोई प्रावधान किसी भी कैदी का नार्को एनालिसिस, पॉलीग्राफ टेस्ट या ब्रेन मैपिंग करने की इजाजत नहीं देता है। ये मैं रिकॉर्ड पर कह रहा हूं, इसलिए किसी को ये शंका रखने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा, इसके बाद पूछा मान्यवर कि पुत्तुस्वामी केस में जो निर्देश दिए गए हैं उसका उल्लंघन हो रहा है। जरा भी उल्लंघन नहीं हो रहा है। पुत्तुस्वामी केस के अंदर उन्होंने और लोगों की स्वतंत्रता पर इसका ओवरलैप न हो इसलिए 3 अपवाद दिए हैं। ऐसा कानून सक्षम विधायिका द्वारा बनाना चाहिए। मैं मानता हूं ये सक्षम विधायिका है, चिदम्बरम साहब भी मानते होंगे। ऐसा यह वैध देश हित में होना चाहिए। तो जिन्होंने गुनाह किया है उसको सजा कराने से बड़ा वैध देश हित क्या हो सकता है? बोले तो वैध देश हित के अंदर भी है। मान्यवर, तीसरा उन्होंने कहा है कि अनुपातिक होना चाहिए। मान्यवर, ये कानून जो है वो अनुपातिक भी है, इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है। कानून प्रवर्तन एजेंसियों का हाथ मजबूत करने और अपराध को सिद्ध करने के और इसके द्वारा व्यक्तियों के, जो प्रताड़ित व्यक्ति हुए, इसके मौलिक अधिकारों का रक्षा में के बीच में संतुलन बनाने के लिए कानून लेकर हम आए हैं। अभी एक तरफा ही है, जिसका अधिकार छीना जा रहा है, जो विक्टिम है, इसके अधिकार के लिए कोई प्रोविजन नहीं है। ये जो कानून है विक्टिम को प्रोटेक्ट करने के लिए है और जो अपराध करने वाले हैं उसको सजा करें। किसी भी तरह से ये पुत्तुस्वामी केस के निर्दोषों का उल्लंघन मान्यवर नहीं करता है। इन्होंने 14, 19, 20, 3 और 21 के तहत मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के लिए कहा। मैंने इसको मान्यवर एड्रेस किया है। उन्होंने कहा है, एक उल्लेख धारा 3 का किया। मैं वो ठीक है, बिल पढ़ेगा तो मैं पढ़ूंगा तो मैं भी कहूंगा, मगर मैं इतना स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि धारा 3 के अंदर रूल्स बनाने के लिए भारत सरकार को अधिकार है। इसकी व्याख्या भी हम करेंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि पॉलिटिकल आंदोलन वाले किसी भी व्यक्ति को सिर्फ पॉलिटिकल आंदोलन के लिए ये अपने माफ न दे। मगर पॉलिटिकल नेता का अगर क्रिमिनल केस में अरेस्ट होता है तो उसको फिर नागरिक के पार रहना पड़ेगा। परंतु पॉलिटिकल आज्ञा का मतलब पुलिस की आज्ञा का उल्लंघन या तो किसी भी प्रकार की निषेधाज्ञा का उल्लंघन, इस प्रकार के उल्लंघन के लिए किसी भी पॉलिटिकल व्यक्ति का नाम नहीं लिया जाएगा। मैं सदन को आश्वस्त करना हूं माननीय, और इसके लिए हम रूल्स में प्रोविजन भी करेंगे। रूल्स बनाने का हमने पीछे एक हमारा अधिकार भी रखा है। बिल को ध्यान से जिन लोगों ने पढ़ा होगा उसको मान्यवर मालूम होगा। मान्यवर, जो यही है, अगर नागरिक धरना देता है तो उस पर केस होगा, जिसकी मैंने बात कर ली। पुत्तुस्वामी केस वाली भी बात मान्यवर मैंने कर ली है। मान्यवर, इसके बाद
विनय विश्वम जी ने कहा कि 124 ए सरकार लगा रही है। हम 124 के दुरुपयोग के पक्ष के नहीं हैं, मगर विनय विश्वम जी केरल से कम्युनिस्ट पार्टी के सांसद को 124 का क्यों आप उठा रहे हो? आप तो लोगों को मार दिए भैया। मेरी पार्टी के 100 लोगों की हत्या राजनीतिक कारणों से केरल में हुई, पूरी की पूरी जान चली गई है उनकी, और आप हमें 124 से समझा रहे हो? क्या 124 से समझा रहे हो? प्लीज प्लीज, मैं 124 को मैं स्वीकार नहीं कर रहा हूं कि हम इसका दुरुपयोग करें। मैं इतना ही कहता हूं, कम से कम केरल से आए हुए कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता को, सांसद को ये नहीं उठाना चाहिए। ये प्लीज प्लीज, नो प्लीज 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 प्लीज। In Kerala, under 124A, nobody is implied. Thank you. Yes, please, please. Thank you, Vinay ji. I request you to correct yourself. एक नाम बताइए. Please, please. अरे ढेर सारे उदाहरण है भाई। The wrong statement. Thank you, Vinay ji. ढेर सारे उदाहरण। Thank you. Thank you. Thank you. Please, please, please. No, let homeless, please. Please, Vinay ji, please no. मान्यवर, please, please. मान्यवर, इनकी इच्छा है तो इसी सदन के सवाल जवाब में से मेरी नहीं कोई और सरकार ने जो जवाब दिए हैं वो मैं सदन पे रखने के लिए तैयार हूं। केरल विधानसभा में सवाल जवाब में जो जवाब आए वो मैं सदन पर रखने के लिए। मैं रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट नहीं करता। विश्वम साहब, मेरे 27 साल हो गए किसी विधायिका में काम करते हुए, चाहे विधानसभा, राज्यसभा। आपकी बात रिकॉर्ड पे नहीं जा रही विश्वम जी, प्लीज। स्टेटमेंट नहीं करता। माननीय मंत्री जी की बात जा रही, प्लीज। मान्यवर, प्लीज 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 प्लीज। मान्यवर, एक सदस्य ने कहा कि आंख में से आंख डालकर जवाब दे सकते हो। मैं तो जरूर दे सकता हूं अगर कोई आंख में से आंख डालकर पूछने की हिम्मत रखता है, जरूर दे सकता हूं, और किसी भी फोरम में रहे, क्योंकि मेरे मन में चोर नहीं है साहब। हम वही करते हैं जो हमारी आत्मा कहती है, और हम वही करते हैं जिसको आत्मा कानून के हिसाब से मानता है। मान्यवर, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, कोई आंख में से आंख डालकर सवाल पूछे, मैं आंख में आंख डालकर जवाब भी जरूर दे दूंगा। मान्यवर, संजय सिंह जी ने कहा कि गुजरात में ये FIR, अरे संजय बाबू, मान्यवर, आपके माध्यम से मैं संजय बाबू को कहना चाहता हूं, अभी तो आप गुजरात गए हो, मुझे तो मालूम नहीं कोई FIR हुई या नहीं हुई इनकी पार्टी पर। कुछ करा होगा तो हो भी सकती है, मगर बंगाल चले जाओ, जान चली जाएगी। अच्छा है अभी वहां गए नहीं हो आप। प्लीज 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 मान्यवर, प्लीज 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 प्लीज। माननीय गृह मंत्री जी, आपकी बात ही रिकॉर्ड पे जा रही है। माननीय सदस्यगण, प्लीज बैठ जाओ। आप बोले प्लीज बोले। मान्यवर, ये पूछते हैं आप गए हो। मैं गया था 2019 के चुनाव में, मेरे रोड शो पर आग के गोले फेंके गए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष गए नड्डा जी, इनकी गाड़ी को घेर कर उन पर जघन्य हमला किया गया। कैसे ना बोल सकते हो? ये रिकॉर्ड पर है, कोर्ट ने संज्ञान लिए है। मान्यवर, माननीय गृह मंत्री जी की ही बातें जा रही है रिकॉर्ड पे, और किसी की नहीं। प्लीज 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 मान्यवर, प्लीज 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 माननीय गृह मंत्री जी को आप बोलने दें, प्लीज 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 प्लीज। थैंक यू प्लीज प्लीज। माननीय गृह मंत्री जी की बात रिकॉर्ड पे जाएगी। माननीय गृह मंत्री जी, प्लीज प्लीज। मान्यवर,
सुखेंदु शेखर रॉय जी ने कहा कि SC ST माइनॉरिटी की DNA प्रोफाइलिंग, भाई पूरे सदन को मैं पूछना चाहता हूं, इसमें ST SC माइनॉरिटी कोई शब्द है क्या? किस चश्मे से पढ़ते हो सुखेंद्र रॉय जी? किस चश्मे से पढ़ते हो बिल को? अरे बिल बोले हैं आप, मैं तो सुनकर लिखा है। वो 60% अंडर ट्रायल्स है, OBC SC ST माइनॉरिटी। यही मैं बोला। थैंक यू। तो मान्यवर अंडर ट्रायल है, इसकी जात या धर्म क्या देखना? अंडर ट्रायल जो है वो है, कानून की नजर में सब एक समान है। किसी अपराधी की जाति धर्म क्या देखना है और क्यों नहीं होना चाहिए? मान्यवर, उन्होंने कहा है फासिस्ट बिल है, मैं ज्यादा टिप्पणी नहीं कर सकता। वो टीवी पर ममता दीदी देखती होगी, सारे CR सुधारने के लिए खड़े हो जाते हैं, इसलिए मैं ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहता मान्यवर। मगर फासिस्ट शब्द की कड़ी से कड़ी व्याख्या को बंगाल की सरकार ने बदल दिया है मान्यवर, और फासिस्ट की नई डेफिनेशन, मान्यवर में ममता दीदी का नाम वापिस लेता हूं। बैठ जाओ, ले लिया वापिस। ममता जी का नाम लिए, प्लीज बैठ जाइए। ममता दीदी का नाम में वापिस लेता हूं। मान्यवर, फासिस्ट शब्द की डेफिनेशन को, जो डेफिनेशन में है, उससे अलग प्रकार के मायने देने का काम बंगाल की सरकार ने कहा। बाबा, आप कम से कम फासिस्ट का रेफरेंस मत लीजिए। अंत में मान्यवर, मैं इतना ही कहना चाहता हूं, नथिंग इज गोइंग ऑन रिकॉर्ड। सीट पर बैठ करना बोले, प्लीज 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 मान्यवर, प्लीज अंत में प्लीज प्लीज मान्यवर, मैं अंत में इतना ही कहना चाहता हूं कि बिल लाने के पीछे सरकार की मंशा किसी भी निजता का भंग करने की नहीं है, किसी के भी ह्यूमन राइट का वायोलेशन करने की नहीं है मान्यवर, और ना किसी की भी निजता का भंग हो या ह्यूमन राइट का वायोलेशन हो, ऐसे लूप होल्स भी हम नहीं रखेंगे। मैं आश्वस्त करना चाहता हूं, ये एक्ट और इसके रूल्स दोनों मिलकर एक अच्छी मजबूत प्रणाली बनाएंगे, जिससे कानून की मदद तो जरूर होगी। कुछ सदस्यों ने कुछ धाराओं पर, इसके दुरुपयोग पर आशंकाएं भी व्यक्त की है कि इसका दुरुपयोग हो सकता है। कुछ सदस्यों ने इसकी संवैधानिक वैधता पर भी सवाल खड़े किए हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिए हैं, ये जजमेंट के हिसाब से यह बिल उचित नहीं है। इस सब का मैं डिटेल जवाब दूंगा माननीय। सबसे पहले मैं बिल को लेकर आने वाले मंत्री के नाते इस बिल का उद्देश्य सदन के सामने स्पष्ट करना चाहता हूं, क्योंकि रिकॉर्ड पर रहना चाहिए। मान्यवर, इस बिल का प्रमुख उद्देश्य है इस देश में कानून की अदालतों में जो मामले जाते हैं उसमें दोष सिद्धि का प्रमाण बढ़ाना, ये इसका प्रमुख उद्देश्य है। पुलिस और फोरेंसिक टीम की कैपेसिटी बिल्डिंग करना, ये इस बिल का उद्देश्य है। थर्ड डिग्री को नाबूद कर दोष सिद्धि के लिए साइंटिफिक एविडेंस प्रोसिक्यूशन एजेंसीज को उपलब्ध कराना, यह बिल का मान्यवर उद्देश्य है। और डेटा को सुरक्षित प्लेटफॉर्म पर रखकर उसको निश्चित प्रक्रिया के तहत साझा कर किसी भी नागरिक की प्राइवेसी रिस्क में न आए, उसकी प्राइवेसी का भंग न हो, इस प्रकार का व्यवस्था तंत्र बनाना, ये चार उद्देश्य लेकर मैं इस महान सदन के सामने ये बिल को लेकर मान्यवर आया हूं। मान्यवर, बहुत बात हुई,
ये बिल से ये कर देंगे, वो कर देंगे, इस बिल से इसका दुरुपयोग हो जाएगा। मगर मुझे थोड़ा दुख भी है मान्यवर, जो झा साहब ने कहा कि चर्चा का स्तर बहुत अच्छा रहा। झा साहब, चर्चा का स्तर तब अच्छा माना जाता है जब बात बैलेंस तरीके से की जाए। मान्यवर, एक भी विपक्ष के सदस्य ने दोष सिद्धि का प्रमाण कम है और उसको बढ़ाना चाहिए, इसकी जरूरियात ही महसूस नहीं की। हम किस प्रकार का क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम चाहते हैं, जिस क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर हत्या कर 100 में से 66 लोग बरी हो जाए, जिस सिस्टम के अंदर बलात्कार कर 100 में से 60 लोग बरी हो जाए, चोरी कर 100 में से 62 लोग बरी हो जाए, डकैती कर 100 में से 70 लोग बरी हो जाए, बाल अपराध कर 100 में से 62 लोग बरी हो जाए। दोष सिद्धि का प्रतिशत क्या है मान्यवर? कोई नहीं बोला। इतना सारा रिसर्च करते हैं तो इतना भी तो कर लेते और इसको स्पिरिट से रख देते। मान्यवर, हत्या के अंदर सिर्फ 44% लोगों को देश में हम सजा दिला पाते। मैं तो प्राइमरी कोर्ट की बात करता हूं, ऊपर जब जजमेंट आता है तब ये और गिरता है। मान्यवर, बलात्कार के अंदर 39%, चोरी के अंदर 38%, डकैती के अंदर 29% और बाल अपराध के अंदर 37% सिर्फ मात्र। क्या हम इसको बढ़ाना नहीं चाहते हैं? किसी ने इसका सजेशन नहीं दिया, कुछ अच्छे सुझाव देते कि भाई ये बढ़ाने के लिए ये जरूरी है, मगर इसमें इतना ध्यान रखें, इसमें इतना सुधार करिए, तब तो चर्चा का स्तर ऊपर आया, मैं मान सकता था माननीय अध्यक्ष। मैं और देशों की भी बहुत सारी बातें हुई, उस देश के कानूनों का अध्ययन करें, मगर इसका रेफरेंस दिया गया है। हमारा कानून तो शक्ति के हिसाब से बच्चा है मान्यवर, इससे कठोरतम कानून दुनिया के देशों के अंदर बने हैं। और वहां पर दोष सिद्धि का प्रतिशत देखें, दक्षिण अफ्रीका में 82%, यूनाइटेड किंगडम में 84%, कनाडा के अंदर 64%, ऑस्ट्रेलिया में 97% और अमेरिका में 93%। ये क्यों है? क्योंकि वहां प्रोसिक्यूशन एजेंसी को साइंटिफिक एविडेंस का आधार मिला हुआ। साइंटिफिक एविडेंस, फोरेंसिक एविडेंस, इसके आधार पर प्रोसिक्यूशन एजेंसी आगे बढ़ती है, इसलिए अदालतों को सजा करना बहुत सरल हो जाता है। और जो गुनहगार है उसको कानून की गिरफ्त से भागना बहुत कठिन हो जाता है। क्या हम हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को उस ओर मोड़ना नहीं चाहते? मोड़ना चाहिए या नहीं चाहिए? ये सदन के सामने ये बिल आया, इसलिए मैं पूछना चाहता हूं, क्या हम सिर्फ राजनीति की कोरी चिंता करेंगे? राजनीतिक चिंताओं का सम्मान है, आपकी शंकाओं का भी जवाब देने का मेरा दायित्व है और मैं दूंगा भी, परंतु आप में से कोई एक तो भला बोलता कि भैया ये जरूरी है मगर इतनी चिंता करिए। एक का मैंने सब भाषण धैर्य से सुने मान्यवर, कहीं पर भी कोई नहीं बोला। मान्यवर, ये बिल लाने का उद्देश्य दोष सिद्धि को बढ़ाना और साइंटिफिक एविडेंस को हमारी प्रोसिक्यूशन एजेंसियों को उपलब्ध कराना है। मान्यवर, एक देश में एक प्रथा होगी, लोकतंत्र में पक्ष और प्रतिपक्ष होना स्वाभाविक है, होना भी चाहिए। हम तो चाहते प्रतिपक्ष मजबूत हो, मगर जनता जो चाहती है वही यहां आता है। हम तो चाहते हैं प्रतिपक्ष मजबूत हो, परंतु अल्टीमेटली वो तो जनता को निर्णय करना है। मान्यवर, कोई भी सरकार बनती है वो विधि से स्थापित होती है। कोई भी सरकार जो बनती है वो विधि से स्थापित होती है और सरकार लोगों के मैंडेट का प्रतिनिधित्व करती है।
सरकार की हर लेजिस्लेशन को, हर कानून को शंका की दृष्टि से देखकर एक शंका का गहरा बादल देश के विचारों के आकाश पर बना देना कितना उचित है। जन भावनाओं को गुमराह करना, शंकाओं के औथार के नीचे आप हर चीज को जनता के मन में भय उत्पन्न करना, ये कितना ठीक है। मानिए, हमने कहीं ना कहीं इसका विचार करना पड़ेगा। ये सरकार कोई पार्टी नहीं बनाती है। पार्टी तो अपना एजेंडा लेकर जनता के सामने जाती है, जनता वोट करती है और उसमें से सरकार बनती है। ये सरकार संविधान बनाता है, संविधान की धाराएं बनाती है, शपथ संविधान के लेने पड़ते हैं। तो सरकार के हर इंटेंट शंका खड़ी करना और शंका का एक बादल खड़ा कर लोगों को गुमराह करने का प्रयास मान्यवर लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। और मैं देख रहा हूं हर एक सरकार के कदम को राजनीतिक तराजू के अंदर ही तोला जाता है। हर एक सरकार के कदम को पक्ष और विपक्ष की भाषा में ही देखा जाता है। सरकार के हर उद्देश्य को इसका ये उपयोग हो जाएगा, उसका वो उपयोग। मैं समझ रहा हूं आपको शंका आना स्वाभाविक है। जब आप पावर में थे तब किया है दुरुपयोग, आपने किया है दुरुपयोग, मगर हम उनमें से नहीं है, नहीं है, निश्चित रूप से नहीं है। मैं बोलूंगा तो पसंद नहीं आएगा, कहेंगे पुरानी बात है। मैं बोलूंगा तो पसंद नहीं आएगा, आप तुरंत कहेंगे पुरानी बातें। पुरानी ही है क्योंकि आपकी सत्ता पुरानी हो गई, तो बात तो पुरानी ही आएगी। आज तो आप विपक्ष में बैठे हो मान्यवर, पर मैं इसमें जाना नहीं चाहता। कुछ सदस्यों ने ह्यूमन राइट की बात करी। मैंने कल भी लोकसभा में कहा था 2 दिन पहले कि मान्यवर ह्यूमन राइट के 2 पहलू होते हैं। मैं मानता हूं कि जिसको कानून पकड़ता है उसका भी ह्यूमन राइट है, उसका भी सम्मान होना चाहिए। परंतु उपसभापति महोदय, हत्या जिसकी होती है, जो घर निराधार हो जाता है, जो घर का एक ही कमाकर घर का पालन पोषण करने वाला व्यक्ति मर जाता है, उसके बाल बच्चों का भी कोई ह्यूमन राइट होता है या नहीं होता है? इसकी चिंता भी सदन ने करनी है या नहीं करनी है? ह्यूमन राइट कभी एक तरफा नहीं हो सकता। जब बम धमाके होते हैं, टेररिज्म फैलता है, हजारों लोग मारे जाते हैं, मरने वालों का भी ह्यूमन राइट है, सिर्फ टेररिस्टों का ह्यूमन राइट नहीं है। गुनाह के विक्टिम, उसका भी ह्यूमन राइट है, सिर्फ गुनहगार का ह्यूमन राइट नहीं है। अगर हम कानून बनाने वाली संस्थाएं ये दोनों ह्यूमन राइट के बीच में भले बुरे का अर्थ नहीं समझेगी, दोनों के बीच में संतुलन नहीं बनाएगी, तो हम किसको प्रोटेक्ट करना चाहते? जो लोग कानून के भरोसे अपना जीवन जीना चाहते हैं, जिनकी संख्या 97% से ज्यादा है, इसकी चिंता न करें। इसकी चिंता जरूर करनी चाहिए मान्यवर। आप लोगों को जिसकी चिंता करनी है करिए। हम तो वो 57% कानून के हिसाब से लोगों को, जीने वाले लोगों के ह्यूमन राइट की चिंता करने वाले मान्यवर। स्वतंत्रता का सबको अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट के कई जजमेंट विद्वान लोगों ने यहां कोट किए, मगर हर जजमेंट में से सिलेक्टिव पार्ट ही अपना लेकर पढ़े। उसके आगे लिखा है कि स्वतंत्रता इस मात्रा में ही उपयोग होनी चाहिए कि किसी और की स्वतंत्रता का हनन न हो जाए। स्वतंत्रता का मतलब स्वच्छंदता नहीं होता है। स्वतंत्रता के दायरे हैं। स्वतंत्रता कानून के दायरे में संविधान के 4 कोने के बीच में दी गई है, और स्वतंत्रता की व्याख्या और किसी की स्वतंत्रता का हनन करने के लिए नहीं उपयोग की जा सकती। ये स्वतंत्रता नहीं। मान्यवर, स्वतंत्रता का सम्मान हम भी करते स्वतंत्रता का सम्मान। मान्यवर, फौजिया खान जी, संजय जी, सबने शंका का वातावरण खड़ा करने का उपयोग किया है, प्रयास किया है, सवाल भी उठाए हैं, उनका अधिकार है। मगर मैं आश्वस्त करना चाहता हूं सदन के सभी सदस्यों को, ये बिल लाने के पीछे मेरी या हमारी सरकार की, ना हमारे प्रधानमंत्री की, किसी की भी मंशा नहीं है।
ये बिल लाने के पीछे मनसा एकमात्र मनसा है इस देश में गुनाहों के प्रमाण को कम किया जाए, इस देश में सजा के प्रमाण को बढ़ाया जाए और इस देश के कानून और व्यवस्था की स्थिति को सुधारा जाए और इस देश की आंतरिक सुरक्षा को सुदृढ़ किया जाए। और मैं आगे बताता हूं कि किस प्रकार से एक कहा गया कि भाई इसका दुरुपयोग होगा, निजता का हनन होगा। मान्यवर, सारा डेटा जो आएगा वो एनसीआरबी के पास रहेगा और मैं सबको आश्वस्त करना चाहता हूं कि एनसीआरबी में जो डेटा आएगा वो सुरक्षित प्लेटफॉर्म पर और सुरक्षित हार्डवेयर के अंदर ही रहेगा। डेटा भंडारण में किसी तीसरे पक्ष, थर्ड पार्टी या निजी एजेंसियों को कोई स्थान नहीं मिलेगा। एनसीआरबी ही उसको मैनेज करेगी। मान्यवर, एनसीआरबी का जो डेटा भंडारण है उसको सरकार की उच्च से उच्च कक्षा की कमेटी इसका परीक्षण करेगी और डेटा साझा करने के लिए भी एक पद्धति बनाएगी। इसके लिए भी फॉरेंसिक्स एक्सपर्ट्स और इस क्षेत्र के एक्सपर्ट की एक कमेटी बनेगी। वो डेटा साझा करने की पद्धति को बनाकर रूल्स के अंदर व्याख्यायित कर ये नोटिफाइड करेगी। मान्यवर, मैं थोड़ा एक उदाहरण देना चाहता हूं। अभी एनसीआरबी के पास एक नफीस कर सिस्टम बनाया है। इसके तहत 1 करोड़ फिंगरप्रिंट का डेटा है और अगर ये बिल राज्यसभा के सदस्य पास कर देते हैं तो ये डेटा बहुत बढ़ेगा, फिंगरप्रिंट का डेटा बढ़ेगा। अब किसी भी राज्य के कोई एक दूर के गांव में चोरी होती है और पुलिस जाकर फिंगरप्रिंट लेती है तो फिंगरप्रिंट लेने के बाद पुलिस इसको प्रिजर्व करती है, क्योंकि जब चोर पकड़ा जाएगा तब फिंगरप्रिंट मैच कर उसको सजा कराने के काम में आएगा। चिदम्बरम साहब ने तो फिंगरप्रिंट पर ही क्वेश्चन कर दिया, मगर अभी तो अदालतें मानती है इसको, इसलिए उसको सजा कराने के काम में आएगा। अब ये सिस्टम आने के बाद क्या होगा, किसी घर में चोरी होगी तो पुलिस अफसर फॉरेंसिक साइंस की टीम को बुलाकर वहां जो उपलब्ध फिंगरप्रिंट है उसको लेगा, घर के लोगों के फिंगरप्रिंट लेकर उसमें से घर के लोगों के फिंगरप्रिंट को बाहर निकाल देगा। जो बच जाएगा वो फिंगरप्रिंट चोरी करने वाले शंकास्पद व्यक्ति के है। आज स्थिति है, पुलिस उसको ढूंढती है, उसका फिंगरप्रिंट लेती है और फिर मैच करती है। अब क्या होगा, वो फिंगरप्रिंट वो भेजेगा एनसीआरबी को। वो पुलिस स्टेशन को या पुलिस को पूरे फिंगरप्रिंट का एक्सेस नहीं है। वो पुलिस स्टेशन भेजेगा फिंगरप्रिंट एनसीआरबी को। एनसीआरबी 1 करोड़ फिंगरप्रिंट के डेटा को 3.5 मिनट में रन कर अगर उसमें वो चोर है तो उसका नाम पुलिस स्टेशन को भेज देगा, पुलिस को ढूंढने की जरूरत नहीं। अब भला बताइए इसमें क्या निजता का हनन होगा, क्या हनन होगा? किसी महिला पर अगर बलात्कार हुआ है, वहां से जो बायोलॉजिकल सैंपल मिलेगा उसका बायोलॉजिकल सैंपल के डेटा के साथ जिन्होंने महिलाओं के अपराध किया है इसके साथ मैचिंग कर अपराधी को जल्दी पकड़ लिया जाए और 1 साल के अंदर मुझे सजा हो, इसमें क्या आपत्ति हो सकती है? निजता का हनन तो तब होगा जब ये डेटा पुलिस स्टेशन को उपलब्ध कराएंगे। किसी को ये डेटा नहीं देना है, पुलिस स्टेशन से क्वेश्चन आएगा, इसका मैचिंग कर जवाब पुलिस स्टेशन पर जाएगा जो कोर्ट में एडमिसिबल एविडेंस होगा। माननीय गृह मंत्री जी, 1 मिनट। Normally, it's up to 6 o'clock. But since we are discussing this bill, we may extend the sitting of the house. Let's disposed of, and then the special mention is also taken. Thank you. सहमति। मान्यवर, मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि इससे किसी का भी निजता का हनन नहीं होने वाला है। कोई डेटा लीकेज का क्वेश्चन डज नॉट अराइज। इस रूल्स के अंदर इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फिक्स की जाएगी और इसकी जिम्मेदारी भी तय की जाएगी। जो डेटा रखने वाले हैं उसकी जिम्मेदारी। और आजकल तो मान्यवर टेक्निक बहुत आगे गई है।
कोड के बगैर डेटा नहीं मिलेगा। मिलेगा इसका कंप्यूटर की क्लॉक में समय भी निश्चित हो जाएगा और उसका एक कंप्यूटराइज रजिस्टर होगा कि किसकी डिमांड पर, किस एजेंसी की डिमांड पर ये डेटा का एक्सेस किया गया है। मान्यवर, इसके अंदर इतनी शंका न मान्य संसद सदस्य रखे न जनता को रखने की जरूरत नहीं। इसको पूरे विचार के साथ ही हम नोटिफाइड करेंगे, पूरी सिस्टम बनाने के बाद ही नोटिफाइड करेंगे और रूल्स भी इसके सारे तज्ञों के साथ चर्चा करने के बाद हम नोटिफाइड। मैं इसलिए कहता हूं कि अगर शंका राजनीति से प्रेरित नहीं है तो इसका निरसन जरूरी है। सभी लोगों की शंकाएं राजनीति से प्रेरित है ऐसा मैं नहीं मानता, इसलिए मैंने इसको समझाने का प्रयास किया। मान्यवर, 2014 में देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्मार्ट पुलिसिंग की एक व्याख्या देश के सामने रखी थी और स्मार्ट पुलिसिंग की व्याख्या को उन्होंने बहुत स्पष्ट किया है, क्योंकि इस देश में जब तक पुलिसिंग के पद्धति को बदला नहीं जाता, इस देश के अंदर दोष सिद्धि के प्रमाण को बढ़ाया नहीं जाता और गुनाहों के प्रमाण को भी कम नहीं किया जा सकता। मान्यवर, इन्होंने एस से कहा था स्ट्रिक्ट और सेंसिटिव, एम से कहा था मॉडर्न और मोबाइल, ए से कहा था अलर्ट बट अकाउंटेबल, आर से कहा था रिलायबल एंड रिस्पॉन्सिव, टी से कहा था ट्रेन और टेक्नो सेवी। ये जो बिल है मान्यवर, ये टी को एड्रेस करने वाला है। देश भर के सभी प्रिजन के अफसर को, सभी पुलिस अफसरों को इसकी टेक्नोलॉजी से ट्रेन करने का अभियान भारत सरकार के बीपीआरएनडी और हमारा एनसीआरबी उठाने वाला है। इनको ट्रेन करेंगे और उनको टेक्नो सेवी भी बनाएंगे और तब जाकर ये बिल की मंशा सब पूरी होगी। मान्यवर, क्या हम आगे बढ़ना नहीं चाहते? मान्यवर, ये सदन ने भी ये सोचना पड़ेगा कि हम वही रहना चाहते हैं। सिर्फ राजनीति की गुल्ला डंडी खेलकर देश का विचार नहीं करेंगे हम। अरे बहुत सारी चीजें राजनीति के करने के लिए। मैं बंगाल आऊं चुनाव के लिए, तब कर लो भाई, कौन डरता है? कर लेंगे दो दो हाथ, हम नहीं डरते। मगर जहां तक जनता के संरक्षण का सवाल है, उसकी सुरक्षा का सवाल है, पुलिस को ताकत देने का सवाल है, गुनहगारों को सजा कराने का सवाल है, मुझे लगता है मान्यवर इसमें किसी ने राजनीति नहीं करनी चाहिए। और ये जो बिल मैं लेकर आया हूं, ये एक अकेला हमारा प्रयास नहीं है मान्यवर। विगत 2.5 साल के अंदर ढेर सारी चीजें मोदी जी के स्मार्ट पुलिसिंग की व्याख्या को चरितार्थ करने के लिए गृह विभाग ने की है। मोदी जी ने जो व्याख्या की है, इसके 8 बिंदुओं पर गृह मंत्रालय काम कर रहा है। अगर ये बिल आइसोलेशन में आता है तो शंका और गहरी हो सकती है कि भाई चलो एक अकेले बिल से क्या होगा। ऐसा नहीं है। हम इसके लिए एक एनवायरनमेंट भी बनाए हैं और बहुत सारे प्रयासों में से ये बिल एक प्रयास है, आइसोलेशन में नहीं है। मान्यवर, हमने फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी बनाई है। क्यों बनाई है? फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी इसलिए बनाई है कि बहुत सारे रिपोर्टों के अंदर है कि 6 साल से ज्यादा सजा वाले सभी धाराओं के अंदर फॉरेंसिक एविडेंस को कंपलसरी करना चाहिए। कर तो दे, मगर ट्रेन मैन फोर्स कहां है भाई? हमारे पास तो इतना मानव संसाधन बल है ही नहीं। तो क्या करना? फॉरेंसिक साइंस को बढ़ावा नहीं देना, फॉरेंसिक एविडेंस को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। तो हमने, मोदी जी जब गुजरात में मुख्यमंत्री थे, वहां गुजरात फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी बनाई थी। यहां प्रधानमंत्री बनने के बाद 2020 में फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी की हमने रचना की, जिससे वहां से जो विद्यार्थी निकलेंगे, बीएससी फॉरेंसिक साइंस, एमएससी फॉरेंसिक साइंस और इसके अंदर R&D करने वाले बच्चे भी निकलेंगे हर विधा के अंदर। मान्यवर, आज 2 साल के अंदर ये यूनिवर्सिटी ने 6 राज्यों में राज्य सरकारों के साथ एग्रीमेंट कर इस यूनिवर्सिटी से अटैच कैंपस और कॉलेज अलग अलग राज्य में खोले हैं। और मुझे पूरा भरोसा है कि कुछ ही सालों के अंदर ये यूनिवर्सिटी से और इसके संबंध कॉलेजों से अनेक विद्यार्थी बाहर आएंगे जो फॉरेंसिक साइंस के क्षेत्र में देश को न केवल मजबूत करेंगे, देश का नाम दुनिया में रोशन करेंगे।
मान्यवर, और ये फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के जो तज्ञ बाहर आएंगे, वो केस को सजा कराने के लिए, अपराधी को सजा कराने के लिए फॉरेंसिक साइंस के साइंटिफिक एविडेंस के बेस को मजबूत कर प्रोसिक्यूशन एजेंसी की मदद में रहेंगे। मान्यवर, ये हमारा आइसोलेशन में प्रयास नहीं है। हमने रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी बनाया, रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी भी 2020 में बनाया, और रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी के तहत जो बच्चे, कुछ बच्चे चाहते हैं बचपन से कि मैं डॉक्टर बनूं, कुछ वकील बनना चाहते हैं, कोई पत्रकार बनना चाहते हैं, कोई राजनीति में आना चाहते हैं। इस तरह से बहुत सारे बच्चों की मनसा होती है कि मैं रक्षा के क्षेत्र में काम करूं, मेरी कैरियर में रक्षा के क्षेत्र में बनाऊं। तो उनके लिए कोई स्पेशलाइज कोर्स ही नहीं है। वो तो बेचारा बीएससी करता है, बीए करता है, बीकॉम करता है, फिर एग्जाम देता है, शरीर तगड़ा है तो सिलेक्ट हो जाता है, और फिर उसकी ट्रेनिंग होती है। तो क्यों नहीं ऐसी यूनिवर्सिटी बनाई जाए जो रक्षा के साथ जुड़े हुए सभी क्षेत्रों के अंदर एक स्पेशलाइज फोर्स खड़ा करे, एक एक्सपर्ट्स खड़ा करे। रक्षा के क्षेत्र के साथ बहुत सारी विधाएं जुड़ी हुई है, तो इसके लिए, उसकी ट्रेनिंग के लिए, उसके स्पेसिफिक अध्ययन के लिए हमने रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी बनाया है मान्यवर। और रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी भी आने वाले दिनों में पूरे देश के अंदर अपने संबंध कॉलेजों को बढ़ाने वाली है मान्यवर। नेक्स्ट जनरेशन क्राइम को हमने समझना भी पड़ेगा और उसके सर्कल को तोड़ना भी पड़ेगा। हम चाहते हैं कि पुलिस, देश की कानून प्रवर्तक एजेंसियां क्रिमिनल से 2 कदम आगे रहे, पुलिस से क्रिमिनल 2 कदम आगे न रहे। पुलिस को सुसज्ज करना पड़ेगा। आप ह्यूमन राइट, प्राइवेसी, ये सारी चीजों को कर पुलिस के हाथ में हथकड़ी लगा दोगे और उसको तैरने के लिए स्विमिंग पूल में डालोगे और कहोगे जाओ भैया गोल्ड मेडल लेकर आ जाओ, वो नहीं आ सकता। उसके हाथ को सशक्त करना पड़ेगा, उसके हाथ को मजबूत करना पड़ेगा, उसके हाथ में भी वेपन देना। तो ये प्रयास पुलिस को सशक्त करना है, कानून प्रवर्तक एजेंसियों को सशक्त करने के लिए प्रयास है मान्यवर। नेक्स्ट जनरेशन क्राइम को हम चिर पुरातन पद्धतियों से हैंडल नहीं कर सकते। हमने भी नेक्स्ट जनरेशन की तकनीक को अपनाना होगा और पुलिस को इससे लैस करना होगा, पुलिस को इसके ट्रेन करना पड़ेगा। भारत सरकार ने मोदी जी के मार्गदर्शन में मॉडस ऑपरेंडी ब्यूरो भी बनाया है। ये ब्यूरो देश भर में एनसीआरबी के पास जो क्राइम का रिकॉर्ड आता है उसका एनालिसिस करता है और विशिष्ट प्रकार के क्राइम करने वाले लोगों की मॉडस ऑपरेंडी क्या होती है इसका स्टडी करता है, इस पर डिस्कशन होता है, इसके समाधान ढूंढे जाते हैं और वो समाधान बीपीआरएनडी के माध्यम से देश भर की पुलिस को भेजे जाते हैं। ये भी हमने नया इनिशिएटिव लिया है। आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट में भी हम बदलाव करने जा रहे हैं। ये भी बहुत पुराने हो चुके हैं, इसको भी बदलाव, मैंने सभी मान्य संसद सदस्यों को पत्र भी लिखे कि आपका कोई इसमें सुझाव हो तो आप जरूर भेज दीजिए, हम इसको अभी बना रहे हैं। और जहां तक बात करा कि भाई स्टैंडिंग कमेटी को देना, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं सीआरपीसी, आईपीसी और एविडेंस एक्ट तीनों को सुधार कर हम लाएंगे। निश्चित रूप से गृह विभाग की स्टैंडिंग कमेटी को देंगे और जांच परख कर ही मैं उसको ग्रुप के अंदर, उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं, परंतु इस बिल में इतने बड़े बदलाव ही नहीं हो रहे। मैं बाद में एक्सप्लेन करता हूं, मैं तो रिक्वायरमेंट पर हूं। चिदम्बरम साहब ने और सारे लोगों ने जो जवाब दिए उसके मुझे जवाब देने मान्यवर। इसके अलावा हमने डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन का कार्यालय का भी सभी जगह, सभी राज्यों को मैंने पत्र लिखा है, एक डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन होना चाहिए जो प्रोसिक्यूशन एजेंसी को, हर राज्य की पुलिस को उस पर निगरानी रखे कि प्रोसिक्यूशन ठीक तरीके से हो। और ढेर सारे हमने ई गवर्नेंस इनिशिएटिव भी मान्यवर लिए हैं। मैं ई गवर्नेंस इनिशिएटिव को इसलिए बताना चाहता हूं कि सारी जो शंकाएं हो रही हैं वो शंकाओं का 2 मिनट में निरसन हो जाएगा ध्यान से सुनने के बाद। मान्यवर, एक सीसीटीएनएस कर एक नेटवर्क सिस्टम भारत सरकार का चलता है
मैं इस ग्रुप को इन्फॉर्म करना चाहता हूं कि 16,390 मतलब 100% पुलिस थानों ने CCTNS नेटवर्क को अपना लिया है और पूरे देश के थाने CCTNS नेटवर्क से चलते हैं और 99% पुलिस स्टेशन में अब FIR CCTNS में सीधे दर्ज हो रही है। जहां नेटवर्क के थोड़े प्रॉब्लम है, इसका भी हम सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं। मान्यवर, CCTNS नेटवर्क के अंदर 7.47 करोड़ FIR उपलब्ध है। जो डेटा लीकेज की बात करते हैं, मैं उनको बताना चाहता हूं। मान्यवर, केंद्र शासित प्रदेश, राज्य और केंद्रीय जांच एजेंसी, ये सारी एजेंसियां, राज्य की पुलिस भी इसका उपयोग कर रही है। मान्यवर, ई प्रोसिक्यूशन भी हमने चालू किया है और 751 जिलों में, प्रोसिक्यूशन के जिलों में ई अभियोजन को लागू कर दिया गया है। आज तक कोई फरियाद नहीं। ई प्रिजन, देश की 1259 जेलों में ई प्रिजन लागू कर दिया गया है, कोई फरियाद नहीं आई। ई फोरेंसिक्स, 117 फोरेंसिक लैब में ये लागू हो चुका है, ऑनलाइन हो चुका है, आज तक कोई फरियाद नहीं। इंटर ऑपरेटेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ICJS वो भी लागू हो गया है और ICJS के तहत अब CCTNS, ई प्रिजन, ई कोर्ट और ई फोरेंसिक को जोड़ने का भी काम अब चालू हो गया है और वो एकीकृत डेटाबेस से एनालिटिकल मॉड्यूल भी बनाए गए हैं, जिससे देश भर के क्राइम का एनालिसिस होकर उसके रोकने के मॉड्यूल बने। कई राज्य ऐसे होते हैं जहां समान प्रकार के क्राइम होते हैं, कई जिले ऐसे होते हैं जहां समान प्रकार के क्राइम होते हैं, कुछ सागर किनारे के जिले हैं वहां अलग प्रकार के क्राइम होते हैं। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार एक अलग प्रकार के क्राइम होते हैं जहां मैदानी इलाके हैं, कुछ जिले पहाड़ी हैं वहां अलग प्रकार। ये सबको ये एकीकृत डेटाबेस से एनालिटिकल मॉड्यूल से हम एनालिसिस करते हैं और इसके समाधान BPRND को भेजते हैं। गृह मंत्रालय का मतलब आपके मन में बहुत सीमित है। मैं बहुत बोलना नहीं चाहता था, मगर जो व्याख्या मेरे मंत्रालय की आप लोगों के मन में है, मुझे लगा इसे मुझे बदलना ही पड़ेगा, इसलिए मैं आज इतनी डिटेल बात करता हूं। मान्यवर, इन्वेस्टिगेशन ट्रैकिंग सिस्टम फॉर सेक्सुअल ऑफेंस ITSSO वो भी हमने लागू कर दिया है और देश भर में ये सिस्टम लागू हो गई। यौन अपराधियों का राष्ट्रीय डेटाबेस NDSO भी ऑनलाइन उपलब्ध है मान्यवर और लगभग 11.83 लाख यौन अपराधियों का डेटा एजेंसियों के लिए ऑनलाइन उपलब्ध है, कोई फरियाद नहीं आई। क्राइम एक्ट, क्राइम मल्टी एजेंसी सेंटर, उसको भी हमने लॉन्च कर दिया गया है और लगभग 59,937 लोगों ने क्राइम एक्ट का इस्तेमाल किया है और लगभग 23,000 अलर्ट्स इससे जनरेट हुए। मान्यवर, मोडस ऑपरेंडी ब्यूरो की बात मैंने पहले आपको कर ही दी है। NCRB ने एक पोर्टल पर नागरिक सेवाएं शुरू की है, जिसके लॉन्च के बाद अब तक 2,27,400 लॉगिन हो चुके हैं और अलग अलग सेवाओं को उसको जवाब दिया गया। लापता व्यक्ति की खोज, ये CCTNS से लेकर हमने एक अलग सुविधा बनाई है। लापता व्यक्तियों की खोज, किसी भी व्यक्ति गुम हो जाता है तो उस पर पोर्टल पर आता है, वहां एक डेटाबेस होता है, इसके साथ मैचिंग होता है और मैं सदन को बताना चाहता हूं यही पोर्टल के तहत मान्यवर 14,513 लोग अपने परिवारजनों को वापिस लेने का काम मान्यवर हो। वाहन, सेकंड हैंड व्हीकल अगर किसी को खरीदना है तो चोरी का है नहीं है किसी को मालूम नहीं, लोग ले लेते हैं बेचारे, फिर पुलिस उनके घर पर पहुंच जाती है, उनको भी पकड़ कर ले जाती है चोर के साथ साथ। तो उसको पहले कैसे मालूम है? तो हमने लगभग इसके लिए एक डेटाबेस CCTNS से चोरी किए हुए वाहनों का जो कंप्लेन है उससे बनाया। लगभग 2,96,200 लोगों ने अपने खरीदने वाले वाहन का वहां डेटा भेजा, इसको मैच कर भेजा और 13,637 चोरी किए हुए लोग भी पकड़े गए और चोरी की हुई गाड़ियां भी पकड़ी। ये क्या उपयोग होना है मैं बताना चाहता हूं।
घोषित अपराधी, उसको भी सीसीटीएनएस पे लिया है और ये सारे एनालिटिक मॉड्यूल इसका एनालिसिस करें मान्यवर। तो घोषित अपराधी जो पुलिस ने हमारे यहाँ अलग अलग राज्य के थानों ने, डीआईजी ने, आईजी ने या डीजी पुलिस ने भेजे, इसमें से घोषित अपराधी भगोड़े 16,176 लोगों को पकड़ने का काम इस नेटवर्क के माध्यम से। मान्यवर, आईसीजेएस के एनालिटिकल टूल के द्वारा भी हमने बहुत सारा खर्चा किया है मान्यवर। लगभग 2050 करोड़ का खर्चा भारत सरकार ने सारी व्यवस्थाओं की। मैं इसलिए कह रहा हूं ये बिल आइसोलेशन में नहीं है, ये बिल है सबके अंदर एक खूंटी कड़ी है। हमारे पास क्रिमिनल का डेटा नहीं है, वो क्रिमिनल का डेटा इसके अंदर ऐड होने से इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन बहुत सरल हो जाएगा। और क्या भय है, किस चीज का भय है मान्यवर? I4C के माध्यम से ढेर सारे और भी अलग अलग सेवाएं ली हैं और 112 के माध्यम से सभी पुलिस सेवाओं को एक ही फोन नंबर पर लाने का काम भी भारत सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में किया है। मान्यवर, मैं इसलिए बताना चाहता था कि ये जो हमें जिस तरह से कटघरे में खड़े करने का प्रयास हो रहा था कि इसके पीछे कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं है, ना जनता के मन में भी ऐसी भावना जानी चाहिए, ना सदन के सदस्यों के मन में भी ऐसी भावना जानी। हमें भी मालूम है ये जो लोकतंत्र के अंदर कुर्सी होती है ना, ये यावत चंद्र दिवाकरों नहीं होती है, कल कोई भी आ सकता है। तो मिसयूज का भय तो मुझे भी लग सकता है, मगर मुझे नहीं लगता है मिसयूज होगा तो देश की अदालतें हैं। मिसयूज हुआ भी है, लड़कर हम निकले भी है और अदालत ने चांटा भी लगा। मान्यवर, भय से हम नहीं जीते हैं और तीसरे भय के अध्ययन देश के करोड़ों लोगों को क्राइम की दुनिया से लड़ने का, उससे सुरक्षा का उपाय न करे, ये कोई ठीक बात नहीं है, ना जो सोचने का तरीका ठीक है। मान्यवर, दोष सिद्धि का जो प्रमाण कम है, इस पर कई सारी कमिटियों ने, कई सारे लोगों ने ढेर सारी चर्चाएं करके रिपोर्ट भारत सरकार को दी है। प्रमुखतः 3 ही कारण बताए गए हैं मान्यवर। एक तो सबूतों की कमी, सबूतों की कमी के आधार पर प्रतिवर्ष 7.5 लाख केस में आरोपी छोड़ दिए जाते। अदालत कहती है पर्याप्त सबूत नहीं है। अगर उसके साइंटिफिक सबूतों को अदालत के सामने रखें तो मैं मानता हूं कि ये केसों की संख्या आधे से भी कम हो जाएगी और लगभग 3.5 लाख केसों में सजा का प्रमाण हम बढ़ाएंगे। न्याय की प्रतीक्षा, अदालत बार बार प्रोसिक्यूशन एजेंसी को कहती है कि भाई आप और सबूत लेकर आइए, और सबूत लेकर आइए, और डेट पर डेट पड़ती है, न्याय लेट होता जाता है। जो निर्दोष है वो भी बेचारा आरोपी बना रहता है। माननीय उपसभापति महोदय, इससे ये समाप्त हो जाए। और वित्तीय क्षमता भी कम है। जब डेट पर डेट पड़ती है तो इस ओर से तो सरकार लड़ती है, जो आरोपी होता है कई गरीब भी होते हैं, इनके घर के घर बिक जाते हैं, वो ऋण के बोझ के तले दब जाते हैं। अगर प्रॉम्प्ट एकदम स्पीडी न्याय मिलेगा तो कुछ नहीं होगा। और मैं मानता हूं अगर साइंटिफिक एविडेंस का प्रमाण हमने बढ़ाया तो न्याय जल्दी मिलेगा। मान्यवर, ये बिल लाने के लिए उद्देश्य के लिए कुछ पूछ रहे थे, मैं ये भी आगे तो मैंने उद्देश्य बताया, मगर एक और उद्देश्य बताया। मान्यवर, इन्वेस्टिगेशन 3rd डिग्री पर इस जमाने में निर्भर नहीं रहना चाहिए। इन्वेस्टिगेशन को 3rd डिग्री पर से बदलकर तकनीक की डिग्री पर हम ले जाना चाहते हैं, डेटा की डिग्री पर ले जाना चाहते हैं और इंफॉर्मेशन की डिग्री पर ले जाना चाहते हैं। और ये सब सहमत हो गए कि 3rd डिग्री के आधार पर इन्वेस्टिगेशन नहीं हो करना चाहिए। कब बंद होगा? जब उसको साइंटिफिक एविडेंस का आधार लेंगे। इसलिए मान्यवर, ये बिल लेकर मैं यहां पर उपस्थित हुआ हूं। मान्यवर, ढेर सारी बातें हैं, मैं इसके दूसरे हिस्से में बताऊंगा। अब कुछ सदस्यों ने
अलग अलग प्रकार के सवाल भी मुझे पूछे हैं, शंकाएं भी करी है और मैं मानता हूं कि उनका अधिकार है। सबसे पहले श्री चिदम्बरम जी ने पूछा कि गृह मंत्री स्पष्ट करे ये जो आपने माप की व्याख्या की है वो व्याख्या के अंदर नार्को एनालिसिस, ब्रेन मैपिंग और पॉलीग्राफ टेस्ट आता है या नहीं आता है? ना जी, नहीं आता है। इस बिल का कोई प्रावधान किसी भी कैदी का नार्को एनालिसिस, पॉलीग्राफ टेस्ट या ब्रेन मैपिंग करने की इजाजत नहीं देता है। ये मैं रिकॉर्ड पर कह रहा हूं, इसलिए किसी को ये शंका रखने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा, इसके बाद पूछा मान्यवर कि पुत्तुस्वामी केस में जो निर्देश दिए गए हैं उसका उल्लंघन हो रहा है। जरा भी उल्लंघन नहीं हो रहा है। पुत्तुस्वामी केस के अंदर उन्होंने और लोगों की स्वतंत्रता पर इसका ओवरलैप न हो इसलिए 3 अपवाद दिए हैं। ऐसा कानून सक्षम विधायिका द्वारा बनाना चाहिए। मैं मानता हूं ये सक्षम विधायिका है, चिदम्बरम साहब भी मानते होंगे। ऐसा यह वैध देश हित में होना चाहिए। तो जिन्होंने गुनाह किया है उसको सजा कराने से बड़ा वैध देश हित क्या हो सकता है? बोले तो वैध देश हित के अंदर भी है। मान्यवर, तीसरा उन्होंने कहा है कि अनुपातिक होना चाहिए। मान्यवर, ये कानून जो है वो अनुपातिक भी है, इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है। कानून प्रवर्तन एजेंसियों का हाथ मजबूत करने और अपराध को सिद्ध करने के और इसके द्वारा व्यक्तियों के, जो प्रताड़ित व्यक्ति हुए, इसके मौलिक अधिकारों का रक्षा में के बीच में संतुलन बनाने के लिए कानून लेकर हम आए हैं। अभी एक तरफा ही है जिसका अधिकार छीना जा रहा है। जो विक्टिम है इसके अधिकार के लिए कोई प्रोविजन नहीं है। ये जो कानून है विक्टिम को प्रोटेक्ट करने के लिए है और जो अपराध करने वाले हैं उसको सजा करें। किसी भी तरह से ये पुत्तुस्वामी केस के निर्दोषों का उल्लंघन मान्यवर नहीं करता है। इन्होंने 14, 19, 20, 3 और 21 के तहत मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के लिए कहा। मैंने इसको मान्यवर एड्रेस किया है। उन्होंने कहा है, एक उल्लेख धारा 3 का किया। मैं वो ठीक है, बिल पढ़ेगा तो मैं पढ़ूंगा तो मैं भी कहूंगा, मगर मैं इतना स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि धारा 3 के अंदर रूल्स बनाने के लिए भारत सरकार को अधिकार है। इसकी व्याख्या भी हम करेंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि पॉलिटिकल आंदोलन वाले किसी भी व्यक्ति को सिर्फ पॉलिटिकल आंदोलन के लिए ये अपने माफ न दे। मगर पॉलिटिकल नेता का अगर क्रिमिनल केस में अरेस्ट होता है तो उसको फिर नागरिक के एतपार रहना पड़ेगा। परंतु पॉलिटिकल आज्ञा का मतलब पुलिस की आज्ञा का उल्लंघन या तो किसी भी प्रकार की निषेधाज्ञा का उल्लंघन, इस प्रकार के उल्लंघन के लिए किसी भी पॉलिटिकल व्यक्ति का नाम नहीं लिया जाएगा। मैं सदन को आश्वस्त करना हूं माननीय, और इसके लिए हम रूल्स में प्रोविजन भी करेंगे। रूल्स बनाने का हमने पीछे एक हमारा अधिकार भी रखा है। बिल को ध्यान से जिन लोगों ने पढ़ा होगा उसको मान्यवर मालूम होगा। मान्यवर, जो यही है, अगर नागरिक धरना देता है तो उस पर केस होगा, जिसकी मैंने बात कर ली। पुत्तुस्वामी केस वाली भी बात मान्यवर मैंने कर ली है। मान्यवर, इसके बाद विनय विश्वम जी ने कहा कि 124 ए सरकार लगा रही है। हम 124 के दुरुपयोग के पक्ष के नहीं हैं, मगर विनय विश्वम जी केरल से कम्युनिस्ट पार्टी के सांसद को 124 का क्यों आप उठा रहे हो? आप तो लोगों को मार दिए भैया। मेरी पार्टी के 100 लोगों की हत्या राजनीतिक कारणों से केरल में हुई, पूरी की पूरी जान चली गई है, और आप हमें 124 से समझा रहे हो? क्या 124 से समझा रहे हो? प्लीज मैं 124 को मैं स्वीकार नहीं कर रहा हूं कि हम इसका दुरुपयोग करें। मैं इतना ही कहता हूं, कम से कम केरल से आए हुए कम्युनिस्ट पार्टी के
कार्यकर्ता को, सांसद को ये नहीं उठाना चाहिए। ये प्लीज प्लीज नो प्लीज 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 In Kerala, under 124A, nobody is implied. Thank you. Yes, please, please. Thank you, Vinay ji. I request you to concentrate yourself. Please, please. अरे ढेर सारे उदाहरण है भाई। The wrong statement. Thank you, Vinay ji. ढेर सारे उदाहरण। Thank you. Thank you. Thank you. Please, please, please. No, let homeless, please. Please, Vinay ji, please no. मान्यवर, no, please, please. मान्यवर इनकी इच्छा है तो इसी सदन के सवाल जवाब में से मेरी नहीं कोई और सरकार ने जो जवाब दिए हैं वो मैं सदन पे रखने के लिए तैयार हूं। केरल विधानसभा में सवाल जवाब में जो जवाब आए हैं वो मैं सदन पर रखने के लिए प्लीज। मैं इरिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट नहीं करता। विश्वम साहब, मेरे 27 साल हो गए किसी विधायिका में काम करते हुए, चाहे विधानसभा, राज्यसभा। आपकी बात रिकॉर्ड पे नहीं जा रही। प्लीज स्टेटमेंट नहीं करता। मंत्री जी की बात जा रही। प्लीज मान्यवर, प्लीज 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 प्लीज। मान्यवर, एक सदस्य ने कहा कि आंख में से आंख डालकर जवाब दे सकते हो। मैं तो जरूर दे सकता हूं अगर कोई आंख में से आंख डालकर पूछने की हिम्मत रखता है, जरूर दे सकता हूं और किसी भी फोरम में रहे, क्योंकि मेरे मन में चोर नहीं है साहब। हम वही करते हैं जो हमारी आत्मा कहती है और हम वही करते हैं जिसको आत्मा कानून के हिसाब से मानता है। मान्यवर, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, कोई आंख में से आंख डालकर सवाल पूछे, मैं आंख में आंख डालकर जवाब भी जरूर दे दूंगा। मान्यवर, संजय सिंह जी ने कहा कि गुजरात में ये FIR, अरे संजय बाबू, मान्यवर आपके माध्यम से मैं संजय बाबू को कहना चाहता हूं, अभी तो आप गुजरात गए हो, मुझे तो मालूम नहीं कोई FIR हुई या नहीं हुई इनकी पार्टी पर। कुछ करा होगा तो हो भी सकती है, मगर बंगाल चले जाओ जान चली जाएगी। अच्छा है अभी वहां गए नहीं हो आप। मान्यवर, माननीय गृह मंत्री जी, आपकी बात ही रिकॉर्ड पे जा रही है। माननीय सदस्यगण प्लीज बैठ जाओ। आप बोले प्लीज बोले। मान्यवर, ये पूछते हैं आप गए हो, मैं गया था 2019 के चुनाव में, मेरे रोड शो पर आग के गोले फेंके गए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष गए नड्डा जी, इनकी गाड़ी को घेर कर उन पर जघन्य हमला किया गया। कैसे ना बोल सकते हो? ये रिकॉर्ड पर है, कोर्ट ने संज्ञान लिए है। मान्यवर, माननीय गृह मंत्री जी के ही बातें जा रही है रिकॉर्ड पे और किसी की नहीं। प्लीज 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 मान्यवर, प्लीज 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 माननीय गृह मंत्री जी को आप बोल रहे थे। प्लीज 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 थैंक यू प्लीज प्लीज माननीय गृह मंत्री जी की बात रिकॉर्ड पे जाएगी। माननीय गृह मंत्री जी प्लीज प्लीज। मान्यवर, सुखेंदु शेखर रॉय जी ने कहा कि SC ST माइनॉरिटी की DNA प्रोफाइलिंग। भाई पूरे सदन को मैं पूछना चाहता हूं, इसमें ST SC माइनॉरिटी कोई शब्द है क्या? किस चश्मे से पढ़ते हो सुखेंद्र रॉय जी? किस चश्मे से पढ़ते हो बिल को? अरे बिल बोले हैं आप, मैं तो सुनकर लिखा है। वो 60% अंडर ट्रायल्स है, OBC SC ST माइनॉरिटी। थैंक यू, यही मैं बोला। थैंक यू। तो मान्यवर, अंडर ट्रायल है, इसकी जात या धर्म क्या देखना? अंडर ट्रायल जो है वो है, कानून की नजर में सब एक समान है।
किसी अपराधी की जाति धर्म क्या देखना है और क्यों नहीं होना चाहिए? मान्यवर, उन्होंने कहा है फासिस्ट बिल है, मैं ज्यादा टिप्पणी नहीं कर सकता। वो टीवी पर ममता दीदी देखती होगी, सारे सीआर सुधारने के लिए खड़े हो जाते हैं, इसलिए मैं ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहता मान्यवर। मगर फासिस्ट शब्द की कड़ी से कड़ी व्याख्या को बंगाल की सरकार ने बदल दिया है मान्यवर, और फासिस्ट की नई डेफिनेशन, फासिस्ट मान्यवर, मैं ममता दीदी का नाम वापिस लेता हूं। बैठ जाओ, ले लिया वापिस। ममता जी का नाम ले, प्लीज बैठ जाइए। ममता दीदी का नाम मैं वापिस लेता हूं। मान्यवर, फासिस्ट शब्द की डेफिनेशन को, जो डेफिनेशन में है, उससे अलग प्रकार के मायने देने का काम बंगाल की सरकार ने कहा। बाबा, आप कम से कम फासिस्ट का रेफरेंस मत लीजिए। अंत में मान्यवर, मैं इतना ही कहना चाहता हूं, नथिंग इज गोइंग ऑन रिकॉर्ड। सीट पर बैठ करना बोले, प्लीज 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 मान्यवर, प्लीज अंत में प्लीज प्लीज मान्यवर, मैं अंत में इतना ही कहना चाहता हूं कि बिल लाने के पीछे सरकार की मंशा किसी भी निजता का भंग करने की नहीं है, भी ह्यूमन राइट का वायोलेशन करने की नहीं है मान्यवर, और ना किसी की भी निजता का भंग हो या ह्यूमन राइट का वायोलेशन हो, ऐसे लूपहोल्स भी हम नहीं रखेंगे। मैं आश्वस्त करना चाहता हूं, ये एक्ट और इसके रूल्स दोनों मिलकर एक अच्छी मजबूत प्रणाली बनाएंगे, जिससे कानून की मदद तो जरूर होगी। कुछ सदस्यों ने कुछ धाराओं पर, इसके दुरुपयोग पर आशंकाएं भी व्यक्त की है कि इसका दुरुपयोग हो सकता है। कुछ सदस्यों ने इसकी संवैधानिक वैधता पर भी सवाल खड़े किए हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिए हैं, ये जजमेंट के हिसाब से यह बिल उचित नहीं है। इस सब का मैं डिटेल जवाब दूंगा माननीय। सबसे पहले मैं बिल को लेकर आने वाले मंत्री के नाते इस बिल का उद्देश्य सदन के सामने स्पष्ट करना चाहता हूं, क्योंकि रिकॉर्ड पर रहना चाहिए। मान्यवर, इस बिल का प्रमुख उद्देश्य है इस देश में कानून की अदालतों में जो मामले जाते हैं उसमें दोष सिद्धि का प्रमाण बढ़ाना, ये इसका प्रमुख उद्देश्य है। पुलिस और फोरेंसिक टीम की कैपेसिटी बिल्डिंग करना, ये इस बिल का उद्देश्य है। थर्ड डिग्री को नाबूद कर दोष सिद्धि के लिए साइंटिफिक एविडेंस प्रोसिक्यूशन एजेंसीज को उपलब्ध कराना, यह बिल का मान्यवर उद्देश्य है। और डेटा को सुरक्षित प्लेटफॉर्म पर रखकर उसको निश्चित प्रक्रिया के तहत साझा कर किसी भी नागरिक की प्राइवेसी रिस्क में न आए, उसकी प्राइवेसी का भंग न हो, इस प्रकार का व्यवस्था तंत्र बनाना, ये चार उद्देश्य लेकर मैं इस महान सदन के सामने ये बिल को लेकर मान्यवर आया हूं। मान्यवर, बहुत बात हुई, ये बिल से ये कर देंगे, वो कर देंगे, इस बिल से इसका दुरुपयोग हो जाएगा, मगर मुझे थोड़ा दुख भी है मान्यवर। जो झा साहब ने कहा कि चर्चा का स्तर बहुत अच्छा रहा। झा साहब, चर्चा का स्तर तब अच्छा माना जाता है जब बात बैलेंस तरीके से की जाए। मान्यवर, एक भी विपक्ष के सदस्य ने दोष सिद्धि का प्रमाण कम है और उसको बढ़ाना चाहिए, इसकी जरूरियात ही महसूस नहीं की। हम किस प्रकार का क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम चाहते हैं, जिस क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर हत्या कर 100 में से 66 लोग बरी हो जाए,
जिस सिस्टम के अंदर बलात्कार कर 100 में से 60 लोग बरी हो जाए, चोरी कर 100 में से 62 लोग बरी हो जाए, डकैती कर 100 में से 70 लोग बरी हो जाए, बाल अपराध कर 100 में से 62 लोग बरी हो जाए। दोष सिद्धि का प्रतिशत क्या है मान्यवर? कोई नहीं बोला। इतना सारा रिसर्च करते हैं तो इतना भी तो कर लेते और इसको स्पिरिट से रख देते। मान्यवर, हत्या के अंदर सिर्फ 44% लोगों को देश में हम सजा दिला पाते। मैं तो प्राइमरी कोर्ट की बात करता हूं, ऊपर जब जजमेंट आता है तब ये और गिरता है। मान्यवर, बलात्कार के अंदर 39%, चोरी के अंदर 38%, डकैती के अंदर 29% और बाल अपराध के अंदर 37% सिर्फ मात्र। क्या हम इसको बढ़ाना नहीं चाहते हैं? किसी ने इसका सजेशन नहीं दिया, कुछ अच्छे सुझाव देते कि भाई ये बढ़ाने के लिए ये जरूरी है, मगर इसमें इतना ध्यान रखिए, इसमें इतना सुधार करिए, तब तो चर्चा का स्तर ऊपर आया। मैं मान सकता था माननीय अध्यक्ष। मैं और देशों की भी बहुत सारी बातें हुई, उस देश के कानूनों का अध्ययन करें, मगर इसका रेफरेंस दिया गया है। हमारा कानून तो शक्ति के हिसाब से बच्चा है मान्यवर, इससे कठोरतम कानून दुनिया के देशों के अंदर बने हैं और वहां पर दोष सिद्धि का प्रतिशत देखें। दक्षिण अफ्रीका में 82%, यूनाइटेड किंगडम में 84%, कनाडा के अंदर 64%, ऑस्ट्रेलिया में 97% और अमेरिका में 93%। ये क्यों है? क्योंकि वहां प्रोसिक्यूशन एजेंसी को साइंटिफिक एविडेंस का आधार मिला हुआ। साइंटिफिक एविडेंस, फोरेंसिक एविडेंस, इसके आधार पर प्रोसिक्यूशन एजेंसी आगे बढ़ती है, इसलिए अदालतों को सजा करना बहुत सरल हो जाता है और जो गुनहगार है उसको कानून की गिरफ्त से भागना बहुत कठिन हो जाता है। क्या हम हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को उस ओर मोड़ना नहीं चाहते? मोड़ना चाहिए या नहीं चाहिए? ये सदन के सामने ये बिल आया, इसलिए मैं पूछना चाहता हूं, क्या हम सिर्फ राजनीति की कोरी चिंता करेंगे? राजनीतिक चिंताओं का सम्मान है, आपकी शंकाओं का भी जवाब देने का मेरा दायित्व है और मैं दूंगा भी, परंतु आप में से कोई एक तो भला बोलता कि भैया ये जरूरी है मगर इतनी चिंता करिए। एक का मैंने सब भाषण धैर्य से सुने मान्यवर, कहीं पर भी कोई नहीं बोला। मान्यवर, ये बिल लाने का उद्देश्य दोष सिद्धि को बढ़ाना और साइंटिफिक एविडेंस को हमारी प्रोसिक्यूशन एजेंसियों को उपलब्ध कराना है। मान्यवर, एक देश में एक प्रथा होगी, लोकतंत्र में पक्ष और प्रतिपक्ष होना स्वाभाविक है, होना भी चाहिए। हम तो चाहते प्रतिपक्ष मजबूत हो, मगर जनता जो चाहती है वही यहां आता है। हम तो चाहते हैं प्रतिपक्ष मजबूत हो, परंतु अल्टीमेटली वो तो जनता को निर्णय करना है। मान्यवर, कोई भी सरकार बनती है वो विधि से स्थापित होती है। कोई भी सरकार जो बनती है वो विधि से स्थापित होती है और सरकार लोगों के मैंडेट का प्रतिनिधित्व करती है। सरकार की हर लेजिस्लेशन को, हर कानून को शंका की दृष्टि से देखकर एक शंका का गहरा बादल देश के विचारों के आकाश पर बना देना कितना उचित है। जन भावनाओं को गुमराह करना, शंकाओं के औथार के नीचे आप हर चीज को जनता के मन में भय उत्पन्न करना, ये कितना ठीक है? मानिए, हमने कहीं ना कहीं इसका विचार करना पड़ेगा। ये सरकार कोई पार्टी नहीं बनाती है, पार्टी तो अपना एजेंडा लेकर जनता के सामने जाती है, जनता वोट करती है और उसमें से सरकार बनती है। ये सरकार संविधान बनाता है, संविधान की धाराएं बनाती है, शपथ संविधान के लेने पड़ते हैं, तो सरकार के हर इंटेंट शंका खड़ी करना,
और शंका का एक बादल खड़ा कर लोगों को गुमराह करने का प्रयास मान्यवर लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। और मैं देख रहा हूं हर एक सरकार के कदम को राजनीतिक तराजू के अंदर ही तोला जाता है। हर एक सरकार के कदम को पक्ष और विपक्ष की भाषा में ही देखा जाता है। सरकार के हर उद्देश्य को इसका ये उपयोग हो जाएगा, उसका वो उपयोग। मैं समझ रहा हूं आपको शंका आना स्वाभाविक, जब आप पावर में थे तब किया है वो दुरुपयोग, आपने किया है दुरुपयोग, मगर हम उनमें से नहीं है, नहीं है, निश्चित रूप से नहीं है। मैं बोलूंगा तो पसंद नहीं आएगा, कहेंगे पुरानी बात है। मैं बोलूंगा तो पसंद नहीं आएगा, आप तुरंत कहेंगे पुरानी बातें। पुरानी ही है क्योंकि आपकी सत्ता पुरानी हो गई, तो बात तो पुरानी ही आएगी। आज तो आप विपक्ष में बैठे हो मान्यवर, पर मैं इसमें जाना नहीं चाहता। कुछ सदस्यों ने ह्यूमन राइट की बात करी। मैंने कल भी लोकसभा में कहा था 2 दिन पहले कि मान्यवर ह्यूमन राइट के 2 पहलू होते हैं। मैं मानता हूं कि जिसको कानून पकड़ता है उसका भी ह्यूमन राइट है, उसका भी सम्मान होना चाहिए। परंतु उपसभापति महोदय, हत्या जिसकी होती है, जो घर निराधार हो जाता है, जो घर का एक ही कमाकर घर का पालन पोषण करने वाला व्यक्ति मर जाता है, उसके बाल बच्चों का भी कोई ह्यूमन राइट होता है या नहीं होता है? इसकी चिंता भी सदन ने करनी है या नहीं करनी है? ह्यूमन राइट कभी एक तरफा नहीं हो सकता। जब बम धमाके होते हैं, टेररिज्म फैलता है, हजारों लोग मारे जाते हैं, मरने वालों का भी ह्यूमन राइट है, सिर्फ टेररिस्टों का ह्यूमन राइट नहीं है। गुनाह के विक्टिम, उसका भी ह्यूमन राइट है, सिर्फ गुनहगार का ह्यूमन राइट नहीं है। अगर हम कानून बनाने वाली संस्थाएं ये दोनों ह्यूमन राइट के बीच में भले बुरे का अर्थ नहीं समझेगी, दोनों के बीच में संतुलन नहीं बनाएगी, तो हम किसको प्रोटेक्ट करना चाहते? जो लोग कानून के भरोसे अपना जीवन जीना चाहते हैं, जिनकी संख्या 97% से ज्यादा है, इसकी चिंता न करें। इसकी चिंता जरूर करनी चाहिए मान्यवर। आप लोगों को जिसकी चिंता करनी है करिए, हम तो वो 57% कानून के हिसाब से लोगों को, जीने वाले लोगों के ह्यूमन राइट की चिंता करने वाले मान्यवर। स्वतंत्रता का सबको अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट के कई जजमेंट विद्वान लोगों ने यहां कोट किए, मगर हर जजमेंट में से सिलेक्टिव पार्ट ही अपना लेकर पढ़े। उसके आगे लिखा है कि स्वतंत्रता इस मात्रा में ही उपयोग होनी चाहिए कि किसी और की स्वतंत्रता का हनन न हो जाए। स्वतंत्रता का मतलब स्वच्छंदता नहीं होता है। स्वतंत्रता के दायरे हैं। स्वतंत्रता कानून के दायरे में संविधान के 4 कोने के बीच में दी गई है, और इस स्वतंत्रता की व्याख्या और किसी की स्वतंत्रता का हनन करने के लिए नहीं उपयोग की जा सकती। ये स्वतंत्रता नहीं। मान्यवर, स्वतंत्रता का सम्मान हम भी करते स्वतंत्रता का सम्मान। मान्यवर, फौजिया खान जी, संजय जी, सबने ये शंका का वातावरण खड़ा करने का उपयोग किया है, प्रयास किया है, सवाल भी उठाए हैं, उनका अधिकार है। मगर मैं आश्वस्त करना चाहता हूं सदन के सभी सदस्यों को, ये बिल लाने के पीछे मेरी या हमारी सरकार की, ना हमारे प्रधानमंत्री की, किसी की भी मंशा नहीं है। ये बिल लाने के पीछे मंशा, एकमात्र मंशा है, इस देश में गुनाहों के प्रमाण को कम किया जाए, इस देश में सजा के प्रमाण को बढ़ाया जाए, और इस देश के कानून और व्यवस्था की स्थिति को सुधारा जाए, और इस देश की आंतरिक सुरक्षा को सुदृढ़ किया। और मैं आगे बताता हूं कि किस प्रकार से एक कहा गया कि भाई इसका दुरुपयोग होगा, निजता का हनन होगा। मान्यवर, ये सारा डेटा जो आएगा वो एनसीआरबी के पास रहेगा, और मैं सबको आश्वस्त करना चाहता हूं कि एनसीआरबी में जो डेटा आएगा वो सुरक्षित प्लेटफॉर्म पर और सुरक्षित हार्डवेयर के अंदर ही रहेगा। डेटा भंडारण में
किसी तीसरे पक्ष, थर्ड पार्टी या निजी एजेंसियों को कोई स्थान नहीं मिलेगा। एनसीआरबी ही उसको मैनेज करेगी। मान्यवर, एनसीआरबी का जो डेटा भंडारण है उसको सरकार की उच्च से उच्च कक्षा की कमेटी इसका परीक्षण करेगी और डेटा साझा करने के लिए भी एक पद्धति बनाएगी। इसके लिए भी फॉरेंसिक्स एक्सपर्ट्स और इस क्षेत्र के एक्सपर्ट की एक कमेटी बनेगी। वो डेटा साझा करने की पद्धति को बनाकर रूल्स के अंदर व्याख्यायित कर ये नोटिफाइड करेगी। मान्यवर, मैं थोड़ा एक उदाहरण देना चाहता हूं। अभी एनसीआरबी के पास एक नफीस कर सिस्टम बनाया है। इसके तहत 1 करोड़ फिंगरप्रिंट का डेटा है और अगर ये बिल राज्यसभा के सदस्य पास कर देते हैं तो ये डेटा बहुत बढ़ेगा, फिंगरप्रिंट का डेटा बढ़ेगा। अब किसी भी राज्य के कोई एक दूर के गांव में चोरी होती है और पुलिस जाकर फिंगरप्रिंट लेती है तो फिंगरप्रिंट लेने के बाद पुलिस इसको प्रिजर्व करती है, क्योंकि जब चोर पकड़ा जाएगा तब फिंगरप्रिंट मैच कर उसको सजा कराने के काम में आएगा। चिदम्बरम साहब ने तो फिंगरप्रिंट पर ही क्वेश्चन कर दिया, मगर अभी तो अदालतें मानती है इसको, इसलिए उसको सजा कराने के काम में आएगा। अब ये सिस्टम आने के बाद क्या होगा, किसी घर में चोरी होगी तो पुलिस अफसर फॉरेंसिक साइंस की टीम को बुलाकर वहां जो उपलब्ध फिंगरप्रिंट है उसको लेगा, घर के लोगों के फिंगरप्रिंट लेकर उसमें से घर के लोगों के फिंगरप्रिंट को बाहर निकालेगा। जो बच जाएगा वो फिंगरप्रिंट चोरी करने वाले शंकास्पद व्यक्ति के है। आज स्थिति है, पुलिस उसको ढूंढती है, उसका फिंगरप्रिंट लेती है और फिर मैच करती है। अब क्या होगा, वो फिंगरप्रिंट वो भेजेगा एनसीआरबी को। वो पुलिस स्टेशन को या पुलिस को पूरे फिंगरप्रिंट का एक्सेस नहीं है, वो पुलिस स्टेशन भेजेगा फिंगरप्रिंट एनसीआरबी को। एनसीआरबी 1 करोड़ फिंगरप्रिंट के डेटा को 3.5 मिनट में रन कर अगर उसमें वो चोर है तो उसका नाम पुलिस स्टेशन को भेज देगा, पुलिस को ढूंढने की जरूरत नहीं। अब भला बताइए इसमें क्या निजता का हनन होगा, क्या हनन होगा? किसी महिला पर अगर बलात्कार हुआ है, वहां से जो बायोलॉजिकल सैंपल मिलेगा उसका बायोलॉजिकल सैंपल के डेटा के साथ जिन्होंने महिलाओं के अपराध किया है इसके साथ मैचिंग कर अपराधी को जल्दी पकड़ लिया जाए और 1 साल के अंदर मुझे सजा हो, इसमें क्या आपत्ति हो सकती है? निजता का हनन तो तब होगा जब ये डेटा पुलिस स्टेशन को उपलब्ध कराएंगे। किसी को ये डेटा नहीं देना है, पुलिस स्टेशन से क्वेश्चन आएगा, इसका मैचिंग कर जवाब पुलिस स्टेशन पर जाएगा जो कोर्ट में एडमिसेबल एविडेंस होगा। माननीय गृह मंत्री जी, 1 मिनट। Normally it's up to 6 o'clock, but since we are discussing this bill, we may extend the sitting of the house till it is disposed of, and then the special mention is also taken. थैंक यू, सहमति। मान्यवर, मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि इससे किसी का भी निजता का हनन नहीं होने वाला है। कोई डेटा लीकेज का क्वेश्चन डज नॉट अराइज। इस रूल्स के अंदर इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फिक्स की जाएगी और इसकी जिम्मेदारी भी तय की जाएगी। जो डेटा रखने वाले हैं उसकी जिम्मेदारी। और आजकल तो मान्यवर टेक्निक बहुत आगे गई, कोड के बगैर डेटा नहीं मिलेगा। इसका कंप्यूटर की क्लॉक में समय भी निश्चित हो जाएगा और उसका एक कंप्यूटराइज रजिस्टर होगा कि किसकी डिमांड पर, किस एजेंसी की डिमांड पर ये डेटा का एक्सेस किया गया है। मान्यवर, इसके अंदर इतनी शंका ना मान्य संसद सदस्य रखे, ना जनता को रखने की जरूरत नहीं। इसको पूरे विचार के साथ ही हम नोटिफाइड करेंगे, पूरी सिस्टम बनाने के बाद ही नोटिफाइड करेंगे और रूल्स भी इसके सारे तज्ञों के साथ चर्चा करने के बाद हम नोटिफाइड। मैं इसलिए कहता हूं कि अगर शंका राजनीति से प्रेरित नहीं है तो इसका निरसन जरूरी है। सभी लोगों की शंकाएं राजनीति से प्रेरित है ऐसा मैं नहीं मानता, इसलिए मैंने इसको समझाने का प्रयास किया। मान्यवर, 2014 में देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने
स्मार्ट पुलिसिंग की एक व्याख्या देश के सामने रखी थी और स्मार्ट पुलिसिंग की व्याख्या को उन्होंने बहुत स्पष्ट किया है, क्योंकि इस देश में जब तक पुलिसिंग के पद्धति को बदला नहीं जाता, इस देश के अंदर दोष सिद्धि के प्रमाण को बढ़ाया नहीं जाता और गुनाहों के प्रमाण को भी कम नहीं किया जा सकता। मान्यवर, इन्होंने एस से कहा था स्ट्रिक्ट और सेंसिटिव, एम से कहा था मॉडर्न और मोबाइल, ए से कहा था अलर्ट बट अकाउंटेबल, आर से कहा था रिलायबल एंड रिस्पॉन्सिव, टी से कहा था ट्रेन और टेक्नो सेवी। ये जो बिल है भारत सरकार के बीपीआरएनडी और हमारा एनसीआरबी उठाने वाला है, इनको ट्रेन करेंगे और उनको टेक्नो सेवी भी बनाएंगे और तब जाकर ये बिल की मंशा सब पूरी होगी। मान्यवर, क्या हम आगे बढ़ना नहीं चाहते? मान्यवर, ये सदन ने भी ये सोचना पड़ेगा कि हम वही रहना चाहते हैं कि सिर्फ राजनीति की गुल्ला डंडी खेलकर देश का विचार नहीं करेंगे हम। अरे बहुत सारी चीजें हैं राजनीति के करने के लिए। मैं बंगाल आऊं चुनाव के लिए, तब कर लो भाई, कौन डरता है? कर लेंगे दो हाथ, हम नहीं डरते। मगर जहां तक जनता के संरक्षण का सवाल है, उसकी सुरक्षा का सवाल है, पुलिस को ताकत देने का सवाल है, गुनहगारों को सजा कराने का सवाल है, मुझे लगता है मान्यवर इसमें किसी ने राजनीति नहीं करनी। और ये जो बिल मैं लेकर आया हूं, ये एक अकेला हमारा प्रयास नहीं है मान्यवर। विगत 2.5 साल के अंदर ढेर सारी चीजें मोदी जी के स्मार्ट पुलिसिंग की व्याख्या को चरितार्थ करने के लिए गृह विभाग ने की है। मोदी जी ने जो व्याख्या की है, इसके 8 बिंदुओं पर गृह मंत्रालय काम कर रहा है। अगर ये बिल आइसोलेशन में आता है तो शंका और गहरी हो सकती है कि भाई चलो एक अकेले बिल से क्या होगा। ऐसा नहीं है, हम इसके लिए एक एनवायरनमेंट भी बनाए हैं और बहुत सारे प्रयासों में से ये बिल एक प्रयास आइसोलेशन में नहीं है। मान्यवर, हमने फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी बनाई है। क्यों बनाई है? फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी इसलिए बनाई है कि बहुत सारे रिपोर्टों के अंदर है कि 6 साल से ज्यादा सजा वाले सभी धाराओं के अंदर फॉरेंसिक एविडेंस को कंपलसरी करना चाहिए। कर तो दे, मगर ट्रेन मैन फोर्स कहाँ है भाई? हमारे पास तो इतना मानव संसाधन बल है ही नहीं। तो क्या करना? फॉरेंसिक साइंस को बढ़ावा नहीं देना, फॉरेंसिक एविडेंस को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। तो हमने, मोदी जी जब गुजरात में मुख्यमंत्री थे, वहां गुजरात फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी बनाई थी। यहां प्रधानमंत्री बनने के बाद 2020 में फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी की हमने रचना की, जिससे वहां से जो विद्यार्थी निकलेंगे, बीएससी फॉरेंसिक साइंस, एमएससी फॉरेंसिक साइंस और इसके अंदर R&D करने वाले बच्चे भी निकलेंगे हर विधा के। मान्यवर, आज 2 साल के अंदर ये यूनिवर्सिटी ने 6 राज्यों में राज्य सरकारों के साथ एग्रीमेंट कर इस यूनिवर्सिटी से अटैच कैंपस और कॉलेज अलग अलग राज्य में खोले हैं। और मुझे पूरा भरोसा है कि कुछ ही सालों के अंदर ये यूनिवर्सिटी से और इसके संबंध कॉलेजों से अनेक विद्यार्थी बाहर आएंगे जो फॉरेंसिक साइंस के क्षेत्र में देश को न केवल मजबूत करेंगे, देश का नाम दुनिया में रोशन करेंगे। मान्यवर, और ये फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के जो तज्ञ बाहर आएंगे, वो केस को सजा कराने के लिए, अपराधी को सजा कराने के लिए फॉरेंसिक साइंस के साइंटिफिक एविडेंस के बेस को मजबूत कर प्रोसिक्यूशन एजेंसी की मदद में रहेंगे। मान्यवर, ये हमारा आइसोलेशन में प्रयास नहीं है। हमने रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी बनाया, रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी भी 2020 में बनाया। और रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी के तहत जो बच्चे, कुछ बच्चे चाहते हैं बचपन से कि मैं डॉक्टर बनूं, कुछ वकील बनना चाहते हैं, कोई पत्रकार बनना चाहते हैं, कोई राजनीति में आना चाहते हैं। इस तरह से बहुत सारे बच्चों की मनसा होती है कि मैं रक्षा के क्षेत्र में काम करूं, मेरी कैरियर में रक्षा के क्षेत्र में बनाऊं। तो उनके लिए कोई स्पेशलाइज कोर्स ही नहीं है। वो तो बेचारा बीएससी करता है, बीए करता है, बीकॉम करता है, फिर एग्जाम देता है, शरीर तगड़ा है तो सिलेक्ट हो जाता है और फिर उसकी ट्रेनिंग होती है। तो क्यों नहीं ऐसी यूनिवर्सिटी बनाई जाए
जो रक्षा के साथ जुड़े हुए सभी क्षेत्रों के अंदर एक स्पेशलाइज्ड फोर्स खड़ा करें, एक एक्सपर्ट्स खड़ा करें। रक्षा के क्षेत्र के साथ बहुत सारी विधाएं जुड़ी हुई हैं, तो इसके लिए, उसकी ट्रेनिंग के लिए, उसके स्पेसिफिक अध्ययन के लिए हमने रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी बनाया है मान्यवर। और रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी भी आने वाले दिनों में पूरे देश के अंदर अपने संबंध कॉलेजों को बढ़ाने वाली है मान्यवर। नेक्स्ट जनरेशन क्राइम को हमने समझना भी पड़ेगा और उसके सर्कल को तोड़ना भी पड़ेगा। हम चाहते हैं कि पुलिस, देश की कानून प्रवर्तक एजेंसियां क्रिमिनल से 2 कदम आगे रहे, पुलिस से क्रिमिनल 2 कदम आगे न रहे। पुलिस को सुसज्ज करना पड़ेगा। आप ह्यूमन राइट, प्राइवेसी, ये सारी चीजों को कर पुलिस के हाथ में हथकड़ी लगा दोगे और उसको तैरने के लिए स्विमिंग पूल में डालोगे और कहोगे जाओ भैया गोल्ड मेडल लेकर आ जाओ, वो नहीं आ सकता। उसके हाथ को सशक्त करना पड़ेगा, उसके हाथ को मजबूत करना पड़ेगा, उसके हाथ में भी वेपन देना। तो ये प्रयास पुलिस को सशक्त करना है, कानून प्रवर्तक एजेंसियों को सशक्त करने के लिए प्रयास है मान्यवर। नेक्स्ट जनरेशन क्राइम को हम चिर पुरातन पद्धतियों से हैंडल नहीं कर सकते। हमने भी नेक्स्ट जनरेशन की तकनीक को अपनाना होगा और पुलिस को इससे लैस करना होगा, पुलिस को इसके ट्रेन करना पड़ेगा। भारत सरकार ने मोदी जी के मार्गदर्शन में मॉडस ऑपरेंडी ब्यूरो भी बनाया है। ये ब्यूरो देश भर में एनसीआरबी के पास जो क्राइम का रिकॉर्ड आता है उसका एनालिसिस करता है और विशिष्ट प्रकार के क्राइम करने वाले लोगों की मॉडस ऑपरेंडी क्या होती है इसका स्टडी करता है, इस पर डिस्कशन होता है, इसके समाधान ढूंढे जाते हैं और वो समाधान बीपीआरएनडी के माध्यम से देश भर की पुलिस को भेजे जाते हैं। ये भी हमने नया इनिशिएटिव लिया है। आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट में भी हम बदलाव करने जा रहे हैं। ये भी बहुत पुराने हो चुके हैं, इसको भी बदलाव, मैंने सभी मान्य संसद सदस्यों को पत्र भी लिखे कि आपका कोई इसमें सुझाव हो तो आप जरूर भेज दीजिए। हम इसको अभी बना रहे हैं। और जहां तक बात करा कि भाई स्टैंडिंग कमेटी को देना, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं सीआरपीसी, आईपीसी और एविडेंस एक्ट तीनों को सुधार कर हम लाएंगे। निश्चित रूप से गृह विभाग की स्टैंडिंग कमेटी को देंगे और जांच परख कर ही मैं उसको गृह के अंदर, उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं, परंतु इस बिल में इतने बड़े बदलाव ही नहीं हो रहे। मैं बाद में एक्सप्लेन करता हूं, मैं तो रिक्वायरमेंट पर हूं। चिदम्बरम साहब ने और सारे लोगों ने जो जवाब दिए उसके मुझे जवाब देने मान्यवर। इसके अलावा हमने डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन का कार्यालय का भी सभी जगह, सभी राज्यों को मैंने पत्र लिखा है, एक डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन होना चाहिए जो प्रोसिक्यूशन एजेंसी को, हर राज्य की पुलिस को उस पर निगरानी रखे कि प्रोसिक्यूशन ठीक तरीके से हो। और ढेर सारे हमने ई गवर्नेंस इनिशिएटिव भी मान्यवर लिए हैं। मैं ई गवर्नेंस इनिशिएटिव को इसलिए बताना चाहता हूं कि सारी जो शंकाएं हो रही हैं वो शंकाओं का 2 मिनट में निरसन हो जाएगा ध्यान से सुनने के बाद। मान्यवर, एक CCTNS कर एक नेटवर्क सिस्टम भारत सरकार का चलता है। मैं इस ग्रुप को इन्फॉर्म करना चाहता हूं कि 16,390 मतलब 100% पुलिस थानों ने CCTNS नेटवर्क को अपना लिया है और पूरे देश के थाने CCTNS नेटवर्क से चलते हैं। और 99% पुलिस स्टेशन में अब FIR CCTNS में सीधे दर्ज हो रही है। जहां नेटवर्क के थोड़े प्रॉब्लम है, इसका भी हम सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं। मान्यवर, CCTNS नेटवर्क के अंदर 7.47 करोड़ FIR उपलब्ध है। जो डेटा लीकेज की बात करते हैं मैं उनको बताना चाहता हूं। मान्यवर, केंद्र शासित प्रदेश, राज्य और केंद्रीय जांच एजेंसी, ये सारी एजेंसियां, राज्य की पुलिस भी इसका उपयोग कर रही है। मान्यवर, ई प्रोसिक्यूशन भी हमने चालू किया है और 751 जिलों में, प्रोसिक्यूशन के जिलों में ई अभियोजन को लागू कर दिया गया है। आज तक कोई फरियाद नहीं,
ई प्रिजन, देश की 1259 जेलों में ई प्रिजन लागू कर दिया गया है, कोई फरियाद नहीं आई। ई फोरेंसिक्स, 117 फोरेंसिक लैब में ये लागू हो चुका है, ऑनलाइन हो चुका है, आज तक कोई फरियाद नहीं। इंटर ऑपरेटेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ICJS वो भी लागू हो गया है और ICJS के तहत अब CCTNS, ई प्रिजन, ई कोर्ट और ई फोरेंसिक को जोड़ने का भी काम अब चालू हो गया है और वो एकीकृत डेटाबेस से एनालिटिकल मॉड्यूल भी बनाए गए हैं जिससे देश भर के क्राइम का एनालिसिस होकर उसके रोकने के मॉड्यूल बने। कई राज्य ऐसे होते हैं जहां समान प्रकार के क्राइम होते हैं, कई जिले ऐसे होते हैं जहां समान प्रकार के क्राइम होते हैं, कुछ सागर किनारे के जिले हैं वहां अलग प्रकार के क्राइम होते हैं। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार एक अलग प्रकार के क्राइम होते हैं जहां मैदानी इलाके हैं, कुछ जिले पहाड़ी हैं वहां अलग प्रकार। ये सबको ये एकीकृत डेटाबेस से एनालिटिकल मॉड्यूल से हम एनालिसिस करते हैं और इसके समाधान BPRND को भेजते हैं। गृह मंत्रालय का मतलब आपके मन में बहुत सीमित है, मैं बहुत बोलना नहीं चाहता था, मगर जो व्याख्या मेरे मंत्रालय की आप लोगों के मन में है मुझे लगा इसे मुझे बदलना ही पड़ेगा, इसलिए मैं आज इतनी डिटेल बात करता हूं। मान्यवर, इन्वेस्टिगेशन ट्रैकिंग सिस्टम फॉर सेक्सुअल ऑफेंस ITSSO वो भी हमने लागू कर दिया है और देश भर में ये सिस्टम लागू हो गई। यौन अपराधियों का राष्ट्रीय डेटाबेस NDSO भी ऑनलाइन उपलब्ध है मान्यवर और लगभग 11.83 लाख यौन अपराधियों का डेटा एजेंसियों के लिए ऑनलाइन उपलब्ध है, कोई फरियाद नहीं आई। क्राइम एक्ट, क्राइम मल्टी एजेंसी सेंटर, उसको भी हमने लॉन्च कर दिया गया है और लगभग 59,937 लोगों ने क्राइम एक्ट का इस्तेमाल किया है और लगभग 23,000 अलर्ट्स इससे जनरेट हुए। मान्यवर, मोडस ऑपरेंडी ब्यूरो की बात मैंने पहले आपको कर ही दी है। NCRB ने एक पोर्टल पर नागरिक सेवाएं शुरू की है जिसके लॉन्च के बाद अब तक 2,27,400 लॉगिन हो चुके हैं और अलग अलग सेवाओं को उसको जवाब दिया गया। लापता व्यक्ति की खोज, ये CCTNS से लेकर हमने एक अलग सुविधा बनाई है। लापता व्यक्तियों की खोज, किसी भी व्यक्ति गुम हो जाता है तो उस पर पोर्टल पर आता है, वहां एक डेटाबेस होता है, इसके साथ मैचिंग होता है और मैं सदन को बताना चाहता हूं यही पोर्टल के तहत मान्यवर 14,513 लोग अपने परिवारजनों को वापिस लेने का काम मान्यवर। वाहन सेकंड हैंड व्हीकल अगर किसी को खरीदना है तो चोरी का है नहीं है किसी को मालूम नहीं, लोग ले लेते हैं बेचारे, फिर पुलिस उनके घर पर पहुंच जाती है, उनको भी पकड़ कर ले जाती है चोर के साथ साथ, तो उसको पहले कैसे मालूम है? तो हमने लगभग इसके लिए एक डेटाबेस CCTNS से चोरी किए हुए वाहनों का जो कंप्लेन है उससे बनाया। लगभग 2,96,200 लोगों ने अपने खरीदने वाले वाहन का वहां डेटा भेजा, इसको मैच कर भेजा और 13,637 चोरी किए हुए लोग भी पकड़े गए और चोरी की हुई गाड़ियां भी पकड़ी गई। ये क्या उपयोग होना है मैं बताना चाहता हूं। घोषित अपराधी, उसको भी CCTNS पर लिया है और ये सारे एनालिटिक मॉड्यूल इसका एनालिसिस करें हम मान्यवर। तो घोषित अपराधी जो पुलिस ने हमारे यहाँ अलग अलग राज्यों के थानों ने, DIG ने, IG ने या DG पुलिस ने भेजे, इसमें से घोषित अपराधी भगोड़े 16,176 लोगों को पकड़ने का काम इस नेटवर्क के माध्यम से। मान्यवर, ICJS के एनालिटिकल टूल के द्वारा भी हमने बहुत सारा खर्चा किया है मान्यवर, लगभग 2050 करोड़ का खर्चा भारत सरकार ने सारी व्यवस्थाओं की। मैं इसलिए कह रहा हूं कि बिल आइसोलेशन में नहीं है, ये बिल सबके अंदर एक खूंटी कड़ी है। हमारे पास क्रिमिनल का डेटा नहीं है, वो क्रिमिनल का डेटा इसके अंदर ऐड होने से इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन बहुत सरल हो जाएगा। और क्या भय है, किस चीज का भय है मान्यवर? I4C के माध्यम से
ढेर सारे और भी अलग अलग सेवाएं ली हैं और 112 के माध्यम से सभी पुलिस सेवाओं को एक ही फोन नंबर पर लाने का काम भी भारत सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में किया है। मान्यवर, मैं इसलिए बताना चाहता था कि ये जो हमें जिस तरह से कटघरे में खड़े करने का प्रयास हो रहा था कि इसके पीछे कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं है, ना जनता के मन में भी ऐसी भावना जानी चाहिए, ना सदन के सदस्यों के मन में भी ऐसी भावना जानी। हमें भी मालूम है ये जो लोकतंत्र के अंदर कुर्सी होती है ना, ये यावत चंद्र दिवाकरों नहीं होती है, कल कोई भी आ सकता है। तो मिसयूज का भय तो मुझे भी लग सकता है, मगर मुझे नहीं लगता है मिसयूज होगा तो देश की अदालतें हैं। मिसयूज हुआ भी है, लड़कर हम निकले भी है और अदालत ने चांटा भी लगा। मान्यवर, भय से हम नहीं जीते हैं और किसी भय के अधीन देश के करोड़ों लोगों को क्राइम की दुनिया से लड़ने का, उससे सुरक्षा का उपाय न करे, ये कोई ठीक बात नहीं है, ना जो सोचने का तरीका ठीक है। मान्यवर, दोष सिद्धि का जो प्रमाण कम है, इस पर कई सारी कमिटियों ने, कई सारे लोगों ने ढेर सारी चर्चाएं करके रिपोर्ट भारत सरकार को दी है। प्रमुखतः 3 ही कारण बताए गए हैं मान्यवर। एक तो सबूतों की कमी, सबूतों की कमी के आधार पर प्रतिवर्ष 7.5 लाख केस में आरोपी छोड़ दिए जाते। अदालत कहती है पर्याप्त सबूत नहीं है। अगर उसके साइंटिफिक सबूतों को अदालत के सामने रखें तो मैं मानता हूं कि ये केसों की संख्या आधे से भी कम हो जाएगी और लगभग 3.5 लाख केसों में सजा का प्रमाण हम बढ़ाएंगे। न्याय की प्रतीक्षा, अदालत बार बार प्रोसिक्यूशन एजेंसी को कहती है कि भाई आप और सबूत लेकर आइए, और सबूत लेकर आइए, और डेट पर डेट पड़ती है, न्याय लेट होता जाता है। जो निर्दोष है वो भी बेचारा आरोपी बना रहता है। माननीय उपसभापति महोदय, इससे ये समाप्त हो जाए। और वित्तीय क्षमता भी कम है। जब डेट पर डेट पड़ती है तो इस ओर से तो सरकार लड़ती है। जो आरोपी होता है कई गरीब भी होते हैं, इनके घर के घर बिक जाते हैं, वो ऋण के बोझ के तले दब जाते हैं। अगर प्रॉम्प्ट एकदम स्पीडी न्याय मिलेगा तो कुछ नहीं होगा। और मैं मानता हूं अगर साइंटिफिक एविडेंस का प्रमाण हमने बढ़ाया तो न्याय जल्दी मिलेगा। मान्यवर, ये बिल लाने के लिए उद्देश्य के लिए कुछ पूछ रहे थे, मैं ये भी आगे तो मैंने उद्देश्य बताया, मगर एक और उद्देश्य बताया। मान्यवर, इन्वेस्टिगेशन 3rd डिग्री पर इस जमाने में निर्भर नहीं रहना चाहिए। इन्वेस्टिगेशन को 3rd डिग्री पर से बदलकर तकनीक की डिग्री पर हम ले जाना चाहते हैं, डेटा की डिग्री पर ले जाना चाहते हैं और इंफॉर्मेशन की डिग्री पर ले जाना चाहते हैं। और ये सब सहमत हो गए कि 3rd डिग्री के आधार पर इन्वेस्टिगेशन नहीं हो करना चाहिए। कब बंद होगा? जब उसको साइंटिफिक एविडेंस का आधार लेंगे। इसलिए मान्यवर, ये बिल लेकर मैं यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। मान्यवर, ढेर सारी बातें हैं, मैं इसके दूसरे हिस्से में बताऊंगा। अब कुछ सदस्यों ने अलग अलग प्रकार के सवाल भी मुझे पूछे हैं, शंकाएं भी करी है और मैं मानता हूं कि उनका अधिकार है। सबसे पहले श्री चिदम्बरम जी ने पूछा कि गृह मंत्री स्पष्ट करे ये जो आपने माप की व्याख्या की है वो व्याख्या के अंदर नार्को एनालिसिस, ब्रेन मैपिंग और पॉलीग्राफ टेस्ट आता है या नहीं आता है? ना जी, नहीं आता है। इस बिल का कोई प्रावधान किसी भी कैदी का नार्को एनालिसिस, पॉलीग्राफ टेस्ट या ब्रेन मैपिंग करने की इजाजत नहीं देता है। ये मैं रिकॉर्ड पर कह रहा हूं, इसलिए किसी को ये शंका रखने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा, इसके बाद पूछा मान्यवर कि पुत्तुस्वामी केस में जो निर्देश दिए गए हैं उसका उल्लंघन हो रहा है। जरा भी उल्लंघन नहीं हो रहा है। पुत्तुस्वामी केस के अंदर उन्होंने
और लोगों की स्वतंत्रता पर इसका ओवरलैप न हो इसलिए 3 अपवाद दिए हैं। ऐसा कानून सक्षम विधायिका द्वारा बनाना चाहिए। मैं मानता हूं ये सक्षम विधायिका है, चिदम्बरम साहब भी मानते होंगे। ऐसा यह वैध देश हित में होना चाहिए। तो जिन्होंने गुनाह किया है उसको सजा कराने से बड़ा वैध देश हित क्या हो सकता है बोले? तो वैध देश हित के अंदर भी है। मान्यवर, तीसरा उन्होंने कहा है कि अनुपातिक होना चाहिए। मान्यवर, ये कानून जो है वो अनुपातिक भी है, इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है। कानून प्रवर्तन एजेंसियों का हाथ मजबूत करने और अपराध को सिद्ध करने के और इसके द्वारा व्यक्तियों के, जो प्रताड़ित व्यक्ति हुए, इसके मौलिक अधिकारों का रक्षा में के बीच में संतुलन बनाने के लिए कानून लेकर हम आए हैं। अभी एक तरफा ही है, जिसका अधिकार छीना जा रहा है, जो विक्टिम है, इसके अधिकार के लिए कोई प्रोविजन नहीं है। ये जो कानून है विक्टिम को प्रोटेक्ट करने के लिए है और जो अपराध करने वाले हैं उसको सजा करें। किसी भी तरह से ये पुत्तुस्वामी केस के निर्दोषों का उल्लंघन मान्यवर नहीं करता है। इन्होंने 14, 19, 20, 3 और 21 के तहत मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के लिए कहा। मैंने इसको मान्यवर एड्रेस किया है। उन्होंने कहा है, एक उल्लेख धारा 3 का किया। मैं वो ठीक है, बिल पढ़ेगा तो मैं पढ़ूंगा तो मैं भी कहूंगा, मगर मैं इतना स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि धारा 3 के अंदर रूल्स बनाने के लिए भारत सरकार को अधिकार है। इसकी व्याख्या भी हम करेंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि पॉलिटिकल आंदोलन वाले किसी भी व्यक्ति को सिर्फ पॉलिटिकल आंदोलन के लिए ये अपने माफ न दे। मगर पॉलिटिकल नेता का अगर क्रिमिनल केस में अरेस्ट होता है तो उसको फिर नागरिक के पार रहना पड़ेगा। परंतु पॉलिटिकल आज्ञा का मतलब पुलिस की आज्ञा का उल्लंघन या तो किसी भी प्रकार की निषेधाज्ञा का उल्लंघन, इस प्रकार के उल्लंघन के लिए किसी भी पॉलिटिकल व्यक्ति का नाम नहीं लिया जाएगा। मैं सदन को आश्वस्त करना हूं मान्यवर, और इसके लिए हम रूल्स में प्रोविजन भी करेंगे। रूल्स बनाने का हमने पीछे एक हमारा अधिकार भी रखा है। बिल को ध्यान से जिन लोगों ने पढ़ा होगा उसको मान्यवर मालूम होगा। मान्यवर, जो यही है, अगर नागरिक धरना देता है तो उस पर केस होगा, जिसकी मैंने बात कर ली। पुत्तुस्वामी केस वाली भी बात मान्यवर मैंने कर ली है। मान्यवर, इसके बाद विनय विश्वम जी ने कहा कि 124A सरकार लगा रही है। हम 124A के दुरुपयोग के पक्ष के नहीं हैं, मगर विनय विश्वम जी केरल से कम्युनिस्ट पार्टी के सांसद को 124A का क्यों आप उठा रहे हो? आप तो लोगों को मार दिए भैया। मेरी पार्टी के 100 लोगों की हत्या राजनीतिक कारणों से केरल में हुई, पूरी की पूरी जान चली गई है उनकी, और आप हमें 124A समझा रहे हो? क्या 124A समझा रहे हो? प्लीज मैं 124A को मैं स्वीकार नहीं कर रहा हूं कि हम इसका दुरुपयोग करें। मैं इतना ही कहता हूं, कम से कम केरल से आए हुए कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता को, सांसद को ये नहीं उठाना चाहिए। ये प्लीज नो प्लीज In Kerala, under 124A, nobody is implied. Thank you. Yes, please. Thank you, Vinay ji. I request you to correct yourself. एक नाम बताइए। Please. अरे ढेर सारे उदाहरण है भाई। It's a wrong statement. Thank you, Vinay ji. ढेर सारे उदाहरण। Thank you. Please. Hey, let home list, please. Vinay ji, please no. मान्यवर, please. मान्यवर, इनकी इच्छा है तो इसी सदन के सवाल जवाब में से मेरी नहीं कोई और सरकार ने जो जवाब दिए हैं वो मैं सदन पे रखने के लिए तैयार हूं। केरल विधानसभा में सवाल जवाब में जो जवाब आए वो मैं सदन पर रखने के लिए मैं रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट नहीं करता। विश्वम साहब, मेरे 27 साल हो गए
किसी विधायिका में काम करते हुए, चाहे विधानसभा, राज्यसभा, आपकी बात रिकॉर्ड पे नहीं जा रही मिस्टर जी, प्लीज स्टेटमेंट नहीं माननीय करता गृह मंत्री जी की बात जा रही, प्लीज मान्यवर, प्लीज 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 प्लीज। मान्यवर, एक सदस्य ने कहा कि आंख में से आंख डालकर जवाब दे सकते हो। मैं तो जरूर दे सकता हूं अगर कोई आंख में से आंख डालकर पूछने की हिम्मत रखता है, जरूर दे सकता हूं, और किसी भी फोरम में रहे, क्योंकि मेरे मन में चोर नहीं है साहब। हम वही करते हैं जो हमारी आत्मा कहती है, और हम वही करते हैं जिसको आत्मा कानून के हिसाब से मानता है। मान्यवर, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, कोई आंख में से आंख डालकर सवाल पूछे, मैं आंख में आंख डालकर जवाब भी जरूर दे दूंगा। मान्यवर, संजय सिंह जी ने कहा कि गुजरात में ये FIR, अरे संजय बाबू, मान्यवर आपके माध्यम से मैं संजय बाबू को कहना चाहता हूं, अभी तो आप गुजरात गए हो, मुझे तो मालूम नहीं कोई FIR हुई या नहीं हुई इनकी पार्टी पर, कुछ करा होगा तो हो भी सकती है, मगर बंगाल चले जाओ जान चली जाएगी। अच्छा है अभी वहां गए नहीं हो आप। प्लीज 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 मान्यवर, प्लीज 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 प्लीज। माननीय गृह मंत्री जी, आपकी बात ही रिकॉर्ड पे जा रही है। माननीय सदस्यगण प्लीज बैठ जाओ, आप बोले, आप बोले, आप प्लीज बोले। मान्यवर, ये पूछते हैं आप गए हो, मैं गया था 2019 के चुनाव में, मेरे रोड शो पर आग के गोले फेंके गए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष गए नड्डा जी, इनकी गाड़ी को घेर कर उन पर जघन्य हमला किया गया। कैसे ना बोल सकते हो, ये रिकॉर्ड पर है, कोर्ट ने संज्ञान लिए है। मान्यवर, माननीय गृह मंत्री जी के ही बातें जा रही है रिकॉर्ड पे, और किसी की नहीं। प्लीज 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 मान्यवर, प्लीज 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 माननीय प्लीज प्लीज माननीय गृह मंत्री जी को आप बोल रहे थे, प्लीज 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 प्लीज, थैंक यू प्लीज प्लीज। माननीय गृह मंत्री जी की बात रिकॉर्ड पे जाएगी। माननीय गृह मंत्री जी प्लीज प्लीज। मान्यवर, सुखेंदु शेखर रॉय जी ने कहा कि SC ST माइनॉरिटी की DNA प्रोफाइलिंग, भाई पूरे सदन को मैं पूछना चाहता हूं, इसमें ST SC माइनॉरिटी कोई शब्द है क्या? किस चश्मे से पढ़ते हो सुखेंद्र रॉय जी? किस चश्मे से पढ़ते हो बिल को? अरे बिल बोले हैं आप, मैं तो सुनकर लिखा है। वो 60% अंडर ट्रायल्स है, OBC SC ST माइनॉरिटी, यही मैं बोला। थैंक यू। तो मान्यवर, अंडर ट्रायल है, इसकी जात या धर्म क्या देखना? अंडर ट्रायल जो है वो है, कानून की नजर में सब एक समान है, किसी अपराधी की जाति धर्म क्या देखना है, और क्यों नहीं होना चाहिए? मान्यवर, उन्होंने कहा है फासिस्ट बिल है, मैं ज्यादा टिप्पणी नहीं कर सकता, वो टीवी पर ममता दीदी देखती होगी, सारे CR सुधारने के लिए खड़े हो जाते हैं, इसलिए मैं ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहता मान्यवर। मगर फासिस्ट शब्द की कड़ी से कड़ी व्याख्या को बंगाल की सरकार ने बदल दिया है मान्यवर, और फासिस्ट की नई डेफिनेशन, मान्यवर, में ममता दीदी का नाम वापिस ले, बैठ जाओ, ले लिया वापिस, ममता जी का नाम ले, प्लीज बैठ जाइए, ममता दीदी का नाम में वापिस ले। मान्यवर, फासिस्ट शब्द की डेफिनेशन को, जो डेफिनेशन में है उससे अलग प्रकार के मायने देने का काम बंगाल की सरकार ने कहा। बाबा, आप कम से कम फासिस्ट का रेफरेंस मत दीजिए। अंत में मान्यवर, मैं इतना ही कहना चाहता हूं
Please. Nothing is going on record. Seat पर बैठ कर